told me before you leave. If there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Yeah, I'm on my way home. I'm no good for you, so I drive around Manhattan. They're all laughing, oh, I'm tragic. Yeah, I'm driving in my car and seeing open, but I can't go down that road again. I'll smoke a cigarette, but will that help me forget you? Will that help me forget you? I just need to forget you. Oh, you. I need to treat you better than that, and make you feel like I didn't
something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. I wore you like perfume. We were like no other, two hearts on the edge, but we went from lovers to just being friends. Played me like a song stuck in your head, but you still get my blood rushing. Dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. I know you see me cross the room. Let's skip to the end. I wanna be what keeps you sleepless past 3 a.m. I know that we're toxic, but I like the thrill. I'd be 6 feet under. It looks good, kill. Let's go back to live it all again and get too close as fast as we can. Dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. I know this gets so complicated. You lose your mind just to change it, and tomorrow you'll regret it. But until the morning, dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. Without you here, can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head, racing. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing. I'm over it. Yeah, I gotta let you go. Oh, yeah, I gotta let you go. Oh, yeah, I gotta let you go. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Pokemon Unite Spring Championship 2023 presented by Blink Esports. हम आ चुके हैं हमारे डे 3 के मुकाबले के लिए. आज के दिन हमारा साथ देने वाले none other than Scared Yet. So Scared Yet, how are you doing today?
थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन आपको एंड आई एम डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड जैसे कि हमें पता है आज के हमारे चारों BO3 आर गोइंग टू बी टॉप नॉच इट्स गोइंग टू बी सो फन आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द मैचेस जो कि हमारे सामने होंगे एंड द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी एफएस एंड ट्रू रिपर्स आई बीन फॉलोइंग दीज टीम्स काफी ज्यादा टाइम से एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू सी ऑल द न्यू स्ट्रैटेजीज दैट दीज टीम्स आर गोइंग टू रिवील इन फ्रंट ऑफ अस एग्जैक्टली आई थिंक टीम्स के द्वारा हम बहुत सारी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब आज डे 3 आ हम्म चुका है। बहुत सारे कठिनाइयों एंड बहुत सारे मुश्किलों के बाद फाइनली टीम्स को अब यहाँ पे लोअर ब्रैकेट पे compete करने का मौका मिलने वाला। एज यू मेंशन इट्स एफएस स्पोर्ट्स अप अगेंस्ट टीम ट्रू रीपर्स, वन ऑफ द टीम्स। अपनी जर्नी जो है उनको कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा इस टूर्नामेंट में, बट दूसरी तरफ हम्म जो हमारी टीम है वो यहाँ पे जरूर नॉकआउट के फेज पे भी आ सकती है। इट्स अ लोअर ब्रैकेट BO3, सो लेट्स सी what happens, राइट but for now let's take a quick look at the prize pool and इस टूर्नामेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो भी जरूर हम नजर डालेंगे। ओवरऑल प्राइस पूल आपको यहाँ पे 50,000 रुपए का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 20,000 इज गोना बी फॉर द विनर्स इटसेल्फ। फर्स्ट रनर अप के लिए एंड विद दैट आई थिंक थर्ड रनर अप के लिए भी यहाँ पे 5,000 का इनाम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग बिकॉज इवेंचुअली यहाँ पे जितने भी हमारे खिलाड़ी है जानते हैं वो कि ये जो प्राइस पूल है इट्स गोना बी समथिंग टू डेफिनेटली वॉच आउट फॉर। बट साथ ही साथ ये स्प्रिंग चैंपियनशिप का एक बहुत बड़ा टाइटल भी अपने नाम करने का मौका मिलेगा। 16 टीमों के साथ हमारे प्लेऑफ्स की शुरुआत हुई थी। वी आर डाउन टू द फाइनल 12 टीम्स, जो कि अभी के लिए मुकाबले में आपको अभी भी अपनी जर्नी बरकरार रखते हुए नजर आ रही है। जस्ट अ स्मॉल अपडेट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द डे, आपको जो मैच SA12 और केविन स्पोर्ट्स का देखने को मिला था, टीम SA12 उस मैच पे ऑलरेडी जीत चुकी है। 2-1 की विक्ट्री थी। दिस मींस कि केविन स्पोर्ट्स अकेली गई है यहाँ पे लोअर ब्रैकेट पे, और हमारे टूर्नामेंट की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम भी हमें मिल चुकी है, विच इज टीम SA12। Absolutely, and जैसे कि आपने अपडेट्स दिए थे, so I know all of the people out there were very excited for that. But अभी हम चलते हैं आज के मैच में जो कि हमें देखने को मिलने वाला है between टीम FS Esports जो कि रहेगी इस बारी पर्पल साइड पे, they'll be taking on True Rippers on the orange side. बैन पिक फेज हमारे सामने जरूर आ चुका है, तो देखना है कौन सी टीम आज अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगी एंड कौन सी के लिए आज उस जर्नी का एंड होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट बैन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टीम्स। चांसेस है कि सेम पोकेमॉन भी बैन कर दे, बट आई एम काइंड एक्सपेक्टिंग maybe an Urshifu ban. I've seen that quite a while, but okay, it's going to be actually Mew as well as Glaceon from both of these teams. I mean, interesting, isn't it? Because both the attacking players being down. Now, Team True Reapers can be really, really deadly, especially with the Snorlax और the Slowbro. But FS Sports की जो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है वो है उनके द्वारा Rex का as a support, as a like very team play. Scar going on for the Mhm. Urshifu. Meanwhile, Hoopa का pick आपको Seb द्वारा देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे थे Snorlax की, that's gonna be the pick from the side of Team True Reapers. एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ Venusaur as well, क्योंकि अटैकिंग प्ले में देखिए बहुत ही तगड़े अटैकर्स को यहाँ पे फिलहाल बैन किया गया दोनों टीम द्वारा। एब्सोल्युटली एंड Venusaur हमें पता है कितना अच्छा बफ भी मिल जाता है उसको, स्पेशली व्हेन ही हिट्स द अपग्रेड ऑन द पेटल डांस। तो अर्ली फार्म अर्ली जंगलिंग इज द की फॉर हिम, बट फॉर नाउ दे नॉट गोना एक्चुअली गो फॉर हिम। डोड्रियो को लॉक इन किया है, साथ ही साथ डेलफॉक्स, सो they've got that range as well as they've got that assassination kind of play with the डोड्रियो। काफी मोबिलिटी भी है उसके पास, तो उनको अपनी बैकलाइन थोड़ी इतनी स्ट्रांग लेनी पड़ेगी कि डोड्रियो को दिक्कत ज्यादा आ जाए। एंड विद द कॉम्पोजिशन जो कि ट्रू रिपर्स अभी जा रहे हैं अलॉन्ग विद द एजी स्लैश साथ ही साथ सिजर्स, आई एम रियली फीलिंग स्केर्ड फॉर डोड्रियो एट दिस पॉइंट। I mean, we have a speedster though, साथ ही साथ अभी अगर साइजर पे नजर डालो तो वो भी आपको यहाँ पे एज अ पिक देखने को मिल जाता है। कल के दिन आई थिंक पूरे मुकाबले में से एक की बात हमने लाइक सीनियर में देखा था, एंड दिस टाइम दिवेश आई थिंक ही माइट कंसीडर, बट ही माइट एंड अप टेकिंग अनदर अटैकर हो, बिकॉज़ सीनियर का लॉक होना ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था। बट स्टिल एजी स्लैश एंड सीनियर ये थिंग ये आई थिंक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और राउंडिंग के हिसाब से लेट्स सी हाउ इज इट गोना बी द केस, बिकॉज़ इवेंचुअली फाइनल प्रेडिक्शन सभी का आपको देखने को मिल जाता है, एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। Absolutely, because honestly, Aegis Slash was one of my favorite Pokemon जब वो रिलीज हुआ था, and looking
at him when he's back in the meta and he's being used so much, especially इस type के compositions के हिसाब से, that is absolutely amazing. I'm very delighted to see. But जैसे कि आपने कहा था, अभी दोनों ही compositions ready हो चुके हैं. मैं शिफू ban का सोच रहा था, but उसको scare ने pick कर लिया है. So I really want to see how things are gonna turn out in the game. दोनों ही composition बहुत ज़्यादा strong. I really like the pick of Slowbro क्योंकि scissors को काफी दिक्कत आ जाएगी backline में डायरेक्टली जाने के लिए, क्योंकि इफ दैट यूनाइट मूव इज अवेलेबल तो वो सीधा लॉकडाउन भी हो जाएंगे. पिक ऑफ करना कंपैरेटिवली इजी. बोथ द कॉम्पोजिशंस काउंटर ईच अदर इन सम और द अदर वे. पर अब देखना है क्या सिचुएशन रहेगी गेम नंबर 1 के अंदर. वी गोना जंप इनटू द Thea Sky Ruins and let's see what's gonna happen in this game. एग्जैक्टली शुरुआत गेम की हो चुकी है फिलहाल. टीम एफएस दो खिलाड़ी आपको टॉप लेन की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. मुकाबला होने वाला है हुपा के अगेंस्ट, जो फिलहाल के लिए हिडन आपको नजर आ जाते हैं. एजी स्लैश भी उन्हीं का साथ यहाँ पे निभाएंगे. एंड यहाँ देखिए शुरुआती फाइट ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है. परदेसी थोड़े मुश्किलों में आई बिलीव जरूर से आ सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम जरूर अपने द्वारा बिल्ड करके फॉल बैक करके हील करने का मौका मिला उनको. बट सेफ प्रेशर बहुत अच्छा बना रहे वो हुपा अलॉन्ग साइड द साइड ऑफ एजी स्लैश. अब उनको भी थोड़ा यहाँ पे फॉल बैक करने पे मजबूर हो रहा होगा, बिकॉज बैकअप जो यहाँ पे मिल रहा है टीम वन नन अदर देन एफएस को, दैट्स रियली लुकिंग गुड. ट्रू रीपर शुरुआती गोल करने में जरूर सक्षम होंगे. बट या बॉटम साइड पे भी आपको स्नोरलेक्स का एक बहुत ही अच्छा प्ले इधर देखने को मिल जाते हैं. एंड आई थिंक पहला मिनट इसी के साथ समाप्त हुआ. टीम ट्रू रीपर्स एक अच्छे बढ़त के साथ आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं. बट स्लोब्रो इन द हैंड्स ऑफ रेक्स will be just looking after the bottom side. It's a 2v2 down while 3v3 on the upside. Oh, and that's a very good pick, early pick on Clefable. काफी अच्छा साइथर के साथ खेलते हैं फिलहाल क्यों, and that's the early domination that they have. हमें पता है Dodro is an extremely good pick, but against such a all-rounding lineup थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है उनको. फिलहाल क्यों पे पनिश किया जाएगा as he went in way too deep and the turnaround comes right in favor of the side of FS. But उसके बावजूद that was a good hoopers hole and teleportation के साथ वापस भी आए हैं वो, but now it's going to be again a stalemate in that top side. एग्जैक्टली 0-7 की स्कोर लाइन. एंड जैसे कि आपने मेंशन किया शुरुआती सक्सेस जो मिला है फिलहाल, that's looking pretty promising, especially if you are team FS Esports. As you can see, you have some great Unite balls being filled out, especially from the side of Diplox. You have Dodrio on 25, so things really look quite good for them at the current start. But let's see how the situations are really going to pan out, as eventually the second thought is going to really come in this time from the side of Team True Reapers though, क्योंकि स्नोड लेग्स का एक जो प्ले आपको अलॉन्ग साइड देखने को मिलने वाला है सीवलियन का, दैट कुड रियली बी सम थिंग्स टू वॉच. बट आई थिंक प्लेयर के बीच थोड़े आपको एक इशू देखने को मिल रहा है. सो विल वेट फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम आज प्रोडक्शन साइड एंड वील डेफिनेटली रियली एक्साइटेड. पहला मैच है आज के दिन, बैक टू बैक 7 मुकाबले होने वाले. बट ये आपका Pokemon selects and comp के बारे में क्या कहना है, especially the ones which we saw coming from the side of True Reapers having sport speeds and dual attackers. Absolutely. I really feel like कि Dodrio is very good in countering the heroes जिनके पास थोड़ी लंबी रेंज होती है, something like the Gardevoir or the Delphox or even the Mew. Mew already ban हो गया था. So in order to not give room to Dodrio, वो लोग 2 ऑलराउंडर्स के साथ गए थे, बिकॉज Dodrio उनको पिक ऑफ करने में उसे बहुत दिक्कत जरूर आएगी. वी नो दैट एजी स्लैश विद द वाइड गार्ड गेट्स वेरी टैंकी. तो अगर Dodrio उन्हें पिक ऑफ करने जाएंगे, सो ऑफ कोर्स ही कैन काइंड ऑफ सोक इट अप ऑल द डैमेज एंड Dodrio को एक ऑकवर्ड पोजीशन में भी पकड़ सकते हैं वो. सो दैट्स समथिंग आई रियली लाइक. प्लस हमें पता है साइथर की मोबिलिटी इज आल्सो वेरी गुड, स्पेशली जब उसके पास यूनाइट होती है, एंड इट आल्सो रीचार्ज प्रीटी क्विकली. तो ही कैन लिटरली स्पैम दैट एट द डिस्पोजल. तो ये सारी चीजें अगर हम नोटिस में करें तो Dodrio के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर है इस गेम के अंदर. बट देन अगेन वी हैव टू सी कि अगर उनको अर्ली स्नोबॉल मिलता है, अगर वो अर्ली बर्स्ट डैमेज अवेलेबल होता है उनके पास, एंड डेल्फॉक्स को थोड़ा सा रूम मिल गया, सो दे कैन लिटरली बर्स्ट थ्रू दैट एंटायर फ्रंट लाइन. बट साइथर से भी बच के खेलना पड़ेगा डेल्फॉक्स को, बिकॉज वी नो द डाइविंग असैसिन काइंड ऑफ play style that revolves around these Pokemon is something that the Pokemons have to play safe against. Exactly. I think जैसे कि आपने mention किया, they really need to be careful though. But I think both of these teams are like one of these teams you can expect the most closest matchups between them, especially when it comes to a BO3. मुझे लग रहा है हमारे आज के दिन का पहला ही मुकाबला all the way तीसरे मुकाबले तक जा सकता है. Like it has to come to a very equalizer point, and इस equalizer point पे आने के बाद
we could really expect, क्योंकि most of the games की अगर हम बात करें तो it did went. Yesterday also we saw how many matches were going all the way towards the third game. It started off with the third game as well and ended up at the same time जहाँ पे team Revenant and I2K का हमने match देखा था. But फिलहाल we'll Right. be taking a very short break, and on the other side we'll be beginning match number 1 very soon. Frustrated, I hate it, yeah. I probably shouldn't say this, I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. But okay, we're quickly back into the game as well. FS again continuing on the purple side by side. True Rippers on the orange side. तो अभी continuously हम match को देख रहे हैं. So it's 326 to absolutely zero. That is a very tough situation FS Esports is in right now, and that's going to be Snorlax. अच्छा नॉकअप दिया है डोड्रियो फिर से दिक्कत वाली पोजीशन में, बट उसके बाद भी रिट्रीट करने में फिलहाल आसानी हो जाएगी. स्नॉरलैक्स ने यूनाइट अभी जल्दी यूज कर ली है. FS is trying to break through the tier 1 top side में, and man, he's actually doing everything just to make sure कि वो उनको delay कर सके, because look at the entire lineup of True Rippers. सीधा base के अंदर जाके उन्होंने score इन कराया 454 to absolutely 57. True Rippers for now are demolishing FS. तो देखना रहेगा कि अभी क्या सिचुएशन होगी एफएस की, बिकॉज दे डू नीड टू गेट दैट लेवल. डोड्रियो अभी 10 लेवल पे ही है. डेलफॉक्स इज 11 और शिफू जस्ट हैज हिट 11. तो अब देखना है हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो इन दिस सिचुएशन, बिकॉज दे नीड टू कम्पीट अप अगेंस्ट साइसर जो लेवल 13 है. सिल्वियन लेवल 12, उसको बर्स्ट डाउन करने में उन्हें बहुत दिक्कत आने वाली, बिकॉज फॉर नाउ रेजिलेकी की तरफ फाइट. नॉकअप स्नॉरलैक्स काफी अच्छा वॉल यूज करिए, बैकआउट करवाने की कोशिश. दैट्स गोना बी द हूपास टेलीपोर्ट यूज्ड अप. फटाफट से वो लोग वापस आएंगे फाइट के अंदर. डोड्रियो अच्छा डैमेज देते हैं, बट डेलफॉक्स हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड 2 केओ की स्ट्रीक. रेजिलेकी इज गोइंग टू बी कंटेस्टेड. एफएस ने सीधा सिक्योर किया उसको. फाइनली थिंग्स आर स्टार्टिंग टू टर्न अराउंड फॉर देम एंड दे आर गेटिंग बैक इनटू दिस गेम. दे विल बी एबल टू टेक द टियर 1 डाउन फटाफट से टॉप साइड की. बट लुक एट द यूनाइट मूव्स. चार्ज अप क्लिफेबल नॉट विद द यूनाइट मूव. डोड्रियो नहीं है, स्लोब्रो की भी नहीं है, डेलफॉक्स की भी नहीं है. सो last 20 seconds before the Rayquaza, I really want to see how they're going to charge it back up, because True Rippers के side पे भी देखे Snorlax has the Unite, Scyther has also the Unite move, and I feel like AG Slash and Sylveon की भी जल्दी से वो recharge हो जाएगी, because Hoopa has also got the Hoopa unleashed. Exactly, I think the Unite move, almost 4 खिलाड़ियों की Unite move आपको फिलहाल देखने को मिल रहे हैं. Rayquaza is been all set and just hidden in the bushes. It's going to be none other than Snorlax. This is going to be an interesting fight. Save does comes in. There comes the splash damage from the side of Rex. Slow bro जरूर यहाँ पे आ चुके हैं, but win conditions एक बार फिर टीम एफएस स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा सुनिश्चित हो चुकी है. अभी के लिए देखते हैं कि किस तरीके से क्लिफेबल अपने द्वारा कुछ मौका जो है यहाँ पे बना पाता है एज अ सपोर्ट प्लेयर. डक्स यहाँ पे आएंगे. He's not on the good greatest position, but he does have the Unite move. पीछे जाके नाप लेके एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा like हील अप करना चाहिए. ऊपर से रेक्स एंड परदेसी दे आर रियली ट्राइंग टू फाइट बैक, बट समय जो है वो निकले जा रहा है. डॉडरिया को मीनवाइल डाउन किया. तो नाउ दे आर डाउन टू ओनली 2 players and the fight for Rayquaza is on. Meanwhile the Unite move comes in and that's going to be Hoopa taking down Clefable.
Absolutely. Snorlax also going in with his Unite, and that is going to be another pick off in their favor. And जैसे कि अभी situation निकल के आ रही थी, slow bro, the only one remaining. Rex has to retreat because he cannot do anything. Rayquaza की जो fight थी, that has been perfectly stalled by True Rippers. उन्हें पता है उन्हें Rayquaza लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है. 273 to 454 का score जरूर है, but for now I do not see anything in the hands of FS कि वो किसी भी तरह come back कर पाए unless they take this Rayquaza, unless they steal it away. But somehow they might have a chance right now क्योंकि HP is already down to half, and that is going to be one pick off already. Probably Silvio should take out. Oh nahi, that's going to be the outplay. Delphox was not able to survive. Kyo also making sure to take Rodri out in the picture. Rayquaza, it's very low. It's going to be the last hit chance. Delphox nahi hai, so they will not be able to secure it probably, but still they managed to do that somehow. Urshifu for the final secure. सारे जाएंगे स्कोर इन करने के लिए. In the meantime, Sylveon scores a dunk of 80, and let's see if they actually manage to come back in this game. क्योंकि शील्ड उन लोगों के पास है, but they need to quickly go in for the score, and I think so they are being stopped in the way. But how is it going to turn out? आप कौन? Make a quick guess. आई थिंक इट इज डेफिनेटली द साइड ऑफ टीम ट्रू रिपर्स, क्योंकि एंड में सिर्फ 60 का स्कोर वहां पे आया. मौका डेफिनेटली बन सकता था, बट यू सॉ हाउ एजी स्लैश वाज आल्सो right there defending the side of Urshifu. Very unfortunate. First time we saw Rayquaza mila, no, we don't often see this, like दूसरी तीसरी बार ऐसा हुआ रहेगा, but the way team True Reapers really defended it, उस चीज की दाद जरूर देनी बनती है, with the MVP being none other than Alciskar, who was really looking that good. परदेसी ने भी आप देख सकते हो, recovery from the side of Clefable was just mesmerizing, and in the end, even after getting the Rayquaza, end में यहाँ पे FS Esports अपने द्वारा वो जो स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी थी, दे रन आउट ऑफ टाइम, because I think 28 seconds या कुछ remaining थे. And meanwhile it wasn't just that team True Reapers were really so aggressive. They scored their goals. They made sure कि यहाँ पे AG slash आपको bottom lane पे defend करते हुए नजर आए. And अगर it boiled down to what, like 150 or 63 का difference. 163 मतलब अगर दो खिलाड़ी भी यहाँ पे स्कोर करते तो पूरी तरीके से बाजी किसी के भी पास जा सकती थी. क्लिफेबल एंड ऑड्री हम देख सकते थे कि शुरुआती फेज पे ही आउट हो चुके थे. देन इट ऑल केम डाउन टू डेलफॉक्स, लोब्रो एंड उर्शिफू. बट मैन, इट वाज अ वेरी क्लोज गेम दो. लाइक इट केम डाउन टू द साइड कि एफएस ईस्पोर्ट्स, ऐसा लग रहा था कि अब तो उन्होंने कम बैक कर दिया, बट द ओनली मैटर वाज द टाइम व्हिच वाजंट बाय देयर साइड. Absolutely, and just as you said, very well said, Aapkon, brilliant defense coming in by True Rippers. FS Rayquaza steal के बाद, and it's just as you analyzed कि time की कमी भी थी, and True Rippers they managed to defend that absolutely on point, and साथ ही साथ जैसे कमबैक एफएस का पूरा ट्राई था कमबैक करने का, एंड इवन दो अर्ली गेम इट वाज 0 to above 300 स्कोर and they were in the deficit, उसके बावजूद they brought it back to just 100-150 score difference. So that was absolutely on point. Honestly, Delphox को जब pick off करा था, that too on such a low HP by Sylveon, तो मुझे लगा था कि शायद अब ज्यादा दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी एफएस को, बट अर्शीफू ने जो स्टील करा था, that was so lovely to watch. आई मीन लास्ट के 2 मिनट में जो पूरा हमने एक्शन देखने को मिला है, इट वॉज लाइक एंटायरली फ्लिप ऑफ अ कॉइन कि वो किसी भी तरफ जा सकता था एट दैट पॉइंट. एक टीम अगर हल्का सा आउटप्ले कर देती एंड देन दे वुड हैव बीन एबल टू गेट द मैच, बट अगेन लास्ट मिनट तक वी वर ऑन आवर टोज. एट द एंड ऑफ द डे ट्रू रिपर्स गेट द गेम नंबर 1. बट अब देखना है कि गेम नंबर 2 में हमें क्या ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और विल इट बी द अप्रोच बाय एफएस स्पोर्ट्स जो कि शायद थोड़ी चेंज हो सके, बिकॉज अर्ली गेम वाज डेफिनेटली नॉट ऑन देयर साइड. Exactly. I think शुरुआती stages में, like the moment we came back, it was like 78 to 425. Like imagine if that wouldn't have been the case. हम बात कर ही रहते 163 का एक फर्क था. आउट ऑफ विच अगर आप एंड स्कोर्स की बात करो तो एंड स्कोर्स में लाइक आई थिंक बहुत अच्छी रिकवरी थी इन द लेटर हाफ ऑफ द गेम में, जस्ट बिकॉज यार रिक्वाजा केम इन. शायद इस वजह से भी आप देख सकते हो कि वो स्कोर इतना ज्यादा क्लोज आया. बट अगर वो लीड कहीं ना कहीं नहीं गवा बैठते तो फिर इट वुड हैव बीन रियली क्लोज. लाइक दिस गेम was all about team True Reapers getting such a big head start in the starting 4 minute. Head start उनको जो मिला था बहुत लाजवाब था. उनके जो comms थे was looking really good, and with that they really came out to be victorious, especially as you mentioned the counter double all-rounder plays which we got to see from the side of team TR. अब देखते हैं ये दूसरे मुकाबले में टीम एफएस के लिए एक डू और डाई परिस्थिति है. If they really win it, they have a chance to play another game, but if they lose it,
they might really get like knocked off from this entire tournament. And because ये lower bracket है, so ये जरूर बहुत unfortunate होता है बहुत ही सारी टीमों के लिए. But one of the two teams आज के दिन जरूर यहाँ पे farewell bid करेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टीम को अभी राउंड 3 ऑफ द लोअर ब्रैकेट पे जाने का मौका मिलेगा. साथ ही साथ they aren't going to be alone. अब नेक्स्ट मैचेस की भी अगर हम बात करें तो you have OT Sports, then we have Marcos, Mhm. I2K जिनका मुकाबला होगा. So I'll say overall आज के दिन मैचेस पूरी तरीके से जैम पैक्ड रहेंगे हमारे लिए फॉर द एक्शंस. एब्सोल्युटली एंड बिल्कुल काफी एक्शन हमें देखने को जरूर मिलेगा फिलहाल. बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू क्विकली गेट बैक ऑन टू अ फ्यू पॉइंट्स जो कि एफएस शायद थोड़ा नेक्स्ट गेम के अंदर जाते हुए चेंज कर ले. मे बी दे वांट टू गो इन फॉर सम पोकेमॉन जो कि थोड़ा अर्ली लेवल अप मिलने के बाद दे कैन गेट वेरी वायबल, और मे बी सम काइंड ऑफ पोकेमॉन जो कि थोड़ा लेट गेम में और ज्यादा टैंकीनेस की तरफ जाए. मे बी डोड्रियो वाज अ वेरी गुड पिक अगेन, बट दे वर आउट ड्राफ्टेड इन दैट सिचुएशन. तो अभी देखना है, are they still going to go for the same kind of comp? Yeah, will they try a different kind of composition? The sides have been flipped. True Rippers on the purple side this time, and on the orange side we have FS Esports. The second pick उनके पास में आएगा, that also might help them to actually build the counter play, क्योंकि आपको पता है आपके opponent first pick क्या कर रहे हैं, so you can actually go in and pick up those counter Pokemons. तो इस बार I personally feel like maybe we might see some change in bans. Yeah, I mean, oh, what Wow. Urshifu man from both the side. I mean, get ready, like अभी तो आप म्यू ग्लेशियन को पूरी तरीके से एक्सपेक्ट कीजिए, जो कि बहुत ही जल्द हमारे साथ ऑन स्क्रीन लॉक पे आ जाए. बिकॉज म्यू बी नॉट लाइक टेकन केयर ऑफ. आई थिंक ग्लेशियन लाइक ये सारे अटैकर्स बहुत लाजवाब तरीके से यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं. म्यू देखिए ऑलरेडी दिवेश ने अपने तरफ से पिक कर लिया है, एंड एज अ डिफेंडर एज वेल आई लव टू सी मामोस्वाइन. कल के दिन मामोस्वाइन बड़े लाजवाब हमें नजर आ रहे थे. परदेसी गोइंग ऑन फॉर द हुपा, देन वी हैव डोड्रिया फॉर द साइड ऑफ स्कार, सेफ एंड Mhm. क्यो. आई थिंक पिछली बार ही लुक प्रिटी good on that defense play, but this time going on for an attacking Glaceon. म्यू एंड ग्लेशियन का अटैकिंग प्ले थोड़ा डेडली जरूर साबित हो सकता है, बट काउंटरिंग दैट विद द स्पीडस्टर in those end crucial seconds could be really great. Going on for a triple attack, are you serious at this point? Because we have Blastion, and Blastion जहाँ तक मेरा ख्याल है एक बहुत ही अच्छा पिक जरूर यहाँ पे बन सकता है. नॉट एज एन अटैकर दो, क्योंकि Blastion की अगर हम बात करें तो डिफेंस पे उनकी मैकेनिज्म्स बड़े लाजवाब रहते हैं. मिस्टर मीम को भी यहाँ पे फिलहाल मीमी को यहाँ पे पिक किया गया है. We have the side of Delphox, Norlex, and Cliffable. Maybe Safe might want to switch all around towards the side of an Eldegus. तो ड्राफ्ट में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को जरूर मिले, बट दैट्स फ्रॉम द ट्रू रिपर साइड, बिकॉज स्नॉर्लैक्स आई बिलीव उन्होंने सिर्फ रिटेन किया, उसके अलावा ऑल द अदर पिक्स आर entirely different. Saf going in for the Elderos instead of a Clefable is also something I want to look forward to, how things are going to turn out. And यहाँ पे probably Absol हमें lock होता हुआ दिख जाएगा, exactly, because I've had some inside information that probably FS शायद Absol com try करे, and this time they're actually bringing it on the table, that too in the game जो कि उनके लिए a literally do or die situation है. तो I really want to see how things are going to turn out. They are actually going in for a double assassin composition kind of thing. तो द्वेष के लिए काफी दिक्कत आ सकती है इस गेम के अंदर. सेफ को उन्हें बचाना ही बचाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. So I really want to see how FS pulls off this composition, because honestly with the Hoopa, with Mr. Mime, Delphox, Absol, Dodrio, उनके पास burst potential बहुत ही ज्यादा अच्छा है, and it's more or less like an all dive jump in composition. So I really want to see how things are going to turn out. Yeah, I think things are really gonna be interesting though. Like a double speedster. I mean, going on for what? Like a Mr. Weeb as well as a support. So and Hoopa, double speedster, double support. So wow, man. I think Team FS is really like having something which we have never seen so far in this entire tournament. बट देखते हैं किस तरीके से जर्नी यहाँ पे अपने द्वारा क्लोज आउट करते हैं. फिलहाल के लिए शुरुआती यहाँ पे फार्मिंग बिगिन हो चुकी है फॉर द वाइल्ड पॉकीमॉन्स दो, एंड क्यूट लिटिल Blastoise going all the way towards the top lane only to get faced off against a speedster and a supporter. Okay, Blastoise आप स्कोर करना तो चाहते हैं, लेकिन इंटरप्ट जरूर यहाँ पे होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, एंड वहां से फॉल बैक करना आई थिंक डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए.
देखना है। आई थिंक सो ही एक्चुअली बी एबल टू फॉल बैक अनलेस स्केयर उनको बीच रास्ते में रोक दे। फिलहाल ही इज आल्सो टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ द पोक, बट उसके बावजूद ही विल बी एबल टू रिट्रीट। सो वी नो ये अर्ली skirmishes थोड़ी चलती रहेंगी। एवरीवन इज जस्ट गोइंग टू स्टैक देयर आइटम्स। सो दैट्स एक्चुअली गोइंग टू बी द मेन फोकस एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। बट उसके बावजूद मैं देखना जरूर चाहूंगा, बिकॉज ब्लास्टोइस क्योंकि हमें नॉर्मली देखने को उतना नहीं मिलता है अभी, इज एक्चुअली बीइंग पिक्ड अ लॉट बिकॉज रैपिड स्पिन कितना ज्यादा पॉपुलर है वो, हाउ इजीली कैन इन्वेड दैट बैकलाइन यूजिंग दैट स्पेसिफिक स्किल। डेलफॉक्स को दिक्कत काफी ज्यादा हो सकती है, बट देन अगेन दैट इज काइंड ऑफ द सिमिलर थिंग जो कि एफएस हमारे सामने लेकर आएगी, वेर इन डोड्रियो एंड एप्सोल विल बी जंपिंग डायरेक्टली ऑन टू द म्यू। तो इट्स मोर और लेस लाइक अ बैकलाइन डाइविंग कॉम अगेंस्ट अ बैकलाइन डाइविंग कॉम। तो आई थिंक वी माइट सी सम सिमिलर काइंड ऑफ प्ले, बट उसके बावजूद परदेसी was taken quite low, will be able to survive with the shield. And is he trying to bait them out? Yes, he was trying to, but uske बावजूद Squirtle will be able to secure that pick off. Oh no, ego finally makes it. Healing berries का बहुत ज़्यादा फिलहाल के लिए उनको लाइक जरूरत कहीं ना कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. बट nonetheless I love the thinking going on for an LD Ghost as well, who might really be pretty promising for the team, eventually bringing only supporter to the entire team, which is going to be LD Ghost. दूसरी तरफ परदेसी Mm-hmm. ऊपा वो भी एक काउंटर सपोर्टर आपको यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल जाते हैं. डॉट रियो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें नजर आ रहे थोड़े टॉप लेन के पोजीशंस पे. ईगो मीनवाइल tries to like defend any side of the speedster though, but not that easy. And ये टॉप लेन पे एक 1v2 की अगर परिस्थिति बनती है तो ईगो के लिए मुश्किल बन सकती है. बट देयर कम्स अ बैकअप. एंड बॉटम लेन पे हम देख सकते हैं म्यू अलॉन्ग साइड द साइड ऑफ ग्लेशियन बैकिंग ऑफ अ बिट. स्कोर पहली Mm-hmm. बार एक इक्वलाइजर पे हमें देखने को मिल रहा है. लाइक दैट्स नॉट समथिंग वी गेट टू सी ऑफन, बट या द लेवल्स आर प्रीटी इंटरेस्टिंग दो. 7th लेवल पे ऑलरेडी एब्सॉल को पहुंचा चुके. स्कैर इंतजार कर रहे जजी स्टील का. देखते हैं क्या होने वाला है. कुछ शुरुआती Ooh. फेजेस में ही दोनों ही टीम ज्यादातर अपने तरफ लीड तो नहीं लेके जा पाए, बट देयर कम्स अ 4v4 मैसिव फाइट इन द बॉटम लेन. Absolutely, and Glaceon comes with the first pick off. Absol को सीधा pick off कर लिया, and now they will have the full control over the bottom Reggie objective. तो फिर ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा pick off उन्होंने निकाला. Reggie Rock भी आया bottom side पे. They will be a little more tanky, gonna help them in the next team fight. But for now, Mr. Mime ट्राई करेंगे अपनी टीम को ओपनिंग दिलवाने का. वॉल वहां पे लगाई है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ स्टील. डोंट रियो बहुत बढ़िया स्टील के साथ, बट ही विल बी टेकन डाउन एज वेल. अब ग्लेशियन विद द पिक ऑफ. मिस्टर माइम एलडी ग्रॉस को टेक डाउन जरूर कर चुके, बट देयर कम्स इन द सोलो बीम. कनेक्ट नहीं हुई, अदरवाइज एक और पिक ऑफ सीधा चला जाता है ट्रू रिपर्स के हाथ में. बट दैट शुड बी इट. नो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि एब्सोल जॉइंस इन द फाइट. टेक्स 2 डाउन. डेलफॉक्स ने भी साथ ही साथ स्नॉरलैक्स को फिनिश ऑफ कर दिया. सो दैट्स द बर्स्ट पोटेंशियल जो कि हमें पता है एफएस के हाथ में है, एंड दे विल क्विकली जस्ट टेक डाउन द टियर 1 ऑफ बॉटम साइड. और अब फोकस करेंगे टॉप साइड पे फटाफट से. दे नीड टू गो इन फॉर द रेजी लेकी एज वेल, क्योंकि जो प्रेशर अब उन्होंने बॉटम में बनाया है उन्हें वो टॉप में भी रखना है. एंड व्हाट अदर दैन द हुपास टेलीपोर्ट. आप फटाफट सीधा टॉप में जाइए. इन द मीन टाइम डेलफॉक्स जंगल फार्म करेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए. Yup, there comes the level 9 for the side of Blastoise though. एंड प्रीटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 10 लेवल पे ऑलरेडी एप्सोल पहुंच चुके हैं. एप्सोल ने बहुत ज्यादा लाजवाब अपने द्वारा उस रेजी रॉक के फाइट पे, बॉटम ऑब्जेक्टिव फाइट पे बहुत अच्छा है लाइक वैल्यू निकाला था अपनी टीम के लिए. मीनवाइल स्नोरलेक्स लुकिंग प्रीटी डोमिनेंट दो. ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा उनके द्वारा स्लोली स्टेडली. एफएस ने जैसे लाइक यहाँ पे रेजी ऑब्जेक्टिव को अपने नाम किया, इंस्टेंटली वो रिकवरी हमें टीम ट्रू रिपर्स द्वारा इंस्टेंटली देखने को मिल जाता है. रेजली की अभी के लिए फिलहाल आ चुके हैं, एंड ये फाइट भी थोड़ी interesting बन सकती है. But there comes Mr. another Mime? counter. This time it's going to be Blastoise going completely crazy, but gets no value out of it. Still somehow all the players, they are barely surviving if you take a look after the start of Dodrio. But finally उनको यहाँ पे down किया गया, and they are down to only 4 players in the top lane. Absolutely, or a fatafat say True Reapers just gonna go for the Reggie Lecky. We can still see rapid spins coming out, but that is going to be Mew securing the Reggie Lecky for their own team. Hoopa and Lees has also been used up, and they actually want to trade it out, but Dodrio gets picked off again, and that is the problem. जो कि लास्ट गेम में भी उनके सामने आई थी, एंड ही इज स्टिल फेसिंग दैट राइट नाउ. म्यू विद द डबल पिक ऑफ. हुपा भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे उतना बर्स्ट. एब्सॉल तीन लोगों के बीच में गलत फंसे थे, बट विल बी एबल टू रिट्रीट एज दैट्स गोना बी अनदर पिक ऑफ. Devesh is just absolutely insane on that view, and the Snorlax with the dice. सारे के सारे finish. That's a 5 KO streak.
in the hands of Mew. एक एक करके सारे गए, एक एक करके सारे finish off हुए, and what a beautiful play coming in from True Rippers. Oh my god, they have just maxed out two of their players, looking to take the T1 bottom lane goal post as well. But let's see how things are really gonna go on. Because True Reapers, oh what a play from their side. अब देखते हैं किस तरीके से FS Esports के द्वारा एक काउंटर बैक हमें देखने को मिलता है. Because Reggie Rock फिलहाल के लिए आपको बॉटम लेन पे यहाँ पे एक बार फिर आते हुए नजर आ चुके हैं. टीम True Reapers still looking as strong as ever, but अब धीरे धीरे 3 साइड पुश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है from the side of none other than Team FS Esports. वेल नॉनदलेस म्यू यहाँ पे अपने द्वारा रेजी रॉक को कंफर्म करेंगे. मिस्टर मीव को फिलहाल के लिए डाउन किया जाएगा. देयर कम्स स्नोलेक्स टेकिंग डाउन द साइड ऑफ एब्सोल्यूट. तो वंस अगेन टीम ट्रू रिपर्स का बारी 12 बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं. बिकॉज देखिए यहाँ पे धीरे धीरे तो सारे के सारे खिलाड़ी बैक टू बैक सिर्फ डाउन ही होते रह जा रहे हैं. 200 का आंकड़ा एक बार फिर कंप्लीट करके ट्रू रिपर्स को मिल चुका है एक साफ लीड. इस लीड के बाद इंतजार रहेगा आखिरी 2 मिनट का. बट हुपा गोइंग ऑन फॉर द यूनाइट मूव. देखते हैं if he could really catch off guard any player. I think यहाँ पे मुश्किलों में जरूर आ सकते हैं. Seth is really trying to fall back, but he is going to get no support. And in the meanwhile time यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन KO आपको एलिगस द्वारा देखने को मिल जाएगा. म्यूव को भी फिलहाल के लिए डाउन किया जाएगा. True Reapers are really looking strong, but now comes the final 3 minutes. Absolutely. Finally, the shutdown that they were actually looking for. But look at the HP of Pardesi. एक पोक से वो इतना ज्यादा नॉकआउट हो चुका है. मिस्टर माइम, I don't think so he'll be able to survive that क्योंकि burst is insane. Man, Ego is playing so amazing on his Snorlax. उन्हें पता है he does not need to go for the kills. He needs to save his own backline. And last 3 fights से that is exactly what he is doing. उन्हें पता है मिस्टर माइम विल ट्राई टू प्रोवाइड दी ओपनिंग, बट उसके बावजूद व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज मेकिंग श्योर कि वो असैसिन्स को बैकलाइन पे डाइव ना होने दे. रेजी लेकी अच्छा स्टील कर लिया दोबारा से एफएस ने, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर सम रिलीफ जो कि कंटिन्यूस प्रेशर उनके ऊपर आ जा रहा था. बट नाउ is the thing that they might actually take advantage of क्योंकि रेजी लेकी टॉप साइड पे है. True Rippers will be forced to actually stop him in the tracks, and this is a good chance for them to gain a good position around the Reggie Rayquaza pit, not the Reggie pit, Rayquaza pit. So I personally think that they should be able to get a good grasp of the exact situation right now. Level disadvantage उनके पास जरूर है. They're all like around 1 level behind, but if they're able to somehow play through it, अगर वो दिवेश तक पहुंच सकते हैं किस तरह बैकलाइन पे, then they will have a great chance in this game. And here comes the final stress. Only 1 minute 40 seconds for Team FS Esports to keep their hopes alive in this entire series, in this entire tournament. यहाँ से अगर टीम True Reapers को जीतना है, just one thing in that is to secure the Rayquaza, not just give it up, but also to secure it. Because अभी भी ये जो मुकाबला है बहुत ज्यादा क्लोज आपको देखने को मिल जाता है. Snorlax फिलहाल के लिए डिफेंड हमें देखने को मिल जाते हैं सामने. Oh, there comes a great bump from his side, but Rex को अभी के लिए कॉर्नर किया जाएगा. I think Rex might just be some seconds away from being eliminated, but इसी meanwhile हुपा आएंगे. Absol यहाँ पे एक massive score करते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं meanwhile. Absolutely. जो बैकलाइन की तरफ हम डाइविंग की सोच रहे थे, they've literally left that entirely. दिवेश अभी 2 कियो की स्ट्रीक पे, हुपा अनलीश भी अच्छा यूज कर रहे हैं अपने स्किल्स को, एंड दैट्स गोना बी डोडो पिकिंग ग्लेशियन ऑफ. बट अगेन ब्लास्टोइज इज जस्ट अनस्टॉपेबल एट दिस पॉइंट. हुपा वापस जरूर आए, लेकिन परदेसी को दोबारा बेस के अंदर भेजा जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट विन. ट्रू रिपर्स सीधा फाइट जीतो है 340 to 236. जो बैकडोर की हम उम्मीद कर रहे थे वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई है. Now it's only Delphox जिसके आगे अभी 2 main front lines हैं, and he was not at all able to shred them. That was such a great zone out by Daksh as well as Ego. They made sure कि उनकी बैकलाइन आराम से Rayquaza secure करे, and now this is the final nail in the coffin. True Rippers, they've managed to break the code. They've managed to get those amazing scores on board. Exactly, and there comes the final seconds. Team FS Esports still trying to fight up to secure the only post left by their side. पीछे आराम से आपको ग्लेशियर डिफेंड करते हुए देखने को मिल जाते हैं. बस मिस्टर माइम for the 5th time will get eliminated. And what a play from Blastoise. As a defender, a perfect pick. But FS Esports, शुरुआत से ही हम बात कर रहे थे, a double speedster for them, a very different comp from their side. Yet
I'll say कि जो सोच थी वो बिल्कुल भी लाइक एग्जीक्यूट करने पे मुमकिन नहीं हो पाई, बिकॉज यू आर डबल अटैकर फॉर टीआर. लाइक इवन एन ऑलराउंडर का इस्तेमाल अगर होता तो आई थिंक काउंटर करना बहुत आसान हो सकता था. बट एज यू मेंशनड, ईगो ऑन द डिफेंस वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. ही वाज रियली प्लेइंग इट वेरी वेल. हुपा का इस्तेमाल एट सम क्रूशियल स्टेजेस जरूर यहाँ पे काम आ रहा था टीम एफएस को, बट इन द एंड टीम ट्रू रीपर्स यहाँ पे अपने द्वारा ये पहले मैच पे विक्ट्री हासिल करने में सक्षम होगी, and they are going to win it all with a 2-0 complete scoreline. So that's a big way to come up all the way in the lower bracket round number 4. Absolutely. And just look at the damage. Ego, जो हम बोल रहे हैं that he was amazing on the defense. He was making sure कि opponent के assassins jump पे ना कर सके Mew के ऊपर. Look at his damage. 83,216 with 56,166 damage taken. That's literally highest in his team. He was the one who was dealing the damage. He was the one who was soaking up all the damage. So that was absolutely insane play. तो जो कहीं ना कहीं comfort pick उन्होंने लिया था, he made sure that it's used perfectly. And हमने क्लेफेबल की healing देखी थी last game में, but एल्डे क्रॉस की healing पे आपका क्या कहना है? 98,914. Oof, insane, insane stuff. But with that, True Reapers, congratulations to them as वो अपने अगले पड़ाव पे अब धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे. बहुत अनफॉर्चुनेट एलिमिनेशन फॉर एफएस Esports, but they really tried their level best. पहली सीरीज की समाप्ति आपको इसी के साथ यहाँ पे देखने को मिल गई, which is going to be for the side of True Reapers. But up next is going to be way more interesting matchup. It's going to be Team Oat Esports going up against X Contribution. So I'll say कि this match is also going to be something जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा awaited थे, especially for the side of Oat Esports, because Oath is going to be someone who have been starting off the entire series on a very great start. Like उन्होंने शुरुआत पे ही Oath Esports ने मार्कोस एमिंग को 2-0 से टेक डाउन किया था. तो इट वाज समथिंग जो कि एक शॉकर हमारे लिए था कि इस इवेंट के शुरुआत पे ही मार्कोस गेमिंग जितनी टॉप क्लास टीम 2-0 होते हुए हमें ओटी स्पोर्ट्स के अगेंस्ट पे देखने को मिली. नॉनदलेस ओटी स्पोर्ट्स एंड मार्कोस दोनों ने ही अपने आप को लोअर ब्रैकेट पे पाया अपने राउंड नंबर 2 के साथ. तो ये मुकाबला देखिए इंटरेस्टिंग तो होगा, बट विद दैट वील बी टेकिंग अ वेरी शॉर्ट लिटिल ब्रेक के उस पार आपसे मुलाकात करेंगे विद द सेकंड मैच ऑफ टुडे. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect.
fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. The girls impolite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Hollywood perfect. Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Yeah, I'm on my way home. I'm no good for you, so I drive around Manhattan. They're all laughing, oh, I'm tragic. Yeah, I'm driving in my car and seeing open bar. I can't go down that road again. I'll smoke a cigarette, but will that help me forget you? Will that help me forget you? I just need to forget you. Oh, you. I need to treat you better than that and make you feel like I did in the past. Oh, I will treat you better than that. I don't need to forget you. I need to treat you better than that and make you feel like I did in the past. Oh, I will treat you better than that. I don't need to forget you. I don't need to forget you. Now you're sleeping beside me. Yeah, I wonder how could we pretend that we're on the same page? Now we're at the Well, welcome back, ladies and gentlemen. This is Pokemon Unite Spring Championship 2023 presented by Blink Esports. पहला मुकाबला हमारा ऑलरेडी हो चुका है स्केयर येट एंड नाउ वील बी हेडिंग ऑन टू द सेकंड गेम जहाँ पे ओट ई स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को ओट ई स्पोर्ट्स देखने को मिलने वाली है अगेंस्ट नन अगेन एक्स कंट्रीब्यूशंस. तो मैं इस मैचअप के बहुत ज्यादा यहाँ पे अवेटेड था बिकॉज ओट ई स्पोर्ट्स आपको इसी बीच यहाँ पे एक लोअर ब्रैकेट मैचअप पे नजर आएगी. Absolutely. And honestly, last game को देखते हुए wherein True Rippers just dominated FS in both of the games, both of the draft, 2-0 वो game निकाल के लेके गए. I'm really looking forward to this specific match क्योंकि इस game के winner will be the one who will be facing off True Rippers in the next round in the lower bracket. तो of course True Rippers भी इस match को जरूर देख रही होगी साथ साथ है ना आप सारे audience भी सब मिल के देखने वाले हैं अगले next amazing game को. Again, Oath Esports की आपने बात करी थी. They made a major upset in the tournament that on the very first राउंड जब उन्होंने मार्कोस को 2-0 डिफीट किया था बट नाउ दे आर अगेन इन द लोअर ब्रैकेट बट द थिंग इज they actually have the key. They know how to draft up against all of their opponents and how to try and outdraft them. तो possibly वो चीज हमें अभी देखने को जरूर मिल सकती है. Where in Oath are on the purple side, they'll be taking on X contribution on the orange side. Ban phase start हो चुका है. Let's see. I am expecting at least one Urshifu ban. I mean, I wouldn't deny with you on that. ये especially previously जब हमने दोनों teams के तरफ से एक ban देखा था, but it was Team FS and True Reapers. Now it's going to be none other than Cliff Fable who will be out as a supporter and counter supporter पे आपको Hoopa का ban देखने को मिल रहा है. Naruto on the Mew is really deadly, like especially what we saw yesterday from him. I think आज के लिए तो देखिए बहुत ज़्यादा like I'll say एक deadly pick हो सकता है, but make OP going on for the Urshifu, Savitar going on for the slow bro. तो ग्लेशियन के पिक का भी एक एंटिसिपेशन हम रख सकते हैं. मे बी अ स्पीडस्टर पिक फॉर द साइड ऑफ टीम none other than OT Sports because they could really work wonders with it. But no, I think that doesn't seem to be the case. Blissey पर फिलहाल के लिए एक like ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर किया जा रहा है. एल्ड गॉस को यहाँ पे फिलहाल लॉक इन किया जाएगा स्नोरलेक्स एज अ डिफेंडर while we see another pick which is going to be Sazaraj as an all-rounder.
Absolutely, but for now they're showing Zoro arc, so I am expecting them to pick this one. And अब मुझे देखना है नारुतो अपने म्यू पे कैसे बचेंगे, because we know Zoro arc की dive is absolutely insane. Combo pull off करना just a little tricky, but उसके बावजूद the one who's got the mastery over it, all of these players in this tournament, they're just top tier in that specific thing. तो मुझे जरूर देखना है कि how things are going to turn out in this specific draft. Doffy on the Cramo, साथ ही साथ Gardevoir तो long range burst अच्छा लिया है in the terms of Mew as well as Gardevoir, and they've actually got a very good front line. Snorlax हमें पता है he's just one of the top tiers. हमें almost हर मैच में देखने को मिल रहा है at least 80% win pick rate के साथ. Elder Gross last ही गेम में हमने देखी थी 98,000 की healing provide करी थी, but the answer in the form of Sylveon and Blissey, Savitar on his slow bro, both of the drafts are so very amazing, but मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा I'm just thinking it's 51-49 in favor of X contribution. मेरे हिसाब से they've actually got an upper hand in the draft. Yeah, I think the pick looks pretty good, like especially end moment, like not going for the Mew, going on for Mhm. Clamoran. So yeah, I think this could be pretty much something which maybe we can expect X contributions to have not expecting this yet. But yeah, talking a bit more about Craftmore, and we have him with the Gatling Gum missile as a Unite move. उनके dive and serves Mhm. बहुत ज़्यादा I'll say aggressive move बना सकते हैं at times. So as an attacker, I'll say like not just a speedster though, but he could really like be at times बहुत ज़्यादा annoying बन सकते हैं, especially if you are playing for the Reggie fight. But let's see, अभी के लिए मुकाबला हमारा begin हो चुका है, where it is gonna be Team Oath Esports, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है on the purple side, मुकाबला उनका X contributions के साथ. And here we go, एक 2-1-2 का split आपको फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे टॉप लेन पे आई थिंक बहुत ही जल्द बिडन होने वाली है. बॉटम लेन को पूरी तरीके से एक बार के लिए मैं कहूंगा कि गिव अप सा कर दिया गया है. Hmm. जल्द से जल्द रिट्रीव बैक करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितना अग्रेसिव यहाँ पे आपको म्यू देखने को मिल रही है फ्रॉम द साइड ऑफ टीम नॉट अदर देन ओथ स्पोर्ट्स. Absolutely, and early aggression उनकी साइड से clearly जैसे कि आपने बोला देखने को मिल रहा है, but for now Cramo might actually be caught. Naruto will actually have to survive and he will be picked off right off the bat. So that's an early pick off. I would say ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, but again अगर opponent पे इस हिसाब से farm और ज़्यादा जाता है, especially in the hands of Professor, तो बहुत दिक्कत आ सकती है in towards the transition जब हमारे पास bees आएंगी, and especially जब Reggie objectives भी spawn होने वाले होंगे. So that is something you definitely do not want to see happening. But for now, full rotation coming in from the side of OT Sports top side की तरफ, but उसके बावजूद आराम से safe defensive play from X contribution and transition किया उस चीज को bottom side पे, wherein Sylveon was the one who managed to get that pick off on Snorlax. तो कहीं ना कहीं टॉप साइड पे yes they played defensive because they knew they did not have the advantage, and उसका change जो उन्होंने दिखाया bottom side पे, that's a positive trade in their direction. They did not lose anyone and they also managed to win the bottom fight. Yeah, I think pretty great start. But either side, I'll say, team like Oath Esports, they have a lot and lot of aggressive play style just yet. Look, after the start of Slowbro being so in the middle of nowhere, jungle पे I think Slowbro के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कतें बन सकती है. आप देख सकते हो कि उनको constantly बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो डैमेज है वो एल्डिगॉस से बैक टू बैक मिलते रहने वाला है. थोड़ी मोमेंटम जरूर उनकी अभी के लिए बूस्ट हो सकती है उस बेरीज के पारे से. एंड बैक अगेन ही इज जस्ट नाउ टुगेदर फ्रॉम द साइड ऑफ Sylveon. नाउ कम्स Snorlax एंड एकदम मिडिल जंगल पे जो ये फाइट हो रही है Snorlax के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट होगी, बिकॉज ही माइट लूज हिमसेल्फ टू Urshifu, and that gives so much of an options for that opens up so many options for the start of X contribution. ढेर सारी यूनाइट बॉल्स को यहाँ पे अपने द्वारा फिलअप कर चुके, बट स्कोर करने के लिए आई थिंक दिक्कत जरूर बन सकती है. Snorlax बॉटम पे जहाँ पे टॉप लेन की तरफ आपको क्लैमोरन देखने को मिल जाते हैं. Absolutely. But फिलहाल Fatal की HP थोड़ी low थी, but he is actually getting that region back with that attack. Snorlax 2-man knock-up देते हुए, and that is going to be continuous chain CC provided by OT Sports, जिसकी वजह से retreat back करना पड़ेगा. But again, Snorlax actually wants to jump in for more long range solar beam connect. उस हिसाब से नहीं है, but उसके बावजूद look at that how Savitar is playing, trying to provide support from that side position. अच्छा, I would say एक distraction कहीं ना कहीं उनकी तरफ से निकल के आया, but again they have to play it safe. They're jumping back into the tower. They made sure कि उन्होंने थोड़ा सा एग्रेशन शो किया, उसके बाद सारे पीछे आ गए, and as we know
It's already 7 minute mark cross, तो सारे लोग bottom side की तरफ भी जाएंगे since it's Reggie Steele. I'm I'm personally biased towards Reggie Steele. मुझे बहुत पसंद है attack buff. It's just like full damage. But for now, that's going to Oh be Mew picked no. off already. Slowbro is the one who actually took them out. Zoroark ने secure भी कर लिया. We know that secure is really really good. And look at the situation wherein they're still picking off everyone one by one. And Ellie Gross को भी pick off करा है. So no more healing for the back line. And Beast has to retreat back in the tower. And in the meantime, that was some quick dunks coming in. But Sylveon uses the Unite. Will have to retreat back and gets to keep the life. He does manage to stay alive though, but interesting चीज ये था कि I mean he doesn't have much Unite balls as well, so losing it wouldn't have been that difficult for him, but he might have end up to put like I'll say Grady War on the 10th level. Like उनके level को आप already देख सकते हो, यहाँ पे एक बार 10th level हासिल हो जाएगा तो he would just be another beast out there. बट स्नोरलैक्स अभी के लिए दो खिलाड़ियों से बहुत अच्छा फाइट बैक आपको लेते हुए फिलहाल के लिए देखने को मिल जाते हैं. रेजी ऑब्जेक्टिव फाइट अभी के लिए आपको उर शिफू द्वारा देखने को मिल रहा है, एंड ही इज अलोंग साइड ब्लीसी जो कि टॉप लेन पे है. बट अब धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आपको म्यू वहां देखने को मिल रहे हैं. अब म्यू और उर शिफू की फाइट ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी. ऑलरेडी एक खिलाड़ी जिसके लिए एक बहुत क्रूशियल ये सर्वाइवल स्टार्ट रहेगा वो रहेगा गार्डिवॉर, बिकॉज गार्डिवॉर इज एक्चुअली मैक्स्ड आउट. जैसे ही उनका 11 हिट होता है तब शायद वो अपने आप को एक अच्छे मौके पे ला सकते हैं. बट जस्ट एज आई से दैट he is on the verge of getting elimination, and he will indeed be eliminated. Like, that is not what we really expected or saw it coming, and it is just being a very big disaster as back-to-back Team X contribution. They take away two of the player and they are just going to get the entire post for themselves. जरूर यहाँ पे पहला गोल पोस्ट तो आई थिंक ब्रेकआउट होते हुए आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ 105 का लीड भी यहाँ पे स्कोर लाइन पे बन चुका है. तो टीम Oath Esports, not the start which they could have really expected in this game in the early 5 minutes. ऑनेस्टली उनको फार्म करवानी थी अपनी बैक लाइन जो अटैकर्स हैं उनके. they've got 3 pokes, वो डिस्टेंस पे रह के खेलना ही खेलना है. बट अगेन यू कैन क्लियरली सी उर्शिफू दैट टू ऑन द वाटर स्टाइल. ज़ोरोआर्क द डाइव इज सो वेरी ऑन पॉइंट. प्लस आपको पता है स्लो ब्रो इज एक्चुअली गोइंग टू पोज अ वेरी बिग थ्रेट. यूनाइट का इस्तेमाल करके कैन जस्ट लॉक वन डाउन जस्ट एज इज डन राइट नाउ. बट दैट्स गोना बी यूनाइट यूज्ड अप बाय म्यू राइट अवे. दैट वाज अ वेरी गुड एस्केप. बट उसके बावजूद द सोलर बीम कनेक्ट्स, डज नॉट हैव इनफ डैमेज टू टेक एनीवन डाउन. स्लो bro with still surviving on that such a low HP. But look at the Zoroark backline में जाते हुए. His HP is so very low. He will survive for now क्योंकि Urshifu has done the job for him. यही बात मैं कर रहा था. द डबल डाइव कॉम्पोजिशन, अगर आप एक से बचोगे तो दूसरा आपके पीछे कूदेगा. आप कितने लोगों से बच पाओगे? Snorlax is not being able to stop them at all, but उसके बावजूद the retaliation comes in. Gardevoir लोगों को pick off करते हैं and they actually want to chase them. They want to pick all of them out. Urshifu will also not survive. A continuous knock up. That's clearly the numbers advantage in favor of Oath Esports. But X contribution, look at that. टॉप साइड पे Zoroark is just gonna go in for that 45 का score, even though bottom side Reggie objective trade off कर लिया है. Probably tier 1 will also fall. They're trying to somehow stop the scoring. Snorlax was able to zone them out for now, but उसके बाद भी long range fight again coming in. Mew with a good pick off, but the retaliation basic HP बहुत ज़्यादा low, will not be able to survive. Cramored pick off करते हैं. Zoroark finally joins the fight, wants to go into the back line. He will try and take one of them down. Was not able to connect the combination. Now he's stuck in a bad position. Cramo takes another man out of the picture. Slow bro अकेले बचे हुए हैं, still trying to make sure कि tier 1 survives until the backup arrives. Sylveon जरूर आए हैं but tier 1 has fallen. Slow bro will not be left alive at all, and what a great play by Oath Esports. And already Snorlax up ऊपरी स्थान पे पहुंचने के लिए begin कर चुके हैं. I think Snorlax might really get away with another one unless in the nick of the time यहाँ पे अगर आ जाते स्लो ब्रो तब शायद एक इंटरप्शन आ सकता था उनके लिए. But nonetheless, what a recovery. Team Oath Esports is right back in the game and they are looking as powerful as ever in another day for them. But let's see अब यहाँ पे मुकाबला कैसे आगे बढ़ता है. Mew बॉटम लेन पे है, उन्हीं के जस्ट सामने आपको ब्लेसी देखने को मिल जाएंगे. रेजलीकी को फिलहाल के लिए पूरा डाउन करेगा मौका मिलेगा. and Oath Esports is getting each and every other advantage for themselves. अब ये जो फाइनल स्ट्रेस के पहले के कुछ सेकंड्स है उस पे अपने आप को जल्द से जल्द लेवल अप करके अपने यूनाइट मूव्स ऑनलाइन लाना होगा, because Oath Esports, they have all the 5 Unite moves online, counter to which it's going to be Team Extribution having all Unite moves online. This is going to be a complete bloodbath when it comes to the mid jungle, and I think ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. सारे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, ये फाइट होने वाली
वाली है रेक्वाजा की, which has already appeared and is final stress पे देखते हैं कि किसके नाम होने वाला है रेक्वाजा। एब्सोल्युटली देखना जरूर रहेगा बिकॉज अगेन बैकलाइन डाइविंग उन्हें सर्वाइव जरूर करना है, बट फॉर नाउ मुझे ये देखना है स्लोब्रो किस तरीके से प्ले निकाल पाता है अपनी टीम के लिए। स्नॉर्लैक्स वांट्स टू गो इन फॉर द एंगेज, सिल्वियन को ऑकवर्ड पोजीशन पे जरूर लेकर आए हैं, बट लुक एट द यूनाइट मूव्स ऑलरेडी यूज्ड अप। ज़ोरोआर्क ने एलडी क्रॉस को पिक ऑफ जरूर कर लिया, बट स्टिल दैट बैकलाइन इज सर्वाइविंग। लुक एट द एचपीस, स्नॉर्लैक्स फुल वापस हो चुका है, ब्लिसी वाज द वन हु वाज टेकन डाउन, दैट वाज अ गुड यूनाइट बाय स्लोब्रो एज वेल, बट उसके बावजूद द ट्रेड्स आर कमिंग इन बैक एंड फोर्थ, इट इज स्टिल both the teams surviving with 3 of those Pokemons, but Cramo coming with a do KO streak. They've actually got the advantage, but still Urshifu, Zoroark, dono hi bache hue hain. Both of them have an amazing secure, but what? Look at the HP! That wall was insane, but uske bawajood the dash away was so on point. Zoroark survives for now, but उसे base पे जाना पड़ेगा. और Shifu was taken out of the picture as well. That's both of the secures out of the scene, and that's going to be the Rayquaza into the hands of Oath Esports. Even though they were the ones who were losing a few fights in that mid game, पूरा match turn around कर दिया है, and now they are going to go in for those scores. In the base 41, that's actually 82, and then 182 right away. That's a clear win for Oath at this point. X contribution, they do not have enough Pokeballs to even contest this fight now, but the main thing, Upcon, I really want to focus on the pick. Slowbro, yes, was pretty decent, but उसके बावजूद in order to make a play उन्हें बहुत awkward position पे जाके वो play बनाने की कोशिश करनी थी, that too jumping in towards that back line, and काफी chances थे कि वो शायद reach ना कर पाते, and long range poke से he would have been taken down, जो कि हमने mid game से होता हुआ देखा, mid towards that late and then Rayquaza fight, those were the things that we've been seeing. तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक वो छोटी सी गलती ड्राफ्ट में हो गई, एंड दैट वाज द थिंग दैट टर्न्ड अराउंड द एंटायर रिजल्ट ऑफ दिस मैच. And I think it was like, in a mid phase, it really seemed as if Team X contribution were looking just powerful. But that's where, Team Oath Esports, जो उन्होंने फिर, like I'll say, counter करना चालू किया, तब से I don't think they ever stopped, and it came all the way towards the end fight of Rayquaza, जो फिर सिक्योर करके उन्होंने अपने नाम वो पूरा एडवांटेज, वो पूरा मैच नंबर 1 ले लिया 601 on 285. That is the clean difference which we are getting to see. But what a play, man. Team Oath Esports शुरुआत में जरूर ऐसा लग रहा था कि they're just getting their hands warmed up, and once they did got, हमने देखा किस तरीके से like I'll say जब 4 मिनट था, it was like 68-2, and 200 के पहुंचने के बाद they did not manage to really bring up much of the advantages. But yeah, great stuff from the side of Mickey himself, जिनकी रिकवरी आप देख सकते हो almost 79,809 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. Doofy being a big damage out there with the Gardevoir was completely amazing as an attacking player. Mew का साथ जो उन्होंने निभाया, completely great. But the moment जहाँ पे आप स्लो ब्रो की बात कर रहे थे, and the moment जहाँ पे एक Rayquaza collect हुआ था from the side of Claymore, and that is where I'll say many things came into consideration कि why we saw such sort of comp coming in from the side of Team Oath Esports. Yeah, I'll say कि एक ऐसा moment भी था जहाँ पे Snorlax का dodge इतना ज़्यादा लाजवाब था. I don't know how that one single Pokemon of Team X contribution, how was he even barely surviving. वो Rayquaza में बहुत अच्छी तरीके से उनको cornered away push किया था, but Team Oath Esports, this wasn't easy for them the way हमें score line बता रहे. गेम बहुत ज्यादा क्लोज था, it all came down to that final fight, and I'll say कि जो शुरुआती कैजुअलिटीज का उनको फाइनल स्ट्रेस पे एक निर्भर करना पड़ा था, उस वजह से they did not really able to make the most out of it. Even after reinforcement back to back आ रहे थे, it was just one player going away, falling apart, not playing as a team, because unfortunate उन्हीं के लिए था कि 2 खिलाड़ी already बेस पे स्पॉन होने के लिए एक कूलडाउन पे आपको नजर आ रहे थे, और 3 of the player were really trying to make sure to show their presence, वरना 5 यूनाइट मूव अगर एक साथ स्ट्राइक करते तो it would have been a very easy acquire of Rayquaza जो Oath Esports को मिल जाता. Absolutely, and कहीं ना कहीं उर्शीफू को भी फुल पोटेंशियल पे वो उस हिसाब से यूज कर नहीं पाए थे, बिकॉज इवन दो दे वाज ट्राइंग टू डाइव इनटू दैट बैकलाइन, द प्रेजेंस ऑफ एल्डी ग्रॉस जो कि कंटिन्यूअसली अपने एक ना एक पोकेमॉन को बचा रहे थे फ्रॉम दैट कंटिन्यूअस बर्स्ट डैमेज, उनकी वजह से भी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी. वी क्लियरली सॉ म्यू अपनी यूनाइट का मूव यूज करके भी
सीधा डॉज कर रहे थे the entire backline rush. So these all things just came into the consideration, and just as you said, very well analyzed, wherein Zoro आखी zero HP थी. I would literally call it almost zero HP. उसके बावजूद वो survive करके जरूर गए, but the main objective that was to send Zoroark out of the fight, that was completed. So Snorlax, yes, even though he was not able to pick off Zoro, बट ही मेड श्योर कि वो बेस तक जाए ताकि उनकी टीम को एडवांटेज मिल जाए, और नॉट इवन एन एडवांटेज, मोर लाइक अ ब्रीदिंग रूम उनकी बैकलाइन को मिल जाए, वेर इन दे न्यू कि yes, at least one Pokemon will not jump in, at least one of them will not dive in, and that's a great win by Oath Esports. Yes, in the mid part of the game हमें जरूर लग रहा था कि X Contribution had a great approach towards the entire fight, and they were actually doing so very well in them. But there was one more point जो कि मैंने notice किया था, wherein Snorlax was actually going in for the engages, and उसलिए उनकी backline was a little bit more open or more vulnerable to those dives. जो switch up किया उन्होंने that from the mid to late game, तो उसकी वजह से the dive was not so very easy as it was in the early game. तो those were the things that turned around the result of this whole game. But again, there was a fight, सारी चीज वहां पे फ्लिप आउट हो ही जाती है, एंड दैट वाज अ वेरी गुड प्ले फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टीम्स. बट मैं देखना चाहूंगा गेम नंबर 2 में अब कैसे अप्रोच करने वाले एक्स कंट्रीब्यूशन के मेंबर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं दे हैड अ गुड आइडिया, एग्जीक्यूशन उतना ज्यादा क्लीन नहीं हो पाया, बट दे हैव गॉट इट. Exactly, they pretty much do have, and eventually देखिए जो भी ये मैच जीतने वाला है ना, like उनका instantly हमें later half of the day पे ट्रू रीपर्स के अगेंस्ट पे एक और एक लोअर ब्रैकेट मुकाबला देखने को मिलेगा. सो स्लोली स्टेडली थिंग्स आर गेटिंग प्रीटी मच हीटेड अप राइट देयर इन द लोअर ब्रैकेट. अपर ब्रैकेट के मैच पे जरूर, जैसे कि हमने पहले अपडेट दिया, ऐसे ट्यूएल इज द फर्स्ट टीम to make their way into the semi-finale, but there's another team who will be waiting right there. Because आप अगर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करता है ब्लिंक एंटरटेनमेंट, यू नो रेवेनेंट का भी अभी भी जो अपर ब्रैकेट रन है, दैट्स लुकिंग प्रीटी प्रॉमिसिंग. वी आर होपिंग द मैच बिटवीन देम एंड प्राइड ऑफिशियल्स टू गो प्रीटी क्लोज. बट बैन फेस की बात करें तो होपा एंड यहाँ पे क्लिफेबल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे आपको एज अ सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी बाहर होते हुए देखने को मिल रहा है. आई मीन इट्स समथिंग जो कि हमने प्रीवियसली भी देखा था, बट इट डजंट स्टॉप्स फेटल फॉरवर्ड फॉर गो ऑन फॉर द म्यू. अब ये जो पिक है आयल से की मुश्किल मे भी ला सकता है डोफी या फिर नरूटो. क्या खेलेंगे? नरूटो आई थिंक उर्शिफू के साथ जाना ही सही समझनी चाहिए, अनलेस दे आर ट्राइंग टू कम अप विद अ वेरी डिफरेंट लाइक ड्राफ्ट, जैसे कि आप मेंशन करते हो, विच वी वुड नॉट बी रेडी फॉर, एंड नॉट जस्ट अस बट ऑल्सो द साइड ऑफ टीम एक्स कंट्रीब्यूशंस. एब्सोल्युटली, एंड जैसे कि आपने बात जरूर कही थी, वही सेम काइंड ऑफ चीज अभी ओथ की तरफ से निकल के रहा है, बट दैट इज अ वेरी गुड डिनाई पिक ऑन द म्यू. एंड weekly tough, I'm seeing that after a long time, but again I don't think so they will actually go for it. Gardevoir एक और deny pick, and Sylveon secure वापस कर लिया X contribution ने. So these are very two picks to be honest, especially Snorlax ओपोनेंट में है, एल्डेग्रॉस भी ओपोनेंट में है, बट अगेन पोक का आंसर पोक से देने का प्लान आउट है ओथ स्पोर्ट्स का. डिस्ट्रीडियो को भी लॉक इन कर लिया है. क्लिफेबल ऑलरेडी बैंड है, हुपा इज ऑलरेडी बैंड, तो ब्लिसी इज ऑल्सो अ पिक दैट आई एम काइंडा एक्सपेक्टिंग दैट माइट कम इन फ्रॉम द साइड ऑफ एक्स कंट्रीब्यूशन, बट उसके बावजूद दे आर एक्चुअली शोइंग डोड्रियो. फ्रंट लाइनिंग में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है अनलेस दे बिकम मैमोस्वाइन, बट अगेन वी नो कि मैमोस्वाइन को ऑनलाइन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अर्ली फेज ऑफ दैट गेम माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. बट उसके बावजूद दे आर एक्चुअली लॉकिंग इन द ड्रैगनाइट एंड डोड्रियो. I've got mixed feelings for this. Afcon, I really think कि टैंकीनेस की काफी ज्यादा कमी हो सकती है उनके पास. बैकलाइन प्रोटेक्ट क्या पॉसिबल हो पाएगा? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे वो. Exactly, I think like unless they really have a situation, I don't think कि ये सारे चेंजेस, ये सारी पिक इतना ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, स्पेशली with seeing OT Sports in so many of those advantages. But just a quick update, guys. The lobby is going to be just restarted. थोड़ा यहाँ पे I think like any player just got DC'd, so that won't be a problem. यहाँ पे सारे खिलाड़ी जब तक all set, all ready and done नहीं होते, तब तक we won't be starting off the second match, क्योंकि हम जानते हैं कितनी like बहुत importance है इस matchup की, especially for the side of Team X contribution. It's a do or die for them. Once again, OT Sports ने बहुत अच्छी शुरुआत निकाली 1-0 के साथ. BO3 की सीरीज में एक अच्छी बढ़त है उनके पास, बट इन केस दे रियली वांट टू क्लोज इट डाउन राइट नाउ राइट हियर,
तो दे नीड टू रियली 2-0 दिस एंटायर स्कोर लाइन, क्योंकि अगर आपने टीम एक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस को थोड़ा भी मौका दिया तब आई थिंक परिस्थिति किसी के भी यहाँ पे फेवर पे जा सकती है। बट दोनों सपोर्टर्स के बैन का आपका क्या ख्याल है? बिकॉज Hoopa as a ban and then Clefable, I mean, like you need to stop Naruto, but उनकी Mhm. अटैकिंग प्लेज हमने देखे कि फर्स्ट मैचअप पे भी कितना ज्यादा एल से वैल्यू क्रिएट किया था फॉर द एंटायर टीम ऑफ ओटी स्पोर्ट्स। You're absolutely correct on that. And पता था Mew is also being targeted. तो अपने Cramor end पे he was able to kite the opponent's assassin and then was able to outplay them right away. तो that was an amazing play. But जैसे कि आपने बोला दोनों supporters ban कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है Hoopa meta is actually back with all the buffs that he has received. He's doing really well. मैंने मार्कोस का भी एक गेम देखा था. I still remember that they were able to just use that Hoopa to utmost perfection. And उसके बावजूद हमने last match के अंदर भी देखा True Rippers. They played so very well, and even though FS also picked the Hoopa, they were able to make quite an amazing play. They made so many plays using that, especially the way he helps in with the rotation. That is the thing that actually creates so many problems. जब आपको पता है yes आप अपने opponents को pick off करने वाले हो, उनकी बहुत ज्यादा low HP है, boom, there's a teleportation portal right there, and सारे के सारे full HP होके they're back in the action. तो especially for a composition that wants to go in for prolonged fights for longer durations, उनके लिए Hoopa in that comp is just like a virtue, a blessing on their head. तो banning Hoopa out a very good option, and साथ ही साथ Clefable हमें पता है कितनी ज्यादा अच्छी healing चल रही है उनकी. If not 80%, at least 55 to 60% मैचेस में हमें Clefable उठते हुए भी दिख रही है. So we know that the potential with the outplays with that specific Pokemon, it's so very insane. So I really think bans were really good, but again Urshifu at this point, in my personal opinion, he's actually broken, especially water style or Shifu. He's literally broken. He can one shot. His burst damage is insane. But I think dono ही teams, they've kind of prepared a counter strategy or a counter draft to play up against that Pokemon. इसलिए उसको उतनी ज़्यादा भी priority नहीं दे रहे हैं. Exactly. I think it could really be, like a very great pick though, because Mm-hmm. those support, like especially Hoopa, if that's not going to be a pick, Urshifu still is going to be in the equation. Nonetheless, Naruto को भी यहाँ पे like रोक के रखना, that's also something जो कि X contributions के लिए overall बहुत ज़्यादा important हो सकता है. कल के दिन we saw an Mm-hmm. absolute I'll say domination coming in from their side. Like एक Absol, Rodrigo, like the double speedster which we usually don't get to see. Then you had Glacian Mew on their side, double speedster, double attacker, one defense, and that went so much great for them. आज के दिन अब तक जितने भी Right. matches हुए, we didn't yet got to see Mamoswine, so Mm-hmm. unless there comes any, like I'll say, ban onto the side of maybe Snorlax or Slowbro, तब तक Mamoswine का addition होना I don't think would be really great. Blastoise really came very great for the side of our previous matchup जहाँ पे team True Reapers and FSE Sports, they had a completely close series though, and के 3 minutes पे it all came down to, and I'll say this Mm-hmm. matchup is also unlike the previous one. बहुत क्लोज मैच हम रियली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अनलेस द फाइनल 3 minute comes in and the fight for the side of Rayquaza is all it comes down to. But yeah, with that, I think Team Oath Esports, given that how new all the players are going to be, like Mm-hmm. added in this entire org or the team, and उस नाम से इतना जो लाजवाब परफॉर्मेंस है, ये टीम सो फार हमें बहुत अच्छी तरीके से सरप्राइज करते हुए देखने को मिली है. एंड ऐसा सरप्राइज आई होप कि वो एक अच्छे लॉन्ग रन अपने लिए बना पाए, बिकॉज लोअर ब्रैकेट्स एट Mm-hmm. टाइम्स कुड बी सो ट्रिकी. नाउ यू हैव FSE Sports who are unfortunately eliminated. True Reapers is still surviving. You have OT Sports, you have Marcos, and then we have Team Liquid and Throw Gaming. So ये सारी टीम में से सिर्फ वो एक ही टीम होगी जो आगे बढ़ पाएगी. एंड देन अगेन इट कम्स डाउन कि यहाँ पे ऊपरी स्थान से लोअर ब्रैकेट फाइनल पे वो कौन सी वन ऑफ द टू टीम्स माइट रियली कम इन, बिकॉज अभी भी आई थिंक टीम SA12 इज राइट, दे केम इन esports लोअर ब्रैकेट पे आ चुकी है. तो अब से Mm-hmm. जो ओथ esports के लिए मुकाबले ना, इट्स गोना कीप ऑन गेटिंग हार्डर एंड हार्डर एज द राउंड प्रोग्रेसेस ऑफ. So let's see how they really gonna be tackling it. But I'll say lower bracket it's really a do or die. तो टीम की कॉन्फिडेंस है उसमें आपको बिल्कुल कोई कमी देखने को नहीं मिलती. Unlike what we saw yesterday though, कि
कि 1-0 अप होने के बावजूद वी सॉ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेटबैक्स इन अ सीरीज. एंड अक्सर Mhm. पहला मैच हारने के बाद आप भी अग्री करोगे कि इतना ज्यादा आप चाहोगे नहीं कि समय दो अपने ओपोनेंट को टू गेन द मोमेंटम, टेक इट टू द Hmm. मैच नंबर 3, जहाँ पे फिर आप एक इक्वल फेस पे आ जाते हो. गेटिंग द फर्स्ट मैच मीन्स जस्ट गेटिंग द सेकंड मैच एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज वो हार आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है. राइट, एंड जैसे कि आपने बोला मोमेंटम स्विच अप हो जाता है सीधा ओपोनेंट के हाथ में, स्पेशली इफ द एंटायर मैच इज बेसिकली इन योर हैंड एंड आप रिक्वाजा फाइट में उस हिसाब से परफॉर्म ना कर पाओ या एनिमी स्टील कर जाए, तो काफी ज्यादा दिक्कत भी आ सकते हो सिचुएशन में, बिकॉज द मोमेंटम इट किक्स इन एंड दैट्स बेसिकली अ मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर द प्लेयर्स. बट अगेन, all of them are so very on point. They're all esports athlete on top of their performance. तो अब देखना है क्या सिचुएशन रहेगी इन द गेम नंबर 2. जैसे कि आपने बोला था, ओटी स्पोर्ट्स would definitely be looking forward to clean it up with a 2-0 sweep, but X contribution has got a lot on their plate as well, so they will not allow that to happen. The bans are going to remain absolutely the same. So Clefable भी ban out हो चुके हैं. That also leaves a lot of room open for the Pokemons, जो कि they're kind of dependent on the dash, or they've got an amazing mobility, क्योंकि gravity is a very good counter for that. But draft हमारे सामने जल्दी जल्दी होता हुआ भी दिख जाएगा. We're going to see almost the same picks. Mew but slow bro lock किया है सवितार ने सीधा, and the answer to that is Snorlax and Eldegoss. Gardevoir को भी deny pick वापस से कर दिया है. So there are a few things that we are looking that are exactly the same, but again Urshifu फिलहाल शो जरूर कर रहे हैं, एंड डेसिडिए I really think that that's actually a very good picks coming in for the side of both esports. Yeah, I mean, an attacker or an all-rounder though from Naruto or Urshifu, that's gonna be interesting. But मैं देखना चाहूंगा एक Savine and Professor किस तरीके से यहाँ पे pick लेते हैं. Blissey and yeah, I think Blissey seems to be the pick alongside a Blastoise as a defender, so double defense comb to just chop this out of Naruto. And even Beastef now going on for the the Seed Wave with the attacking play. डोफी भी आपको यहाँ पे डेलफॉक्स के साथ देखने को मिलने वाले. डेलफॉक्स इज समथिंग Hmm. which could once again be pretty interesting as an attacker though. Double attacker, one all rounder, then you have like a defender. So I mean this seems to be a great pick. I'll say कि ये जो ओट esports द्वारा हमें एक पिक देखने को मिल रहा है, having just one supporter, no speedster though, this could really have so much like I'll say interesting valuations. But on the other hand, let's see what's in for the side of team X contribution though, बिकॉज उनके पास भी एज एन अटैकर वी आर सीइंग गार्डेवॉयर डबल डिफेंस के साथ आपको फिलहाल जाते हुए नजर आ रहे. अटैक आप डबल देख सकते हो उनका. एंड या आई थिंक दिस इज गोना बी प्रीटी इंटरेस्टिंग फ्रॉम देम, क्योंकि एक एडिशन जो हमें यहाँ पे जरूर से यहाँ ब्लिसी का देखने को मिल रहा है इन दिस वन गेम. आई से प्रीवियस गेम में भी ब्लिसी look pretty great, just it wasn't as good as a supporter as you would have expected from Hoopa. But with Hoopa and Clefable already banned, Blissey is still the third Mhm. best pick which you could expect alongside Mr. Mimi. एब्सोल्युटली, एंड हमें पता है ब्लिसी के हीलिंग काउंटर करने के लिए एल्डेग्रॉस इज एन अमेजिंग पिक, बट फिलहाल एल्डेग्रॉस की हीलिंग काउंटर करने के लिए वी आर एक्चुअली सीइंग ब्लिसी कमिंग इन दिस कॉम्पोजिशन. जैसे कि आपने कहा, ब्लास्टॉइज, यस, अ डबल डिफेंडर कॉम्पोजिशन विद स्लोब्रो एंड ब्लास्टॉइज, बट कहीं ना कहीं मैं ब्लास्टॉइज को आई एम गोइंग टू गिव हिम अ लिटिल मोर रूम, स्पेशली इन टुवर्ड्स द सिचुएशन वेयर हिज अटैक्स आर अमेजिंग, क्योंकि हमें पता है वाटर स्प्राउट साथ ही साथ रैपिड स्पिन, इट्स लिटरली मच मोर देन सफिशिएंट टू एक्चुअली डिलीट वन ऑफ द स्क्विशी फ्रॉम द बैक लाइन. सो डेलफॉक्स को बहुत दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ डेसिडियो को भी, बिकॉज वी नो बोथ ऑफ देम दे लाइक टू प्ले in with that range. They like to play by keeping the distance between the opponent. तो देखना है कि क्या सिचुएशन रहेगी फिलहाल. We might possibly see another situation wherein the production might ask us to continue with the thing while they actually sort out the issue. But उसके बावजूद guys, we are going to witness the game number 2 very very soon, so make sure to stay tuned. And साथ ही साथ हमें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा ड्राफ्ट को डिस्कस करने का, because honestly कहीं ना कहीं जो पिछले गेम का ड्राफ्ट चला था उसके अकॉर्डिंग मुझे इस गेम का ड्राफ्ट वाज अ लिटिल बेटर फॉर द साइड ऑफ एक्स कंट्रीब्यूशन. Yeah, I'll say Team X contribution, they definitely had, a very great start for them, because eventually the draft, as you mentioned, they don't have any, they haven't kept many supporters to
counter really them. Like, Hoopa being banned alongside, Clefable not being Hmm. something where they could really fight up for. But it seems as if players from the side of Oath Esports have just some issues while getting in the lobby. So इस वजह से we'll once again be restarting the entire lobby for now. The picks are going to be restarted, but the game will shall go on. And with that, हमारा जो दूसरा गेम का दूसरा मुकाबला in the BO3 series is really going to be continued. Absolutely. Everyone wants the competition to be absolutely fair, absolutely on point because हमें पता है कि सारे players को एक proper opportunity मिलनी चाहिए to showcase their skills, to showcase their level, and that is exactly what the team is doing. So they are making sure that everything is on point, top notch. तो थोड़ा सा और support, थोड़ा सा और patience, and honestly, we know that good things come to those who actually have a lot of patience. And my pronunciation, along with these tongue twisters, is so very insane. मुझे बहुत practice करने की जरूरत है. But again, these players who've actually been practicing for so long with all of these compositions and pulling them off in front of us, कितना मजा आता है ये सब देखने में, especially अभी wherein we know that Urshifu, one of the most broken Pokemon in the meta, and he can be countered with Pokemon just like slow bro, क्योंकि आपको पता है आप Unite अगर यूज करोगे आप सीधा लॉकडाउन कर सकते हो उसको, and once he is basically in a situation wherein he can't do anything, आप burst down भी कर सकते हो. So these are the few things that I will be looking forward to going into match number 2 का game 2. And I really want to see कैसे execute करती है दोनों ही teams अपने अपने draft को, because they're literally so very good, both of them. Exactly. I think both of them, we could have really expected this to be, one of those upper bracket games. But that was kind of unfortunate, I'll say, overall for them, both of them either coming down. And Oath Esports as well, like, itne strong start ke baad, like, after taking down the side of none other than our very own team, Marcos Gaming. Uske baad, Gaming ke saath jo mukabla Mhm. tha, really, went down as close as a 2-1 scoreline. So if they really, are getting in this game, they want to make sure कि कोई भी disadvantages नहीं हो. सारे players, everything is all sorted out. Every connection, every like technical part for them is really sorted out, so that when they are in the game, they are able to just give their best shot, and that is all it takes. But Team X contribution, as we mentioned, it's like a do or die situation for them. So we hope कि वो अपना भी best पूरी तरीके से दे पाए, and maybe potentially game number 3 की तरफ हमें बढ़ा के इस सीरीज में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा कि पूरा का पूरा गेम दिखा पाए. बिकॉज आई थिंक आज के दिन बहुत सारे गेम से आफ्टर दिस मैच गेट्स ओवर व्हेन वन ऑफ दीस टू टीम प्रोग्रेस we have 5 more matches remaining. Like today is going to be a long evening though. Absolutely, but again, that is what everyone has been looking forward to. Long evening worth of a lot of entertainment. And just as we are going to progress in the game number 2, I would want to request all the audience out there, फटाफट से like भी click कर दो, click on the subscribe as well, so that you stay up to date with all of the updates and all of the amazing games and tournaments. In the meantime, हम फटाफट से चलेंगे match 2 के game number 2 के अंदर. The drafts are going to remain almost the same, and they are actually the same, and we will see which team actually gets the win in game number 2. Will it be X contribution जो कि है इस बारी पर्पल साइड पे, or will it be Oath Esports जो कि खेलेगी ऑरेंज साइड पे? No more restarts on the way. Let's jump into Thea Sky Ruins and see who wins the game. Match number 2 it is in this BO3 series, and Team Oath Esports, if there's ever to get another chance to say survive in this tournament, it's right here. Slow bro slowly steadily crawling his way back up. It's gonna be just him and Blastoise, जो कि बहुत ही जल्द आमना सामना यहाँ पे आपको करते हुए देखने को मिल सकते हैं. और नो बीस्ट अभी के लिए फिलहाल थोड़ी मुश्किलों में जरूर डाल सकते हैं उनको, बट देखिए एडवांटेज यहाँ पे जरूर रह सकते हैं. इंस्टेंट स्कोर तो यहाँ पे कर दिया उन्होंने, बट फॉल बैक करना चाहेंगे. नरूटो उनको अभी के लिए चेज डाउन करते हुए नजर आ जाते जंगल से होते हुए. He is just gonna be diving back, and that's where the backup comes in from his like dual defense here. And दोनों ही डिफेंस प्लेज आपको नदर टॉप लेन पे देखने को मिल रहे हैं. बॉटम लेन की बात करें तो वहां पे 2 खिलाड़ी है, तो लाइक 3 वर्सेस 2 की परिस्थिति फिलहाल के लिए बन चुकी है ऑल द वे फॉर द साइड ऑफ टीम Oath Esports. Let's see how they're really gonna play out with it. Absolutely, and कहीं ना कहीं even though दोनों defenses top पे खेल रहे हैं, I personally feel like Squirtle is literally playing like an attacker. But for now,
they've actually got a little bit of a room क्योंकि jungler rotation top में आया है सीधा, and they will be dunking in a few EOS energy. They'll be getting that score in. Berry का इस्तेमाल already हो चुका है, but we will see both the members of both esports just easily backing off from that fight क्योंकि पता है वन मैन डाउन है, नहीं करनी वो वाली फाइट वहां पे, बट उसके बावजूद माइकी थोड़ा सा डैमेज लेते हुए बट विल हील हिमसेल्फ बैक अप. दिस इज द बेस्ट and the most realistic move ever in any kind of game. You get energy back after you sleep. Such a beautiful move. Oh, Shifu has been upgraded to the fifth level though, and yeah, slowly, steadily, I think Beast अभी यहाँ पे fifth level पे पहुंच जाएंगे. Yeah, there we go. डोफी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. Meanwhile, म्यूव उनको फिलहाल डाउन करेंगे. So that's a big breakthrough for the side of म्यूव. And इसी के साथ यहाँ पे जो situations है वो एक बहुत बड़े advantage के साथ आपको so far यहाँ देखने को मिल जाती है for our very own team, none other than team Slowbro की, which eventually does brings out so many options for us to ask कि इतने ज़्यादा like level ups के बाद team X contribution, it seems to be something which happened even in the first game. पहले गेम पे एक अच्छी लीड थी, एक अच्छी बढ़त थी. शुरुआती 3-4 मिनट इट्स नॉट ऑल्सो कि आई से एक बहुत ही स्लो गेम चलता है टीम होती स्पोर्ट्स के लिए, बट यू वोंट सी देम स्कोरिंग मच. यू वोंट you'll see them going towards the side of jungle, you'll see them defending their post, but once the Reggie objective play comes in, that's where जो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरल प्ले इट कम्स आउट सो ब्यूटीफुली. बट वो टी स्पोर्ट्स नॉनदलेस शुरुआती फेज पे थोड़ी मैं कहूंगा लाइक बिछड़ती भी हमें देखने को मिल रही है, एंड दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ स्पेस, दे हैव गिवन ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ like I'll say level ups as well to the opponent players, but uske counter pe Urshifu and most of the players from the side of none other than Oath Esports are also looking pretty well. You're absolutely correct at that, and I'm literally looking forward how things are gonna turn out because हमें पता है that early जैसे कि आपने mention किया था Oath Esports play a little slow in the early game but सीधा turn around करता है उस चीज को mid towards the later stages of the game. But again right now just as we were looking forward to that 71 के score से they were in the lead, but now Dubara has been turned around entirely. X contribution with the one who are actually in the lead right now. Snorlax थोड़ा poke damage लेते हुए will just easily back off from the fight. उन्हें पता है नहीं लेनी ये वाली fight यहाँ पे, but we might see Blastoise and Urshifu का engagement in towards the top, wherein Naruto he'll be able to retreat for now. It's just him against Blastoise. Fun competition, but that's gonna be it. Bottom side का भी engagement has entirely ended. They'll be looking forward to those neutral objectives yet again. Everyone has almost got their level up. The power spikes that they kind of need just a level or two behind from them, and farming at this specific point is the thing that they'll be looking at. But what a way to use the Unite, and what a counter play. Blastoise making sure कि वो सीधा दो नॉकअप दे. Yes, the Regieleki was still secured by Oath Esports, but the fight clearly going in the favor of X contribution. They will be able to stop it in its track. And look at the bottom side, सीधा push आ चुका है. Decidueye long range snipe. म्यू के एचपी लो जरूर करेंगे, बट उसके बावजूद आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट that Slowbro was being knocked in, and the same time Decidueye was able to snipe Mew out of the picture, and Slowbro will be taken out as well. In the meantime top side में Regieleki को रोक तो जरूर लिया जाएगा, but the bottom fight has flipped around entirely. Oh wow, what a setback though. After losing those Reggie fights, instantly यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से slowly, steadily distance cover up करते हुए आपको Oath Esports देखने को मिल रही है. Now second half, where is the real game begins. Oath Esports उसके बाद it's just like they keep getting better and better. But now the Reggie steal is going to come, and Naruto already up with what, like 11th level is going to come on. बहुत ज़्यादा damage inflict कर चुके हैं, but slowly, steadily Mew and Snorlax they are also coming in, but Snorlax यहाँ पे Mew को पूरी तरीके से block करने में सक्षम होंगे, and Decidueye is gonna take it to their name. Slowly, secondly, अभी अगर lower post पे जाना है तो second lane पे अपनी जगह बनानी होगी. Upper lane पे मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से fight up आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है, because upper lane पे it's a 2v1 situation right there, and that's where the lead once again comes in for the start of X contributions. And look at the way they made the combo. Mew was the one जिन्होंने flank किया, and he was the one to take Decidueye to such a low HP कि Blastoise was easily able to finish him off the picture. The perfect execution of their combo, that's what have got them these pickers. So finally bottom side में जो continuous aggression आ रहा था for Oath Esports, उसको they've actually stopped it on its track. But now the real question begins.
Still 3 minutes 45 seconds Rayquaza के मैच एंड होने में एंड 140 इन द स्पॉनिंग ऑफ द Rayquaza टॉप साइड में रेजिलेकी आ चुका है विल दे ट्राई टू डिले इट और विल दे एक्चुअली गो इट राइट अवे म्यू दोबारा से यूनाइट मूव यूज कर चुके दे एक्चुअली वांट टू फॉल इन दे वांट टू गो इन फॉर द चेज बट अगेन दे विल बी जस्ट retreating back Mew की HP is low he's literally one snipe away and that's exactly what is got and that was such unfortunate move and this is going to give the entire control of the Reggie Lake pit back to Esports. Or Shifu does has the, I'll say, Unite move though. Oh, the fight for Reggie Lecky in the upper hand is something which is really going to boil down to. But इसी बीच slow bro down होंगे ओ टी स्पोर्ट्स को Reggie Lecky मिलेगा back again advantage यहाँ पे धीरे धीरे क्रॉन अप कर रही है but no way Snorlax is going to be taken down. Not the ideal time, but चलिए उनके पास अभी भी 50 seconds है before the Rayquaza comes in. Naruto needs to fall back. Oh my god, he is just on the verge of an elimination. But क्या लाजवाब तरीके से यहाँ पे अपने पोस्ट को डिफेंड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है टीम एक्स contribution. Everything is working on for them, and that's where Blastoise is going to take down another Reggie. Look after the numbers which is now favoring, like यहाँ पे स्कोर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बट धीरे धीरे और शिफू आपको उन्हीं टॉप लेन की तरफ अभी के लिए होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं. बॉटम रेजी रॉग इसकी भी फाइट ऑन है जिसमें आपको एक अच्छे अपर हैंड की तरफ धीरे धीरे ओटी स्पोर्ट्स को क्लाइम अप करने का शायद एक आखिरी मौका मिल सकता है. देवी को वो रेजी रॉग जरूर यहाँ पे मिल चुका है. यूनाइट मूव पांचों खिलाड़ियों के पास ऑनलाइन है एंड अब विद इन 10 सेकेंड्स देयर इज गोना बी रेक्यूजा फाइट जो डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पे ओटी स्पोर्ट्स इस सीरीज को 2-0 पे डिफेंड करते हुए नजर आएगी या फिर दे गोना टेक अवे टू द थर्ड मैच. Absolutely. फिलहाल I feel के X contribution should wait. Basic Unite move आने का but उसके बावजूद they actually want to still answer back the engage that's coming in from both Esports. Snorlax awkward position में probably they're trying to force his Unite move out. Solar Beam used up as well. Mikey की HP थोड़ी सी low but again shield was so very good on point and that's a pick off. Urshifu has been taken down. Gardevoir ने सीधा pick off कर दिया उनको already. And look at the HP of the Decidueye so very low. इससे पूरा कंट्रोल मिल चुका है of the Rayquaza pit back in the hands of X contribution and they probably will be able to melt it down very very quickly. They should actually do that. Blastoise is just trying to scout out the entire area, goes in back towards the Rayquaza. They have to secure it, but look at LD is coming in and they've managed to steal. Delphox is the one who secured the Rayquaza. Both Esports with another upset. They secure the Rayquaza for now and they've taken 4 pickoffs as well. Professor akele bache hue and that is going to be the final nail in the coffin yet again. Oath Esports will probably come back but we still have to see if they manage to defend. No, it is not going to be possible at this point because still 3 members down again. That's Oath Esports for you. What a steal by Delphox. I mean, that is so unfortunate. There goes another goal just to pull things up in the most difficult fashion possible. I'll say Reggie fights were looking so powerful. Eventually, वहाँ पे जब 2 खिलाड़ी down थे, everything looked in the favor of none other than, Team X contribution. I did thought that now is the moment we are going to go all the way to game number 3, but then the steal of Rayquaza and it all fall apart. सारे खिलाड़ी bottom lane पे यहाँ पे ध्यान दे बैठे जहाँ पे top lane पे हमने देखा कि कितनी लाजवाब तरीके से Decidueye came up with the first, 100, then came out Mickey with another one. Naruto ने भी अपना काम बहुत लाजवाब तरीके से किया. And just take a look, like only 3 players from the entire team of Oath Esports, they came up to score. Dofi and B-Sef, जरूर उनका खाता अभी तक 1 पे भी नहीं खुला था, but a great fight, man. Team X contribution, they played it so well. They do deserve a lot of, I'll say like appraisals here, because eventually एक बहुत dominant team से, ये like इतना close fight up रखा और उन्हें score lines चाहे कुछ भी कहे, but Team X contribution, they definitely had it. First game में अगर ना भी हो, but second game में they definitely had it and that was so great match. दोनों ही team really proved out why they are so deserving to be fighting up all the way in this lower bracket round number 2 and अब round number 3 पे progress करके जो हमारे अगले मैचअप से उसमें आपको ट्रू रीपर्स एंड ओथ Esports का मुकाबला लोअर ब्रैकेट पे देखने को मिलेगा. बट दैट इज जस्ट द फर्स्ट मैचअप. अभी और 2 गेम्स यहाँ पे लोअर ब्रैकेट्स के रिमेनिंग नजर आ रहे हैं. अप नेक्स्ट इज गोना बी मार्कोस एंड I2K. Now I2K, they had a pretty upper hand yesterday. Like Marcos came in the very first game. Second round, I2K came down in the lower bracket.
2-1 का score line था भाई. Marcos had like what 2-0 and then 2-1 2-0 victory. So let's see how things are really going to go, क्योंकि Marcos is really one with a lot of experience, and yeah, they have really proven themselves to be why they're known to be the best in this entire country. Absolutely, and वो अब देखने को जरूर मिलेगा हमें अगले मैच में. बट फॉर नाउ आई रियली वांट टू लुक बैक एट द करंट सिचुएशन जो कि हमें देखने को मिली थी. टेल फॉक्स विद द 106k डैमेज, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ऑनेस्टली, range ka answer was range in this specific game, and that is what they were using it again and again. Kahin na kahin near the Rayquaza, where in next contribution they had the full control. Blastoise was zoning the opponents out. Us particular moment where I really felt like Fatal Forward was using Mew, should have been melting Rayquaza. He should have been ready for the steal. Instead उन्होंने अपनी Unite भी use कर ली, and then he was also trying to zone out the enemies. That was, I personally feel like that one small mistake of just a minute second. He probably did that for us 2 or 3 seconds max, but that one small mistake was what gave chance to Del Fox to actually go in and get that steal. So that was probably one small, little confusing decision making. But uske bawajood, the entire game that this team played, the damage that Mew dealt, he had the highest damage of almost 87k on his team. That was so on point. इतना मजा आ रहा था दोनों ही टीम्स को देखते हुए, and they literally had it. You are absolutely correct on that. They had the lead, they had the control in the game starting from the early game. Yes, mid में थोड़ा सा डगमग गया, but उसके बावजूद they got that control back. कहीं ना कहीं एंड में जाके वो एक छोटी सी मिस्टेक, बट उसके बावजूद they've still got a lot of room and they've still got lot of chances. उसके बावजूद, just as you mentioned, Marcos up against I2K, that will be the match we all will be looking forward to. So really, I want to see how things are going to turn out, because Marcos ka current style in this tournament is they're going extreme. Either it's a 0-2 or it's a 2-0. So I want to see, will this match also be ending up at a 2-0 or will it be a 2-1? Well, let's see, because I think दोनों ही टीम्स तैयार तो आपको बहुत जल्द होते हुए नजर आएगी. बट उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक. मिलते हैं आपसे एक बार फिर गेम नंबर 3 के साथ. Just being friends, play me like a song stuck in your head, but you still get my blood rushing. Dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. I know you see me cross the room, let's skip to the end. I wanna be what keeps you sleepless past 3 a.m. I know that we're toxic, but I like the thrill. I'd be 6 feet under if looks could kill. Let's go back to live it all again and get too close as fast as we can. Dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. I know this gets so complicated. You lose your mind just to change it, and tomorrow you'll regret it. But until the morning, dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. Without you here, can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head racing. We can't go on like this
you go. I gotta let you go. Shawty, summer fine. I saw you right up in the summertime. I tried to make you mine, it wouldn't work. Put in work, I had to push you first. I lost my mind, went berserk. I feel like Uzi Vert. Vivian Westwood chain hanging right around my neck. Balenciaga kicks 44 when I step. Summer fine. I saw you right up in the summertime. But now I stay inside all the time, wasting away, waiting for you to call one more time. Without you here, can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head, racing. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing. I'm over it, so I had to let you go. Yeah, I gotta let you go. I gotta let you go. Hey, yeah, I gotta let you go. Yeah, I gotta let you go. Yeah, I gotta let you go. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. My siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm. Well, good evening, and once again, welcome back, ladies and gentlemen, to the Pokemon Unite Spring Championship 2023, presented by Blink Entertainment. We are right back with game number 3 of today, where Marcos Gaming सामना करने वाली है Team I2K के साथ. Absolutely, another massive best of 3 right on our doorstep. देखना है क्या situation रहेगी. We really need to see how I2K are going to answer the Marcos' draft, which we've been seeing again and again, जो कि continuously improvise करते हैं and they adapt on the go. That is their actual strength. So I really want to see how I2K have actually prepared to study and analyze the entire situation up against them, because these are the 3 games that they actually need to win. 2 of them actually, and to progress into the next round of lower brackets. And I personally feel like that they might be able to cause another upset, because all of these teams have so much potential and they might actually end up surprising us. Yep, I mean, let's see, because Marcos, not the start which they really expected in this tournament, but उसके बाद lower bracket पे आने के बाद I think they had a pretty good one. Like 2-0 से शुरुआत हुई. अभी एक बार फिर I2K के साथ यहाँ पे मुकाबला है. जीतने पे उनको आज एक बार फिर मौका मिलेगा मैच खेलने का. But nonetheless, followed by this game, we have Throw Gaming Legends, then Team Liquid, and then as you mentioned कि हमारे previous जितने भी आज के game के winners होंगे,
उनका ही मुकाबला Mhm. आपको लोअर ब्रैकेट पे देखने को मिलेगा। लाइक ट्रू रिपर्स पहले मैच को जीती, तो उनका मुकाबला ओथ ई स्पोर्ट्स के साथ होने वाला है आफ्टर दीज मैचेस। couple of games we do have, but yeah, I think Team I2K, they are in for a very big challenge at this moment. Marco's gaming here, we know how deadly they can be at times, given up, with the entire, like I'll say, experience with their, especially with some of their most exponential players, if you ask me, like Snowy, you have Volk. So I'd love to see फिलहाल bands Marcos Gaming के लिए यहाँ पे क्या डिसाइड किया जाएगा। Marcos Gaming क्या एक सेफ ऑप्शन चुन सकते हैं अपने द्वारा एक बैन की? Hmm. Possibly they can actually go for Urshifu, or maybe they can, just keep it simple. They can try take away Clefable. There are quite a lot of options, but Hoopa is also one of them, or maybe they would want to pick it for themselves. But Hoopa and Urshifu are going to be the two bans. R2K taking away the Hoopa, and that's going to be Marcos taking away Urshifu. But Clefable, Kyuki, Open T, she's going to be prioritized as the first pick. क्लिफेबल ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। डेलफॉक्स का भी पिक आपको यहाँ पे एज अ स्पीडस्टर देखने को, या एज एन अटैकर जरूर देखने को मिल जाता है। वी वर मिसिंग दिस आर मामस वाइन, बट आई होप कि ही इज रियली श्योर, because I mean there's still a lot of option. You have Snorlax, you have Slowbro, but yeah, Mammoth Rush is something which could really, at times be a big, I'll say, unbeatable stuff for defending Pokemon though. Meanwhile, इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है फिलहाल Blissey. Now, Blissey, one of those good little supporter, but not the case though. I think we are getting some new surprises. Like Alolan Ninetales हमें फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है, which alongside will be playing alongside LD Goss. And for the first time in the day, we have Terentier as well back into the equation as an all-rounder, and Nasura Noob going on for another pick, which is going to be Sizer. So a double all-rounder pick, a defender, indeed, an attacker, and a supporter. So that's going to be the play. That's going to be the comb for Team I2K. Oh, dude, Rio could be a vital option though, but let's see how Snowy is going to really pick up. I think Dodrio is the best case pick for him, and yes, he might potentially go with it. But yeah, taking into consideration Alolan Ninetales, like, what do you have to say about this? Like, ye pick from the side of team none other than Marcos, could it really be that great while knowing that there's no Snorlax and Slowbro currently in the game? Mm, Honestly, they'll probably try and play Alolan Ninetales from a distance, because we know that's the standard playstyle with him. But the continuous CC that Ninetales can provide, that is something that they might want to play along with. But उसके बावजूद, जैसे कि आपने mention किया था, Tyranitar after a long time we're gonna see back in the action. But that's having a Tyranitar in your team, it's kind of a double-edged sword, because आपको पता है level 9 से पहले he's absolutely nothing. You can just go, you can gank him, you can take him out, you can just pressurize the lane जहाँ पे Tyranitar खेल रहा होता है. But again, they've got the Gardevoir as well. We know कि वो भी scaling Pokemon है. He also needs that mid to late game. Blastoise and Scissors, yes, they come up early in those fights, so it's going to depend a lot on these two कि वो कैसे rotate करते हैं and how they're able to navigate and dodge through all of that CC जो कि आएगा Mamoswine से, जो कि आएगा Alolan Ninetales से. That is going to be the main focus of how S2K are actually gonna approach in this kind of scenario. Exactly, but to start things off, match अभी के लिए फिलहाल begin हो चुका है with Team Marcos on the orange. And here we go, like Asura Noob going on to take down the wild Pokemons. इनका सामना instantly होने वाला है Mamoswine से, and instantly एक बहुत बड़ा break through Dodrio को मिल चुका है। पहला KO शुरुआती फेस पे यहाँ पे हमें देखने को मिल गया, जिसके रहते अब एक बार फिर यहाँ पे like शुरू से शुरुआत करना होगा हमारी team I2K के players को. Marcos Gaming, still we can see some great upgrades for them, as it's going to be done other than Delphox up on the 5th level though. Dodrio ये भी almost 5th level पे almost अभी कुछ seconds में आपको शायद पहुंचते हुए देखने को मिल जाए. There he go, he upgrades himself. 12-4 score, nothing much to really worry about for this out of Team I2K. Yeah, but also alongside that, if you have Gardevoir on the 5th level, ये level के जो divs है, yeah, at a certain point of time थोड़ी मुश्किलें बना सकते हैं, but Ninetale अभी के लिए आगे आएंगे, and that's a big knock. Once again, that's going to be none other than Sizer, जिनको knockout किया जाएगा, and back-to-back scoring opportunities यहाँ पे बनते हुए आपको team Marcos के लिए देखने को मिल जाती है. Even though Zygarde is right there, is not just able to defend from Snowy.
एब्सोल्युटली, दोनों ही लेन्स के बीच पे प्रायोरिटी मार्कोस ने ली एंड दोनों ही लेन्स के बीच वो जीते भी हैं, सो दैट्स ऑलरेडी अ लॉट ऑफ न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव सिक्योर्ड एंड कंटिन्यूअसली पोक डैमेज अभी भी देखने को मिल रहा है लोलन नाइन टेल्स का. फाइनली देयर इज अ डाई फ्रॉम असुर, बट उसके बावजूद ही जस्ट जंप्स बैक इन टुवर्ड्स हिज टावर बिकॉज ही नोज अभी उनके पास उतना डैमेज नहीं आया. ही प्रोबेबली वांट्स टू वेट कि कब उनकी यूनाइट अनलॉक होगी, बट स्नोई इन द मीन टाइम अप्लाइंग सॉल्ट टू द वुंड्स, सीधा जाके बफ्स भी स्टील कर लिए हैं. सो दैट्स वन थिंग दैट वी नो दे विल प्रोबेबली डूइंग अ लॉट मोर, क्योंकि दोनों लेन्स में एडवांटेज मार्कोस के पास. देव गॉट द एंटायर एरिया कवर्ड, बट फॉर नाउ दे विल टेक टायरानाटार डाउन एज वेल. जैसे कि मैंने बताया था, दे विल ट्राई एंड प्रेशराइज दैट वन स्पेसिफिक लेन बिकॉज वी नो हाउ difficult it is for Tyranitar, especially in the early game. But we can see continuous damage. Slowly, low HP will survive. He'll survive. And he actually got me Well, worked up for a second there. एग्जैक्टली बट 100 का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुके हैं शुरुआती फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द गेम में. एंड वोल्क विद द नाइन टेल, द रेंज एडवांटेज इज लुकिंग सो पावरफुल विद इट. क्लिफेबल स्कोर्स, मीनवाइल Mamoswan is going to come in 7th level for him, 13th level. No, it's going to be in fact 13 यूनाइट बॉल्स जो कि फिलहाल हमें उनके देखने को मिल रहे हैं, बट नॉनदलेस ऑलमोस्ट 10th लेवल पे आपको डोडरियो पहुंचते हुए नजर आएंगे. एंड दिस लुक्स प्रीटी ग्रेट. आई मीन अ बिग डोमिनेशन स्केल कमिंग इन फॉर द साइड ऑफ मार्कोस, क्योंकि रोक पाना उनके लिए ये इतना देखिए इजी तो हो नहीं पा रहा है. एक बार फिर यहाँ पे इक्वेशन पे साइजर आपको आते हुए नजर आएंगे टुवर्ड्स द बॉटम लेन. बहुत ज्यादा यहाँ पे टक्कर होने वाला है बिकॉज रेजी रॉक इज गोना बी समथिंग जिसके लिए मुकाबला रहेगा, बट वो भी हाथ में जाएगा towards the side of none other than Marcos Gaming. And slowly steadily I2K they're losing a lot of momentum at the same time lead भी बहुत ज्यादा गवा रहे. ऑलरेडी पहला गोल पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्स्ट आउट हो चुका है. डॉटरियो इज गोना टेक डाउन क्लिफेबल एंड एज अ टीम अगर पांचों खिलाड़ी स्कोर करते तो यू हैव अ बफ ऑफ 50 मोर परसेंटेज कि बहुत जल्दी आपकी जो स्कोर टाइम है वो बहुत जल्दी आप यहाँ पे कर पाते हो. बट अब धीरे धीरे कंसर्न्स बढ़ने वाले. 205 का लीड है टीम मार्कोस के पास एंड दे आर नो वे लुकिंग टू स्टॉप. अ बिग सिल्वर लाइनिंग इज कि अपर हैंड पे यहाँ पे ट्रुथ 25 आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं. एंड डोडरियो might really want to back off and give him the fight. Yep, he goes. He's going to go out. He's going to get the fight. Truth might really get taken down, but only to his disadvantage. I think डोडरियो इसी बीच आपको 11th लेवल पे नजर आएंगे. लेवल डिफ धीरे धीरे जरूर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज आप अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पे गार्डी बॉय क्लिफेबल गेट्स टेकन डाउन. ब्लास्टॉइज भी डाउन हो जाते हैं. उनके लेवल्स अभी भी 7 पे स्ट्रगल कर रहे हैं while they are fighting up against all the Pokemons which are completely in double digits level. So I think Team Marcos, they're looking very, very powerful for the other 2 minutes as well. Absolutely. For now, they've entirely got the control, but उसके बावजूद, just as we've been talking about, Etar, once he hits level 9, बहुत ज़्यादा valuable those moves become. But for now, Unite moves force out करवा दी जाएंगे. That's going to be Mamoswine quickly just running out of that situation. He was about to be taken down, but उसके बावजूद, Etar wants to go in. They want to chase the Dodrio, but Snow, he just slips right under their noses and he will be able to survive for now. फटाफट से HP भी बढ़ाएंगे by quickly taking the beast down. And you know, one thing of having a T-Tar in your team, आपको पता है कि enemy की shields को आप ignore कर सकते हो with the true damage that comes in from ancient power. But the downside for that is, अगर opponent let's just say Rayquaza steal कर लेते हैं तो उस टाइम पे आप उनको रोक नहीं सकते फ्रॉम स्कोरिंग दैट अर्ली गेम. बट फटाफट से भी 2 पिक ऑफ्स निकालते हुए मार्कोस, दे हैव द एडवांटेज, दे हैव द लेवल्स. डबल डिजिट्स सब हिट कर चुके हैं, लेवल 11 भी सब हिट कर चुके हैं. जस्ट एलडी विद लेवल 10 हु विल बी क्विकली गेनिंग ऑन दैट एज वेल. बट वी कैन क्लियरली सी जैसे स्टार्टिंग में we were seeing how I2K were playing. Abhi they're playing a lot more aggressive and they've taken Mamo down as well. Alolan 9 is third awkward position, still going in for the burst damage and some KHP is so very low and that is going to be Marcos taking almost all of them down. Delphox ne bhi double pick off kara hai. Let's make it 3. That's a complete wipeout. Marcos will easily take the Registeel. रेजी स्टील भी नाम आ चुके हैं. अब ऑलमोस्ट 500 तक भी आई थिंक पहुंचना ये वो अगला टारगेट जरूर बन सकता है. स्नोई अलोंगसाइड डोडरियो फाइटिंग अप अगेंस्ट द सारा ब्लास्टॉइज एक बहुत ही अच्छे डिफेंसिव प्लेज हमें जरूर देखने को मिल रहे थे. बट डोडरियो एज अ स्पीडस्टर जस्ट लुकिंग इनक्रेडिबल. दूसरी तरफ साइजर यहाँ पे बहुत अच्छा वाले निकाल रहे हैं. स्कोर बैक टू बैक आएगा. केओ यहाँ पे आपको क्लिफेबल के भी देखने को मिल जाएगा. एंड इसी के साथ साथ Mamoswine is going to come and take down Gardevoir. Blastoise is also going to be taken down. Complete breakdown
डाउन पूरी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एंड ट्रुथ इज गेटिंग चेज्ड अवे, द टैलेंटियर इज रियली विलिंग टू बैक आउट। 4 स्कोर तो कर दिया, बट यहाँ से फॉल बैक करना ये देखिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप देख सकते हो मामो स्वाइन डिफेंड करते हुए आपको बहुत लाजवाब तरीके से देखने को मिलेंगे, एंड ऊपर से एक अच्छा डैमेज, एंड दैट्स गोइंग टू बी टैलेंटियर बीइंग बैक टू द बेस। साथ ही साथ आप देख सकते हो गार्डे वॉर भी अभी के लिए KO हो चुके हैं 100 के मार्क तक। जब तक पहुंचा आई थिंक तब तक यहाँ पे मार्कोस अपने 500 मार्क को पूरा करते हुए नजर आएगी पोटेंशियली। Man, they're just so very good in slipping away. That's exactly how they've been playing. Almost सारा farm उन्होंने steal करके रखा हुआ है. They're not giving the side farm to the side of I2K, and they're not even letting them farm in their own jungle. सारे buffs भी वो steal continuously कर रहे हैं, and that is what is creating the level disparity. Let's just look at the difference. Delphox 14, Dodrio 14, Alola Ninetales 13, and on the other side, the highest level is on Tita, that's 12. So that's still 2 levels behind their attackers, but uske bawajood they were actually able to take Dodrio down, and they've secured the Regieleki as well. That is going to be some breathing room to their squad, but 3 members already down. Look at the HP of Meruem on right now. He's just got the shield, but uske bawajood he was able to take 2 of them down. That's the advantage of being on level 15, having that long range and that burst damage कि enemy के frontliners sustain ही नहीं कर पा रहे बिल्कुल. But now is where the final stress begins, as Rayquaza is going to be all spawned up. You have 3 Unite moves available from the side of the very own I2K, and then they'll be countering the 3 Unite moves जो कि आपको फिलहाल देखने को मिल जाता है. Mamoswan is already there to defend it. Ninetales भी आपको यहाँ पे मिड पोजीशन के जंगल पे देखने को मिल जाते हैं. फाइट यहाँ पे सिक्योर करना होगा तभी कोई ब्रीदिंग रूम मिल सकती है, बट इस सबके बीच आपको फेबल के बीच KO आते हुए देखने को मिलेगा. That's where Ninetale is also going to take down Terrentier. 3 नहीं 4 खिलाड़ी ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं. Only one remaining, that's going to be Swizzer, and Swizzer देखते हैं किस मुकाबले में आपको जल्द से जल्द वापसी करते हुए देखने को मिलेंगे. आप तो स्टील कर सकते हैं, बट वो ही नहीं हो पाएगा. It's going to be nonetheless team one and only Marcos Gaming who will take Rayquaza by their side. बहुत अच्छी सोच जरूर मुझे लगी यहाँ पे कि अपने द्वारा as a solo player survive करने के बावजूद he just makes himself at a very good position. बट अब सिर्फ बात आ चुकी है स्कोरिंग की, बट वो स्कोर करना इतना आसान होगा नहीं. पहले तो यहाँ पे आपको KO आते हुए देखने को मिल जाता है Terrentier को. दूसरी तरफ Delphox comes up with another one. Mamoswan is going to score 100. There comes another one. I think we are looking for some record breaking goal being scored, and already 949 का स्कोर यहाँ पे बन चुका है. think the potential highest one. क्या पहली बार 1000 पहुंचने वाले इस टूर्नामेंट में? जी बिल्कुल 1000 पहुंचा और उसके बाद टीम सरेंडर करते हुए नजर आए. So that's a complete statement that Marcos Gaming are here to take us all the way in a very long run for the lower brackets. 1000 a 4-digit scoreline, while triple digits hit करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था यहाँ पे टीम I2K के लिए. complete elimination, a complete domination, and Marcos is going to win it away in the very first game. BO3 की सीरीज एक dominating शुरुआत के साथ हुई टीम Marcos के लिए, but this is only the first game, and stats देख के तो और भी ज्यादा यहाँ पे damaging shots आप देख सकते हो, like especially from the side of Dodrio and even Delphox. 109k, 121k damage, my goodness. And देखिए स्नोई कितना ज्यादा damage taken. He's got 66,000 damage taken. The entire thing what he was doing was he was going into the opponent's area, he was stealing away the creeps. Opponent उन्हें damage भी कर रहे थे, but he was slipping away. He was again stealing the creeps, getting that HP back, and he was repeating the entire thing again and again. He was just so very good at slipping away. तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से the one thing that was I would say lacking on the side of I2K was a Pokemon जो कि Dodrio को सीधा lock down कर सके. Yes, I know that we've not seen Serena a lot, but I would have kind of expected a Serena as well, maybe to just use that Unite move on Dodrio so that आपके backline can pick him off. There were just a few mistakes that were coming in from the side of I2K, but again, they've got the potential to come back in game number 2. But what a statement, just as you said, Marcos with 1007, the first 1000-point game. They've had it since the beginning. Starting से ही continuous scoring चल रही थी. We did not even hit the final stretch wherein they had almost 450 का score, above that probably, and then
just got those bangers in after securing the Rayquaza. And जैसे कि हमने बात भी करी थी, T-Tar, yes, as strong as he gets in the late game, अगर opponent Rayquaza secure कर लेता है तो आप उनकी shield break नहीं कर सकते, even though उनकी टीम ने वो काम भी कर दिया था. They were somehow able to break all those shields. But the sheer burst damage, Delphox, Dodrio, the entire burst potential जिसका उन्होंने clear cut use किया in their own base, they managed to finish all of them off. Almost 4 of them were probably down, and they just went in for that scoring again. Marcos Gaming, what a game. What a game, man. I think दूसरे गेम का जरूर यहाँ पे इंतजार रहेगा. Marcos Gaming, after this one game, I hope Team I2K, they just forget about it. They just make sure कि क्या यहाँ पे Dodrio as a ban pick यहाँ पे जरूर आ सकता है. I think Urshifu को पूरी तरीके से I2K के लिए एकदम डिनार रखना was a great ban from Marcos. And that really paid off really well because I think attacking plays के होने के बावजूद Mamoswine भी आपने देखा, it was really looking that promising. Dodrio, as you mentioned, was doing so much. He was taking so much space in the opponent's arena, taking all the way, those wild Pokemons, then running out of it, just slipping away under the nose of every player of I2K, and again, managing to get back to his healing berries and just taking himself some I'll say options to keep scoring. So I'll say बहुत लाजवाब तरीके से यहाँ पे अपने आप को टीम मार्कोस गेमिंग स्ट्रक्चर्ड रखिए. सेकेंड गेम पे अगर ये 2-0 का एक स्कोर लाइन बनता है तब अनफॉर्चुनेट होगा I2K के लिए, बट सो फार इट्स बीन अ ग्रेट रन फॉर देम. लाइक पहले मुकाबले में जीती, लोअर ब्रैकेट पे ढकेली गई, एंड लोअर ब्रैकेट्स इजंट गोना बी इजी एज द मैच प्रोग्रेसेस ऑफ. वी हैव लाइक 8 टीम्स जो प्ले इन से अपनी जगह क्वालिफायर से बनाए थे, देन वी हैव 8 इन्विटेशनल टीम्स जिनके बीच इन सबका मुकाबला हो रहा है. दोनों ही टीम्स ने हमें जिस तरीके से सरप्राइज किया, आई मीन व्हाट अ टूर्नामेंट इट्स बीन सो फार, एंड येट इट्स जस्ट लाइक वी हैव जस्ट कंप्लीटेड व्हाट लाइक हाफ ऑफ द टूर्नामेंट. अभी तो और पूरा दूसरा हाफ बाकी आज के दिन का, और बाकी और 2 दिन रिमेनिंग होने वाले हैं. तो डे 3 तो देखिए बड़ा अनोखा, एंड इट्स लाइक नॉट फुल ऑफ सरप्राइजेस दो, बट या डेफिनेटली बहुत सारी टीम्स जो है वो तैयार आई है. उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को बहुत अच्छे से रीड किया है, एंड इट क्लियरली शोज इन द पिक्चर एज वेल व्हेन वी कम अप विद पिक सिलेक्शन विंडोज. Gee, I think I might not be able to just hear. So yeah, he'll be right back. Right. Nonetheless, but yep, you're saying. Yeah, so I don't know what had happened, just another technical bit. But again, what I was saying was that you mentioned about the draft, and yes, that is absolutely correct. 60% of the game is draft. That's what I feel. Agar aapka draft is a little better than your opponent, if you're able to counter your opponent's picks, so it becomes so very easy for you to just execute it in the game. And Marcos ने exactly वही चीज करके दिखाई. They knew that Tyranitar at level 9 hits a massive power spike and becomes so viable that with just 1 or 2 supports, you will not be able to take him down that easily, and आपकी backline तक भी वो सीधा चल के जाके damage कर सकता है. So what they did, they picked the Pokemons जो कि early damage deal कर सकते हैं. Delphox, they had Dodrio, they had clean burst, they had so much mobility, and they worked around it so very well that starting minutes say they were the ones who were dominating. Now in this game, just as you said, Apcon, Dodrio को सीधा ban out कर दिया है I2K ने, and the ban from the side of Marcos is Urshifu, and Delphox is directly taken away. That's a very good deny pick. I mean, Absol से हमने कल लाइक बहुत अच्छे प्लेस देखे थे. Maybe even Zorok could be something, but yeah, Vokes will definitely go on and pick away the Mamoswine. Ashur Anub, like not the first time we are seeing him. Like previously also, I think SC12 के side से हमने बस वो देखा था, and that was really good. LD Gauss का शायद potential pick आ सकता, but no, he'll go with Hoopa. Oh, this looks good for the side of Team I2K, to be honest. That's actually very, very strong, honestly. And Buzzwool, I haven't seen him a lot, but again, I've seen him in a few matches. And he's so very good, especially with that amount of plays you can make with him, and kitna room milta hai aapko uske along khelne ke liye. That's a very strong pick. Hoopa, yes, for the mobility, for the continuous rotations towards the objectives.
this time I2K are looking really, really strong in that draft. But Marcos, they're just sticking back to the basics. They've got Mamo, they've got Cliffable, they've locked in Mew, they have got Machamp as well as Venusaur. Man, they've I personally feel like अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं Venusaur is also very good scaling Pokemon. Yes, you get viable a lot more early, but once you get the upgrade on the Petal Dance, you become like almost unstoppable. Especially अगर Clefable की healing भी आपके पास है, that's going to be so problematic for the side of I2K. But still, उनका composition is again based on entirely the same thing, and they've done one very good thing कि इस बार they've given Zygarde slow bro, so he will be able to lock down one of those Pokemons जो कि सीधा उनकी backline में dive कर सकता है, and the possibility being Machamp, they will be able to lock him down, they will be able to take him out. They've got Hoopa for the rotations. This is a much better draft than the previous game. अब execution पे depend करेगा कि कौन सी team game number 2 को लेकर जाने वाली है. बिल्कुल, I mean double attacker, one supporter, all round and defense looks pretty good. Marcus Gaming, they have showed themselves how well it could really work on for them. But I'd love to see the recent additions of Buzzhole, वो किस तरीके से यहाँ पे totally pay off कर पाता है. Hoopa है as a supporter, you have all rounder as Buzzhole, so yeah, I could really be open for that. But yeah, as you mentioned, Slowbro का जो pick give up किया गया है Marcos द्वारा, and that could be something to worry about because Slowbro at times could really be a very big like disadvantage to them. But here we go, शुरुआती फाइट आपको टॉप लेन पे बिछड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं. आई थिंक शुरुआती गोल्स फिलहाल के लिए आपको नजर आएंगे फ्रॉम द साइड ऑफ वेरी ओन I2K team, and yup, they are going in taking these advantage. Zargot just hidden in the bushes, getting each and every fight for himself. Mama Swine gonna score 4. Miriam taking down each and every Pokemon wilds and wild Pokemon though, but इसी के बीच यहाँ पे म्यू अपने लिए एक बहुत ही अच्छा पहला पिक निकाल जाते हैं. केओ मिला, सो अनफॉर्चुनेट जरूर रहेगा. दोनों ही टीम एक बार फिर इक्वलाइजर पे तो है, बट आई से टॉप लेन पे एक अच्छा कंट्रोल टीम मार्कोस गेमिंग के पास है. Zygarde ट्राई टू डिफेंड हिम, एक बैकअप की जरूरत रहेगी उनको बजोल से, एंड बजोल इज आल्सो राइट बैक, सो दैट इज आल्सो समथिंग जिसके वजह से अब स्लोली स्टेडली मार्कोस गेमिंग अपनी टीम रिइंफोर्समेंट करने का वो करेगी. एब्सोल्युटली, एंड जैसे कि हमने बात करी थी अर्ली गेम, इस बारी दोनों ही टीम का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चलता हुआ, बट स्टिल प्रायोरिटी थोड़ी बहुत दोनों ही लेन्स में अभी भी मुझे देखने को मिल रही है फ्रॉम मार्कोस गेमिंग कहीं ना कहीं. बट अगेन Hoopa पिकिंग ऑफ इन द टॉप साइड. Machamp was taken down quite early. Bazwool का अच्छा इस्तेमाल, and they are going to just relieve the pressure from that top and actually pressurize Marcos कि अब उन्हें थोड़ी सी rotation top की side भी देनी पड़ जाए. But I don't think so that's gonna affect them a lot in their plays that they're making right now, since we can clearly see how aggressive Curem is on that Cliffable. Man, he's just healed back up, and he's still trying to be a nuisance to the members of I2K, and they managed to steal away the blue. They don't stop, Beautiful. do they? Marcos. लीड अभी के लिए कवर कर सकते हैं आई थिंक टीम मार्कोस दो आफ्टर Kuram is really struggling. Clefable might really get taken down, and that's low bro who will be just taking each and every Eos energy, filling those ignite balls. But there comes Buzzhole, who is on the verge of a very big difficulty. Just gets himself a little disposition at the moment while Walk walks in. Buzzhole is going to take down Mamoswine. Another target, it's going to be Venusaur for him. Snowy and Venusaur जल्द से जल्द फॉल बैक करना चाहते हैं. Machamp द्वारा एक बहुत अच्छा यहाँ पे जरूर बैकअप मिला, एंड अब स्कोर्स आपको इक्वलाइजर पे ऑलमोस्ट आते हुए देखने को मिल जाएंगे. द टॉप लेन looks pretty good. Delphox slowly steadily a little bit late though, but Mew bottom side पे आप देख सकते हो, he's all alone by himself. Slowbro is going to walk him to his position. I think this could be pretty damaging, but once again Buzzhole doing a lot of wild Pokemon farming, and that's really working on him pretty well. Mamoswine all by himself needs Machamp to come back, but Mamoswine शायद अब chase down हो जाए. Machamp कहीं पे भी नहीं है. Mamoswine अपने ही base पे फिलहाल के लिए hold कर रहे हैं, but I think that could be a big lead as the goalpost is going to be broken down as 120 pointer comes in. But top lane जहाँ पे dominant लग रहा है टीम I2K के लिए, bottom lane पे आप देख सकते हो Marcos Gaming already acquire करके बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही है. सो दोनों लेन एक्सचेंज हो चुके हैं प्रैक्टिकली. एब्सोल्युटली, वही ट्रेड इन जिनकी हम बात कर रहे थे. ट्रेड वन टॉप टावर फॉर द बॉटम टावर ऑफ द ओपोनेंट. बट कहीं ना कहीं अभी देखने को ये जरूर मिल रहा है दैट द एडवांटेज इज स्लोली शिफ्टिंग इन द हैंड्स ऑफ मार्कोस गेमिंग. But at the end of the day,
दोनों ही टीम के पास एक लेट गेम इंश्योरेंस है, एंड दैट इज okay. First of all, we're gonna see the boxing match that's gonna come in. What was that? Machamp clearly just demolishing the entire front line, and साथ ही साथ वीनसॉर का सपोर्ट पीछे की साइड से आता हो, जो बाकी लोग आए थे उनको भी पिक ऑफ कर लिया गया. That's a 3 KO streak already. T-Tar has not yet hit level 9, still on 8. तो वो एक बड़ी डिसएडवांटेज उनके लिए. And on the meantime, top side में Mamo also just scoring continuously, giving the vision to his team, making sure कि भी रेजी लेकी ओपोनेंट नहीं ले रहे हो, एंड मार्कोस की रोटेशन अब आएगी सीधा टॉप की तरफ. जो मैच बिल्कुल बराबरी पे लग रहा था वो बिल्कुल चेंज होता हुआ, as that's gonna be another 2 KO. Mew with the long range snipes coming in, taking down the tier 1 on top. तो जो ट्रेड स्टार्टिंग में I2K ने करा था, अब they've kind of lost it all in this situation, और अब they are in the deficit of 110, and Reggie Lecky is also moving towards the second goal post. टॉप लेन पे अब बहुत बड़ा यहाँ पे आपको एक युद्ध देखने को मिलने वाला है, अब देख सकते हो ट्रुथ ही इज नॉट रनिंग इन अ ग्रेट एचपी, दो ही इज गोना बी टेकन डाउन. वेनोसॉर इज गोना कम इन, डिनाई द साइड ऑफ नन अदर देन ट्रेनर. मचाप को डाउन किया जाएगा, टेरू टियर भी इसी बीच आपको डाउन होते हुए नजर आ जाते हैं, बट यहाँ पे म्यू एक बार फिर आएंगे. वेनोसॉर इज गोना टेक डाउन द डिफेंडर स्लोब्रो, एंड दैट gives pretty much good space. But Upa is already up in a very good Unite move, though he's looking very powerful, finding for more and more players. इसी बीच Mamo Swine आपको डाउन होते हुए नजर आएंगे, but the lead is pretty much decent. And there comes a big backup from the side of I2K, and Venusaur still kind of surviving all by himself. Machamp यहाँ पे जल्द से जल्द back off करते हुए आ रहे, but Venusaur takes 2 down along himself. Now that is pretty much it. अब एक नजर डालिए bottom lane पे. I think Machamp could really take so much space for himself. पूरी नजरें अपने एक attention ले लिया उन्होंने. टीम धीरे धीरे रोटेट करी from the side of I2K, only to find out that there's none of the player right there. But अब यहाँ पे देखते हैं कि अगला मूव क्या होगा, because अभी आपके पास लीड है. अभी आपको अपने पहले ही गोल पोस्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से फिलहाल डिफेंड करना है. रेजी ऑब्जेक्टिव बॉटम साइड पे रेजी रॉक ऑलरेडी आ चुका है. बहुत अच्छी तरीके से क्लिफेबल होल्ड करी. जस्ट वांट टू स्ट्राइक बैक एट द वेरी राइट टाइम, एंड देयर कम्स द साइड ऑफ टीम मार्कोस. विल ही सील इट अवे? यस, दे वोंट मैनेज टू. इट्स गोना बी बस हु विल रियली टेक इट आउट, बट ट्रुथ इज स्टिल बैक टू हिज बेस while the fight goes on for Marcos in the bottom lane. Absolutely, and now it's going to be full 5-on-5 fight coming in. That's already one pick off going in favor of Marcos, and अब उनका range snipe अभी भी चलता हुआ. Meanwhile, Machamp is wreaking havoc in the mid. Buzzwool was still trying to make a play, but was zoned out right away with Mamoswine's help, and Venusaur completes the job of cleaning up. That's already 2 pickoffs in their favor. Delphox had to retreat in that specific situation. अब tier 2 की तरफ पूरा focus रहने वाला है, and another long range snipe almost taking one more member down, but still there comes the retaliation. Buzzwool, though pickoffs already. Hoop Unleashed has also been used, but Mew managing to shut Buzzwool down was one of a great pickoff coming in, but Unite का भी इस्तेमाल हो लिया Hoop Unleashed से बचने का एक अच्छा तरीका, but उसके बावजूद he's actually stuck between 3 people. Long range shots coming in. Delphox will be able to take Meruem down. Finally, he's been shut down. And finally, we're going to see some counter plays I2K की तरफ से, who still want to go in for more, as there are 3 more members of MG to save that tier 1 on that bottom side. And इसी के साथ Slowbro को भी take down कर लिया, and now they're going to get back the upper hand in towards that top side, but Slowbro has already spawned up. Mew भी अब वापस spawn हो चुके हैं. Again a full 5v5 fight. Reggie Lecky, दोनों ही teams नहीं ले रही हैं अभी. Both of them are literally just not going in towards it. Probably wanted to delay it, but how long? Are they even going to fight for it? That is going to be the question. Oh man, फाइनल स्ट्रेच के पहले तो अभी भी टॉप लेन पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा लाइक डैमेज यहाँ पे पड़ चुके हैं. मार्कोस हैज ऑलरेडी लूज आउट द साइड ऑफ मचाम. मचाम नीड्स टू रिट्रीव बैक ओनली विद 4 प्लेयर्स. यहाँ पे आई डोंट थिंक कि रिक्वाजा की फाइट पे इतना ज्यादा स्ट्रगल होगा, बिकॉज आई थिंक इन द मीनवाइल 5 सेकंड्स के अंदर जरूर यहाँ पे आपको एक वापसी देखने को मिल जाता है, बट इन सब के बीच एक मामूट रश आएगा, एंड दैट्स गोना बी Mamo swinding so much damage while the assist just comes in. Venusaur takes 3 away in the very final stretch start. अब
सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं। कैसे भी टेरेंटियर को यहाँ पे समय बाय करना होगा। सपोर्ट यहाँ पे आपको हुपा के द्वारा जरूर मिल रहा है, बट यार रेक्वाजा का फाइट ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हुपा विल बी टेकन डाउन वन सिंगल प्लेयर। इट ऑल कम्स डाउन टू टेरेंटियर हु इज स्टिल काइंड ऑफ सर्वाइविंग, बट रेक्वाजा का मेल डाउन पूरी तरीके से यहाँ पे 10 होने वाला है। एंड दैट्स गोना बी टीम मार्कोस, जिसने यहाँ पे अपने नाम कर दिया रेक्वाजा। दैट इज इट फ्रॉम द साइड ऑफ मार्कोस, हु विल बी still surviving the lower bracket. I2K just trying those final moves. Venusaur completely going out of his mind, and he is not letting team I2K get any chance. Wooper once again unleashes Denied, but that does not stop them from scoring. Mamoswan already 100 का score कर सकते हैं. Venusaur is going in. Michambi यहाँ पे 585 के like points तक almost पहुंचा चुके हैं. That's where Machamp will be taken down from the side of Buzzwole, but I think with only 50 seconds remaining, they don't have enough positions to work with. Slowbro meanwhile down ho jate as a defender. We didn't saw him get as much as value as he could from any other defender, but meanwhile Mew yahan pe down karenge Del Fox ko. Mamoswine still waiting for him. He gets a little pissed off though, and finally unko bhi fir mauka mil payega score karne ka. There Again? comes the 900 mark, and maybe potentially 1,000. Like, who needs to know? Like, 1,000 is right here. Holy smokes. My goodness, another 1,000-pointer, another game with another 4-digit score. My goodness, Sapcon, what a play from Marcos. Again, वो fight bottom की side से start हुई थी. It literally originated from the tier 1 and the objective on the bottom side, and that fight continued. It was paused in the middle, and then it was carried on towards the Reggie Lake in the top side, जहाँ पे पहले Machamp pick off हो गए थे. Honestly, just like you, I also thought that was a good advantage for I2K, because just before Reggie Lake and Rayquaza, they were able to take down Snowy in that fight. But उसके बावजूद they went in for more, and they did not expect कि Vox उसी टाइम पे अपनी यूनाइट भी यूज कर लेंगे, because that was exactly the moment जब 2 मिनट मार्कर स्टार्ट हुआ and Rayquaza was spawned. He made sure to just go in with that setup, and the entirety of Marcos Gaming followed up with that. Look at the damage coming in. Volk with 141k, Meruem with 111k. That is out of this world, literally out of this world. And Kyurem ki healing 144k, higher than the damage dealt from Volk. What? Greatest, man. It's What a are those really goat move stats? today, man. I think Marcos have just made records here at this moment, जिसके लिए हम surely wait करके देखना चाहेंगे कि how far do they take, because records are do meant to be broken, but इस tournament पे ये जो record बना, especially from the side of Clefable though, having a recovery of 144k, like almost 145, it's out of the mind, man. Team I2K, they really found in the very start, but in the end, it was Team Marcos who, in the both match, took a total of 2,000 score. Not even, तीसरे गेम तक तो पहुंचने का भी मौका नहीं दिया. 2 गेम्स पे ही इतना ज्यादा डोमिनेंट यहाँ पे आपको देखने को मिली. बट विद दैट द लोअर ब्रैकेट रन लुक्स प्रॉमिसिंग. मार्कोस का मुकाबला होगा अगेंस्ट द विनिंग टीम of Throw Gaming Legends versus Team Liquid के बीच. जो भी यहाँ पे जीत हासिल करेगा, नंदलेस वो होने वाला है एक अप नेक्स्ट मैच, जिसके लिए हम जरूर बहुत ही ज्यादा इंतजार करेंगे. Because Team Liquid, they have been a team who really started off pretty amazing. एक 2-1 का उनका स्कोर लाइन के साथ हमने एक हार जरूर देखा था, but Throw Gaming Legends on the other hand as well, they also had a pretty difficult start. दोनों ही टीम लोअर ब्रैकेट पे जब से आई है, they have been surviving, and this is where only one of these two teams will get to go ahead and play another match today, which will be against Marcos. तो Marcos को ये मैचअप देखना तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली द गिवन फॉर्म, वो जिस फॉर्म में है. आई थिंक जरूर देखना चाहेंगे कि व्हाट इज इन फॉर दीज टू टीम्स. बट बिफोर वी हेड ऑन टू द फोर्थ मैच ऑफ टुडे, वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. आपसे मुलाकात होगी गेम नंबर 4 के साथ. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect.
sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Yeah, I'm on my way home. I'm no good for you, so I drive around Manhattan. They're all laughing, oh, I'm tragic. Yeah, I'm driving in my car and seeing open, but I can't go down that road again. I'll smoke a cigarette, but will that help me forget you? Will that help me forget you? I just need to forget you. Oh, you. I need to treat you better than that and make you feel like I did in the past. Oh, I will treat you better than that. I don't need to forget you. I need to treat you better than that and make you feel like I did in the past. Oh, I will treat you better than that. I don't need to forget you. Well, welcome back. Good evening. And this is the Pokemon Unite Spring Championship 2023 presented by Blink Entertainment. We are right back in the game number 4 for the day where True Gaming Legends are going to go up against Team Liquid. ये चौथा मुकाबला है आज के दिन का
एंड वेल जो भी टीम जीतेगी उनका सामना होगा अगले ही मैचअप पे अगेंस्ट मार्कोस गेमिंग। तो आई से कि ये दोनों ही टीम के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन रहने वाला। इट्स लाइक वन ऑफ द डिसाइडेड डेज फॉर देम व्हिच विल डिसाइड कि क्या दे हैव व्हाट इट टेक्स टू गो ऑल द वे अहेड to the semifinals of the lower brackets, because already पहली semifinals in the upper bracket तो SCTL हमें मिल चुकी है, बट बॉटम पे भी बहुत ज्यादा एक्शन सो फार लोअर ब्रैकेट पे हमें देखने को मिला है। Right. Because honestly, tournament के highest scoring matches दोनों के दोनों we just saw that it was last game wherein Marcos दोनों games के अंदर 1007 and then 1005 के score के साथ आगे बढ़ी थी, and both of the games were surrendered right away, otherwise वो score और ज़्यादा बढ़ सकता था. So as we talk about action, you're absolutely correct on that. Lower bracket में सबसे ज़्यादा action देखने को मिलेगा because this specific area is more like that domain wherein you can see constant aggression from almost all the teams, क्योंकि सारी teams जो upper bracket से हारेगी वो lower bracket में आके compete करेगी. So the journey on the upper bracket for the winners, yes, it's fairly easy, but the lower bracket journey for the teams, it's so very difficult because they've got to play more matches to reach at that final spot. But again, these teams are looking so promising. Almost everyone, all the teams out of the matches that we've seen, they were so very good with the compositions that they brought. It's just like execution में थोड़ा सा ऊपर नीचे, but again they're going to improve that. We know that for now Throw Gaming Legends and Team Liquid, another best of 3 जो हमारे सामने होने वाला है. अभी तक हमने सारे बेस्ट ऑफ 3 में 2-0 के स्कोर देखे हैं, बट आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि ये वाला शायद फुल 3 गेम्स तक जा सकता है, एंड द विनर will be taking on Marcos, just as you've said. So that is going to be a great amount of that mental awareness needed to quickly win this game, wrap things up, and then prepare for Marcos. Looking at how they've been playing the previous two, it's very difficult, but these are the only teams that can do it. Exactly. I mean, these are the only team which even really have to do it. अगर मार्कोस गेमिंग को रोकना है तब तो देखिए इतना आसान होगा नहीं. बट फिलहाल आई से कि टीम लिक्विड, अगर आप मेरी एक्सपेक्टेशंस पूछोगे तो दे हैव रियली लाइक प्लेड ऑफ प्रीटी वेल इन दिस एंटायर टूर्नामेंट सो फार. थ्रो गेमिंग एज वेल 2-1, and some like I'll see like struggles for them in most of the games which went pretty close, but mechanical wise I love the side how team the liquid are going to be playing up. But Throw Gaming Legends से भी यहाँ पे expectations रहेगी क्योंकि it's a BO3 series. Any team falling apart in the first game won't really bring back the disadvantage to themselves. प्रेशर जरूर इस मोमेंट पे जो भी इन दोनों टीम्स के बीच है, इट्स रियली समथिंग एट दिस मोमेंट. बट नॉनदलेस देखते हैं कि कौन सी टीम इस पहले मुकाबले पे एक अच्छे एडवांटेज के साथ शुरुआत लेगी, एक सीरीज स्कोर लीड के साथ. सो फार तो हमारे जितने भी सीरीज हुए इट्स वेंट ऑल द वे टुवर्ड्स अ 2-0. बट एज यू मेंशन आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. अब से जितने भी गेम्स है लाइक फर्स्ट यू हैव व्हाट लाइक Throw Gaming and Team Liquid, then you have True Repos and Oath Esports, then later they Marcos और इन दोनों में से जो भी विजेता टीम रहेगी उनके बीच, and to end the day it's going to be Revenant and Pride Official. So we have a banger evening today, and believe me, it's going to be a great Pokemon Unite evening, especially if you are a Pokemon Unite fan. This is where you really need to be in for the entire week. Today is the day 3. कल आपको यहाँ पे सेमीफाइनल्स के भी दिन देखने को मिलेंगे, जहाँ फिर उस फिनाले डे पे सिर्फ 4 टीमें बचेगी और एक चैंपियन आपको इस टूर्नामेंट के देखने को मिलेंगे. बट फिलहाल वी आर राइट बैक इन द बैन फेज. Let's see how things are really going to go on, cause like Urshifu or maybe the side of Hoopa. Let's see यहाँ पे कौन सी ban यहाँ पे आपको दोनों द्वारा देखने को मिलती है. Honestly, Urshifu probably Clefable के साथ साथ, or maybe Hoopa. We've been seeing these bans already all along the way, but this time it's going to be Gardevoir जिसको ban करेंगे, साथ ही साथ Clefable. So alright. Pretty decent ban. Urshifu open रखा था, and Throw Gaming Legends are not going to waste even a single second. सीधा उसको show कर दिया है, possibly lock भी कर लेंगे. I don't think so. They're gonna let it pass. But again, इसके बाद we know that Hoopa is also available, and there are some other picks that you can use to counter Urshifu. Snorlax being one of them. Knockup भी अच्छा आ जाता है. They're gonna lock it in right away. Exactly. I mean, things looks pretty decent though for the side of either teams, because you have Urshifu, you have Hoopa to be picked up, then you even have your Mamoswine, Snorlax. Attack पे भी आप Mew, Glaceon का बहुत अच्छा यहाँ पे pick ले सकते हो. तो I'll say teams here can make the most out of these picks, especially if you are towards the side of Team Liquid though.
But let's see how the situations are definitely going to come in as the Throw Gaming Legends will go on and get the pick of Blissey. We have Urshifu, we have Delphox. Mew, as we mentioned, could be the best potential pick which you should go, but I'd love to see Glaceon. आज के दिन हमने सिर्फ एक ही Glaceon action अभी तक देखा है. Meanwhile, Furo going on with a Terrain tier, which seems to be a pretty good all-rounder overall. But Blaze Kenopi and Oscar के ऊपर अभी के लिए pick है, and they move on with a potential defensor of Blastoise. Oscar के द्वारा देखते कि ये Glaceon हार सकता है कि नहीं. Normally, we don't see him though on a very aggressive attacker, but he has had a very decent pick. Going on for Xavion, still good. Cryogen is the only player remaining. Let's see how the pick comes in for him. Oh, he goes all the way up for a Zoroark. So I think no, not all Zoroarks exactly though. Sizer, जो कि एक all-rounder pick उनके रहेंगे. Honestly, I personally think looking कि कैसे 3 strong frontliners आपके opponent में हैं, Urshifu, Sylveon, साथ ही साथ Blastoise, they could have actually gone for another Pokemon जिससे वो poke out कर सकते हैं अपने opponent को. They could have selected Decidueye also, but again jungle में थोड़ी सी problem आ जाती शायद उनको. Maybe they could have just decided to put T-Tar into the jungle, but again the compositions are locked in, they're final. I personally think Scissors को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इस गेम में, because Delphox तक रीच करने में उन्हें दिक्कत बहुत होने वाली है. We know that Blastoise is such a great tool to stop the pursuit of those speedsters, stop the pursuit of those assassins in that specific way in their own road. So that is probably what we might see in this game as well. But again, the compositions looking really strong for both of these teams. Healing comp एक साइड पे है, सामने की साइड पे प्योर डैमेज. देखना है कि क्या सिचुएशन रहेगी इस गेम नंबर 1 के अंदर. This is going to be the 4th match of the evening, guys. Last match of this specific lower bracket round. The winner of this match will go and meet Marcos Gaming. So yeah, best of 3 is the last hope for these two teams to move forward in the next round. देखते हैं क्या सिचुएशन रहने वाली है, as it's going to be TGL on the purple side taking on Team Liquid on the orange side. And Liquid have already started pretty great. Double digits hit it up. Cryogen looking so beautiful, especially with the sort of Terran tier being in his equation. But is getting countered though. Clefable आपको देखने को मिलता है. Snorlax यहाँ पे धीरे-धीरे fall back करना होगा. थोड़ी healing berries की बहुत ज़्यादा ज़रूरत. Oh boy, destroy you. You have been caught off guard though. But Coffin ज़्यादा यहाँ पे अपने द्वारा मैं कहूँगा ज़्यादा दिक्कत दे रही है अपने लिए. बिल्कुल भी entertain करना चाह रहे. Playing it pretty slow, but nonetheless he does meanwhile get the KO though, so he will come right back. But the fire score comes in back again for this out of Cryogen, who might finally want to look to fall back, because having a Snorlax by your side looks pretty good. Back-to-back scores यहाँ पे आपको the Liquid करते हुए देखने को मिल जाती है. The gaming legend. Let's see how they're really gonna come up, because this is gonna be yet another one. This time it's like a really great start, because the lead आपके पास है 33 की. डॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं डिफेंसिव ड्यूटीज निभाते हुए. बट ऊपरी स्थान पे साइजर इज जस्ट गेटिंग हिमसेल्फ हील्ड अप. वाइल्ड पॉकीमॉन्स को डाउन किया जा रहा है. अब हुपा के साथ धीरे धीरे अटैक बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे बन सकती है. 50th मार्क भी पूरा हो सकता है. एंड इसी के साथ स्नोलैक्स फॉर द सेकंड टाइम, दिस टाइम विल बी डाउन टू Sylveon. Absolutely. And the thing that I was talking about, Tarantar putting him into the jungle to get early level 9, that is exactly what Team Liquid is looking for. 50 to 11, abhi score difference पे भी वो जीत रहे हैं. Plus they know that once T-Tar hits level 9, who's already level 7 right now by the way, is going to be a force to be reckoned with. And उसका answer कैसे कर पाएगी the side of TGL? They've still got Urshifu, who's on level 5. They've got Delphox, who's on level 6. That's pretty decent though. But uske bawajood, I don't think so they'll be able to frontline the sheer burst that might come in from Mew, from T-Tar. And Hoopa, हमें पता है, once he is unbound, he will just jump into the field to create a lot of chaos. In the next 25 seconds में first fight देखने को जरूर मिल जाएगी. Probably towards the bottom of T-Tar की कोशिश जरूर रहने वाली है to quickly get the level 9. If in case any beast के साथ it's possible, then that's going to be such a great advantage for them. Not yet. Urshifu taken down by Scyther right away, and they've actually got the control over the bottom area entirely.
and they will probably just go in for the bottom Reggie objective right away. In the meantime, top side mein Blastoise is trying to jump in for some of the burst, providing some more vision to his team, but there comes in the right team, gaining the attack boost. Team Liquid wants to force on this fight, but they will actually quickly go back to heal them back up. That is the thing. That is the power of a Hoopa. You can continue to fight after quickly going back and healing yourself. And top side से Reggie Lecky को भी secure कर लिया T-Tar ने अकेले. And now they've got the advantage in both of these lanes. Oh my god, he's gonna score. Yes, he does. यहाँ पे 33 का एक massive score आएगा, and it's really gonna put up so many numbers. But I think Team Throw Gaming Legends are really struggling at this position. Like, they haven't yet found any breakthrough to go all the way towards the bottom lane score, and so well defense, like defense को break करना इस समय पे बहुत important रहेगा, but without these HPs which is really not looking good, I think मुश्किलें बन सकती है. ऊपर यहाँ पे फिलहाल के लिए एक और एक नॉक निकालेंगे, and with that I think बहुत ज़्यादा यहाँ पे situations जो है वो अगेंस्ट पे अभी भी जाते हुए नजर आ रही है. आपको एक बहुत ही अच्छा नॉकआउट फिलहाल के लिए देखने को मिल जाएगा. as Helion will be taken down. Wallow just comes in but does not deny Mew. Mew is in fact looking pretty strong against Urshifu. Urshifu finally looking powerful against him, but only to be chased down from the side of Mew. And meanwhile, आप देख सकते हो कि यहाँ पे Preventia is gonna go in and will get a knocked out. Urshifu finally यहाँ पे पीछा चढ़ाएंगे Mew से. 240 का आंकड़े पे पहुंच चुके हैं Snorlax goes. Meanwhile, Hoopa gets another knockout. That's a complete disaster, and the Liquids are looking so beautiful, not just in defending their lane, but back-to-back जो scores आ रहे हैं. I think यहाँ पे उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद यहाँ पे Rayquaza fight की. They're just doing so much pressure onto these lanes, and top lane तो चलिए पूरा का पूरा खाली नजर आ रहे हैं. Mew maybe यहाँ पे अपना move बनाना चाहे, but Snorlax अपने आप को तुरंत से heal up करेंगे, and there we go. 280 is what we got for the early 5 minutes, and the Liquid still looking as strong as ever. Absolutely, and honestly, the thing that Team Liquid are doing right away again and again is that Hoopa का teleport use करके going back to base and coming back into that fight. They're taking these fights for as long as possible, and that is what is giving them advantage. Though क्योंकि Streak T-Tar के पास already, he will jump back quickly. Low HP, but has still got the shields up. That's gonna be Hoopa unleashed as well, trying to assist them, and Mew will be the one who will be sweeping the entire area of those pickoffs, getting a 2 streak already. Snorlax will finally be taken down. Blastoise coming out with some kind of trade in some kind of way, but look at the top side quickly. Upcon Scyther just gonna go in for the Reggie Lecky. Yes, Blastoise in the bottom side trying to take Sadao down, but he will manage to retreat thanks to the support of his team. There comes the Solar Beam! But Hoopa was the one who managed to secure that pickoff. But अब T-Tar भी सीधा jump in करेंगे. He will be able to take Urshifu down right away. Littlebox is also trying to survive, will manage to just create that distance. But in the meantime, Reggie Lecky top side की तरफ दोबारा जाएगा. The pressure is back on TGL again in this game. And Scyther actually wants to take the fight in that top side. Mew ने जो काम किया था अभी 2 मिनट पहले टॉप में, now Scyther is the one who's doing that. That he's just trying to, you know, gain the attention of TGL in towards that lane ताकि उसकी टीम bottom के सारे objectives ले ले. And right now their main focus is the tier 2 on that bottom side. There we go. Either using the Unite will make sure to retreat, but still is trying to stick in to get a lucky pick off maybe. And in the meantime उसकी टीम पूरा bottom में दोबारा fight लेते हुए Blissey को take down करने में भी कामयाब हो गई है. T-Tar is just unstoppable. 2 की streak already. That might be the third. Yes, he deleted Urshifu in an instant, and अब सीधा 50 का स्कोर करने के लिए जाने की पूरी कोशिश. But that's a very good jump from Blastoise. Wall भी बहुत अच्छी थी Snorlax की. He managed to save T-Tar at least from that, but उसके बावजूद Destroy will not be able to take him down. 314 to 11. That's already a massive lead, and look at the level advantages on the side of Team Liquid. Upcon. That's like really big. Like, you know, we might expect, like हम कह रहे थे मार्कोस का लीड, बट अब तो यार कैसे भी, you know, like Rayquaza फाइट पे कुछ ना कुछ करना होगा. काउंटडाउन 30 सेकंड्स का आ सका है और शिफू यहाँ पे डाउन हो चुके हैं. मीनवाइल देखते ही देखते यहाँ पे मुश्किलें बनते हुए आपको ब्लिसी के लिए भी देखने को मिल जाएगी. Maybe is going to take him down. Urshifu and Blissey right back
from the base. Let's see कौन से path पे फिलहाल के लिए जाना सही समझेंगे. They come all the way towards the jungle because they know कि 15 seconds में you don't want to give much jungle control towards the side of Team Marcos. They already are up with 303 points and artist इंतजार कर रहे हैं हुपा के साथ, उनका साथ निभा रहे हैं Snore Legs, and धीरे धीरे Blasters is really going to come in. Rayquaza is all the way up here, and there comes another great move. This time it's going to be Blasters going incredibly dominant, and Blasters is going to be taken care of from the side of Terrantier. Hoopa down करेंगे Urshifu को, and Rayquaza की जितनी ड्रीम्स थे अब यहाँ पे सिर्फ 2 खिलाड़ियों के ऊपर बचेगी. Asivlion goes to get taken down, even though it's going to be Delpox, and with that the entire team is over. The KO streaks is incredible, and Rayquaza is taken care of from the side of Hoopa. That seems to be a big record, but इससे पहले कि स्कोर करते रिकॉर्ड बनाते, a clean surrender from the side of team Throw Gaming Legends. Potentially record फिर भी बना है. Just this time maybe not in the highest score, but limiting the opponent team in the lowest score possible, which is made possible from the side of Team Liquid. उन्होंने यहाँ पे अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे रखा where they managed to slow down the pace of Throw Gaming Legends just like what, down to 11 points. Like that is really massive, and that's not how easy as they make it look. Recovery from Dot was pretty incredible, but Artist Whoopa was just too good. And 113k, like 114k from the side of Furia. He got so many knocks, I'll say, meanwhile, in the mid phase of the entire game. Absolutely. आर्टिस्ट ने अपने आर्ट को एक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया विद एन अमेजिंग 120k का हील. बट कॉफिन, जैसे कि आपने मेंशन भी किया, 83k का डैमेज टेकन. ही वाज द मेन फ्रंट लाइनर of his team, and उसके बावजूद the way they were playing, T-Tar with 113k damage dealt. Blastoise का एक strong point is that the shield he gets and the CC immunity that he gets while using his skill as well as his Unite move. तो आप उसको take down मुश्किल से कर पाते हो. It becomes really difficult for you if you're caught in that damage whirlpool around surrounding the Blastoise. But T-Tar, he can deal the true damage. वो shield को totally ignore करता है. So when Blastoise was down to almost 25-30% HP जब उसने Unite use करी थी, T-Tar was literally able to just bring him down to 5 and finish him off because of that true damage. And क्योंकि पूरा time Blastoise was trying to provide the opening to his team, he was trying to provide that room ताकि डेलफॉक्स डैमेज कर सके, वो Rayquaza फाइट में हो नहीं पाया. Sylveon was also trying something, but उसके बावजूद the way Team Liquid just jumped in towards that backline, they managed to take them out after Blastoise fell. It clearly showed that their game plan was totally surrounding how to control the Blastoise ka CC. They managed to shut that down right away. They had the level advantages. They knew what to do near the Rayquaza pit. They did exactly that, secured the Rayquaza and got the win. Exactly, they did, and alongside that, massive start for the side of none other than the Liquid. But now it's still a series, it's called BO3 for a reason. Like starting, agar unke liye itni zyada ideal na bhi ho, they could really have that mental reset for themselves. This is one last hope, one last chance, and one last fight जरूर put up करना चाहिए हमारी Throw Gaming Legends. बिकॉज इवेंचुअली अगर अपने लिए टूर्नामेंट पे जर्नी पूरी तरीके से लाइव रखनी है तो ये गेम तो जरूर जीता होगा. बट आई थिंक साथ ही साथ टीम मार्कोस नाउ रियली रियलाइजेस कि इनका जो मुकाबला है वो इट्स गोना बी अ फायर वाटर मैचअप बिकॉज जस्ट द वे मार्कोस डिड टू द साइड ऑफ टीम I2K. दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन द वेरी नेक्स्ट गेम एज वेल, वेयर टीम द लिक्विड are looking so powerful. Like, I don't want to say it one-sided, but they made it look so good with that defense actually, not letting your opponents come anyway close to the goal post area, not even having any scores towards the post. That is something जो इतना easy हो नहीं पाता. But still they really defended it so beautifully. Now it boils down कि जो ban है क्या उस पर कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ Hoopa. Like, I do expect them to really take it out of the equation. Or Shifu ka ban and Hoopa ka ban is what I'm expecting. But if you were to be playing up against the Liquid, this Liquid looks very, very deadly at this position. So वो ऐसा क्या एक Pokeball जो I think shouldn't be given to them, or else if given they could really just do what they did in the previous matchup.
Honestly, it totally depends कि अब आपकी टीम कौन सी साइड पे होगी. If it's going to be purple, then I personally feel like कि they might change a ban a little bit. और शिफू उन्होंने open जरूर रखा हुआ था. They wanted to play along that. But I personally feel like if they want to keep Urshifu open, and they can probably look to respect ban Titar, because you know that your opponent is playing amazing on that Pokemon. Yes, even though it's not even advised to ban Titar, but a respect ban in this case might just do the trick. They might hinder the performance of your opponents, and you can try and outdraft them by securing the prio picks, and उसके बाद जो आपके opponent ने pick करा आप उनको counter करो अपने next 2 or 3 picks से. But again, if they're on the orange side, I personally feel like they should go ahead and ban out Urshifu, because we know if Team Liquid are performing like this on a Tyranitar, अगर उर्शिफू उनके हाथ में आ जाता है and they go in for that water style उर्शिफू, बहुत problems create कर सकते हो. So draft will be a little more complicated, but उसके बावजूद we have to see how things are actually going to turn out, because definitely this is more or less like a brick wall in front of TGL, क्योंकि they were just allowed to score 11 points, and that too Blastoise was the one who managed to score that. And आपने बहुत अच्छे तरीके से mention किया था that their defense was so on point. But again, you know, I also want to state that the best defense is an amazing offense, and वही Liquid ने करके भी दिखाया. They knew कि अपने opponent को score नहीं करने देना है, so they kept on pressurizing both of the lanes. उन्हें पता था बॉटम साइड में अगर 4 लोग भेजे, they also sent one person towards Reggie Lecky, जो कि टॉप साइड से Reggie के साथ पुश करके was trying to create the pressure. So the entirety of TGL was just focused on defending their towers, be it 4v3 in the bottom or be it 2v1. But again, there was a Reggie Lecky on their opponent side, so make it 2v2 in the top side. तो वो प्रॉब्लम्स उनके लिए काफी ज्यादा क्रिएट हो गई थी. तो टीजीएल दे डेफिनेटली माइट नीड टू गो इन फॉर अ रिस्पेक्ट बैन और सो, एंड देन गो अहेड एंड ट्राई डिनाई द पिक्स टू योर ओपोनेंट्स. Delphox, yes, was a very good pick. Blastoise was also a decent pick, but they were not able to just play along those Pokemons. But I want to see how they're actually going to improvise that. Exactly, but before that, I think we'll be taking on a quick short break. This is going to be an important game, तो जरूर यहाँ पे teams अपनी आप के लिए तैयारी भी उस Right. तरीके से करेगी. And then once we'll be right back, we'll see the second game of the Liquid going up against Throw Gaming Legends. Oh, darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking on you through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart. You should fucking stay with him. You should fucking stay with him. Well, we're right back in the game, which is going to be between the Liquid going up against Throw Gaming Legend. दूसरा मुकाबला है ये, एंड इस दूसरे मुकाबले में अगर the Liquid इस मैच में यहाँ पे जीत हासिल करती है तो it's all done and over, and they will be up with Marcus in the next matchup. But before that, एक आखिरी चांस Throw Gaming Legends के लिए. Let's see what they have in the up command post. Absolutely. Bans हमारे सामने अब आ गया. That's going to be Clefable, साथ ही साथ Mew. So TGL, they've definitely switched their bans, but of course they've left almost all the Pokemons open. But देखते हैं पहला क्या पिक होने वाला. Liquid again securing the Hoopa for themselves. जैसे कि उन्होंने पिछले गेम में किया था, they probably will look to go ahead with the same draft.
If it's not broken, no need to fix it. But TGL उनको जरूर कुछ ना कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा जिससे कि वो काउंटर ड्राफ्ट कर पाए. I personally feel like Peter deny pick would have been good, but Gardevoir उन्होंने पहले लॉक किया है along with a slow bro. So smart picks coming in from their side. उन्हें पता है अगर opponent will go in for a speedster pick, कोई assassin type pick जो कि Gardevoir पे jump करे, slow bro will be able to lock him down. But again, that gives the entire opening to Team Liquid with the Pokemons that's going to be Snorlax and Titar locked right away. I mean, great ban to start things up. Mew and like Clefable not being in the place, nor Lex as a defense. Warlord के पास एक option है, so unless you wanna give away those attackers right there, okay, he'd rather go on for a safe pick, which gives up the options of Decidueye and Dodrio for Sudhav and Furia. अब ब्लेज किंग ओपी के लिए यहाँ पे एक ऑलराउंडर की उम्मीद जरूर यहाँ पे बन सकती है. लेट्स सी हाउ दैट माइट रियली पैन आउट, बिकॉज ऑस्कर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ग्लेशियन के साथ फॉर अ वेरी डिसेंट वाइल. तो लेट्स सी, आई मीन योर शिफू इज नॉट बीन पिक्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एजेंट्स. जो आप टी-सरीना की बात कर रहे थे, एंड फाइनली एज एन ऑलराउंडर आपको शायद पोटेंशियली टी-सरीना मे भी देखने को मिल जाए. Well, here we go. The lock-in came in and the Liquid still looks pretty strong. It's the slow bro alongside, Glaceon and T-Serena, जिनका साथ ये टाइम आपको निभाते हुए देखने को मिल जाएंगे, none other than Gardevoir as well. Honestly, both the team comms are so very amazing at this point. But उसके बावजूद, I personally feel like इस बार Throw Gaming Legends have a much better chance than the previous game. Honestly, Slowbro, Zarina, they're so good picks, especially to lock down some, some mobility-based Pokemon that is Dodrio. तो उसको pick off करना उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा. Plus, Decidueye would also have to play safe, क्योंकि अगर Zarina ने उनके ऊपर Unite मारी, Double Storm use करी, she will decimate Decidueye right away. Glaceon is also very good to melt down those tanky front lines. This time the draft of TGL is very, very good, but again, as you mentioned, we'll have to see how things are going to end up, because Hoopa abhi bhi artist ke haath mein hai. He was playing so very well on that. Plus the healing that he was getting, I don't know how he was managing to do that, but that was out of this world. But dekhna hai how things are going to turn out in this game, guys. It is going to be game number 2 of match 4 of the day. Team TGL on the orange side, Team Liquid on the purple side. Let's see who gets the win. Will it be the end of the journey for TGL, या फिर वो एक game number 3 force करेंगे by creating an upset in this game? We have to find out, and we will in the next 9.5 minutes. And it already seems as if the start is so beautiful. The Liquid has already started to score goal, and especially अगर आपने डोड्रियो दे दिया है अब हाथ पे द लिक्विड को, तब तो आप देख ही सकते हो. बैक टू बैक every 10 seconds there is a score coming, but finally Dodrio is going to be taken out of the equation from the start of T-Serena, only to be taken down. This still seems to be a pretty lead, because आप देख सकते हो कि टॉप लेन पे अभी भी जितने भी लाइक यहाँ पे खिलाड़ी है, वो आपको थोड़े डिफेंसिव ड्यूटीज अच्छे से निभाते हुए देखने को मिल जाते हैं. कॉफिन गोइंग ऑन विद द स्नो लेग्स, आप थोड़ा मुश्किलों में डाल सकते थे, बट आई डिस्ट्रॉय यू स्लो ब्रो इंस्टेंटली माइट गोना गेट एक्सपोज्ड 4 versus 4 लेवल दो. सो आई थिंक द गेम कुड गो एनीवेयर, बट स्लो ब्रो आप थोड़ी ज्यादा दिक्कतों में लग रहे हैं. अपग्रेड जरूर उनको मिला, और पीछे फॉल बैक करने का यहाँ पे जो निर्णय वो लेना पड़ा, अपने हीलिंग बेरीज का जरूर इस्तेमाल कर चुके, बट क्रायोजन इज स्टिल नॉट हैविंग वन. He needs to take down these wild Pokemons. There is a healing barrier right there, but अब score करने का मौका Dodrio को मिल रहा नहीं. He might really get eliminated on Glaceon. Great stuff, Glaceon. बहुत सही समय पे उन्होंने डाउन किया. Hoopa को भी डाउन किया जाएगा. तो I mean, aggressiveness गेम प्ले की कोई कमी नहीं है द लिक्विड पे, बट उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे लाइक वेल पोजिशन भी किया जा रहा है. आई लव द वे ऑफ थ्रो गेमिंग. उन्होंने इंस्टेंटली यहाँ पे रिटेलिएट बैक किया, बिल्कुल भी ज्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं किया. आफ्टर टेकिंग द केओस दे आल्सो वेंट इन एंड स्कोर्ड सो मेनी गोल्स, व्हिच नाउ पुट्स देम इन अ लीड ऑफ 54 points. Absolutely, man. I needed that maths back when I was in class 12. तो मेरे 33 नहीं आते. But again, right now, looking at the current situation, that was a good pick off. But उसके बावजूद everyone is just gonna jump back in to those fights जो कि अब mid common farm की तरफ होने वाली है. Slowbro will probably be picked off again. Surf का use करके he will actually be able to survive that. Healing! What a snipe! Decidueye decimating both of those Pokemon. Zarina साथ ही साथ with Slowbro. What a play coming in from them. And quickly
30 का स्कोर भी किया है. What? How is he managing to do that? Man, he did it with Gardevoir, he did it with Slowbro, and now he did it with Serena. They need to somehow take him down as quickly as possible. Filal, Snorlax will definitely be falling. Glaceon taking quite a run of damage. Another shot. Man, this guy is such a great sniper. Exactly, but Gardevoir without Razor Leaf just looking powerful. Serena takes down another KO, but still somewhere down the line बहुत ज़्यादा ये क्लोज मैचअप जाने की आशंका लग रही है, क्योंकि आप देखिए द लिक्विड really like the throw gaming legends are really giving them the taste of their own medicine. Reggie is going to be secured from the side of Dodrio, so no like I'll say shocker on that, but slow broke it down होने के साथ साथ Glaceon भी down हो जाएंगे. There's so many Eos Remnant just lying down there in the bottom lane, which gives out the advantage. Warlord has to survive. He can't afford to be taken down, but if he does, he loses up another Eos energy, and this time अब यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आप दे चुके हैं. अब आई थिंक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्कोर का लीड बन जाता है. इस स्कोर के लीड के साथ ऑलमोस्ट आप अपने पोस्ट को गवा बैठोगे. वो बॉटम लेन के बाद जितना ज़्यादा बूस्ट मिला, आप देख सकते हो डॉड्रियो ऑन द 10th लेवल. वी हैव none other than the Desi DY on the 10th level as well. Hoopa still struggling towards 7, but yeah, I think जल्द से जल्द अब इस बात पे पेस अप करने के लिए थ्रो गेमिंग लेजेंड्स को उस टॉप लेन की थोड़ी चिंता करनी होगी. डेस्टोडुआई का टी सरीना द्वारा डाउन किया गया. सद्दाव इज लुकिंग इन अ वेरी बैड स्पॉट दो. डोड्रियो बैक ऑफ जरूर करना चाहते हैं, but he dodges so well from the side of base, and he's all the way going to run back to the base. This is the best dodge we could have ever expected, and Dodrio को इससे बेहतर कैसे खेला जा सकता है, I don't know, but now is where the throw gaming legends is also doing so much damage. All the 4 players all together in the top lane. This is a complete collateral, and slowly steadily अपने आप को एक बार फिर एक अच्छी लीड पे पहुंचा चुके हैं. Only to be taken down. Desi DY, Razor Leaf एक बार फिर बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हुए देखने को मिल जाते हैं. Dodrio comes up with a 2 massive knock, and now it all comes down to Slowbro. Slowbro needs to keep himself alive. Score तो यहाँ पे करते रहेंगे, and ये score 200 के बाहर जाते ही यहाँ पे रुकने वाला है. 193 this time, and अब रेजिलेकी को जल्द से जल्द डाउन कर, but I don't think उनके पास समय है कि वो जल्द से जल्द डाउन करके स्कोर अप कर ले, because now the post is also going to be denied. But अब यहाँ पे Dodrio takes another KO, and there is no stopping the speedster for the side of Team with Liquid. Absolutely, and the early advantage that TGL had, they're losing it entirely, and T-Tar already hitting the level 9 as well. You will have a lot more mobility, and the room Serena dobara se was able to take Decidueye down. Will probably go in for the double storm combo again. Hoopa has been unbound. He will go in for that burst damage जो कि निकाल रहे हैं अभी फिलहाल. Regileki will probably stopped in the tracks, but Unite moves coming in from both of these teams quickly trying to take down each other. That's going to be another pick off. Slowbro takes down T-Tar. That's the comeback that we were looking for. Finally, TGL coming back in this game, looking strong yet again after that starting game's aggression and the fall in the mid game. But uske bawajood, we can see Dodrio trying to pick Elday off. He will have to run away Glaceon using the Unite, but Desi ka snipe taking another person down. Dodrio escapes again. How is he, guys? So slick with the movements, and that's gonna be another trade-off in favor of Team Liquid. The Serena looks pretty, good. Like at this point, having 48 Unite balls, looking for any single option, but bottom lane is the worst case to be at. Upper lane पे Hoopa already hold कर रहे. Slowbro has to move his way into the bottom position, but Reggie's की fight ये शायद हाथ पे जा सकती है the Liquid की. Only movement to store, it could be from T-Serena, and no, that's not the case. Desi DY knockout लेंगे अपने नाम. T-Serena को down कर दिया, and that's a very expensive KO. That is supposed to hurt a lot with Gardevoir as well being taken down. This seems to be a pretty great advantage. This is so much looking good for the side of the Liquid. Desi DY going on for another knock and back-to-back score. अब एक बार फिर Dodrio करते हुए नजर आएंगे. अब यहाँ पे बॉटम लाइट लेन पे जो एक युद्ध देखने को मिल जाता है, आई थिंक ये आर या पार होने वाली है. सो फार ट्रेड्स आर कमिंग प्रीटी मच. Dodrio को डाउन करने में सक्षम होंगे. स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी के लिए अपर लेन पे जरूर जा सकते थे, बट दिस इज स्मार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ Snorlax. Snorlax पहले ही ऊपरी स्थान पे रोटेट कर चुके हैं. वहां पे उनका साथ निभाने के लिए उनके काउंटर डिफेंडर आपको Slowbro देखने को मिल जाते हैं, बट अब Snorlax शायद यहाँ पे एलिमिनेट होने के वर्ष पे because Glaceon has really spotted him down. Absolutely, but uske bawajood was not able to get the final hit in, so he'll actually get to keep his life for now.
but we quickly have to focus on how things are going to be when the Rayquaza spawns. 24 more seconds. Snorlax taking quite a few hits. Regieleki easily secure भी कर लिया T-Tar ने. And that was a, by Coffin, that was a very good scouting. He made sure कि opponent का कोई भी Pokemon T-Tar के लिए problem नहीं create करेगा. And that was a very good delay on the Regi as well, क्योंकि अब Rayquaza spawn होने वाला है and the entire efforts from the side of TGL will be to stop the Regieleki on its track towards the tier 2. And Decidue, calm down, my man. He's not at all stopping. Serena retreat जरूर कर जाएगी time पे, but now Slowbro will be the one who will be taking the aggression on his face. That's gonna be Glaceon jumping in. Unite moves अभी भी दोनों ही teams के पास सारी की सारी हैं. They're still saving it. Desi with another snipe. He's trying to get someone down. And look at the HP on Glaceon, already down to 50%. तो अगर एक snipe लगता है, then he will fall in the process. Pura, he is trying to look for some kind of engagement. In the meantime, Dodri already एक pick off के साथ, they are going in for more. They need to go in for more. Unites are being used up. LD has also been used. The Unite, but Dodrio actually going in for scoring as well. They comes in the fight and towards the mid. Artist seems to be in trouble. Will quickly jump back to the base and now will go in the fight yet again. But backline Megardi has also been taken down. Snorlax trying to continuously provide the CC. Serena almost taken down, but Dodrio will be the one to finish the job for LD at least. And Serena will manage to keep alive at least for now. Snorlax using the Unite, getting the shield as well as HP. That was such a beautiful deny by the side of Team Liquid. What a great play they've been showing till now. But again, अभी भी एक backstab की possibility हो सकती है. How are they going to manage that? क्योंकि Dodrio is the one who's probably trying to look for that. And that's another snipe Gardevoir नहीं कर पाएंगे दोबारा से survive. And just as we were talking about, Dodrio just went in to score that back cap. Oh, wait. That's a massive one from the side of Serena. 20 seconds remaining. There's no fight in the mid for the side of Rayquaza. But there comes another one. This time it's a 100-point and it seems as if the Liquid are on the verge of just bringing down TGL, who have already surrendered. What a victorious moment for the side of the Liquid as they take down the Throw Gaming Legends in a 2-0 fashion, only to move up in the lower bracket. अब मुकाबला होगा मार्कोस के साथ. अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला. बट डोड्रियो, इनका यहाँ पे जो एक योगदान रहा इस पूरे मैच पे, completely incredible. What a game from these players, and Fury as well, having a Decidueye. You couldn't have asked for a better attacker. Like the way this guy has been in the attacking plays just shows how much value could he really bring up, especially if you could use him to the best of his potential. Coffin taking down Snorlax, not the best, I'll say damage dealer yet, but though, like the attackers and speeds se itna zyada kaam kar rahe the ki, defense pe Snorlax was really looking pretty good in the mid rounds. So Artist with Hoopa. Meanwhile, हम बात करें यहाँ पे Blaze King की, जिन्होंने Serena लिया था. He also had some very good plays. Glaceon से हम जरूर expect कर सकते थे that he could have really popped off pretty decent. Slowbro had a little slow game though, but Dot meanwhile being another one of those, like Gardener being like Gardevoir, being the attacking play, didn't do much. Recovery तो almost उनकी हमें zero देखने को मिल रही है. So not an ideal game for the side of Throw Gaming Legends, but yeah, Team Liquid, you gotta give it up to them. बहुत लाजवाब तरीके से उन्होंने compete किया इस पूरे मुकाबले में, and they have won the series in a 2-0 fashion. So that is really a great start for the day for the side of Team Liquid, especially knowing कि उनके आज के दिन से एक नहीं एक और एक मुकाबला इस मतलब like in the next two matchups पे होने वाले हैं. Absolutely, and वो चीज अब देखनी रहेगी कि क्या सिचुएशन निकलने वाली है उनकी, because Marcos is the one that also won. Every team today has won their games in a 2-0 fashion. So these are the things that we'll be looking forward into towards the next round, जो कि और ज्यादा problematic होंगे, और ज्यादा competitive होंगे, और ज्यादा strong fighting determination clash करेगी, and those are the games that everyone will be looking forward to, because again, every game up until now, that has been kind of, you can say, the preparation for you. Yes, the opponents were strong, you had to outdraft them, you had to outplay them, but now it's going to get even tougher, because all of these teams are the survivor of such a massive team pool that have been coming in here. All the invited teams and all the qualified teams, they've all got it in them, man. They all can just go ahead and grab the prize. Sabke andar utna potential hai, but these are the ones who've been on top
amongst the top. Yes, lower bracket, much more difficult journey, but uske bawajood, the plays that will come in front of us from now, from this point onwards, they will decide which team survives and which falls in the process. So this is something that even I will be looking forward to, and everyone in the audience will also be looking forward to. So let's see how things are gonna go, and we will catch you guys a little bit later. You wanna sign off AFCON properly? Yeah, I think we will be now, like signing off, but don't go anywhere because हमारा साथ यहाँ पे एक बार फिर जुड़ने वाला है स्टार्ट क्लैशिंग एंड ब्रागो के साथ. सो अभी भी 4 मैसिव गेम्स बचे हैं एंड जस्ट अलाउ मी टू लेट यू नो कि इन मैचेस आपको ट्रू रीपर्स, OT Sports, then Team Liquid versus Marcos, then the best end you could expect, Revenant versus Pride Official. Like there are some banger games remaining for this entire evening. तो आप कहीं पे भी जाइएगा नहीं, हम फिलहाल आपसे अलविदा लेते हैं. मुलाकात होगी आपके हमारे फेलो कास्टर्स के साथ जस्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद. Siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Well, this is what happens when I'm out of my medicine. There's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. 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 Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Feeling, I feel so lightweight when I think back to those days, but then we went our own ways. I'm thinking
about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasy, digging up treasures and sailing across the sea. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Our childhood dreams, it's how it used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Every weekend is the same. I'm the one you try to claim. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. Call me up with no shame. All your words sound the same. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. If you come around just to play me, don't bother, cause you ain't overdue. Don't even try to convince me. Don't bother, cause now I see through. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting the storms no one understands, shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless.
Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the wind and rain. I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions. Cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind and see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. So faceless. I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you. You keep drawing me in, and I know it's a sin. But even so, yeah, I need you. You taste like candy. Eat you on a Sunday. Feels so bittersweet, knowing I can leave. You taste like candy.
like candy. Eat you every Sunday. I can feel the beat on my heart and beats. 'Cause you taste like candy. Tasty. So bittersweet, knowing I can live. You taste like candy, eat you on a Sunday. I can feel the beat of my heart increase. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black girl for your love. Like you, na 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 na, my center of gravity. 'Cause it's true, na na na, everything they say about me. I'll love you like a supernova, burn into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way. It's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks her play clean. Don't wanna let go, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black girl for your love. Hello, ladies and gentlemen, and once again, welcome back to Tank Spring Championship by Blink Entertainment. मैं हूँ आपका दोस्त स्टार्ट क्लैशिंग, एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ विद दिस स्प्रिंग चैंपियनशिप। मेरे साथ जुड़ेंगे ड्रैगो, लेकिन उससे पहले एक बार ड्राफ्ट पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो गेम है वो शुरू हो चुका है टीम ट्रू रिपर्स और टीम ओटी स्पोर्ट्स के बीच। एंड ड्राफ्ट्स की अगर बात करें तो वंस अगेन इन दोनों टीम्स के जो जेन्युइन बैन्स होते हैं वही हमें आते हुए नजर आएंगे। एक तरफ से उर्शिफू को बैन दिया गया और दूसरी तरफ से म्यू को पहले ही शट डाउन कर दिया गया है, बिकॉज हम जानते हैं देवेश के हाथ अगर लग जाता वो म्यू तो वो डिस्ट्रॉय करके रख देते अपने अपोजिशन को। बट अगेन लेट्स सी नरूतो कौन से पोकेमॉन पिक की तरफ जाएंगे, बिकॉज कल तक नरूतो ने भी काफी अच्छा गेम हमें दिखाया है। सेम गोस फॉर टॉफी, बट राइट नाउ बीस्ट ही इज गोना गो विद दैट स्नॉरलैक्स। एल्डेगॉस भी ऑलरेडी उन्होंने लॉक इन कर लिया है, बट एल्डेगॉस क्या वो उतना ज़्यादा रिलायबल चॉइस है करंट मेटा में? वो काफ़ी लंबी एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, बिकॉज करंटली क्लेफेबर और क्लेफेरी को जितना अच्छा बफ मिला है तो एल्डेगॉस थोड़ा सा एक्सपेक्टर होता है। आप उसे अगर इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं तो बैकफायर भी कर सकता है। ट्रू रिपर्स ऑन द अदर एंड दे हैव गॉट दैट हूपा सेफ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हूपा प्लेयर आउट देयर। हूपा उन्होंने ऑलरेडी सिक्योर किया, क्यों ने ग्लेशियन सिक्योर कर लिया है, एंड वी ऑल नो कि ग्लेशियन कितना अच्छा बॉटम लाइन अटैकर हो चुका है अभी। देवेश इज गोइंग विद दैट गार्डीवॉयर, तो ये थोड़ा सा दिक्कतें जरूर क्रिएट करेगा, बट नरूतो इज पिकिंग दैट डेसिडुआई। नाउ यहाँ पे आप देखिए तो एक तरफ हमें अच्छा खासा बस डैमेज वाला पोकेमॉन देखने को मिल रहा है, वहीं अगर आप ओथ की तरफ देखें तो कोई भी मुझे अब तक उनकी तरफ से ऐसा बस डैमेज देने वाला पोकेमॉन नहीं दिखा है। तो
एल्डेगॉस के कुछ मूव्स रहते हैं, बट वी ऑल नो इट्स अ सपोर्टर, तो डैमेज बहुत ज़्यादा लो उनका रहेगा। अगेन ट्रू रिपर्स दे आर गोना गो विद दैट डबल डिफेंडर कॉम्प, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्लोब्रो पिक कर लिया गया है, दे हैव पिक दैट ब्लास्टॉइस एज वेल। तो ये पिक हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं एंड वी नो कि हाउ गुड दे आर विद दिस पिक। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप ओथ की बात करें तो ओथ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ओथ का जो इस टूर्नामेंट में अभी तक का सफर रहा है वो काफी सरप्राइजिंग देखने को मिला है, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी टीम्स को वो ऑलरेडी फेस ऑफ कर चुके हैं। एंड अगेन नरूतो ही इज गोना स्विच ऑन टू दैट लुकैरियो, एंड यही मैं सोच रहा था कि नरूतो उतना स्क्विशी पोकेमॉन खेलते हुए उनके प्लेइंग जो स्टाइल है उस पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा, बिकॉज ही इज गुड विद द ऑलराउंडर्स। ब्लड प्रिंसेस जैसी दुआएं पहले आई बिलीव मैंने देखा है इनका परफॉर्मेंस, एंड नाउ डॉफी एडी स्लैश के साथ जा रहे हैं। डॉफी की तारीफ जरूर करूंगा, क्योंकि डॉफी इस टूर्नामेंट में एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जहां पर मैक्सिमम जो हमें ऑलराउंडर प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, जब पिकिंग आइदर साइजर या तो फिर हमें वो मचैम पिक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन डॉफी हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली कल हमने उनकी तरफ से सरीना गेम प्ले देखा, एंड आज अब वो एक बार फिर एजी स्लैश गेम लेके आए हैं। सो एक तरफ है एक डुअल डिफेंडर कॉम्प, दूसरी तरफ है एक डुअल ऑलराउंडर कॉम्प। फॉर श्योर डीपीएस के मामले में एडवांटेज रहेगा ओथ स्पोर्ट्स के बाद, लेकिन वो जो इतना बड़ा एचपी, इतना बड़े बड़े एचपी टैंक्स आपके सामने हैं, ब्लास्टॉइस और स्लोब्रो, उनको कैसे काउंटर कर पाएंगे? बिकॉज जेन्युइनली पिछले कुछ दिनों में मैं स्लोब्रो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई पर्सनली नो कि स्लोब्रो एक बहुत अच्छा पिक हो जाता है। इट्स अ रिलायबल पिक, काफ़ी अच्छा डैमेज भी वो डिश आउट कर सकता है अगर आप स्केल्ड कॉम्प के साथ जाते हैं तो। और ऑन द टॉप पाथ देयर यू गो लुकैरियो, ही इज गोना गो फॉर द स्टैक्स, जल्दी से अपने स्टैक्स कंप्लीट करना चाहेंगे, और शुरुआत से आप देखिए दो एओस एनर्जी के साथ स्टैक करना उन्होंने चालू कर दिया है। देवेश बॉटम पाथ की तरफ आए, बट आई बिलीव एक अर्ली रोटेशन देके आए हैं, बिल्कुल, बिकॉज ही इज शेयरिंग दैट फार्म विद दैट ग्लेशियन आए, बैक ऑफ करने पे मजबूर किया, आगे बढ़ेंगे जरूर। दक्ष है, दक्ष लोन एचपी, ही इज ऑन लेवल 4, स्लोब्रो लेवल 4 पे भी काफी अच्छी वैल्यू निकाल सकता है। एंड जैसा मैं बात कर रहा था, स्केल्ड कॉम्प के साथ ही जाएंगे, स्केल्ड प्लस एमनेशिया इस्तेमाल करेंगे, एंड वी ऑल नो कि स्केल्ड के साथ स्लोब्रो काफी अच्छा डैमेज डिश आउट करता है, स्पेशली अगर पीछे आपके पास एक हाई डीपीएस है। एंड देखिए वही मैं बात कर रहा था, एंड ग्लेशियन ने जंप किया इजी अपने आइस शार्ट्स के साथ, नॉकआउट भी निकाला। ब्लड प्रिंसेस टाइमली पीछे हटे, बिकॉज इतना ज़्यादा स्क्विशी पोकेमॉन है डेसिडुआ, स्पेशली जब वो अभी डार्ट्रिक्स फॉर्म में ही है, अभी तक फुली इवॉल्व नहीं हुए हैं, और जब तक इवॉल्व नहीं होते तब तक तो आप फिजिकल डैमेज पोकेमॉन से दूर ही रहिए। इवन मैं तो कहूँगा पूरे के पूरे 10 मिनट, क्योंकि डेसिडुआई के बगल में अगर कोई भी फिजिकल पोकेमॉन आया देन दैट इज इंस्टेंट नॉकआउट। देयर यू गो डॉफी, ही इज about to get that level 6, although अभी तक एजी स्लैश में फुली इवॉल्व नहीं हुए हैं, जल्दी से लेवल 7 करने की कोशिश उनकी तरफ से रहेगी। देवेश trying to become a fully fledged Gardevoir. Now you have got those 50 seconds. हम जानते हैं अगर आप वो पहले ऑब्जेक्टिव स्पॉन से पहले एक यूनाइट मूव अपनी टीम के लिए नहीं निकाल पाए, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ट्रू रिपर्स आई बिलीव कि शायद से ग्लेशियन का यूनाइट मूव, एंड यू गो लेवल 8 अचीव किया, इंस्टेंट यूनाइट मूव उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है अपना, तो वो हमें कभी भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। पर आई बिलीव थोड़ा सा इंतजार करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स, क्योंकि एक टीम फाइट हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है ऑन द बॉटम रेजी। बट अगेन एक बार फिर अल्टारिया स्पॉन होंगी, लेट्स सी ये स्वाबलूस अगेन वंस अगेन। ट्रू रिपर्स जितना मौका मिल रहा है, जितना ज्यादा हो सके फार्म सिक्योर कर रही है, दे आर सिक्योरिंग ऑल द वाइल्ड पोकेमॉन, बिकॉज जानते हैं कि वो जो लीड हमें अभी मिली है, वो जो लेवल्स की छोटी हल्की सी लीड है, उसे बरकरार रखना जरूरी है, इसीलिए रेजी स्टील आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ब्लड प्रिंसेस बैक साइड से स्नाइप करते हुए लगातार 2 या 3, जब गॉट दोस 3 नॉकआउट्स, पीछे से ब्लड प्रिंसेस स्नाइप कर रहे थे, आगे से नरूतो ने पर्दा संभाला, एंड 4 KO स्ट्रीक कमिंग अप फॉर नरूतो। 4 KO स्ट्रीक प्लस उन्होंने रेजी स्टील भी सिक्योर किया है। नरूतो अपनी टीम के लिए वो सब कुछ करते हुए जो वो एज एन ऑलराउंडर कर सकते हैं। ऑल्दो ब्लड प्रिंसेस की दाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो स्नाइप्स किए ऑलमोस्ट 30% पे 2 से 3 पोकेमॉन को उनके स्नाइप्स की वजह से फेस ऑफ करना पड़ा था, एंड जैसे ही नरूतो को मौका मिला देन ही इज अनस्टॉपेबल, एंड गार्डीवर जस्ट वेस्टेड हिज यूनाइट मूव।
दैट वाज नॉट अ वेस्ट। अगर वहां से नारुतो बच के निकल जाते तो मैं कहूंगा कंप्लीट वेस्ट होता, बट इफ यू आर taking down a Pokemon like Lucario and a trainer like Naruto, that means आपने कहीं ना कहीं वैल्यू निकाली जरूर है। But let's see, can they secure that? Regieleki कोशिश अच्छी थी, although नहीं हो पाएगी कामयाब। ट्रू रिपर्स और सही समय पे आ चुके थे, इवन कूप दे ग्रेस भी वहां पे अपना इस्तेमाल किया एजी स्लैश ने, और उसी के साथ उन्होंने सिक्योर भी कर लिया था। पीछे से ब्लड प्रिंसेस थी तो वो भी अपनी स्नाइप के साथ सिक्योर करने के लिए बैठे हुए थे। बट अगेन एजी स्लैश, यू नीड टू बैक ऑफ। सेक्रेट सॉर्ड के इस्तेमाल से बचेंगे, बट लुक एट हिज एचपी, जस्ट वन ब्लो एंड उन्हें एक बार फिर से फेंट किया जा सकता है। माइकी बैक ऑफ करते हुए, इज ऑन लेवल 8 ऑलरेडी एंड ही इज अ गार्ड, ही इज अ एल्डेकोस, तो हमें पता है कि उतने ज्यादा लेवल की वहां रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे, बट ट्रू रिपर्स समहाउ अपना लेवल एडवांटेज, इवन अपना लेवल जो इक्वलाइजर है उसे अभी तक बरकरार रखे हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 2 बैटल्स निकाले हैं टीम ओथ ने, ऐसा लग रहा था कि शायद से वो एक तरफा लीड ले लेंगे, बट उसके बावजूद ट्रू रिपर्स ने अपने लेवल्स को भी बरकरार रखा। गार्डीवॉयर को लेवल 11 करवा दिया, ग्लेशियन को लेवल 11 करवा दिया, इवन जब नरूतो ने एक 1 वर्सेस 4 स्ट्रीक निकाली थी। बट यू गो ग्लेशियल स्टेज विद दैट कॉटन क्लाउड क्रैश। सो लेट्स सी कौन सा यूनाइट मूव ज्यादा कारगर साबित होगा। जैसे ही एल्डेगॉस ने भापा कि सामने से ग्लेशियल स्टेज का इस्तेमाल हुआ है, इंस्टेंट यूनाइट मूव अनलीश किया, बिकॉज जानते थे नरूतो को गवा नहीं सकते हैं इतने क्रूशियल मोमेंट पे। ट्रू रिपर्स destroying team oath, securing that Regice, and once again they are dominating that bottom lane. Naruto अकेले थे टॉप पाथ पे एंड उनके सामने कौन है, वो है केओ, जो कि लेवल में उनसे थोड़े से ऊपर, और उसी के साथ उनके पास दोनों बफ्स हैं, उनके पास एक्सेल गॉर है, उनके पास एक्सके वैलियर है, एंड उसी की वजह से नरूतो को बैक ऑफ करने पे मजबूर करेंगे एंड थिंग्स आर लुकिंग टफ फॉर टीम ओथ स्पोर्ट्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रेजिलेकी भी सिक्योर कर ले जाएगी। ट्रू रिपर्स आए जरूर है नरूतो, क्या फाइनल ब्लो ले सकते हैं, क्लोज कॉम्बैट आई बिलीव यूज कर रहे थे, दैट ऑरा कैनन एंड ही सिक्योर्ड दैट रेजिलेकी। I don't know how, but Naruto secured that Regieleki. इतना प्रो लुकारियो गेम प्ले देखे लिटरली अरसा हो चुका है, जब से लुकारियो आउट ऑफ मेटा गया है। आई बिलीव बहुत टाइम बाद मैंने इतना अच्छा सिक्योर विटनेस किया है। बट डॉफी इज still making a lot of trouble for that slow bro, will take down that slow bro with the help of Eldegoss, and इसी के साथ 48 का डंक दिया है, मात्र 2 पॉइंट्स की जरूरत थी, लेकिन 50 का स्कोर। लुकारियो, व्हाट अ गेम नरूतो। कल के दिन में मैं बार बार नरूतो की तारीफ कर रहा था, दैट बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं एंड ही कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट्स, एंड वो आज फिर से मेरी कही बात को सही साबित कर रहे हैं। एक बार फिर वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो भी ट्रू रिपर्स जैसी टीम के अगेंस्ट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से देखें तो ब्लड प्रिंसेस पीछे से जितना मौका मिल रहा है, ही इज ओनली गोइंग फॉर द स्नाइप। जानते हैं डेसिडुआई कि इतने ज़्यादा स्क्विशी हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर फिजिकल कांटेक्ट हुआ दैट मीन्स इट्स ऑल ओवर ऑन द स्पॉट। इसी वजह से जितना हो सके आप स्पेशली कोशिश कीजिए कि आप अपने एजी और अपने स्नॉर्लेक्स के पीछे ही रहें, एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। There you go, True Rippers रेजी रॉक भी सिक्योर कर लेंगे, एंड आई बिलीव कोई इंटरेस्ट है नहीं होती स्पॉट्स को, वो ऑलरेडी जाके सेंट्रल पिट पर होल्ड कर रहे हैं। उनको पता है कि आप कुछ भी कीजिए, आपको आना तो यही है, आएंगे यहाँ जाएंगे कहाँ, एंड वही होता हुआ दक्ष कोशिश करते हुए। स्नॉर्लेक्स लिटरली वेरी लो ऑन एचपी, बट दैट पावर नैप, और व्हेन ही वाज ऑन द लास्ट 5% ऑन हिज एचपी, पावर नैप इस्तेमाल किया, थोड़ा और टाइम बाय किया, लेकिन टीम सपोर्ट नहीं आ पाया। ये बड़ी गलती ओथ की तरफ से हो सकती है, क्योंकि स्नॉर्लेक्स को गंवाने के बाद अब मुश्किल होगा एक बार फिर से रेक्वाजा के करीब पहुंच पाना। एंड ट्रू रिपर्स दे आर अबाउट टू सिक्योर दैट रेक्वाजा, बट एजी स्लैश इंतजार कर रहे हैं, फेरी सिंगुलैरिटी कमिंग अप, but Lucario once again Naruto secured that Rayquaza for Team OT Sports. पहले रेजिलेकी, अब Rayquaza. I don't know what this player is made of. He is made of steel. क्योंकि जिस हिसाब से वो 5 पोकेमॉन के बीच में जा रहे हैं, वहां से
सिक्योर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, दैट इज जस्ट रिडिकुलस। अगर आप देखें तो अभी 3 प्लेयर अलाइव भी हैं विद स्नॉर्लैक्स, जिनके पास अभी भी वो रेक्वाजा शील्ड है, तो कम बैक बहुत मुश्किल होगा। एंड आई बिलीव स्नॉर्लैक्स अगर जाते हैं तो वो एक 50 का डंक अभी भी कर सकते हैं पोजीशन की गोल जोन पे। इट्स अ 4-man पुश ऑन टू द टॉप पाथ, क्योंकि टॉप का फर्स्ट टीयर अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। स्नॉर्लैक्स विद दैट हैवी स्लैम, देवेश 100 का डंक जरूर करेंगे, बट स्टिल 115 पॉइंट्स की अभी भी आवश्यकता है ट्रू रिपर्स को। क्या ये कमबैक हो सकता है? बीस्ट सुपर जंप पे इस्तेमाल वेट कर रहे हैं, बट आई बिलीव ये 49 का स्कोर, अब देयर इज नो वन जो रोकने जाएगा माइकी को। अनदर 98 कमिंग अप फॉर टीम ओटी स्पोर्ट्स। आखिरी 20 सेकंड बचते हैं। ट्रू रिपर्स 5-man पुश ऑन टू द टॉप पाथ, 150 जरूर आएगा। 32 पहले होता तो शायद कमबैक आ सकता था, बट अ यूनाइट मूव फ्रॉम द साइड ऑफ दैट ब्लास्टॉइज एंड दिस इज इट। अगर वो हाइड्रो टाइफून नहीं होता तो शायद ट्रू रिपर्स एक वापसी कर सकती थी, बट फॉर नाउ वी हैव गॉट आवर विनर्स फॉर दिस वेरी फर्स्ट गेम, actually the 5th game of the day, and the winner of this game is none other than Team Oath Esports. What a victory, what a performance. Hats off to Naruto. I am literally bound to that player, क्योंकि जिस हिसाब का गेम उन्होंने दिखाया है वो क्लियरली नरूतो लेवल गेम है। वो क्लियरली सिर्फ नरूतो लेवल नहीं, ऑल माइट स्नोई लेवल गेम प्ले उनकी तरफ से मुझे देखने को मिला है। आप किसी भी टॉप ऑलराउंडर का नाम लीजिए, इंडिया में उनको मैच नरूतो आजकल कर रहे हैं। ये चीज मैं कल भी रिपीट कर रहा था, लेकिन आज मेरी बात पर मुझे और भी ज्यादा प्रबल होने के लिए नरूतो कन्विंस कर चुके हैं, बिकॉज आज के दिन उनके 2 स्टील्स वो मेरे दिमाग से, मेरे दिलो दिमाग से अगले 2-3 दिन तक बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। जिस वे में उन्होंने उस रेजी लेकी को सिक्योर किया, एंड आफ्टर दैट जब उन्होंने वो रेक्वाजा सिक्योर किया, क्योंकि वहां पे मुझे कोई भी होप नहीं दिख रही थी, बट स्टिल आउट ऑफ नोवेयर ही केम देयर, ही सिक्योर्ड दैट रेक्वाजा। लेट्स टॉक अबाउट सम स्टैट्स। केओ ही गॉट दैट 86,000 डैमेज, क्लोज टू 87,000, वर्थ इट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया उन्होंने विद दैट ग्लेशियन। इनफैक्ट बहुत सी दिक्कतें डाल दी थी लुकैरियो के लिए भी। ईगो की बात करें तो 77,000 डैमेज विद ब्लास्टॉइज, दैट्स अ बिग डील बिकॉज ब्लास्टॉइज एक इट्स अ डिफेंडर, और इतनी ज्यादा आसान नहीं होता है डिफेंडर के लिए इतना अच्छा डैमेज निकाल पाना। देवेश गॉट दैट 90,000, अगेन गाड़ी थे, बहुत अच्छा गेम उनकी तरफ से रहा। लेकिन गेम में क्लियरली कह सकता हूं, विदाउट एनी डाउट आई कैन से, कि टीम ओथ का जो वो गेम निकला है वो सिर्फ और सिर्फ नरूतो के उन फाइनल हिट्स की वजह से निकला है, बिकॉज ही वाज रिडिकुलसली गुड विद दोस फाइनल हिट्स। बट विद दैट दिस is a 1-0 score line in the favor of Team Oath Esports। लेकिन आप लोग चैट में बताइए दैट क्या ट्रू रिपर से कमबैक करेगी। मैं आपके साथ आऊंगा, जुड़ूंगा फिर से सेकंड गेम के साथ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Nothing
Hello, Poke fans, and we are once again back with this Stank Spring Championship. So, guys, what are you waiting for? क्योंकि 1-0 की लीड होती स्पोर्ट्स ऑलरेडी ले चुकी है, और अगर अगला गेम भी वो ले लेते हैं, दैट मीन्स वो क्लियरली आपको ऑन एक 2-0 विक्ट्री निकाल लेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त स्टार्ट क्लैशिंग, मेरे साथ अब जुड़ेंगे आपको ऑन AKA तरुण अग्रवाल। तरुण, 1-0 लीड ली है, उसने सरप्राइज करके रख दिया है सबको। व्हाट डू यू थिंक, कैन दे क्लच इट आउट विद अ 2-0? I mean, like if you personally ask me, I'd really love to see a third game because क्या है, दूसरे गेम में तो हर बार हमने देखा है कि आज के दिन जो भी स्कोर लाइन रही है, it all comes down to the 2-0 score line. But what esports is, you know, they are really pretty good at what they are. And already जो उनका रन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट पे, I'm really in love with it. Let's see how things are really going to go on as we move on to the second game here at the Pokémon Unite Spring Championship 2023 presented by Blink Entertainment. ये जो है एक बैन फेज आपको फिलहाल देखने को मिलने वाला है. ट्रू रीपर्स माइट रियली डू नॉट वांट टू गिव अप दैट शिफू और मे बी हुपा, बट देखते हैं कि फिलहाल बैन आपको क्या देखने को मिलता है. Mew और शिफू is going to be out of the equation for these players. So first pick coming in from the side of BSTEF. देखते हैं कि वो अपने लिए क्या यहाँ पे पिक जो है वो लेना पसंद करेंगे. आई एम क्वाइट एक्साइटेड माई सेल्फ, क्योंकि अगेन एक बार फिर से आप कौन सेम बैंड्स के साथ गई हैं टीम्स. पिछली बार भी हमने वही म्यू और ऊशीफू बैंड देखे थे, और एक बार फिर से टीम्स उन्हीं बैंड्स के साथ जा रही हैं. तो आई बिलीव थोड़ा सा सेम लाइनअप भी मुझे देखने को मिल सकती है. देखिए को दक्ष स्नॉर्लेक्स पिक किया, बीस्ट ने हुपा ले लिया है. सो आगे की पिक्स के लिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, क्योंकि देवेश हम जानते हैं म्यू के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो है नहीं. गार्डी उनके पास अभी भी एक रिलायबल चॉइस है, डेलफॉक्स एक रिलायबल चॉइस है, बट माइकी इज ही गोना गो विद दैट ट्रेवेनेंट, क्योंकि अगर ट्रेवेनेंट लेते हैं तो थोड़ा सा एक्स फैक्टर रहेगा और थोड़े से चेंजेस उनके कॉम्प में हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे. बिकॉज नारुतो माइट गो विद दैट ग्लेशियन. यस, ही इज गोना गो विद दैट ग्लेशियन. पिछले गेम में जब वो लुकैरियो खेल रहे थे ट्रू रिपर्स के, ग्लेशियन ने बहुत दिक्कतों में उन्हें डाला, बट दिस टाइम जब वो ग्लेशियन खेल रहे हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि ट्रू रिपर्स क्या काउंटर लेके आएगी. Exactly, and with that, I think it's pretty great. You know, I mean, it's great to see like once again Delphox being added. Alongside that, we also have the side of Cliff Fable though, which at times could be really deadly. But Blood Prince को ये डेसी डुवाई अटैक पे देखने के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा से एक इनक्रेडिबल बात बन सकती है. लुकारियो को भी ऐड किया गया, परफेक्ट ऑलराउंडर फॉर यूज, टेकिंग डाउन साइजर, अनदर ऑलराउंडर जो शायद ईगो अपने द्वारा पिक करना चाहेंगे. तो आई थिंक जो अटैकिंग प्ले ना नारुतो का, स्पेशली कल जो हमने उनका ग्लेशियन का पिक देखा था, आइडियली उतना बेहतरीन नहीं किया था. बिकॉज जहाँ तक हम जानते हैं, आई थिंक ओटी स्पोर्ट्स एंड केमिन के बीच मुकाबला हुआ था, एंड केमिन उनको हराने में बहुत इजीली सक्षम हुई थी. 2-1 का स्कोर लाइन था, जिस वजह से इवन दैट ग्लेशियन फ्रॉम नारुतो इट केम टू क्लोज दो, बट उनको यू नो लाइक ढकेल दिया गया था लोअर ब्रैकेट पे केविन द्वारा. नॉनदलेस ओटी स्पोर्ट्स पहला मुकाबला वो जीत चुकी है. देखते हैं कब अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा मैचअप है वो आपको यहाँ पे जाते हुए किस टीम के नजर पे देखने को मिलेगा. बिकॉज इवेंचुअली ये देखिए, यहाँ पे टीम ओटी स्पोर्ट्स अगर जीतती है तो दे विल डेफिनेटली यू नो विन द सीरीज. बट इवेंचुअली अगर हम यहाँ पे बात करें टीम टीआर की, जो कि ट्रू रीपर्स है, हार मतलब उनके लिए नॉकआउट हो सकता है इस टूर्नामेंट से. तो इवेंचुअली BO3 का सीरीज है, ये दूसरा मुकाबला है 1-0 की बढ़त के ओट के पास. Let's see how situations are really going to pan out as we move on to the second game of this fourth series of the day. Yeah, let's wait and watch, because I am really excited to know कि क्या ट्रू रिपर्स एक कमबैक कर पाएगी. क्योंकि पिछले गेम के बाद मुझे थोड़ी सी टफ स्पॉट पे ट्रू रिपर्स आती हुई नजर आ रही है. जिस हिसाब से ओजी स्पॉट्स अपनी पोकेमॉन पिक्स का यूटिलाइजेशन कर रही है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है उनके पास. पिछली बार भी मैंने देखा था डॉफी एजी स्लैश लेके आए थे. एजी स्लैश नाउ इट्स अ पोकेमॉन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली उस डबल ऑलराउंडर कॉम्प के साथ, और उसको बहुत कम मैं देखने को मिलता है. जबकि मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार एजी स्लैश देखने को मिले. तो पिछली बार एजी स्लैश लेके एक विक्ट्री उन्होंने ली, एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड टू वॉच, और उनका गेम प्ले भी बहुत अच्छा था. सेम नारुतो ने लुकैरियो उठाया था, एंड उन्होंने लुकैरियो के साथ जो फाइनल हिट्स लिए हैं
दोज वर जस्ट परफेक्ट। दक्ष की आप बात कीजिए तो दक्ष एक बार फिर से स्नॉर्लेक्स लेके फार्म स्टील करने की कोशिश करते हुए, बट लुकैरियो से तो स्टील कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि लुकैरियो के पास जो मूवसेट है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट फाइनल हिट्स भी आप कह सकते हैं, स्पेशली अगर आप अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स की आप बात कीजिए, वहाँ पे ज़रूर बेटर आपको मिल जाएंगे फाइनल हिट्स, लेकिन अगर आप नॉर्मल वाइल्डिंग्स की बात करें पोकेमॉन, देन लुकैरियो इज प्रीटी गुड। बट ऑन द अदर हैंड क्यों, आप देखिए कैसे उन्होंने वो सारी की सारी अल्टारियास को खींचा, सिक्योर किया। जानते हैं जितना ज़्यादा अर्ली स्टेज फार्म हमें मिलेगा उतना बड़ा एडवांटेज टू रिपर्स को मिल सकता है। बिल्कुल, एंड pretty much I think this comes out to be incredibly down to the Dodrio, जिससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि टीम ट्रू रिपर्स हैविंग दिस स्पीडस्टर इन द इक्वेशन, दिस कुड डू सो मच वैल्यू। देखिए ऑलरेडी उनके पास साइजर आपको देखने को मिल रहा है, देन स्नोरलेक्स एज अ डिफेंडर, स्पीडस्टर है, एंड इफ दैट्स नॉट इनफ तो चलिए आपके पास अटैकिंग लाइक डेलफॉक्स एज एन पोकेमॉन भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से शुरुआती स्टेजेस पे अपने वाइल्ड पोकेमॉन्स को काउंटर ऑफ कर सकते हैं वो, एंड ही कुड रियली ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, स्पेशली अगर अपने द्वारा वो स्विच अप करना चाहे तो। बट इवेंचुअली अब देखना होगा कि हाउ विल थिंग्स गो फॉर द साइड ऑफ टीम ऑफ esports, एज दिस सीम्स टू बी अ प्रीटी स्लो स्टार्ट फॉर देम सो फार। ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, आपको ट्रिवेंट यहाँ पे नजर आ जाते हैं, who is going to be some pick which we really expected him. Decidueye already having that attacking play, and Travident के द्वारा एक डिफेंस प्लेज में जरूर देखना चाहूंगा किस तरीके से बन पाती है, बिकॉज अभी के लिए तो नॉकआउट हो चुके हैं और esports as I mentioned not the ideal play for them, but yeah हूपा है उनके पास, तो ये चीज आई एक्सपेक्ट अदर साइड ऑफ द गेम में बहुत महत्वपूर्ण ला सकती है। दूसरी तरफ बैक टू बैक नॉक्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो टीम ऑफ esports को बहुत ज्यादा दिक्कतों में डाला जा रहा है। I mean, 3 खिलाड़ी पिछले 40 सेकंड में 4 खिलाड़ियों के उनको ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया गया। ओनली ग्लेशियन सर्वाइविंग ऑल बाय हिमसेल्फ एंड ही टू विल बी ऑन द वर्ज ऑफ एन एलिमिनेशन। तो कितने सारे मौके मिल चुके हैं ऑलरेडी, सेंचुरी पे पहुंच सकते हैं आई थिंक इस मुकाबले के बाद, क्योंकि शुरुआती 3 मिनट पे ऑलमोस्ट 4 से 5 बार हमने नॉकआउट देखा। एंड टीम ट्रू रिपर्स के खिलाड़ियों को देखिए, उनके लेवल्स पे भी एक बहुत अच्छा बढ़त बन चुका है, लाइक 9th लेवल ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10वें लेवल पे पहुंच सकते हैं अभी के लिए डेलफॉक्स। 10th लेवल के साथ ही साथ लाइक डॉड्रियो भी आपको ऑलमोस्ट एक अच्छा एग्जांपल सेट करते हुए नजर आएंगे। हूपा नॉनदलेस इज गोइंग टू बी टेकन डाउन फॉर नाउ, तो I don't know if everything is going well, but OT Esports is really good in making comebacks, especially when it comes to the final 4 minutes, जब यहाँ पे आपको objective of Regis देखने को मिलते हैं in the mid games। इंडीड ये चीज़ मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, बिकॉज वंस अगेन आपकॉन जो लेवल डिफ क्रिएट हो चुका है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एंड वो जो फाइट्स निकाली हैं आई बिलीव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलतियाँ OT Esports करती हुई नज़र आ रही है। ब्लड प्रिंसेस भी पिछले गेम के कंपैरिजन में थोड़ा सा आगे जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो दे हैव गॉट डॉड्रियो, तो ट्रू रिपर्स का शुरुआत से ही स्कोर ओरिएंटेड गेम था और वही वो उन्होंने किया। उन्होंने अच्छे खासे लेवल्स की लीड बनाई और अगर ऐसे ही फीड होते रहे, वो 2 बार ओथ के प्लेयर्स को नॉकआउट करके ऑलरेडी फीड हो चुकी है ट्रू रिपर्स। तो अगर चीजें ऐसे जाती हैं तो ये गेम ट्रू रिपर्स काफी इजीली अपने पाले में ले लेगी। डॉड्रियो कैन दे टेक डाउन हिम? यप, दे विल टेक डाउन दैट डॉड्रियो, और इसी चीज की जरूरत है। आपको वेट करना पड़ेगा, आपके पास स्क्विशी पिक्स काफी ज्यादा हैं। पिछली बार आपके पास डबल ऑलराउंडर फॉर्म थी तो आप आगे जा सकते थे, आपको पता था कि इट्स नॉट गोना बी इजी टू टेक यू डाउन, बट दिस टाइम इट्स गोना बी रियली हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव अगर आप ज्यादा आगे जाते हैं। ग्लेशियल स्टेज वहां पे वेस्ट करते हुए नजर आए। आई डोंट नो क्यों नरूतो ने यूनाइट मूव पॉप इन किया, क्योंकि कोई ज़्यादा वैल्यू मुझे निकलती हुई नज़र आई नहीं। अगर आप टीम फाइट में कहीं इस्तेमाल करते तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो सकता था, बट मे भी जल्दी से फार्म करना चाहेंगे बिफोर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव स्पॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये टॉप पाथ की फाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट ग्रीन इल्यूजन टाइप फ्रॉम द साइड ऑफ ईगो, बट पावर नैप इंस्टेंटली आया, बड़ी बैरियर ट्रिगर किया। क्यों कोशिश कर रहे थे, बट इवन दो नरूतो ग्लेशियन के साथ डाउन करेंगे साइथर को, और अगर डेलफॉक्स को भी नॉकआउट कर देते हैं तो यहां से ओथ का एक कमबैक हमें फॉर श्योर देखने को मिल सकता था। अनफॉर्चुनेट दो, क्योंकि ग्लेशियन रियली गेट्स द मोस्ट आउट ऑफ द फाइट आई बिलीव। अब यहाँ पे फाइट अभी भी ऑन है, बट इन सब के बीच नॉलेक्स को डाउन किया जाएगा। ग्लेशियन इज ऑन अनदर लेवल एट दिस पोजीशन, बट इस गेम में चौथी बार ट्रेविन को यहाँ पे आपको नॉक होते हुए देखने को मिलते हैं। अपने अर्थ एनर्जी जरूर यहाँ पे जल्द से जल्द कनेक्ट करना चाहोगे, बट अब एक बार नजर डालिए 40-40 फॉर द साइड ऑफ द मैन हिमसेल्फ डेसिडुआई, एंड
the very own attacker of the team, which is going to be Glaceon. अब स्कोर करने की अपॉर्चुनिटीज आपको अभी भी टॉप लेन्स पे देखने को मिल जाती है. 100 का आंकड़ा यहाँ पे पूरा हो चुका है, सिर्फ 18 पॉइंट्स का अंतर बचा. स्लोली स्टेडीली स्नोलेक्स नीचे जा रहे हैं. Nonetheless, this doesn't stops the side of one and only Glaceon, जो कितना ज्यादा यहाँ पे अभी भी दिक्कत हो यहाँ पे like सामना करे. बट मिकी he's आराम से होल्ड करके आपको देखने को मिल जाते हैं. बट फाइनली ही गेट्स स्पॉटेड ऑफ. ईगो आप शायद उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल सकते हैं. एज अ वेरी ओल्ड डिफेंडर माइट नॉट रियली गेट अवे विद इट. रेजी को यहाँ पे फिलहाल के लिए पूरी तरीके से एडवांटेज मिलेगा हमारी टीम वन एंड ओनली होती esports को, एंड दे आर स्लोली स्टेडली क्रॉलिंग अप टू द लीड व्हिच वाज मेड फ्रॉम द साइड ऑफ टीम वन एंड ओनली. आई बिलीव it's once again. Yeah, indeed. Once again, they've secured that bottom Reggie as well. But एक बार फिर green illusion dive का इस्तेमाल किया. I believe उसके बाद साइथर 2 KOs लेके नॉकआउट हुए हैं. नॉकआउट हुए हुपा अनलीज्ड रिंग्स अनबाउंड फॉर्म से, एंड हुपा ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल आउट देयर. लेकिन वो जंप के कॉम्बो काफी ज्यादा ओवरपावर्ड बना देता है डॉड्रियो को, जिसकी वजह से 2 नॉकआउट्स उन्हें भी मिलेंगे. जैसे जैसे लग रहा था कि शायद से ओथ स्पोर्ट्स थोड़ा सा क्रॉल करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मे बी इक्वलाइज करना चाहिए कि लेवल्स को, वैसे ही एकदम साइथर और उनके साथ डॉड्रियो वो अपना कमाल दिखा देते हैं. एंड वी कैन नॉट फॉरगेट डेलफॉक्स, बिकॉज डेलफॉक्स अ मिस्टिकल फायर प्लस फ्लेम चार्ज कॉम्प. इफ यू आर यूजिंग इट करेक्टली इट कैन डोमिनेट योर अपोनेंट टीम कंप्लीटली. और उस चीज़ का एग्जांपल हमें इस गेम में देखने को मिल भी रहा है. इतना ज़्यादा डैमेज दे देता है. ऑलरेडी मिस्टिकल फायर एक बार में डैमेज कर देगा, उसके बाद आप आराम से फ्लेम चार्ज के धीरे धीरे डैमेज देते रहें, एंड द अपोनेंट इज डन फॉर, स्पेशली इफ इट्स अ स्क्विशी पोकेमॉन. लेकिन क्या बढ़िया तरीके से फंसाया गया डॉड्रियो को. तारीफ तो बनती है इस चीज के लिए. नरूतो पीछे रह के खेलेंगे. स्प्रिट शैकल्स कमिंग अप फ्रॉम द साइड ऑफ डेसिडुआई. और अगर ये हेल्दी डिस्टेंस नहीं बरकरार रखी होती स्पॉट्स ने, तो हम जानते हैं कि जितने स्क्विशी पिक्स इनके पास है, स्पेशली ग्लेशियन और डेसिडुआई, उन्हें इंस्टेंट नॉकआउट्स का सामना करना पड़ेगा. आप फाइनल स्ट्रेस के पहले ही आप देखिए कैसे यहाँ पे अपनी लीड को पूरी तरीके से कवर अप कर चुके हैं विद 50 यूनाइट बॉल्स बीइंग हेल्ड सोली फॉर डेसिडुआई. अब यहाँ पे मेन गेम शुरू होने वाला है. नाउ इज वेयर द रियल गेम बिगिंस. बीस्ट एफ ऑलरेडी यहाँ पे हुपा अपने एक अच्छे पोजीशन पे है. दक्ष आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. एंटिसिपेट किया तो उन्होंने किसी को भी प्लेयर्स को बुश के नजदीक, बट टोटली असफल यहाँ पे आपको होते हुए नजर आए. रिक्वाजा की फाइट बिगिन हो चुकी है स्टार्ट, एंड आई थिंक ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल फाइट रहेगी. जो रिक्वाजा लेगा वी शुड सेट कि वो शायद ये मैच जीत सकता है. या ऑब्वियसली रक्वाजा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर गेम, क्योंकि आप देखिए लेवल डिफ नहीं है ना ही गोल्ड डिफ है. बट नॉक इन दिस अर्ली स्टेज, ऑल्दो रक्वाजा के ऊपर हेड आइटम जरूर इस्तेमाल किया गया था. इट्स गोना बी इजी. ट्रू रिपर. ओके, आई थिंक ट्रू रिपर्स इज द वन हु सिक्योर्ड दैट रक्वाजा. यप, ट्रेवेनेंट ने लास्ट मोमेंट स्टील किया using that unite move, and Decidueye got those 2 knockouts, and there you go. They've completely destroyed Team True Rippers. Almost True Rippers secure कर चुकी थी आपकॉन, लेकिन कब ट्रेवेनेंट आए और ट्रेवेनेंट ने वो ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट में उस इवन उनके पास यूनाइट मूव भी नहीं था. मैं सरप्राइज इस चीज से हूँ कि उनके पास यूनाइट मूव भी नहीं था. शायद से हॉर्न लीच के जैसे मूव के साथ उन्होंने सिक्योर किया है उस रेक्वाजा को. लेकिन आप देखिए अभी भी बहुत ज्यादा गोल्स का डिफरेंस नहीं आया है, एंड ऑलरेडी ट्रू रिपर्स के पास डॉड्रियो है, और डॉड्रियो के साथ इस लीड को वो काफी इजीली कवर अप कर सकते हैं. लेकिन क्या उनके पास टाइम है? मात्र 30 सेकंड का समय. हार्ड कोर डिफेंस करना पड़ेगा टॉप पर. 4-मैन पुश हमें जरूर देखने को मिलेगा. हुपा अपने हाइपर स्पेस होल्ड जरूर अनलीश करेंगे, लेकिन फैंसीफुल फायरवर्क्स फ्रॉम द साइड ऑफ दैट डेलफॉक्स. पीछे से काफी अच्छी कोशिश थी डेसिडुआई की, डैमेज दिया लेकिन गोल से नहीं रोक पाए. एक और गोल. क्या डॉड्रियो को डाउन किया जा सकता है? यप, डॉड्रियो हैज बीन टेकन डाउन. वो 11 का स्कोर अगर डलता है क्लेफेबल का, देन टीम एस्पोर्ट्स इज डन फॉर. क्या जीते देखना चाहता हूं. वो 22 का स्कोर, शायद फेथ बदल सकता है आपकॉन. True Reapers actually might came, and that's what आखिरी में जो उन्होंने स्कोर किया in the very last 5 second,
in the very last microsecond, it all came down to those final seconds, and that's where, even after losing Rayquaza, True Reaper snatched the victory under the nose of Team OD Sports, and they take us to game number 3. क्या लाजवाब fight! It all came down to having your goal being defended. जो डिफेंस आपको 3-2 का देखने को मिल रहा था दोनों ही तरफ फ्रॉम द साइड ऑफ OD Sports, बहुत ही ज्यादा डिफेंस हो गए, एंड उसके बावजूद व्हाट हैपेंड, डॉडरियो हैपेंड. डॉडरियो ने आप एक बहुत क्रूशियल मैं कहूंगा एक एलिमिनेशन उस मुकाम पे निकाला था, एंड उसके बाद तो सिर्फ उस आखिरी के सेकंड में जो प्रेशर में होती स्पोर्ट्स आ गई, पूरा फायदा निकाल के ये विक्ट्री ट्रू रीपर्स अपने नाम कर गई, एंड व्हाट अ विक्ट्री फॉर देम. गेम नंबर 5 ऑफ द डे, एंड फाइनली एक ऐसा सीरीज जो हमें नॉर्मल मैच नंबर 3 पे लेके जाता है. तो दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बट मैन ओ मैन, what a game for these teams, man. They really performed some unthinkably. यहाँ पे True Reapers ने कैसे वो कर दिखाया, I cannot believe, but this is the closest we have ever got, I think. हाँ, आई थिंक सो. बट देखिए, हमने ऑलरेडी आपको एक एक पॉइंट से तक विक्ट्री अब देख चुके हैं. सो सरप्राइज्ड मैं हूँ, क्योंकि सरप्राइज में इसलिए हूँ बिकॉज 2 गलतियां यहाँ पे ओथ की तरफ से हुई. आई वॉन्ट से गलतियां, शायद से अनलकी डे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले देव सिक्योर्ड द ट्रैक्वाजा, लेकिन स्कोर नहीं कर पाए. सिर्फ ट्रेवेनेंट थे जिनकी तरफ से हमें स्कोर देखने को मिला. अपार्ट फ्रॉम दैट, डॉडरियो सामने है, सो यू हैव टू टारगेट दैट डॉडरियो. अगर वो शुरुआत में ही सिर्फ डॉडरियो को ड्यूरिंग दैट अपर पुश खत्म कर देते तो शायद चीजें अलग हो सकती थी. ऑल्दो डेसिजॉय ने पीछे से स्प्रिट शैकल्स के साथ गोल्स रोकने की कोशिश की थी, बट दैट वाज नॉट इनफ एट ऑल. बट इन दी एंड वो क्लेफेबल का 11 का स्कोर, मैं तब भी कह रहा था कि अगर ये 11 आप नहीं रोक पाए देन यू आर डन फॉर. एंड ऑलमोस्ट लास्ट सेकंड तक उन्होंने कोशिश की थी, बार बार क्लेफेबल को दिक्कतों में डाला जा रहा था, उनके स्कोर को रोका जा रहा था, लेकिन किसको पता था कि आखिर में वो 11 का डंक, वो 22 जो एओस एनर्जी बन गया, उसका डंक पूरे के पूरे गेम को बदल के रख देगा. बट आई बिलीव हार्ड लक थोड़ा सा जरूर था ओथ के लिए, लेकिन अभी भी तारीफ करूंगा ओथ की वो फाइनल हिट कैपेबिलिटीज के, क्योंकि पिछले गेम में भी उन्होंने ऐसे ही रेक्वाजा स्टील किया था. उस टाइम लुकैरियो थे, इस बार ट्रेवेनेंट थे, लेकिन उनका जो गेम था वो टॉप नॉच था. बट लेट्स सी क्या ट्रू रिपर्स कुछ इसी प्रकार से तीसरे गेम में भी ओथ स्पोर्ट्स को आउट परफॉर्म कर सकती है, या फिर ओथ स्पोर्ट्स अगले गेम में ये 11 जैसे स्कोर डालने का मौका ही नहीं देगी ट्रू रिपर्स को. आई थिंक बहुत क्लोज होने वाला ये मुकाबला, क्योंकि शुरुआती स्टेजेस पे OD Sports रियली वो गेटिंग आउटप्लेड. जिस तरीके से हमने लाइक उनका एक पिक, स्पेशली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ट्रेवेनेंट का देखा था, आई डोंट नो like what they were really thinking though, because eventually they had so many better options. बैन भी इतना ज्यादा उनके अगेंस्ट में नहीं था that they couldn't have gone for a slow bro or a Mamoswine. Especially Mamoswine looks so good for the side of OD Sports. Just अगर हम उनके पिछले मुकाबले की बात करें जो उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन की रखी थी, there they really like showed कि how a classical Mamoswine is supposed to be utilized and how you could bring the most out of that particular Pokemon. बट विद दैट आई थिंक 1-1 की परिस्थिति हमें तो ये लाइक मस्त यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट और एक एक्स्ट्रा गेम मिल चुका है टू विटनेस अगेन OD Sports एंड फॉर अनदर चांस फॉर ट्रू रीपर्स टू गेट एन अमेजिंग फाइट अप. अब देखते हैं कि ये फाइट अप किस तरीके से होगा, बिकॉज इवेंचुअली टीम ट्रू रीपर्स हैज बीन वन ऑफ दोस टीम्स जो हार मानने वालों में से नहीं है. OD Sports they have just started up, and ऐसी किक स्टार्ट जो उन्होंने दिखाई है इस पूरे के पूरे esports competitive like ecosystem में of the Pokemon Unite, really भी I'll say one of the like most मैं बोलूँगा इससे बैंगर स्टार्ट उनके लिए क्या हो सकती है कि वो हमारे Pokemon Unite Spring Championship 2023 presented by Blink Esports के ऑलरेडी राउंड नंबर 4 तक आ चुके हैं. बट यहाँ से आई थिंक विक्ट्री थोड़ी सी हैम्पर हो सकती है. ट्रू रीपर्स इज नॉट अ टीम which you will easily have take away the victory from. True Reapers are really the one who are very experienced and they could really work very well in their like critical decision making जो है उनकी, स्पेशली उस एंड मोमेंट पे भी हमने जो देखा बहुत ज्यादा लाजवाब हो गया. बट क्या आपको लगता है कि वो एंड सेकंड्स में जो हुआ इट कुड हैव बीन रिप्लेस, लाइक अगर ट्रू रीपर को मिलता तब दे वुड हैव वेंट ऑल आउट अटैक.
एक अच्छा रिक्वाजा कि आपके पास एक शील्ड होता, ईच एंड एवरी प्लेयर कुड रियली गो आउट देयर, स्प्रेड द डिस्टेंस एंड स्कोर इन बोथ द पाथ. But what happened was कि OT Esports went too defensive with that, knowing कि थोड़ा भी scattered away होंगे तो things might not really work out, and बहुत ही ज्यादा डिफेंस इज योर बेस्ट ऑफेंस पे आके अपने ओपोनेंट को वो लीड गवा बैठे एंड में. समटाइम्स ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए था उसको. ऑल्दो अगर ट्रू रिपर्स को वो रेक्वाजा मिलता तो गेम क्लोज जाता ही नहीं. तब ट्रू रिपर्स लाइक क्लियर विक्ट्री अपने नाम कर सकती थी, बिकॉज रेक्वाजा मिला तब जाके ओथ ने 2 पोकेमॉन को नॉकआउट किया फॉर ट्रू रिपर्स. लेकिन अगर ट्रू रिपर्स को वो रेक्वाजा मिल जाता, उनके पास 5 मैन शील्ड होती, वो इजीली एटलीस्ट 2 से 3 प्लेयर्स स्कोर कर सकते थे. बट ऑन दी अदर हैंड ओथ की तरफ से गलती वही हुई कि उनके तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन एंड दैट वाज ट्रेवेनेंट, और उनके पास भी आई बिलीव 50 का एक कंप्लीट स्कोर नहीं था. सिर्फ वही मुझे स्कोर करते हुए नजर आए. अगर एक और स्कोर उनकी तरफ से हो जाता, एक छोटा भी स्कोर अगर हो जाता, तो वो इजीली गेम निकाल सकते थे. उनको सोचना चाहिए था कि सामने डॉटरियो है, और अगर डॉटरियो है तो स्कोर थोड़ा सा ह्यूमंगस हमें चाहिए, क्योंकि डॉटरियो किसी भी समय कवर अप कर सकता है. लेकिन सिर्फ डॉटरियो ने ही नहीं, क्लिफेबल ने वो आखिरी 11 का स्कोर, आई बिलीव किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि क्लिफेबल के स्कोर की वजह से गेम निकल सकता है. लास्ट में भी मैंने देखा कि कैसे वो काफ़ी अच्छी चीज़ की ओथ ने कि उन्होंने सेकंड गोल पोस्ट के करीब पहुंचने से पहले ही डॉटरियो को नॉकआउट कर दिया. लेकिन उन्होंने थोड़ी सा इग्नोरेंट बिहेवियर रखा क्लिफेबल की तरफ, हालांकि वो कोशिश कर रहे थे, बट बस एक हल्का सा मिस, और वहीं से क्लिफेबल का वो छोटा सा 11 का स्कोर इजीली टंक हो पाया. बट लेट्स डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स द थर्ड गेम ऑफ दिस BO3 सीरीज आपकॉन, और एक बार फिर से ड्राफ्ट मोड की तरफ बढ़ चुके हैं ट्रू रिपर्स वर्सेस टीम ओथ ई-स्पोर्ट्स. तो लेट्स सी क्या एक बार फिर से हमें वही उर्शिफू और म्यू बैंस देखने को मिलेंगे, या फिर इस बार डेलफॉक्स या कार्डी जैसे किसी AOE पोकेमॉन को भी किया जा सकता है बैन. नो, सप्रेस करेंगे म्यू को, सप्रेस करेंगे उर्शिफू को. काफी अच्छे बैंस हैं, लेकिन पिक्स क्या होंगे वो ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा. आई थिंक डॉडरियो में जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था, लाइक इफ दैट could have been a ban at least, so that Mew का pick अक्सर Naruto के लिए बड़ा लाजवाब साबित होता. But just in the previous game, I told you, right, Naruto on that Glaceon hasn't been looking that promising. Not just today, not just yesterday, not just against the side of True Reapers, but also against Kim Esports. We have seen him in many attacking plays, and he have really done wonders, So Hoopa का pick पहला Seth का, फिर double pick आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. On the other team, which is OT Esports, Mickey going on with a very good Eldigos. So I think Snorlax as a defender, Eldigos as like a supporter. फिर उसके काउंटर पे आपको दक्ष as a defense, Slowbro देखने को मिल जाते हैं. Attacking play this time not for Naruto. So Naruto, what's left for him, it's gonna be either the side of Delphox, जो कि या तो कंसिडर कर सकते हैं, Gardevoir, maybe even Pikachu, but वो तो हमने अब तक देखा ही नहीं कभी. And here we go, he goes all the way towards a very classical pick of Lucario. Now, Lucario is one of the all-rounder player, and going up with him, then giving Blood Prince, the attacking play of, I believe Decidueye could really be promising though. But I mean, I still see a very big silver lining that True Reapers might get away with this victory. लेट्स सी क्या वो विक्ट्री अपने नाम कर पाएंगे, बिकॉज इट्स हार्ड टू टेल. क्योंकि एक बार फिर से मुझे वो विनिंग कॉम्प देखने को मिल रही है टीम ओथ ई-स्पोर्ट्स के फेवर में. आप कौन, they've got Naruto as their Lucario, Doffy as that AG/Blood Princess as that Decidueye, then Beast को ऑलरेडी अपना कंफर्ट पिक मिल गया है, एल्डेगॉस माइकी को मिल गया है. तो कंफर्ट पिक्स अगर आपके पास है देन दैट इज ऑल गुड. लेकिन अगर आप ट्रू रिपर्स की बात करें तो क्यू ग्लेशियन पहले हम देख चुके थे, लेकिन 2 इवोल्यूशन पिक, नाउ दैट इज समथिंग जो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है. 2 इवोल्यूशंस लेके आए हैं, एंड as much as I know, हमारे टूर्नामेंट में for the first time we're gonna witness 2 evolutions from one team. I think ACL में भी हमें इंडिया रीजन में ये चीज अब तक देखने को नहीं मिली है. TR, they've got Glaceon, they've got Sylveon. अगर Espeon और ले आते तो मजा ही आ जाता, लेकिन अगर ले आते तो for sure थ्रो हो जाता गेम. They've got Hoopa for instant teleportation, instant rotation. They've got Slowbro. मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा
वैल्यू स्लोब्रो निकाल देता है मोर देन स्नॉरलेक्स। अगर सही कॉम्प के साथ आप खेलें तो ईवीज दोनों आगे बढ़ेंगे जरूर, एंड they have got that Blastoise for themselves। और Blastoise कितना ज़्यादा केपेबल है वो हम देख चुके हैं। हालांकि ट्रू रिपर्स की ये जो पिक है ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है। डुअल डिफेंडर है, डुअल इवोल्यूशंस हैं और एक हुपा है। डीपीएस की आप बात कीजिए तो फॉर श्योर बहुत हाई रहेगा सिल्वियन का भी और साथ ही साथ ग्लेशियन का भी, जैसे ही लेवल 4 अचीव करेंगे। वहीं ब्लास्टॉइस आई मीन वॉर टर्टल भी अगर इवॉल्व हो जाते हैं स्क्वेटल तब भी उनका डीपीएस हाई नहीं होने वाला है, एंड सेम गोज फॉर दैट स्लो पोक और दैट स्लो ब्रो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करें टीम ओथी स्पोर्ट्स को, उनके पास लुकैरियो है, बहुत अच्छा पोकेमोन है, अर्ली स्टेज में डैमेज बहुत ज़्यादा हाई डिश आउट करता है। माइकी कॉटेनी के साथ नॉकआउट करेंगे सिक्योर। नरूतो हैं, उनके पास डेसिडुआई हैं जो डार्ट्रिक्स में ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं तो उनका डैमेज बहुत ज़्यादा रहेगा। दे हैव गॉट दैट एजी स्लैश। चीज़ें मेरे ख्याल से ट्रू रिपर्स के लिए 50-50 वर्क करेंगे। अगर उनकी कॉम्प वर्क करती है तो दे कैन इजीली क्लच दिस गेम आउट, लेकिन अगर छोटी सी भी गलती हुई तो ये गेम पूरा का पूरा ओथ के हाथों में चला जाएगा। स्पेशली जो एंड फेजेस में हमने दियोथ को देखा है तो वो तो ज़रूर यहाँ से बहुत ज़्यादा उनको यहाँ पे आई से कि सतर्क रहना होगा, बट नरूटो से ज़रूर बहुत ज़्यादा आशंका रहेगी। ट्रू रीपर्स हैव अ really good I'll say comp at this time if you ask me. I wouldn't be surprised अगर वो आज के दिन आपको विक्टोरियस भी देखने को मिले, बट डोफी विद द एजी स्लैश, let's see how it really is going to pan out. Snorlax थोड़ी दिक्कतों में देखने को मिलती है, बट रेस्ट ऑफ मैप लेके पूरी तरीके से हील अप अभी के लिए कर चुके हैं वो। बॉटम लेन पे तो देखिए बहुत अच्छे डिफेंस प्लेज ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बट टॉप लेन की तरफ अभी के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते बिग फाइट बिटवीन हुपा ईगो, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से डिनाइल देने की कोशिश करे जा रहे बैक टू बैक, बट समहाउ सर्वाइव करते हुए एल्गोस इज गोना जस्ट फॉल बैक। मीनवाइल नरूटो बैक अगेन, देखते हैं किस तरीके से अपने आप को स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ पहुंचा पाएंगे। कुछ उनका सामना यहाँ पे देखिए एक बार स्लो ब्रो भी आपको करते हुए देखने को मिल सकता है। स्लो ब्रो के साथ ही साथ एक सीवियन का भी पिक यहाँ पे हमें उनके प्लेयर द्वारा देखने को मिल रहा है। डोफी विद द एजी स्लैश is totally getting very cornered right now. Hoopa is really not giving him much space. 6 और 9 का ही स्कोर लाइन है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द गेम इज ऑलरेडी ओवर, येट अब जो ऑब्जेक्टिव फाइट है उसके ऊपर बात आ जाएगी। बट आपको जस्ट लुक एट दैट, कितने इजीली ग्लेशियन को वहां पे फार्म कराया जा रहा है। ही इज ऑलरेडी ऑन लेवल 8। ऑन द अदर हैंड अगर आप ओथी स्पोर्ट्स की बात करें तो अब जाके डेसिडुआई फुली इवॉल्व हो पाए हैं। लेट अपार्ट अगर आप उनकी यूनाइट मूव की बात करें तो वो लेवल 9 पे जाके अनलीश होगा। सेव लुकैरियो ही इज ऑन लेवल 6। तो टॉप पाथ पे मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा कैसे सैफ हुपा खेल रहे हैं, कैसे सैफ अपने ब्लास्टॉइस को वाटर टर्टल को फार्म करा रहे थे, कैसे वो वाइल्डिंग उनके फेवर में ला रहे थे, वो काबिल तारीफ था। लेकिन बॉटम पाथ पे बहुत अच्छे तरीके से नलीफाई किया नरूतो। जानते थे कि नरूतो लास्ट हिट लेना जानते हैं, इसी वजह से सबसे पहले उन्हें नॉक किया गया। स्नॉरलेक्स हैवी स्लैम के साथ सोचा था कि शायद वो फाइनल हिट सिक्योर कर पाएंगे, उन्हें भी नॉकआउट का सामना करना पड़ा। एंड देयर यू गो, ट्रू रिपर्स दे हैव कंप्लीटली डोमिनेटेड दैट बॉटम पाथ। एंड जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर ये डुअल इवोल्यूशन एंड डुअल डिफेंडर वर्क किया देन दे कैन प्योरली डोमिनेट दिस गेम, और अगर नहीं कर पाया तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। एंड वर्क कर रहा है, दे आर डोमिनेटिंग द गेम। सिल्वियन को एक और 2 KO स्ट्रीक मिलेगी और आप देखिए गोल्स का डिफरेंस अब कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इट्स 191/88 जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। सेम लेवल्स की भी आप बात कीजिए तो ऑलरेडी 2 यूनाइट मूव्स, आई बिलीव 3 यूनाइट मूव्स, आई थिंक 5 यूनाइट मूव अब खुलने वाले हैं ट्रू रिपर्स के। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अभी बात करें ओथी स्पोर्ट्स की तो उनको अभी काफी समय लगने वाला है यूनाइट मूव्स अनलॉक करने में। Exactly, I think the lead is also looking pretty good, but with Decidui getting the 40-pointer in the top lane, this could really bring back the lead that they really have lost it. स्पेशली जो एक 59 पॉइंट्स का अभी भी लीड आपको अभी के लिए लूज आउट होते हुए देखने को मिल रहा है। टॉप लेन की तरफ 2 स्लो ब्रोस स्टिल डाउन एट द 9th लेवल, लाइक ही रियली नीड्स टू पेस थिंग्स अप। स्नॉरलेक्स फॉर अनदर टाइम विल बी टेकन डाउन। टीम ट्रू रिपर्स इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग देयर वन मोर डिफेंडर। स्लो ब्रो को अगर गवा देंगे तो फिर वो टॉप लेन का एक बहुत ही अच्छा एरिया जो है वो यहाँ पे कंट्रोल में आपको मिलते हुए देखने को मिलेगा। ओटी स्पोर्ट्स को ये दे डिडंट मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। जरूर अच्छे यहाँ पे लाइक यूनाइट बॉल्स उन्होंने फॉलन यूनाइट एओस एनर्जीज को भी जरूर एक्वायर कर लिया है।
बट अब ये मुकाबले में एक वापसी कह सकते हैं आप कि ओथ स्पोर्ट्स को मिल चुकी है, क्योंकि जो एक लीड थी ट्रू रिपर्स की वो धीरे धीरे मिनिमाइज किया, लेवल के डिफरेंस को धीरे धीरे कोप अप करते हुए आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बॉटम साइड पे अभी एक रेजी स्पॉन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन जरूर बनेगा, बट इस सबके बीच नारुतो इज गोना बी टेकन डाउन एंड दैट्स अ बिग ब्रेक थ्रू एज लुकारियो गेट्स डाउन। ग्लेशियन ऑन द अदर हैंड लुकिंग वेरी स्ट्रांग, बट यहाँ पे एक यूनाइट मूव की एक्सपेक्टेशन बन सकती है। ग्लेशियन स्टिल मैनेज टू टेक अवे अ वेरी वेरी मैसिव किल कमिंग डाउन द साइड ऑफ टीम ट्रू रिपर्स, एंड इसी के साथ यहाँ पे लाइक बहुत अच्छे डिफेंसिव ड्यूटीज को भी निभाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमारे ब्लास्टॉइज। एंड अगेन नरूतो इज द वन जो कि उनका नॉकआउट सिक्योर करेंगे, एंड थिंग्स अभी नरूतो के फेवर में मुझे जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज नरूतो हमने देखा है कैसे वो उस पावर ऑफ पंच का इस्तेमाल करके कई बार अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करते हैं, लेकिन अभी हमें वो वर्कआउट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एज फॉर टीम ट्रू रिपर्स, बॉटम के दोनों गोल पोस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट बेस गोल जोन एज वेल। क्या ये एक अच्छा डिसीजन है? बिकॉज मुझे लगता है ये काफी ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है। ऑलरेडी लॉस्ट योर ग्लेशियन, शायद एक दो नॉकआउट्स और गवा दे, बट नो, एजी स्लैश को नॉकआउट मिलेगा सिल्वियन की तरफ से। ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये हुआ है तो ओथ के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी जरूर। ऑल्दो बी स्टैफ ट्राई कर रहे हैं सैफ को टेक डाउन करने का, जरूर टेक डाउन आप कर लेंगे, लेकिन सैफ आपका जो टाइम वेस्ट करेंगे वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। यू नीड टू गो अवे, यू नीड टू फार्म एज मच एज यू कैन। नरूतो अभी भी लेवल 11 पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ग्लेशियन की बात करें तो वो ऑलरेडी लेवल 12, लेवल 13 इस बफ को एक्वायर करते ही वो अचीव कर लेंगे। तो ये जो लेवल डिफ क्रिएट हुआ है उसे अगर जल्दी से कवर अप नहीं किया गया तो टीम फाइट्स ओथ के हाथ से बार बार जाएंगी। एज फॉर द गेम, अगर आपको टीम फाइट्स जीतनी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिल्वियन और ग्लेशियन को डाउन कर रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही उनका जो डीपीएस है, इतना ज्यादा डैमेज वो जल्दी जल्दी डिश आउट करते हैं कि जब तक आप उनके आसपास रीच आउट करेंगे, फिजिकल अटैकर्स को वो अपने आसपास रीच आउट भी नहीं करने दे रहे हैं। ओह, ब्लास्टॉइज बहुत बड़ा यहाँ पे एक केओ मिलेगा लुकारियो पे। डिफरेंस अभी भी सिर्फ 12 का है, बट ब्लास्टॉइज फाइनली एजी स्लैश उनसे पीछे छुड़ा बैठेंगे। द प्रॉब्लम इज द मूवमेंट, अभी 2 मिनट टाइमर हिट होगा। रिक्वाजा को एक्वायर करके वो जो टॉप लेन का गोल है, दैट विल बी द क्लोजेस्ट टू देम। सो आई थिंक कि अगर टीम ट्रू रिपर्स यहाँ पे बस वो रिक्वाजा ले लेती है तो देयर इज नो चांस कि उसको डिफेंड कर पाना ओथ स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल मुमकिन हो पाएगा। Though knowing कि the closest top lane, goal post is so close to them, yet अभी के लिए आप देख सकते हो Snorlax is gonna be getting a big KO by himself. टॉप लेन की डिफेंस उतना ही ज्यादा आपको प्रेप्ड अप नजर आ रहे हैं, बट अब यहाँ पे शुरू हो चुका है हमारा फाइनल टेस्ट विद ओनली 5 सेकंड रिमेनिंग। यूनाइट मूव्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 खिलाड़ियों के पास यूनाइट मूव्स अवेलेबल है, एंड बीस्ट अभी भी एक बार मौका निकालना चाहेंगे केओ को डाउन करने के लिए, बट धीरे धीरे रिक्वाजा का मेल्टडाउन यहाँ पे बिगिन हो चुका है। देखते हैं किसके नाम जाने वाला है। ग्लेशियन इज गोना गेट अ बिग ब्रेक थ्रू, एंड ग्लेशियन एक्वायर करते हुए यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा रिक्वाजा फाइट कैपिटलाइज करते हुए देखने को मिल जाती थी। ऑल हैव टू जस्ट पुट इट, इट्स टीम ओथ esports who are on the verge of winning it, but no, that's not happening. 3 KO बैक टू बैक आ चुके हैं, अभी तक स्कोर करने का मौका नहीं दिया गया अभी तक ओथ esports को। What? लिटरली आपको ओथ esports ने रिक्वाजा सिक्योर किया, इवन दो 4 नॉकआउट्स का सामना उन्हें करना पड़ा। ऑल्दो ओह वाओ, एल्डगोस ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। क्या कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बचाया उस गोल पोस्ट को जब तक एजी स्लैश नहीं आ गए, एंड नाउ इट्स एजी स्लैशेस ड्यूटी कि अब यहां से वो आगे की कमान संभाले। हुपा इज डाउन राइट नाउ। आई थिंक ओथ esports वहां पे गलती बड़ी कर बैठी है। तारीफ करूंगा ट्रू रिपर्स की कि उनके पास वो रिक्वाजा शील्ड ना होते हुए भी उन्होंने ओथ esports को कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर दिया था। लेकिन क्या ओथ esports वो एक छोटा सा स्कोर डाल पाएगी? आप कौन? पिछली बार ट्रू रिपर्स की ये सिचुएशन थी और वो उस 11 के स्कोर ने उन्हें बचा लिया था। अब मात्र एक 14-15 के स्कोर, 4 का स्कोर एक जाएगा जरूर। 20, मात्र 10 का एक स्कोर। क्या नरूतो वो 38 डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। इट्स अ कमबैक from the side of both esports. What is True Rippers doing? But True Rippers got that 50. It's a 3-3-3 by 299.
एक स्कोर एंड डेसिडुआई को वो स्कोर मिलेगा. इट्स अ 3-3-3 वर्सेस 3-9-9. ग्लेशियन वहां पर गोल इकट्ठा करके अभी भी डंकिन कर रहे हैं. आखिरी सेकंड तक कहना मुश्किल है क्या 20 का एक स्कोर और डंप कर सकते हैं आप कौन? does it? It's not enough. He needed 40. Okay, I think it's a close one. लेकिन शायद 4 पॉइंट से ओथ जीत चुका है. और अगर ये हुआ है so it's again second time in a row and what? How did they do it? Exactly, क्योंकि वो जो 2 बैक टू बैक ग्लेशियन ने पहले 24 उसके बाद एक 8 डाला. आई थिंक दैट कंप्लीटली चेंज, क्योंकि 8 का डिफरेंस यहाँ पे बन गया था. इट वाज ऑल डाउन टू एन इक्वलाइजर जो एंड मोमेंट पे आप देख सकते हो ऑल द टॉप राइट पे यहाँ पे स्कोर करे थे. आई थिंक दिस इज व्हाट ट्रू रिपर्स डिड द बेस्ट. पहले बॉटम लेन की जो 2 गोल पोस्ट उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे, इट केम डाउन टू द बेस पोस्ट एंड द टॉप पोस्ट इन द वेरी फर्स्ट वन. तो वो T1 पोस्ट को इतनी अच्छी तरीके से एंड पे फार्म किया. आई थिंक ग्लेशियन चेंज द एंटायर पेस ऑफ द गेम. हर एक खिलाड़ी मिड में जो स्ट्रगल कर रहा था, बहुत लाजवाब तरीके से वो डबल डिफेंसिव प्ले जो पहले ईगो ने अपनी तरफ से निभाई, ब्लिंग अ ब्लास्टॉइज, फिर उसके बाद आपको स्लो ब्रो द्वारा देखने को मिली. हुपा डिड ग्रेट. दिवेश आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे ऑल द वे टुवर्ड्स द बॉटम साइड. अकेले खिलाड़ी थे जो पूरी तरीके से वहां पे डिनाई करने की कोशिश करते, पर उसके बावजूद स्नोरलेक्स वाज जस्ट स्कोरिंग. द मोमेंट उन्होंने वो 200 का स्कोर किया था, इट ऑल केम डाउन टू दोस माइन्यूट like opportunities with True Reapers had, and man oh man, they completely changed the face of the game. It was KO जो एंड में उनके unexpectedly all the way from the corner स्कोर कर गए. या आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी ग्लेशियन की, बिकॉज इवन आई वाज अनश्योर टिल द वेरी लास्ट मोमेंट, क्योंकि वो आई थिंक 25 पॉइंट्स का डिफरेंस था. पहले उन्होंने वो 20 का स्कोर डाला एंड आफ्टर लास्ट में वो जो 8 का स्कोर था उसने पूरा का पूरा गेम का पेस बदल दिया. बिकॉज अगर वो 8 का स्कोर ग्लेशियन नहीं डाल पाते, अगर एक इक्वलाइजर भी रहता तब भी फॉर श्योर, क्योंकि ओथ के पास पहले 399 पॉइंट्स आए तो उन्हें बाय डिफॉल्ट विनर घोषित कर दिया जाता. बट वो 8 का स्कोर, एंड अगेन मैं अभी तक क्यूरियस हूँ क्योंकि पहले ग्लेशियन गए, उन्होंने एक 100 स्कोर किया, उसके बाद उन्होंने आसपास जितनी भी यूज एनर्जी बिखरी पड़ी थी उसको इकट्ठा करके एक 40 का स्कोर किया, एंड आफ्टर दैट एक बार फिर से उन्होंने फार्म किया, 20 का स्कोर किया, और फिर लास्ट में फिर एक वाइल्डिंग उन्होंने फार्म करके जिसने उनको 4 यूज एनर्जी फॉर श्योर दी होगी, 8 का और स्कोर कर दिया. तो टिल द वेरी लास्ट मोमेंट ग्लेशियन ने हार नहीं मानी. अगर वो गिव अप कर देते या फिर थोड़ा सा भी ले ऑफ हो जाते कि चलो यार अब हो गया, जितना होना था हो गया, लेट्स गो बैक टू बेस, लेट्स डिफेंड, तो ये गेम पूरी तरह से चला जाता ट्रू रिपर्स के हाथ से. ऑल्दो ये गेम एंड पिछली बार क्लिफेबल ने वही चीज की, इस बार वही चीज ग्लेशियन ने कर दी, लेकिन दोनों बार ट्रू रिपर्स के फेवर में गया रिजल्ट. ऑल्दो ओथ ईस्पोर्ट्स के लिए ना मैं काफी दुखी हूँ, क्योंकि इस तरह से हारना, लगातार 2 बार हारना, जहां पे आप ऑलमोस्ट विक्ट्री डिजर्व करते थे, वहां पे गेम आपके हाथ में नहीं आया. सो खराब लगता है, बट या कांग्रेचुलेशंस टू टीम ट्रू रिपर्स, एक 2-1 विक्ट्री एंड व्हाट अ कमबैक आफ्टर लूजिंग दैट वेरी फर्स्ट गेम. 2-1 के साथ कमबैक, दैट इज जस्ट अमेजिंग. I think I've just seen one of the best, matches, because close match किसे नहीं पसंद है, but series की जब बात करते हैं ना, तो हर मैच, हर सीरीज में ऐसे मुकाबले नहीं होते. शायद 3 में से 1, शायद 3 में से 2, बट ये तो मुकाबला था. ये तो ऑल द वे केम टुवर्ड्स this close scoreline all the way to 8. I mean, True Reapers, you definitely gotta give it up to them. आप उनके लक की बात कीजिए या फिर उनके स्ट्रैट की बात कीजिए. OT Esports was so unlucky at this moment कि उनके 5 खिलाड़ी was just looking forward to get the score, and they did got the score. But little do they knew कि उनका एक टॉप लेन एक्सपोज है ओपनली, एंड स्लोली स्टेडली जिस तरीके से उसको लीक किया जा रहा था फ्रॉम द साइड ऑफ KO has to be the MVP. Glacian did what he is really best at, and I think previous game में ये चीज डॉड्रियो ने बहुत अच्छी की थी कि उन्होंने डिनायल देके अपने आप के लिए वो 11 का स्कोर किया था, just the way you mentioned. So I think that was a complete great. I think we have seen one of the best series so far in the tournament, but this is not yet over because we have 2 more remainings for the night. It's going to be none other than Team Marcos going up against the Liquid. Then we have Revenant waiting to fight on Pride Official. तो मैचेस तो देखिए एंडलेस है. हम फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक. मुलाकात होगी आपसे हमारे अगले मैच के साथ. Dancing on the moon.
my compass was wrong, and I'm still on my way closer to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life, you'll be dancing on the moon. I'll bet my life, you'll be dancing on the moon. I'll bet my life, you'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Pokemon Unite Spring Championship 2023 presented by Blink Entertainment. हम यहाँ पे लौट चुके हैं हमारे आज के दिन के 6th मैच के साथ. I mean, it's been a long day, but the day doesn't get so over because now it's Marcos going up against the Liquid. दोनों ही टीम बहुत डोमिनेंट वे में यहाँ पे अपने द्वारा इस ब्रैकेट पे जगह बनाई है. लेट मी रिमाइंड यू, मार्कोस ने आज के दिन 2000 पॉइंट स्कोर किए इन ओनली 2 गेम्स. पहले में 1004 वर्सेस 1048 आई बिलीव. दूसरे में दूसरे मैच पे आई थिंक 1100 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी, जहां I2K का सिर्फ 250 था. तो आई थिंक मार्कोस इज समवन हु इज रियली इन्फॉर्म्ड टुडे. But that's the case for Team Liquid, the Liquid as well. The Liquid also, the game with they have played इतने बड़े मार्जिन के साथ नहीं, but I'll see आइस एंड फायर वाला जरूर एक बहुत बड़ा मुकाबला रहने वाला है. फॉर श्योर आइस एंड फायर वाला मुकाबला रहेगा, बिकॉज लिक्विड ने अब तक जितने गेम्स खेले हैं समहाउ दे आर शोइंग देयर ट्रू पोटेंशियल. उनका अल्टीमेटली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले, गेम प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिला. एज फॉर मार्कस, वी ऑल नो हाउ गुड दैट टीम
is. They are no doubt India's number one team, लेकिन let's say कि क्या हमारे इस PUCS में भी वो नंबर वन टीम बन के सामने आ पाएंगे, क्योंकि अभी तो वो लोअर ब्रैकेट में और यहाँ से सफर उनका थोड़ा सा लंबा होने वाला है, और उस सफर को अगर वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो पहले उन्हें फेस करना पड़ेगा लिक्विड को, और उस फेस ऑफ में लिक्विड को हराना भी होगा आपको। अगेन काफी नई नई चीजें हमें बार बार देखने को मिल रही हैं, दो इवोल्यूशन, डुअल डिफेंडर कॉम्प भी हमने अब देख ली, डुअल ऑलराउंडर तो हमें चलते फिरते आजकल देखने को मिल जाता है। तो लेट्स सी अब हमें और क्या देखने को मिलेगा। बट मार्कोस भी अपनी इनोवेशन के लिए जानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव कॉम्प्स लेके आती है, खुद की एक्सपेरिमेंट्स करके लेके आती है, एंड एज यू जस्ट सेड कि आज के दिन वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 गेम्स में 2000 से ऊपर गोल्स स्कोर करना, दैट इज जस्ट फैंटास्टिक। Absolutely, I'll totally agree with you on that. But having that dual attacker, having a speed support, and only one defender, relying on that against the Liquid, who apparently loves to go on for like Hoopa. I think Hoopa का pick ये बहुत interesting होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम्स के बीच जो एक मोमेंटम है, दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा लाइक माइंडेड हमें अक्सर नजर आती है अगर आप उनके हिस्टोरिक पिक्स देखो तो बैन की जब भी हम बात करेंगे, इट हैज टू बी म्यूव, इट हैज टू बी ह्यूपा. आई वोंट इवन कंसिडर कि उर्शिफो को यहाँ पे कंसिडर भी किया जाएगा कि नहीं, बिकॉज द वे दे टेंड टू प्ले सो अग्रेसिव विथ म्यू एंड ह्यूपा बीइंग अ वेरी बिग लाइक कितने अक्सर बार अपने एबिलिटीज के साथ कितना ज्यादा वो लाइक फायदेमंद साबित होती है अपनी टीम के लिए. आई लव टू नो कि आपका इस पे क्या थॉट रहेगा, क्योंकि मार्कोस यू डेफिनेटली नो देम वे बेटर. तो डू यू रियली कंसिडर देम टू इवन थिंक अबाउट उर्शिफो, क्योंकि देखिए द लिक्विड है आमना सामना करने के लिए, उर्शिफो मे बी दे रादर गो फॉर पिकिंग ऑन फॉर देमसेल्फ, और अगर सामने वाली टीम को भी मिल गया सो दे एटलीस्ट हैव दैट डबल अटैकिंग कॉम व्हिच कुड रियली वर्क ऑन फॉर देम. अगेन स्पेशली लिक्विड के लिए उर्शिफू बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है, बिकॉज अगर बैन नहीं होता है लेट्स सी, और ऑलरेडी मार्कस के पास स्नोई है, दे हैव गॉट मेरुएम, और अगर उनमें से किसी के पास आ गया उर्शिफू तो इट्स गोना बी प्योर हेला डोमिनेशन, इट्स गोना बी जस्ट डिस्ट्रक्शन. बिकॉज सबसे पहले तो अगर उनके हाथ लग जाता है तो वी ऑल नो उन्होंने ऑलरेडी पास्ट में भी दिखाया है, ACL में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म वो ऑलरेडी कर चुके हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर उर्शिफू उनके हाथ लगता है तो वो डबल ऑलराउंडर कॉम्प के साथ जाएंगे, शायद से उर्शिफू को मचैम्प के साथ पेयर करें या फिर शायद साइसर के साथ पेयर अप करें. लेकिन अगर उनके हाथ उर्शिफू लगता है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लिक्विड के लिए फिर जीतने की लाइक प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी कि लिक्विड के फेवर में वो गेम जाए. अल्टीमेटली आई बिलीव शायद लिक्विड बैन के साथ ही जाना चाहेगी, उर्शिफू बैन रखना ही बेटर चॉइस है, बिकॉज दैट पोकेमॉन इज ओवर पावर्ड. बट एज यू सेड हूपा वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल पिक है. मार्कोस के हाथ में अगर हुपा लगा तब भी वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे. सेम गोज फॉर म्यू एज वेल. म्यू आपको पता है कितना ज़्यादा हार्ड पिक आजकल हो रहा है. लेट्स सी आई एम क्यूरियस टू नो कि क्या उर्शिफू को गेम में रखेंगे या फिर बैन करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम क्यूरियस कि डेलफॉक्स या गार्डीवेयर कौन सा वो बर्स्ट डैमेज इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी टीम की तरफ से जो भी पिक करेंगे बॉटम लाइन अटैकर्स. ऑल्दो ग्लेशियन पिक हमने काफ़ी ज़्यादा देख लिया है, सो लेट्स सी क्या मार्कोस ग्लेशियन के साथ जाएगी, बिकॉज लिक्विड आज के दिन दोनों टीम्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं. एंड मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि पिछला गेम जो हम देख के आए हैं आपको आफ्टर गेम्स दैट वर सो क्लोज, आखिरी गोल तक जिनका कोई ठिकाना नहीं था कि किसके फेवर में जा रहे हैं, वो देखने के बाद मैं ज़रूर चाहूँगा कि इन दोनों के बीच में भी वैसा ही कुछ बैटल आउट हो, क्योंकि अगर एक तरफा मुकाबला हुआ तो वो जो स्पार्क अभी जग चुकी है वो थोड़ी सी हम गवा देंगे. आई थिंक देखिए लाइक जो भी दो रिमेनिंग गेम्स है, मार्कोस एंड रेवेनेंट, लाइक जनता को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेगी. सो either it goes 2-0 they are okay with it, either it goes 2-1 they are okay with it. But the moment हम देखते हैं कि यहाँ पे वन एंड ओनली द लिक्विड अगर यहाँ पे ऊपर आ पाती है तब फिर ये एक बहुत बड़ा शौका बन जाएगा, स्पेशली at this phase, because we had a very hard breaking exit for the side of none other than Team Oath Esports already from the tournament. उससे पहले FS Esports का भी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट लाइक आई से एलिमिनेशन हुआ इस लोअर ब्रैकेट पे. द गेमिंग थ्रो गेमिंग लेजेंड्स की तरफ से भी बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ. इन दोनों में से भी एक टीम यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जाते हुए नजर आएगी, जो कि या तो द लिक्विड होगी या फिर नन अदर देन अ वेरी योर टीम मार्कोस होगी.
बट एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जो भी टीम जीतेगी उनको मुकाबला फिर यहाँ पे करने का मौका मिलेगा अपने राउंड नंबर 4 पे। तो धीरे धीरे लोअर ब्रैकेट तो देखिए एकदम लोअर फाइनल्स तक पहुंचने वाली है, वो एक ऐसे मुकाबले पे पहुंचने वाली है, मतलब लोअर फाइनल पे जाना मतलब यू आर द टॉप 3। एंड हमने प्राइस पुल की भी बात की ना, वी हैव अ प्राइस पुल ऑफ 50,000। तो यहाँ पे 5 दिनों तक इतना जितना भी टीम्स इधर compete कर रहे हैं, स्पेशली दे वुड वांट टू गो विद द लाइन शेयर ऑफ दोस रनर अप पोजीशंस, either not the first one but at least the second runner up. So let's see कि क्या यहाँ पे मुकाबले होंगे। फॉर नाउ बहुत ही जल्द हमारा जो गेम है वो आपको बिगिन होते हुए देखने को मिलेगा, as the liquid is getting themselves prepped up for the side of Marcos। एंड लिक्विड की हम बात कर रहे थे प्रीवियस ही गेम में, जो उनके 2-0 हुए, बोथ द टाइम इट केम डाउन टू द रिक्वाजा। नॉनदलेस उनकी शुरुआत जैसी भी हुई हो, बट मार्कोस के बहुत डिफरेंट हुआ थी। उन्होंने आई थिंक शुरुआती 6 मिनट पे गेम ऐसा था जब 460 to 30 का स्कोर उन्होंने बनाया था। सो दैट्स हाउ दे आर टू ग्रेट, दे टेंड टू लेवल अप प्रीटी फास्ट, they tend to take down those wild Pokemon farm, keep scoring, keep having that 3-2 strat, no player to jungle, no problem वो flank के ज़्यादा चिंता भी नहीं करते, but those double or at least single attack does come in a very good way for them. डिफेंस में भी क्या आपका like expectation रहेगा, would we go on with the side of Mamoswine या फिर स्लो ब्रो एंड क्लासिकल पिक ऑफ हम शायद स्नोरलैक्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Yeah, I'm expecting Slowbro and Snorlax for sure. वो तो रहेंगे ही रहेंगे. Apart from that, if different comp approaches, तो शायद मार्कोस या फिर लिक्विड किसी की भी तरफ से हमें शायद मेमोस्फाइन देखने को मिल सकता है, बिकॉज इट्स अ रिलायबल चॉइस एज वेल। लेकिन इन 3 डिफेंडर्स के अलावा मैं कोई चौथा डिफेंडर एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। दो हमने ट्रेवेनेंट पे कभी देखा है, ट्रेवेनेंट से लास्ट मोमेंट क्वाजा स्टील भी देख लिया है, बट आई स्टिल बिलीव कि शायद ही ट्रेवेनेंट पिक की तरफ जाए लिक्विड या मार्कोस में से कोई एक टीम। सो वी हैव टू जस्ट वेट बिकॉज जस्ट अ फ्यू मोर सेकेंड्स एंड उसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे ड्राफ्ट की तरफ एंड देखेंगे कि ये क्या बैन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं फ्रॉम बोथ द टीम्स। बिकॉज मार्कोस एक तरफ इंडिया की नंबर 1 टीम, दूसरी तरफ लिक्विड जो अभी भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं टू क्रिएट देयर नेम, दो दे आर लाइक द ओल्ड लाइन ऑफ एनिग्मा, ऑलरेडी काफ़ी ओजी प्लेयर्स उसमें हैं, बट स्टिल टू मेक अ नेम एज अ टीम की जैसे मार्कोस है। अगेन मार्कोस भी जब लाइन ऑफ फॉर्म हुआ था तो काफ़ी अलग अलग टीम से हमें प्लेयर्स इकट्ठा होते हुए नजर आए थे। इट हैपन्स विद ऑलमोस्ट ऑल द टीम्स। तो क्या वो एक ऐसा नाम बन पाएंगे कि उनका नाम भी टॉप 3 टॉप 5 टीम्स में इंडिया की लिया जाए? सो वी हैव टू जस्ट वेट सम मोर सेकेंड्स एंड उसके बाद आप कौन हम देखेंगे कि क्या क्या बैन्स रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जो क्लोज गेम्स आज हमें देखने को मिले हैं, क्या वैसे ही क्लोज गेम्स हमें आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। बिकॉज जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम जानते हैं कि अब जो टॉप की सिर्फ टीमें हैं वो बच जाती हैं, छन छन के जो एकदम टॉप क्लास टीम्स बचे हैं, मलाई मलाई टीम बची हैं ऊपर की, सिर्फ वो बच रही हैं और अब उनके बीच हमें फाइट्स देखने को मिल रही हैं। एग्जैक्टली एंड ये जो टॉप टीम्स है उनमें से ऑलरेडी ब्रैकेट्स पे एक नजर डाले, पहली सेमीफिनालिस्ट टीम एसएटीएल ऑलरेडी पहुंच चुकी है स्लोली स्टेडली। अब यहाँ पे टीम रेवेनेंट और प्राइड ऑफिशियल्स में से एक टीम उनका साथ निभाएगी। तो दोनों के बीच जो सेमीफिनाले का एक्शन है ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ अगर हम लोअर ब्रैकेट पे बात करें, ऑलरेडी बहुत सारी टीम ढकेली गई है लोअर ब्रैकेट पे। सो स्टार्ट थिंग्स अप, टीमोथ esports go down to lower bracket yesterday from Pokémon Esports is already been out of the brackets. Now Pokémon Esports is making their lower bracket run. जिनका एसएटीएल के साथ एक सामना था, it did not really went in their favor. Pokémon Esports really looked pretty well, but now they are down with us in the lower bracket, where potentially आपको मार्कर्स टीम, लिक्विड, फिर शायद रेवेनेंट और प्राइड ऑफिशियल में से एक टीम देखने को मिले। तो मुश्किल आयल से बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने वाली है इन सारे खिलाड़ियों की, बिकॉज ओनली 2 टीम्स विल गेट टू गो ऑल द वे टू द ग्रैंड फाइनल्स। बट विच टीम इज इट गोना बी, आप हमें जरूर बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्रैकेट हमारे सोशल हैंडल्स पे ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द जाइए ब्लिंक एंटरटेनमेंट पे, हमें यहाँ पे फॉलो कीजिए, सो दैट डेली हम जब भी लाइव जाते हैं, जब भी एनी अपडेट कम्स इन, यू गेट द फर्स्ट अपडेट बाय the Blink Entertainment social handle itself. But for now the ban phase is up, and as I mentioned, I really don't expect Urshifu to be right there ban, because they have many things to worry about. Dodrio, you have Maeve, you have Hoopa. तो क्या ख्याल है आपका, क्या वो 2 potential bans हो सकते हैं?
अगेन मैंने पहले भी कहा था उर्शिफू जरूर करना चाहिए बैन, एंड अगेन उर्शिफू के अलावा क्लिफेबल। ओके सो उर्शिफू बैन नहीं किया है बट क्लिफेबल बैन जरूर किया है। बैंड टेलीफॉक्स। नाउ मैं बात कर ही रहा था कि आई एम एक्साइटेड कि क्या मुझे टेलीफॉक्स देखने को मिलेगा या गार्डी देखने को मिलेगा उस बर्स्ट डैमेज के लिए। तो ऑलरेडी टेलीफॉक्स को बैन कर दिया है। एंड अगेन जैसा कि मैं बोल ही रहा था कि अगर उर्शिफू को आप छोड़ देते हैं तो मार्कोस गेमिंग में स्नोई है, मैडवियम है, उनके हाथों अगर लग गया वो उर्शिफू तो देखो ना जस्ट डोमिनेट द होल गेम। बट क्योग ही गॉट ओके, आई थॉट ही वाज अबाउट टू लॉक इन दैट साइथर, लेकिन पहले हुपा को प्रायोरिटाइज किया क्योंकि जानते हैं उर्शिफू तो जा चुका है, शायद से मचैम्प या साइथर में से भी एक चला जाए। एंड एज एक्सपेक्टेड मार्कोस गेमिंग माइट गो फॉर दैट मैमोस वाइन पिक। सो लेट्स सी अगर उर्शिफू है तो मैमोस वाइन कैन सिंक विथ हिम रियली गुड। पिक करेंगे या नहीं, अब ही विल लॉक इट अप एंड नाउ क्योग ही इज गोना गो फॉर दैट साइथर पिक। Pretty great defense play though, because Mammoth Swine के एडिशन वोक्स ने अपने आप को टाइम एंड टाइम साबित करके बताया कि why he is one of the best player to catch up his hands on Mammoth Swine. You know, if ever there was a list of players जो Mammoth Swine को सबसे बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, I think Wuxi would have been topping up the list. Mew, Urshifu, Mammoth Swine and a Ninetale देखिए पिछली बार भी उन्होंने यूज किया था। Team Marcos Gaming is all set to just make the 1-0 lead right here. और इनका सामना भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप से हो रहा है। The Liquid, they have at least one pick and वो Dodrio को भी कंसिडर करना चाहता है। At the same time, Decidua is also not a bad attacker to be ignored. So either side, I'll say, or Decidua could, I mean, like Dodrio could have made many money value, especially if you need a speedster though. बट क्या ख्याल है आपका, लाइक द लिक्विड का जो पिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लाइक हैविंग अ डुअल अटैकर, हैविंग अ सपोर्टर, देन द डिफेंस कमिंग इन ऑल द वे फ्रॉम द साइड ऑफ अ स्नोरलेक्स। फिर हम यहाँ पे बात करें अगर ऑलराउंडर की तो आपको लाइक टेन ट्रर भी देखने को मिल जाते हैं। तो लाइक इज इट गोना बी लाइक व्हाट्स योर प्रेडिक्शन हियर, बिकॉज़ आई एम रियली वांटिंग टू गो विद मार्कोस विद दिस कॉम्प। Again, देखिए Marcus is looking powerful. They've got that Mammothvine plus Ninetales combo. That OG comp is coming back and उसके लिए मैं हमेशा excited रहता हूँ. But still I believe कहीं ना कहीं लिक्विड के पास लेट गेम एडवांटेज हो सकता है। अगर टायरेनिटार 7 मिनट मार्क, इवन आई से 6:30 मिनट मार्क तक भी टायरेनिटार लेवल 9 अचीव कर लेते हैं, देन ही has the potential to completely destroy his opposition. क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ टायरेनिटार he is the best late game pick अगर आप उसको सही से लेवल अप करवा सकते हो। गॉट दैट गार्डीवोर, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं बार बार बोल रहा हूँ गार्डीवोर या फिर डेलफॉक्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। रॉलेट आपके पास है तो वो जो थोड़ा ज़्यादा स्क्विशी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि डेसिडुआई और गार्डीवोर दोनों को साथ में पिक करना, या आई होप आपके पास टायरेनिटार है, लेकिन टायरेनिटार जब तक लेवल 9 नहीं हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्क्विशी भी नहीं कहूँगा, बट उनका यूज़ बहुत कम रहता है, डैमेज काफ़ी कम डिश आउट करते हैं एंड उतनी ज़्यादा मूवमेंट स्पीड में मुझे खासा उनकी तरफ से देखने को मिलती नहीं है। दो यू गॉट दैट हुपा, तो हुपा इनका सबसे ज़्यादा हैवी प्लेयर है। हुपा इनकी रीढ़ की हड्डी अब बन चुका है, क्योंकि हुपा को बार बार आपके स्क्विशी पोकेमोन को बचा के निकालना पड़ेगा। दो यू हैव गॉट कॉफिन जो कि स्नॉरलेक्स खेल रहे हैं, ही देर आपको बचा के रख पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मार्कोस की बात करें तो अभी नहीं, बट लेट गेम में आई थिंक मिड गेम जब इवॉल्व हो जाए, एक बार एक कंप्लीट फुली फ्लैश मैमोथवाइन बन जाए, तो मैमोथवाइन प्लस एलोलन नाइनटेल का कॉम्बिनेशन चाहूंगा, बिकॉज दीज टू कैन लिटरली फ्रीज अ पाथ, दे कैन लिटरली फ्रीज अ टोटल लेन। दोनों के पास ऐसे ऐसे मूव्स हैं, आइसिकल क्रैशेस हैं, स्नो ग्लोब्स हैं, ऐसे ऐसे मूव्स हैं कि वो इजीली पुश बैक कर सकते हैं, धकेल सकते हैं। एक जो पोजीशन पे अभी पोकेमॉन है, इनके मूव्स के साथ ये उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये दोनों पोकेमॉन हो जाते हैं। एज फॉर द उर्शिफू, ही इज़ ऑलरेडी लेवल 5 उर्शिफू में इवॉल्व हो चुके हैं और जल्दी से चाहेंगे कि लेवल 9 अचीव कर लें। एक बार वो इवॉन फिस्ट इनके पास आ गया तो ही इज गोना बी अनस्टॉपेबल। Exactly, but the fight still goes on as it's going to be Artist who is still up on that, like Hoopa, but that does not really stops him. सदाव को यहाँ पे जल्द से जल्द अपने आप को हील करना होगा। He is just waiting himself down in the bottom of the entire lane right there.
म्यूरियम इज ऑल्सो राइट अप। देखते हैं कि किस तरीके से ये जो बढ़त फिलहाल मार्कोस को मिली है, लाइक डिफेंस आप देखिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइक दिस इज व्हाट दे डिड टू I2K एंड आई फील दैट दिस इज नॉट व्हाट दे वांट टू डू टू आवर वेरी ओन टीम लिक्विड, बिकॉज अब तक वो पहला स्कोर का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ऊपरी स्थान पे आपको इधर देखने को मिल जाते हैं हमारे शिफू। बॉटम साइड पे स्नोरलेक्स could have really taken down Mew, but that is not the case as Hoopa comes down, switching off the lane, and the 59 point is still looking very promising. ये एक बहुत अच्छा लीड, एक बहुत अच्छा प्रेशर दिख रहा है, बट नॉर्दर्न साइड पे अब यहाँ पे मुश्किलें बनेगी अब, क्योंकि डेसिडुआई और शिफू के अगेंस्ट पे पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। इट्स अ 2 versus 1 सिनेरियो देयर, बट वहां का हार यहाँ के लिए फायदा बन सकता है, क्योंकि अगर इट्स अप देयर इन अ 1v2, इट्स डाउन हियर इन अ 4 versus 3 एंड टीम मार्कोस इज ऑलरेडी फायरिंग अप। स्नोरलेक्स को डाउन कर दिया गया है, 4v2 का सिनेरियो बन चुका है, बट कॉल ऊपर चले जानी चाहिए कि देयर इज नो प्लेयर ऑन द टॉप लेन। फार्म करके आराम से स्कोर करने का एक अपॉर्चुनिटी है उधर, बट दैट्स नॉट द केस। म्यू यहाँ पे रेजी रॉक को लेके जाएंगे एंड ही इज लुकिंग टू स्कोर, फाइनली टेकिंग द मूवमेंट। आप देखते हैं टॉप पोजीशन पे कितने स्कोर यहाँ पे अपने द्वारा निकाल सकते हैं हमारे प्लेयर फ्रॉम द साइड ऑफ वेरी ओन। ओके, इट्स गोना बी नन अदर देन आई बिलीव म्यू, जो कि बैक टू बैक स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पे डाउन किया गया महमूद स्वाइन द्वारा, एक बार फिर स्नोरलेक्स इज गोना बी टेकन डाउन, बट जो टॉप लेन है देखिए उस पर कितनी वैल्यू निकल रही है, बट आई थिंक उसके काउंटर पे बहुत ज्यादा गोल भी यहाँ पे ऑलरेडी इनेल कर चुकी है हमारी टीम, लाइक मार्कोस ऑन द साइड ऑफ लिक्विड। Yeah, indeed. Team Marcus are looking really powerful. On the other hand, Team Liquid मुझे काफी ज्यादा स्लो गेम उनकी तरफ से नजर आ रहा है। Although they've got that Hoopa, उसके बाद भी उनकी रोटेशंस comparatively स्लो हैं। आप देखिए कितना ज्यादा फास्ट रोटेशन मार्कोस दे रही है। बट अगेन टीम लिक्विड के पास जो कॉम्प है वो थोड़ी सी लेट गेम ओरिएंटेड कॉम्प है, इसीलिए हमें अर्ली स्टेज उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गोल्स भी देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि आप देखें जब आप बात करते हैं गाड़ी की तो उनको भी थोड़े लेवल अप की ज़रूरत है। गाड़ी और डेसिडुआई अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एल एंड द सेम गोज फॉर हूपा। बट सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जो पिक है वो थी टायरेनीटार की, और टायरेनीटार मैंने शुरुआत में ही कहा था लेवल 9 हो गए बहुत ज्यादा अनॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले टायरेनीटार की वैल्यू हमें ना के बराबर देखने को मिलेगी, एंड दैट्स व्हाट जस्ट हैपेंड। बट नाउ ही हैज गॉट दैट एंशिएंट पावर एंड डार्क पल्स। लेट्स सी क्या रेजी लेके सिक्योर कर सकते हैं, मौका है नहीं, लेट हुए, कंटेस्ट आई बिलीव नहीं कर पाए, एंड द रेजी लेकी गोज इन द फेवर ऑफ टीम मार्कोस गेमिंग। ऑल्दो पुश करवाने की शायद ही कोशिश करे। ओके, यूनाइट मूव फ्रॉम द साइड ऑफ म्यू, मिस्टिकल मर्राज। ओके, आई थिंक ओ फेरी सिंगुलैरिटी भी वहां पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन इट्स अ 5 versus 2 सिचुएशन नाउ। मार्कोस गेमिंग पुशिंग लाइक देयर इज नो टुमारो, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि बेस पे खड़े होके शायद टीम लिक्विड वो फाइट अपने लिए निकाल लेगी, लेकिन उस फाइट में भी मार्कोस ने डोमिनेट किया, 4-5 नॉकआउट्स लिए, और इन दी एंड आपने कुछ नहीं किया, बस आपने मार्कोस को फीड कर दिया, गोल्स भी फीड किया और लेवल भी फीड कर दिया। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर टीम लिक्विड एट ऑल। बिल्कुल, बात ये देखिए रेजी रॉक के लिए दिक्कतें पड़ती हुई आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि that's going to be acquired once again from the side of very own Marcos Gaming। Marcos Gaming के पास बहुत सारे खिलाड़ियों के लेवल अप यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, but that's where Decidua is going to go all the way in his very own ultimate form as he is really good, bringing so much value। ऊपरी सर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Ninetale is also taking a lot of damage। ये जो रेंज एडवांटेज है उनके पास वो पूरी तरीके से उनके लिए फायदेमंद आपको सो फार साबित हो रहा है, बट देखते हैं कि धीरे धीरे लीड कवर अप करते करते कैसे यहाँ पे क्लाइम अप करेगी, कि नाउ इट्स ऑल डाउन टू दीज ऑब्जेक्टिव प्लेस। वूपा गोइंग ऑन ऑल द वे इन द यूनाइट अल्टीमेट, बट यूनाइट मूव होने के बावजूद किसी भी प्लेयर को यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़े नहीं जा पाए, सो डिडंट रियली एबल टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। बट डिफेंस अभी भी बहुत स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है, फर्क अब सिर्फ और सिर्फ 31 का बच चुका है। तो टीम मार्कोस दे हैव ऑलरेडी वेंट डाउन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा सेटअप के साथ यहाँ पे अपने लिए फाइनल स्ट्रेच का इंतजार करते हुए देखने को मिलेगी, बट म्यूव let's see how it goes for him as he is all the way from the side of Kurim। Yeah, indeed, Mariam, he's doing good with that Mew। Although देखिए जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था कि लीड गेम ओरिएंटेड कॉम्प थोड़ी सी है टीम लिक्विड के पास, एंड फाइनली अब उनको थोड़े बहुत लेवल्स भी मिल चुके हैं, तो ये वाली टीम फाइट अगर वो नहीं निकाल पाते तब दिक्कतों में फंसेंगे। वॉक्स ऑन
नॉट गुड, स्नॉर्लेक्स को फंसाया एंड यही मैं बोलता हूँ वो आइसिकल क्रैशेस। देखिए कितना ज्यादा आगे तक गए और वहां पे जाके उर्शिफू डाउन करके आए हैं डेसी डुआई को एंड दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन। पीछे रह गए थे और मैं बार बार कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ दो हैवी पिक्स हैं आपके पास, एक स्नॉर्लेक्स हैं और दूसरे आपके पास टायरेनिटार हैं। यू हैव टू मूव विद द टीम। टायरेनिटार ज्यादा दूर रह गए थे, लेट एंट्री कर पाए। इतनी देर में सबसे पहले स्नॉर्लेक्स को डाउन किया गया और उसके बाद डेसिडुआई को भी डाउन किया गया और उसी की वजह से आप देखिए अब लेवल 13 फीड ऑलरेडी हो चुके हैं वो उर्शिफू एंड अगर ऐसे ही उनको आप फीड करते रहे तब आपके लिए कमबैक ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि आपके पास ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं है एक्सेप्ट फॉर टायरेनिटार जो कि लेट गेम में आपको सपोर्ट दे सकें। टायरेनिटार की भी अगर आप बात कीजिए तो टायरेनिटार इज अ स्लो पोकेमॉन, वो टीम फाइट्स काफी अच्छी निकालेगा, वो कंट्रोल काफी अच्छा बनाएगा, लेकिन वो उर्शिफू की तरह सिंगल टारगेट्स की तरफ नहीं जा सकता है। उर्शिफू जल्दी जल्दी जा सकते हैं जैसे उन्होंने जस्ट अभी डेसिडुआई को पकड़ा, बट राइट नाउ इट्स टाइम फॉर दैट लेजेंडरी रेक्वाजा स्पॉन। ऑलरेडी सेंट्रल पिट के आसपास इकट्ठी हो गई है टीम लिक्विड and they are going for the 50-50 Rayquaza almost melt down and they have got it, secured it with that fairy singularity plus a spirit shackle from the side of Decidueye और अब शायद से गोल्स के लिए जाएंगे। लेकिन देखिए टायरेनिटार को अगर मिल गई रेक्वाजा शील्ड तो वो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा फाइट में लगे हुए हैं। उनको पता है रोकते हैं लेकिन तब तक तो टीम लिक्विड के बाकी खिलाड़ी काफी अच्छे गोल्स स्कोर कर देंगे। टायरेनिटार ही इवन गॉट 2 KOs and you go there you go Marcos Gaming, they had no other choice but to surrender क्योंकि वो रेक्वाजा जैसे ही मिल गया था, स्पेशली अगर आपके पास टायरेनिटार प्लस रेक्वाजा शील्ड है देन देयर इज नो वे। जब तक आप वो टायरेनिटार की रेक्वाजा शील्ड तोड़ेंगे तब तक तो वो 3-4 पिक्स निकाल लेगा एंड वही हुआ, उन्होंने 2 नॉकआउट्स ले लिए तब जाके उनकी जो रेक्वाजा शील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो पाई। या तब जाकर हमें शील्ड डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आई है तरुण, बिकॉज टिल द वेरी लास्ट मोमेंट हम बार बार देख रहे थे कि कैसे कैसे सिक्योर किया था, कितने अच्छे से गेम निकाला था पूरा का पूरा मार्कोस ने। लेकिन मैंने शुरुआत में भी यही कहा था आपकॉन की जो टीम लिक्विड की कॉम्प है वो लेट गेम ओरिएंटेड कॉम्प है और उनको जैसे ही वो फाइनल स्ट्रेच दिखा वैसे ही वो सीधा रेक्वाजा की तरफ बढ़ गए। And I mean, like with that, बहुत ज़्यादा unexpected scoreline though, because not really something which we expected, especially like I was like all in कि मार्कोस की जो कॉम्ब हमें स्पेशली देखने को मिल रही है। शुरुआती स्टेज पे भी हम देख सकते थे किस तरीके से उनके पास एक अच्छी बढ़त बन चुकी थी 89 on 0, लाइक बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा था यहाँ पे स्कोर्स करने की। बट चलिए उसके बावजूद यहाँ पे पहला गेम टीम लिक्विड अपने नाम कर चुके हैं, उसके साथ ही साथ अब यहाँ पे गेम नंबर 2 की तरफ तो हम बढ़ने वाले क्योंकि एक आखिरी मौका है एंड इस मौके पे अगर मार्कोस गेमिंग नहीं जीतती है तो एक बहुत बड़ा आई विल से कि हमारे लिए एक वो हो सकता है कि टीम मार्कोस वुड बी वन ऑफ दोस अदर टीम हु विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी। Let's see because Marcos again बार बार कह रहा हूँ they are among the top 3 teams of India। I think अभी तो हम no doubt number 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है उनका रिसेंट टूर्नामेंट्स में, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंस उनका है दैट्स जस्ट फैबुलस, आउटस्टैंडिंग। लेकिन अभी इस टूर्नामेंट की आप बात कीजिए तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। ऑल्दो अभी हमने आज के दिन के जो शुरुआती 2 गेम्स देखे थे दे वर लिटरली डोमिनेटिंग। उन्होंने लाइक आपने जैसा बताया 2 गेम्स में 2000 से ज़्यादा का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन इस गेम में कहीं ना कहीं पूरे गेम उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पर जो मैंने बार बार बताया कि टीम लिक्विड की लेट गेम ओरिएंटेड कॉम्प है और उसी के बूते पर टीम लिक्विड पूरी तरह से रेक्वाजा की तरफ बढ़ी। 2 सिक्योर थे, एक था गार्डीवॉर का यूनाइट, दूसरा था डेसिडुआई का स्प्रिट शैकल। सबसे पहले गार्डीवॉर का यूनाइट माला, सिंक्रोनाइज किया टीममेट्स ने एंड इंस्टेंट स्प्रिट शैकल ऑन टाइम ऑन पॉइंट दे हैव सिक्योर्ड दैट रेक्वाजा, दे हैव गॉट दैट टायरेनिटार। और टायरेनिटार को रेक्वाजा शील्ड मिल गई तो बाकी पूरी अपोजिशन उसके अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी और आपके बाकी के जो स्क्विशी पोकेमॉन है दे कैन इजीली गोल, दे कैन इजीली सिक्योर सम गोल, सम स्कोर इन देयर फेवर। बट देन अगेन क्या ये बार बार आप कर सकते हैं? नो, इट्स अ वन टाइम डील। आप हर बार ऐसे रेक्वाजा के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते क्योंकि हम जानते हैं आप कौन, एक
लाइक 0.1 सेकंड की देरी या फिर जल्दी और रिकॉर्ड आपके हाथ से चला जाएगा। तो लिक्विड को कुछ ना कुछ काउंटर स्ट्रेट सोचना पड़ेगा। दो आई एम सरप्राइज्ड कि मार्कोस के जो उर्शिफू थे उनका डैमेज बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि एंड गेम में तो उन्हें फाइट का मौका ही नहीं मिला, एंड ऑल ओवर द गेम में मुझे जी फाइट्स उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती हुई नज़र नहीं आई। exactly, and like end moment pe, the way Team Liquid went so confident, I think the trust which they had in each other really paid off so well. या We did not expect it कि Marcos given the form कि वो हजार स्कोर यहाँ पे करके आपको इस लाइक ब्रैकेट पे देखने को मिल रही है, एक ऐसे ब्रैकेट पे which is more of a like a deadly bracket. But yeah, the moment they lost Rayquaza like very easily, like मैं कहूँगा meltdown, like it what came down in 10-13 seconds, 20th second तक तो already surrender आ चुका था, and फिर they were just waiting. डिस्कशंस आ जाएंगे, हर एक चीज अभी के लिए उनके मन में चल रही रहेगी that how they could really correct off and how they could really counter off. Because आप जैसे शुरुआती फेज पे बात करी थी, Urshifu was not the ban, yet it was a pick या which came in from the side of MG Marcos Gaming. Still I didn't like जैसे हम स्टार्ट्स की तरफ बढ़े थे, like didn't make the most out of it. म्यू का मैं जरूर एक पिक एक्सपेक्ट करना चाहूंगा इस समय पे, but Mammoth Swine as well was kind of I'll say like really missing. Like Snorlax बहुत लाजवाब तरीके से काउंटर बना, तो बैन मुझे लग रहा है कि ये टाइम थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अगेन उर्शिफू एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, बट आई थिंक टायरेनिटार इज अ गुड ऑप्शन स्पेशली फॉर मार्कोस गेमिंग, क्योंकि टायरेनिटार के साथ अभी जो किया है टीम लिक्विड ने उसके बाद बैन कर देना ज़्यादा सेफ ऑप्शन रह सकता है। बट लेट्स सी यप देयर यू गो, उर्शिफू प्लस डॉटरियो, एंड देखिए ये अच्छा चॉइस है। मार्कोस गेमिंग उर्शिफू यूज कर चुके हैं, नहीं वर्कआउट कर रही है उर्शिफू कॉम्प, उनको पता है वी नॉट गोना यूज उर्शिफू, तो वी वोंट अलाउ द अदर टीम एज वेल। एंड दूसरी तरफ जानती है टीम लिक्विड कि मार्कोस गेमिंग के पास बहुत अच्छे डॉडरियो प्लेयर है, एंड दैट इज नन अदर देन स्नोई, एंड स्पेशली इस डू और डाई गेम में मार्कोस गेमिंग के पास अगर डॉडरियो आ जाता है वो स्कोर गेम के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको स्कोर की सबसे ज्यादा जरूरत है और वो उनका बेस्ट चॉइस है, सबसे इजी वे है विन करने की। इसीलिए टीम लिक्विड ने पहले ही शट डाउन कर दिया डॉटरियो को, ताकि आपके पास वो ऑप्शन बचे ही ना। और टीम लिक्विड फॉर श्योर वो यही चाहते हैं कि 2-0 के साथ जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि वो उनको पता है कि अगर मार्कोस को हमने स्पेस दिया, मार्कोस को थोड़ा सा भी ऑप्शन दिया सोचने का या वापसी करने का, देन वी आर डूम्ड। और उसी की वजह से डॉटरियो इज बैंड, दे हैव गॉट गार्डी, क्योंकि गार्डी ने बहुत अच्छी वैल्यू निकाली थी, दे हैव गॉट दैट टायरेनिटार, बहुत अच्छी वैल्यू निकाली थी, हुपा ले लिया। अब तक कॉम्प सो फार सेम है, अगली दो पिक्स भी क्या सेम आएंगी। दूसरी तरफ मार्कोस की आप बात करें तो क्लिफेबल पिछली बार बैन था, बट नॉट दिस टाइम। क्यूरम गॉट द क्लिफेबल, एंड क्यूरम ऑलरेडी 1,40,000 तक की भी रिकवरी दिखा चुके हैं विद दैट क्लिफेबल। मीडियम गॉट दैट डेलफॉक्स, अगेन मैंने पिछले गेम में भी बोला था कि आई एम एक्साइटेड टू सी डेलफॉक्स, लेकिन बैन हो गया था डेलफॉक्स, बट नॉट दिस टाइम। दो टीम लिक्विड दे हैव गॉट दैट मैमस वाइन, एंड आई थिंक वो उनके लिए बहुत अच्छी पिक होने वाली है, बहुत अच्छी पिक साबित होगी। तो अगर आप बात करें मार्कोस की, तो स्नोई के हाथ साइथर लग गया है, एंड बिलीव मी साइथर के साथ वो असैसिनेशन करने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि बार बार जाके स्पेशली गार्डी को और फ्यूरा को, इन दोनों को बार बार डाउन कर सकें। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉफिन एंड क्यूग्र कि वो अपने इन दो स्क्विशी पोकेमॉन को कैसे बचा पाते हैं। Yeah, I think once again the pick looks pretty decent. The Liquid, ये time I think bringing Sizer, bringing Leon would really pay off quite well. But Gardevoir इस समय पे आपको like control पे दिखने को मिल जाती है टीम Liquid के, while Decidueye is also be something that they'll be having alongside Mamoswine. So no Mamoswine for Marcos. Marcos is up with Snorlax. So let's see how this game goes, क्योंकि ये एक दूसरा मुकाबला है, एक आखिरी मौका है मार्कोस के लिए। If they really win this, they really getting themselves in another round for themselves. But if not, तो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट होगा, बिकॉज देखिए ऑलरेडी ट्रू रीपर्स इंतजार कर रही है इस गेम का। जरूर चाहिए वो कि कौन सी एक टीम है जो इन दोनों में से आगे बढ़ेगी। यह मैच ऑलरेडी बिगिन एंड शुरुआती मूवमेंट्स पे अभी हम आ चुके हैं, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छे
वाइल पॉकीमॉन्स को लाइक यहाँ पे स्कोर अप करते हुए देखने को मिलेंगे, यॉस एनर्जी जमा करेंगे, फर्स्ट गोल ऑलरेडी आ चुका है विच इज फ्रॉम द साइड ऑफ क्लिफेबल। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं none other than Sizer, who is also going to be taking some good ones, but Mamoswine from the side of Team Liquid is bringing so much levels to himself. या इंडीड एंड अगेन आपको टॉप पाथ पे वहाँ मौका था, ऑलमोस्ट कोशिश भी की गई थी फ्रॉम द साइड ऑफ दैट लेविटार, और अगर लेविटार किसी भी तरह से कामयाब हो जाते साइथर को नॉकआउट करने में तो उससे ज़्यादा अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सकता था टीम लिक्विड को। दो लेविटार को आप अच्छे से स्टैक्स करा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, अच्छा खासा फार्म उनको मिल रहा है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, बिकॉज हम जानते हैं अगर उन्हें सही समय पर टायरेनिटार में इवॉल्व नहीं हो पाए तब गेम ऑलमोस्ट हाथ से चला जाएगा। बट यू गो, आई थिंक टीम मार्कोस ने ऑलमोस्ट सिक्योर कर लिए हैं वो जितने भी स्वाबलूस एंड अल्टारिया आया था उनको जल्दी फटाफट से सिक्योर कर लिया था। क्लिफेबल बहुत ही ज़्यादा डैश एचपी पे बच के निकले थे। मेरियम ऑन दी अदर हैंड जल्दी से जल्दी फार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों बफ्स उनके पास हैं, लेकिन जानती है मार्कोस की ओवर एक्सटेंड करने की सिचुएशन में वो नहीं है। ओवर एक्सटेंड किया, एक गलती की और वहाँ से कैपिटलाइज करना चालू कर देगी टीम लिक्विड। और टीम लिक्विड का तो हमने पिछली बार भी देखा था तरुण, उनका स्लो गेम ही रहेगा क्योंकि उनका टारगेट अर्ली गेम पे नहीं बल्कि लेट गेम पे रहेगा। Exactly, I think the Team Liquid, they all prepped up with this matchup and Marcos, basically आपको mention किया बिल्कुल सही था, अपनी गलतियों की गुंजाइश वो नहीं कर सकते, they cannot really afford it, especially right away in the very last stage of the entire scenario. But let's see the situation, which situation is really going to come in eventually. 25 पे यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिल रहा है। या इंडीड काफी अच्छा स्कोर किया जा रहा है। एंड मार्कोस को देखिए पिछली बार भी हमने यही देखा था आपकॉन कि वो शुरुआत में स्कोर ओरिएंटेड गेम खेल रहे थे टिल द वेरी एंड। एंड सबसे अच्छी चीज जो की है लिक्विड ने दैट इज वो डॉटरियो बैन, क्योंकि मार्कोस के हाथ में आप सोचिए जब वो बिना डॉटरियो के इतना ज्यादा स्कोर ओरिएंटेड गेम खेल रहे हैं तो अगर डॉटरियो उनके हाथ लग जाता तो कितना ज्यादा अर्ली स्टेज में इवन मिड स्टेज तक वो स्कोर करने की कोशिश करते। वॉक पीछे हटेंगे, ट्रेनिंग केसेस का इस्तेमाल वहां पर करते हुए मिस्टिकल फायर ही नीड्स टू बैक ऑफ एज सून एज पॉसिबल एंड दैट ही विल डू। टॉप पे आप देखें तो ऑलरेडी पपीटार में इवॉल्व हो जाती हैं लेविटार, जस्ट 2 more levels और फिर वो एक अच्छे टायरेनिटार बन पाएंगे। आप बात कीजिए डेलफॉक्स की तो ही इज ऑलरेडी ऑन लेवल 8 एंड उनकी कोशिश यही रहेगी जल्दी से जल्दी लेवल 9 कर पाए, यूनाइट मूव लें। बट यूनाइट मूव आ चुका है फेरी फ्रॉल एक नन अदर देन सिल्वियन के पास एंड बॉटम पे आप देखिए तो सिल्वियन ऑलरेडी एक फाइट में एंगेज कर रहे हैं। इस बार आई थिंक थोड़ा सा पीछे रहे वही बेहतर रहेगा लिक्विड पे, क्योंकि फाइट में अगर गए तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि मार्कस गेमिंग ऑब्जेक्टिव भी लेके जाएगी और आपके नॉक्स से भी वो फार्म कर लेंगे। देखो वो मिस्टिकल फायर एंड उसके साथ फ्लेम चार्ज से फटाफट मेरियम सिक्योर करेंगे रेजी रॉक को। ऑन दी अदर हैंड टीम लिक्विड टॉप पर रेजी लेकी गेम दिखाती हुई, दे विल सिक्योर रेजी लेकी, देखो ना स्कोर सम गोल्स एज वेल। ऑन दी अदर हैंड मार्कोस वो बॉटम पर ही कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, राइट इवन कामयाब भी हो रही है आपको, वो बार बार कामयाब हो रहे हैं। इट्स हार्ड टू स्टॉप मार्कोस फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू एंड ये चीज जानती है टीम लिक्विड, इसीलिए वो उनके रास्ते में आने की बजाय वो अपना अलग रास्ता चुन रहे हैं। वो बॉटम पाथ की बजाय टॉप पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं एंड अगर सेकंड गोल पोस्ट भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सो दे कैन टारगेट फॉर दैट लास्ट मोमेंट रेजी लेकी, जो जस्ट हमें रेक्वाजा स्पॉन से थोड़ी देर पहले ही देखने को मिलता है। So I'm excited to witness that, but here comes the Unite move of Delphox. Fanciful fireworks joining that was a fairy frolic and this can destroy Team Liquid. दो खिलाड़ियों को नॉकआउट किया, one was Pilizvine, the other was Gardevoir and वो Gardevoir knock crucial जरूर रहेगा, लेकिन you have got that Tyranitar है, Tyranitar का बेसिक अटैक ही नहीं बल्कि ये डार्क पल्स और एंशिएंट पावर, इससे बचना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जरूर डाउन करेंगे किलफेबल को। ओके ऑलरेडी डाउन किया गया है हमारे साइथर को भी और साइथर पे इज क्रूशियल वन, ऑल्दो डेसिडवाई की आप बात करें तो ही इज ऑलरेडी ऑन लेवल 11। इट्स अ गुड थिंग फॉर टीम लिक्विड, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी गार्डी को भी लेवल 10 अचीव करवाना पड़ेगा बिकॉज गार्डी का वो लेवल डेव अगर डेलफॉक्स से कम लेवल के रहेगा गार्डी तो लेट गेम में काफी दिक्कतें होंगी।
बिल्कुल, एंड अब देखिए अंतर जो है सिर्फ 29 का बचा है. सो दिस कुड प्रीटी मच लाइक गेट एनीवे बिकॉज टीम मार्कोस ये भी आप देख सकते हो बिल्कुल भी लाइक ज्यादा स्पेस नहीं दे रही है. एंड स्लोली स्टेडली द वे द लिक्विड हैव बीन रियली गॉटन एन आइडियल स्टार्ट. हूपर एज वेल इज रियली बीइंग अ वेरी अनोइंग थिंग स्पेशली इफ यू आर प्लेइंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट. एंड इस तरीके से आई बिलीव मार्कोस के लिए मुश्किल आ सकती है. अभी ये देखिए यहाँ पे रेजी मिल चुका है फिलहाल के लिए. Desi Dwyer doing a great job, but Sora is taken down. That's going to be a big breakthrough क्योंकि ये चीज के जैसे गाड़ी वॉर अभी के लिए KO हो चुके हैं. Desi Dwyer is going to get another pick and this time Reggie Rock will be confirmed from the side of Verion Marcos Gaming. तो दोनों ही तरफ से जो मुकाबला है ये बहुत ज्यादा कांटे का चल रहा है. बट Hoopa unleashing it's Hoopa Unite. Let's see Hoopa किस तरीके से यहाँ पे एक भी प्लेयर आर्टिस्ट को डाउन करते हैं. फाइनली आर्टिस्ट को डाउन जरूर करने में सक्षम हो रहे थे बट उसके पहले ही is going to be taken down towards the side of Clefable. It's still down to only 29 score which is remaining. बट इसी के साथ सीवली ऑन यहाँ पे डाउन करेंगे एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे गार्डी वॉइड को. तो मार्कोस गेमिंग दे आर सर्टेनली लुकिंग प्रीटी गुड एंड देयर कम्स Mammoth Swine as well who will be eliminated. ये स्कोरिंग ऑप्शंस कितना ज्यादा बना देता है. आई थिंक दिस ब्रिंग्स देम राइट बैक इन द गेम. Hoopa भी अभी के लिए डाउन हो चुके हैं. अब मुझे लगता है दे आर नॉट जस्ट बैक बट दे माइट आल्सो कम अप विद अ गुड लीड. ये देखिए पूरी तरीके से तैयार है एंड ऑलरेडी 242 का यहाँ पे जो स्कोर है वो अपने नाम बना के 82 पॉइंट्स का लीड ले चुकी है. अब इस लीड के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बचे. 1 मिनट पे वो फाइनल स्ट्रेच आ सकता है एंड मार्कोस इज लुकिंग टू जस्ट प्ले अराउंड द जंगल. Yes, indeed, they are playing around the jungle. As for Marcos, उनके वो काफी अच्छी लीड वहां पे मिल गई. ऑल्दो टॉप पाथ पर डेसिडुआई ने जो वैल्यू निकाली दैट वाज ऑल वर्थ इट क्योंकि उन्होंने सबसे पहले डेलफॉक्स ने यूनाइट मूव अनलीश किया था जस्ट टू सिक्योर दैट रेजी लेकी. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रेजी लेकी पे फाइनल हिट लिया. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन इल्यूजन डाइव आई थी साइथर की तरफ से. एक ही पिक उन्हें मिला. उसके बाद डेसिडुआई ने उन्हें भी नॉकआउट कर दिया था. तो डेसिडुआई काफी अच्छी वैल्यू निकाल रहे हैं बट ही हैज टू मेक श्योर कि वो अपने दो बढ़िया एचपी पोकेमॉन के पीछे रहे. वन इज टायरेनिटार एंड द अदर इज मैमथ स्वाइन. अगर उनसे अलग जाएंगे तो उनको नॉकआउट मिल जाएगा. ऑल्दो जो सप्रेस किया है मार्कस ने स्पेशली गाड़ी को वो काबिल तारीफ है. और ये जो लेवल डिफ अप क्रिएट हो चुका है ये बहुत दिक्कतें देगा टीम लिक्विड को. लुक एट दैट टीम मार्कस. दे आर ऑलरेडी अराउंड द सेंट्रल पिट एंड दे आर लिटरली रेनिंग ओवर दैट सेंट्रल पिट. वो चैलेंज कर रहे हैं टीम लिक्विड को. कम हियर इफ यू आर. चलिए आइए हम इंतजार में बैठे हैं आपके. और आप हम सब जानते हैं अगर लिक्विड वहां पे गई एक भी गलत मूव उनकी तरफ से और एंट्री लेने से पहले पहले ही उनको टीम नॉकआउट दे दिया जाएगा. मार्कोस दे आर आल्सो मेल्टिंग दैट रेक्वाजा बट टायरेनिटार फाइनली विद दैट एंशिएंट पावर. रेक्वाजा ही इज ऑलरेडी ऑन लेवल 50 बट आई थिंक 2 नॉकआउट मिल जाते हैं मार्कोस को और यहां से गेम भी मार्कोस लेके जा सकती है. टायरेनिटार बचेंगे. दैट वाज क्लोज. Hoopa विद दैट रिंग्स अनबाउंड. लेकिन पोकेमॉन्स अलाइव नहीं है. इट्स ओनली गाड़ी एंड दैट टायरेनिटार जो कि अभी हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ टीम लिक्विड. मार्कोस जानती है दे डोंट नीड दैट रेक्वाजा डेस्परेटली. इसीलिए थोड़ा सा फाइट्स पर ही फोकस करिए एंड दे आर गेटिंग दोस नॉक्स वन बाय वन. टीम लिक्विड डाउन टू 3 men. अब कौन? इट्स गोना बी रियल हार्ड फॉर टीम लिक्विड टू कम बैक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. बिल्कुल. I think look at that chase. Shura. That chase looks so good and Decidui he too is going to be taken down but now the entire game comes down to the side of Rayquaza with only 48 seconds remaining. Rayquaza को मेल डाउन करने की शुरुआत हो चुकी है but it's only one player. Mammoth Swine needs to steal it. He is knowing कि यहाँ पे मेल डाउन आ रहा है but अकेले देखते किस तरीके से मेरियम यहाँ पे अपना कमाल कर दिखाते हैं. स्लोली स्टेडली सारे प्लेयर्स आ चुके हैं. यहाँ पे स्टील एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है but no that's not the case. The denial comes through and Rayquaza अब हाथ लग चुकी है टीम मार्कोस की. शायद उनको यहाँ पे गेम भी पूरी तरीके से क्लोज आउट करने का मौका मिले अनलेस अभी भी 4 खिलाड़ी को डाउन करने का मौका मिल पाए क्योंकि ऑलरेडी स्नोलैक स्कोर कर चुके हैं. 3 खिलाड़ी बाकी है डिफेंड करने के लिए. उनके पास खुद का बेस ही यहाँ पे बचा है but that's not gonna happen. That's it. Team Marcos will take us to game number 3 and what a game for them.
बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल गलतियां नहीं की. Mamoswine really barely survives it from that attack onto the side of Clefable, but that's the end and that is the game नंबर 2 जो कि आपको जाते हुए देखने को मिल जाता है टीम मार्कोस गेमिंग के नाम. दे स्टिल स्टे अलाइव फॉर येट अनदर राउंड और ये राउंड डिसाइड करेगा कि इज इट गोना बी मार्कोस और टीम लिक्विड जो इस मुकाबले में आपको नॉकआउट होते हुए देखने को मिलेगी. नॉनदलेस बहुत लाजवाब प्रयास रखा वोल्क विद दैट एंटायर प्ले व्हिच ही केम इन फ्रॉम द साइड ऑफ सीरियन. completely looked well, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा पोकेमॉन जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अटैकिंग प्लेस को बहुत अमेजिंग रख सकते हैं. उनके काम माइंड, उनके फेरी फ्रॉलिक रियली पेड ऑफ सो वेल. इन दी एंड अगर हम स्टैट्स की भी बात करें, आर्टिस्ट का यहाँ पे रिकवरी देखिए लगी लिटरली 25 के ऑलमोस्ट. मीनवाइल क्यूरम एज वेल विद द क्लिफेबल रिकवर्स विद लाइक व्हाट 125 के. दैट्स अनबिलीवेबल हैविंग अ सपोर्ट बाय योरसेल्फ. यस इंडीड, हैविंग द सपोर्ट बाय सेल्फ. अगेन आप देखिए क्यूरम, जैसा कि मैंने बताया भी था कि क्यूरम जब जब क्लिफेबल उठाते हैं तो ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख की रिकवरी हमें देखने को मिलती है और इस बार भी 125,000 की रिकवरी उनकी तरफ से हमें देखने को मिली है. अगर आप देखें तो बॉल्क की आप बात कीजिए, उन्होंने भी 26,000 की रिकवरी, 80,000 का डैमेज उनकी तरफ से डील हुआ. दैट इज सो गुड. आप बात करें अगर टीम लिक्विड की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे. हालांकि जिस हिसाब से फ्यूरा और सडाओ को नलीफाई किया है, ऑल ओवर द गेम उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की गई है. फ्यूरा कई बार मैंने देखा था, फ्यूरा फिर भी सर्वाइव कर रहे थे, फ्यूरा फिर भी वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन सडाओ को ऑलमोस्ट नलीफाई कर दिया गया था मार्कोस की तरफ से. उसने काफ़ी अच्छा पे ऑफ निकाला एंड लास्ट में वो जो सेंट्रल पिट के अराउंड उन्होंने अच्छी खासी फील्डिंग जमा रखी थी, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की मार्कोस की. ऑल्दो देखिए पहले गेम में मार्कोस के फेवर में नहीं गया था रेक्वाजा, लेकिन इस गेम में रेक्वाजा भी फेवर में गया एंड गेम भी फेवर में गया. लेकिन इसी के साथ आप कौन अब 1-1 की बराबरी दोनों टीमें स्कोर कार्ड पे बना चुकी हैं और अब आखिरी गेम तक ये मुकाबला जाएगा और वो तीसरा गेम डिसाइड करेगा कि कौन होगा हमारे इस BO3 सीरीज का विजेता. इस BO3 सीरीज के खत्म होने के बाद दोस्तों ध्यान रखिए अगला गेम जो होगा वो होने वाला है टीम प्राइड ऑफिशियल अप अगेंस्ट टीम रेवेनेंट स्पोर्ट्स. दो ऐसी टीमें जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं. अपर ब्रैकेट का वो गेम होने वाला है, स्पेशली रेवेनेंट बीइंग वन. अब देखिए आज का दिन कितना ज्यादा लकी है. सबसे पहले आपको मार्कोस का गेम प्ले देखने को मिलने वाला है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीम हियर इन इंडिया. देन वी हैव रेवेनेंट, अगेन वन ऑफ द बेस्ट टीम आउट देयर इन इंडिया. दोनों ही मलेशिया जा रही हैं फॉर ACL इंडिया को रिप्रेजेंट करने. तो लेट्स सी कि प्राइड से रेवेनेंट कैसे खेलेगी, लेकिन उससे पहले क्या मार्कोस यहाँ से आगे जा पाएगी, क्योंकि अगर मार्कोस यहाँ से आगे जाती है तभी शायद रेवेनेंट से फेस ऑफ कर पाए. लेकिन उससे पहले आप कौन, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन इन दिस थर्ड गेम, क्योंकि ये तीसरा गेम बहुत क्रूशियल होगा. स्पेशली टीम लिक्विड के ऊपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है. मार्कोस ने ये गेम जीत कर ना तो सिर्फ पॉइंट की बढ़ोतरी ली है, लेकिन वो इमोशनल गेम जो होता है, मेंटल गेम जो होता है, उसमें भी +1 ले लिया है पॉइंट. बिल्कुल. एंड द लिक्विड के लिए अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या लाइक यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी पहली बात तो बनती है, because eventually they did had like what Whoopa by their side. They had like ideal जो एक comp you would really look like for the side of the liquid, वो उनके पास फिर भी आपको देखने को मिल रहा था. But that's not something which you could really expect at this point, क्योंकि उनका सामना करते हुए मार्कोस ने जो एंड मिनट्स पे खेला, दे रियली वेंट ऑन टू हॉन्ट ईच एंड एवरी प्लेयर. बिल्कुल भी यहाँ पे मौका नहीं दे रहे थे कि लाइक रिक्वाजा की तरफ वो अपनी निगरानी भी रख सकते हैं. एंड अगर यहाँ पे 2 of the 1 केसेस पे या तो आइडियली द लिक्विड को कैसे भी रिक्वाजा फाइट जीतती है, अगर ना भी जीते तो उनको पता है इट्स नो वे पॉसिबल कि वो कैसे भी मार्कोस को रोक सके कि वो पहले तो रिक्वाजा को एक्वायर करे एंड फिर आके उन्हीं के बेस गोल पे स्कोर करे. बिकॉज उनके जो डबल कॉम्स आपको अक्सर यहाँ पे देखने को मिले, ड्राफ्ट हमने उनके जितने भी विटनेस किए, दैट सपोर्ट प्लेयर सीम्स सो लाइक अनोइंग कि वो he's that one Pokemon is not ready to die. साथ ही साथ जितने भी बाकी के खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर, अटैकर, even though your Shifu इस समय पे हमें नहीं देखने को मिले थे, it really came out pretty interesting. and इस वजह से I believe कि ये जो तीसरा गेम है, the team liquid need to definitely strategize. like वो enough समय ले उनके लिए उतना ही बेटर होगा. but मार्कोस के पास जब मोमेंटम आ जाता है,
दे हैव शोड अस इन टुडे इटसेल्फ कि वो फिर कितनी ज्यादा डेडली साबित हो सकती है। एंड टीम लिक्विड दे हैव दैट पोटेंशियल, उन्होंने अपने आप को पहले ही गेम में प्रूव करके बता दिया कि वो यहाँ पे हार मानने वालों में से नहीं है। लेट इट इवन बी मार्कोस इन द अदर साइड, बट मार्कोस इज समवन जो कि बहुत ही एक अच्छी मैं कहूंगा टीम है विद द एक्सपीरियंस। तो लाइक वो अपने आप को एनीवे नियर टू द टॉप 3 पोजीशन, तो उसके नीचे तो नहीं देखना चाहेगी। श्योर उसके नीचे नहीं देखना चाहिए, कि हम भी नहीं देखना चाहते हैं एक्चुअली, बट वी आर ऑब्लाइज्ड कि हम तीसरा गेम अब देखेंगे। और अगेन आपको तीसरा गेम डिसाइडर गेम होगा। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए मार्कोस जीतती है इट्स वेल एंड गुड, लेकिन लिक्विड जीतती है देन इट्स सुपर अमेजिंग, क्योंकि अगर मार्कोस के अगेंस्ट लिक्विड ने विक्ट्री बना ली तो दे विल क्रिएट हिस्ट्री। उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में तो सर्वाइव करेंगे ही करेंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, वो मार्कोस को एलिमिनेट करके करेंगे। एंड सेम गोज फॉर मार्कोस एज वेल। लेट्स सी कि क्या वो तीसरा गेम भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी तो 1-1 की बराबरी है, तो किसी के भी फेवर में हम झुक नहीं सकते हैं। मार्कोस इज डूइंग वेल, टीम लिक्विड इज डूइंग वेल एज वेल, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि कैसे जैप फ्लिप्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा रेक्वाजा फ्लिप के साथ गेम 1 निकाला टीम लिक्विड ने, एंड देन उसी तरह के एक रेक्वाजा फ्लिप के साथ सेकेंड गेम हमें टीम मार्कोस निकालती हुई नजर आई। एज फॉर द बैन्स, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या टायरेनिटार बैन होगा नहीं होगा। उर्शिफू आई बिलीव बैन हमें देखने को मिल सकता है। क्लिफेबल शायद बैन किया जाए, क्योंकि क्लिफेबल की वजह से बहुत ज़्यादा अनॉय किया है मार्कोस ने टीम लिक्विड को। Exactly, but let's see, because now is where the real game begins. Mew is just out. We have Clefable, जैसे कि हमने देख रहे थे कि उनका जो एक he's that one Pokemon who is just not ready to die. Being that out of the support agent, what all do they have in options is something to be talked about. They can really go on with Hoopa. पिछली बार हमने literally like Mr. Mimi को भी देखा था. Blissey could be something they could really pick up, or maybe Comfy. But Comfy जब से हमने Day 1 पे पहली बार like देखा था from the side of Pokémon Esports, उसके बाद I don't think anyone really gave that much attention towards Comfy. So let's see Volk this time going on for Dodrio. Now that's a very big pick, because this could really be so great for them. But usi ke saath, Woopa and then now the Slowbro. So the defense and support in counter looks very powerful. But Snorlax could still be a pick potentially from the side of Wooks. Mamoswine, after the first disaster which he had, is really not going for it. But rather he goes on for an all-rounder Urshifu. Let's see, Urshifu, it's a good pick. And again मैं बार बार बोल रहा हूँ, Urshifu अगर आप बैन नहीं करेंगे तो Snowy gonna get this, and Snowy उसके बाद डोमिनेट भी करेंगे। वॉल्क ऑलरेडी डॉडरियो उन्होंने लिया है, तो शायद से हमें इन द एंड जब फाइनल प्रिपरेशन होता है उसमें चेंजेस शायद आते हुए नजर आए। चांसेस हैं शायद Snowy हमें डॉडरियो और क्यूरम उर्शिफू पे स्विच होते हुए नजर आ सकते हैं। सो लेट्स वेट फॉर दैट। मेरियम शायद हमें स्विच करते हुए नजर आए, शायद ना भी हो, क्योंकि गार्डी इज द रिलायबल चॉइस फॉर मेरियम एज वेल, एंड सेम गुड्स फॉर वॉल्फ। डॉटरियो इज अ रिलायबल चॉइस फॉर हिम। सामने आप देखिए तो टीम लिक्विड, वो टायरेनिटार बैन ना करना क्या मार्कोस की अच्छी चॉइस है, बिकॉज टायरेनिटार लगातार तीसरी बार इन अ रो लेके आए हैं, तो जरूर कुछ वैल्यू टीम लिक्विड ने देखी होगी। हूपा उनके पास है, हूपा काफी अच्छी चॉइस है। अब तक मुझे सही यूटिलाइजेशन देखने को मिला नहीं, एंड आई एम होपिंग कि इस बार वो यूटिलाइजेशन मुझे अच्छे लेवल पे देखने को मिले, जैसा गेम 1 में मैंने देखा था। सडाओ इज कमिंग अप विद दैट ग्लेशियन। नाउ ग्लेशियन अगर आप पेयर अप कर रहे हैं विद दैट स्लोब्रो एंड दैट टायरेनिटार, दैट मीन्स वो आखिर के 3 साढ़े 3 मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड उसमें अगर अच्छा लेवल मिल गया टीम लिक्विड को, देन मार्कोस के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। एंड एक बहुत अच्छी चॉइस क्यूरिम की, सबसे ज़्यादा रिलायबल जो स्विच था क्लिफेबल की जगह, तो वही उन्होंने ब्लिसी को चूज़ किया है, बेस्ट चॉइस, एंड उसके साथ काफ़ी अच्छा सपोर्ट वो प्रोवाइड अपनी टीम को कर सकते हैं। As for Fiora, he got his hands on that Scyther, तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि Fiora Scyther के साथ कैसा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज Fiora ऑन Scyther इज समथिंग जो मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। मैंने शुरुआत में भी कहा था गेम 1 के दौरान कि Scyther या Scyther ज़रूर हमें हाथ में देखने को मिल सकता है टीम लिक्विड के, अगर स्नोई उर्शिफू पिक करते हैं तो।
एग्जैक्टली बट चलिए इसी के साथ गेम की शुरुआत हो चुकी है. वी हैव टीम मार्कोस अप विद डॉडरियो अ स्नोरलेक्स. सो रियली एक्साइटेड टू सी हाउ दिस एंटायर थिंग गोज. बट डॉडरियो इन अ नटशेल वो आपको ऑलरेडी दिख चुका है. दो खिलाड़ी फिलहाल यहाँ पे उनको चेज ऑन कर रहे थे. येट बीइंग अ स्पीडस्टर डूइंग व्हाट ही इज बेस्ट एट. पीछे लाइक मुड़ के जरूर यहाँ पे काउंटर ऑफ भी करना चाहते हैं बट ही इज नॉट रेडी टू इवन बी टेकन डाउन. ही स्कोर्स अंडर द नोज ऑफ प्लेयर्स एंड मार्कोस गेट अवे विद फ्यू गुड स्कोर्स. आई थिंक ये एंड में बहुत ज्यादा वैल्यू अपने लिए निकाल सकते हैं. इस काउंटर को कंसिडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द लिक्विड्स के लिए. बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. 10-13 का अभी के लिए स्कोर लाइन है. नो लेग्स ऑफेन को जरूर डाउन करना चाहेंगे. आई मीन बीइंग अ लाइक स्लो ब्रो लाइक डिफेंस वर्सेस डिफेंस पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑलरेडी लाइक अपने लिए दिक्कतें बना रहे बट धीरे धीरे जाके हील अप करना चाहेंगे. वॉल्क वो अपने द्वारा एक और एक स्कोर यहाँ पे लेके आ जाते हैं. देखते देखते अब देखिए स्नोई जो है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति बन रही है. बट ऑन द अदर हैंड we also have the side of a very own player, Sizer, who is really going to be flying top in the lane. Bottom pe 2v2, ऊपरी स्थान पे 3 versus 2, and Team Liquid they really have a good start to be honest. जी बिल्कुल. एंड आपकॉन जो शुरुआत उनको मिली है वो बहुत अच्छी है, स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी है. पूरी तरह से ये नलीफाई किया है, सप्रेस किया है टीम मार्कोस को, एंड दैट्स अ बिग डील. चढ़ाव को अब आप देखिए तो अपोजिशन के फार्मिंग एरिया सेंट्रल एरिया में जा चुके हैं. एंड ये एस के वैलियर शायद स्टील भी कर लें. नहीं, ब्लिसी आएंगे, समय पर आए. उन्होंने फाइनल हिट भी अपनी सिक्योर की. सदाव फार्म करने की कोशिश वहाँ पर करते हुए, लेकिन सदाव आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडी हो गया और उस चक्कर में जो फार्म उनको मिल सकता था वो भी उनके हाथ से निकला. एंड नाउ वी हैव वोल्क जो कि सदाव का फार्म स्टील कर रहे थे. कैन ही टेक डाउन वोल्क? नो. सही समय पे सिट्रस वैली जरूर उठाई थी बट स्टिल सदाव उनके जो आइसिकल क्रैशेस हैं स्पेयर्स हैं वो काफ़ी दूर तक चेस करते हैं और उसी के चलते डाउन किया जाएगा. आई थिंक दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस क्योंकि नॉकआउट देकर फीड करना सदाव को काफ़ी गलत मूव हो सकता है डॉड्रियो की तरफ से. अगर आप चोक की बात करें तो अभी भी लेवल 6 हैं. दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल. उनको जल्दी से लेवल 9 अचीव करना होगा. एटलीस्ट लेवल 7 अब तक उनको हो जाना चाहिए था. बट स्टिल कंपैरेटिवली आप देखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा वो कर रहे हैं लास्ट गेम के कंपैरिजन में. लेकिन उनकी टीम की आप बात करें तो अच्छे लेवल सब मिल चुके हैं. साइथर द असैसिनेटर आगे बढ़ेंगे. साइथर द असैसिन कोशिश करते हुए कुछ नॉक्स अपने फेवर में निकालने की. 2 नॉक्स तो नहीं मिले लेकिन बैक ऑफ करने पे मजबूर कर दिया मार्कोस को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे गोल सब इनको जरूर मिलने वाले हैं. देयर इज नो वन ऑन टू द टॉप पार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ टीम लिक्विड. रेजाइस मेल्ट कर रहे हैं. विद इन सेकंड वो मेल्ट कर सकते हैं बिकॉज उनके पास सदाव है. सदाव के पास यूनाइट मूव भी है. क्यों हैं तो वो जल्दी से लेवल 8 करना चाहेंगे. अगर ये रेजाइस आता है तो लेवल 8 भी हो जाएगा. एंड देयर यू गो. स्नोब्लेक्स पिक्स के साथ लेवल 8 अचीव किया और बस एक लेवल और फिर हमें देखने को मिलेगा वो जाइगेंटिक गॉडजिला जिसको टायरेनिटार के नाम से जाना जाता है. टॉप पाथ पे आप देखिए तो डॉड्रियो अब पहुंच चुके हैं और उर्शिफू के पास काफी समय था. साइथर के पहुंचने से पहले था लेकिन हम जानते हैं हुपा के होते हुए इतना इजी होगा नहीं कि आप लिक्विड को पता चले बिना कोई ऑब्जेक्टिव सिक्योर कर सके. Exactly, like slowly steadily here we go. The जो एक डिस्टेंस है जो एक एक पूरा डिफरेंस बन चुका था उसको क्रॉल अप करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है. बट मार्को स्टिल नॉट इन द बेस्ट फॉर्म. 3 खिलाड़ियों को गवा चुके विद दैट प्लेयर ऑलरेडी बीइंग डाउन व्हिच इज गोना बी द साइड ऑफ साइजर. नाउ दे हैव विद ओनली 2 प्लेयर्स बट उर्शिफू एंड स्नोरलेक्स अभी भी अपने द्वारा अपने गोल पोस्ट को डिफेंड करना चाहेंगे. लेट्स सी ये बॉटम लेन पे और कितना फायदा अपने द्वारा निकाल पाती है बिकॉज द लिक्विड दे हैव गॉट द आइडियल स्टार्ट जो वो पूरी तरीके से एंटिसिपेट कर रहे थे. फाइट एक बार फिर स्नोरलेक्स के अगेंस्ट पे 3 खिलाड़ी बैक टू बैक लेते हुए. मीनवाइल ग्लेशियन से यहाँ पे पीछा चढ़ाया गया. इट्स गोना बी डॉडरियो जो उनको डाउन करेंगे. नाउ स्लोली स्टेडीली टायरेनिटार इज बैक टू हिज क्लासिक फॉर्म. 9th लेवल पे पहुंच चुके हैं वो. एंड 9th लेवल पे पहुंचने के बाद ही कुड रियली गेट रिड ऑफ द डिफेंडर इटसेल्फ जो कि आपको फिलहाल के लिए क्यूरअप देखने को मिल रहा है. नैप ले जाते हैं तो शायद मौका मिल जाएगा बट ही नीड्स टू फॉल बैक. आई थिंक ये बहुत ज्यादा मुश्किल है. टायरेनिटार इज रियली नॉट लेटिंग हिम गो अवे बट विद दैट लेट्स सी कि क्या उनको डाउन करना पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं. डॉडरियो बैक टू बैक स्कोर किए जा
रहे हैं। रेजी को यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ टीम वन एंड ओनली मार्कोस, एंड लेट्स सी हाउ टीम मार्कोस रियली जस्ट फिल्स अप द गैप। 26 का गैप अभी भी बचा है। ग्लेशियर डॉड्रियो से यहाँ पे लाइक केओ दे देंगे उनको। टेरेनिटोर अभी भी यहाँ पे आपको होल्ड करते हुए नजर आ जाते हैं, बट स्लो ब्रो ही इज गोना बी जस्ट असिस्टिंग हिम, एंड रेजी लेकी को एक बार अगर एक्वायर कर जाएंगे तब 200 का आंकड़ा जरूर आराम से पहुंच सकते हैं, बट स्लोली स्टेडली एक यहाँ पे स्कोर करने से बिल्कुल भी नहीं मिस कर दिया। एंड 40 स्कोर जैसे ही आता है यहाँ पे ग्लेशियन की तरफ से, तब वो लीड पूरी तरीके से इंक्रीज होकर 65 तक अभी के लिए पहुंच चुका है। तो 3 खिलाड़ी टॉप लेन की तरफ, यहाँ पे फाइनली टेरेंटियर को यहाँ पे टेरेनिटार को डाउन किया जाएगा डॉड्रियो द्वारा। डॉड्रियो कम्स अप एंड टेक डाउन अनदर डिफेंडर। ये समय पे इट्स गोना बी स्लो ब्रो। अब एक और एक खिलाड़ी, इट्स डॉड्रियो going up against Glacian. It's the speedster versus attacker fight, but इसी के बीच साइजर को भी यहाँ पे एलिमिनेट किया गया। तो बहुत क्लोज मुकाबला है। आखिरी के 4 मिनट पे देखते हैं अब कौन अपने नाम कर पाएगा ये फाइट। अगेन बार बार कह रहा हूं तरुण, द एंड गेम बिलोंग्स टू टीम लिक्विड, और अगर जल्दी से जल्दी मार्कोस ने वो लीड नहीं बनाई तो उनके लिए दिक्कतें पड़ेंगी। दो डॉड्रियो के साथ जो गेम आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डॉड्रियो काफी अच्छे नॉक्स निकाल रहे हैं, बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बहुत अच्छे स्पीडस्टर हैं, खराब से खराब सिचुएशन से बच के निकल सकते हैं और वो करते हुए नजर आएंगे, बट बार बार वो नहीं होगा। साइथर टेक्स डाउन दैट डॉड्रियो, और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि वो ऑलरेडी लेवल 12 तक फीड हो चुके हैं। और अगर ये रेजाइस मिल जाता किसी प्रकार से मार्कोस को, अभी भी अगर ले लेती है मार्कोस, तो वो टीम लिक्विड को दिक्कतों में डालेंगे। कोशिश थी पर डार्क पल्स के चलते टायरेनिटार सिक्योर करेंगे उस रेजाइस को, आगे बढ़ेंगे जरूर। बॉक्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। दैट ग्लेशियल स्टेज कमिंग अप, बहुत ही ज्यादा अच्छा यूनाइट मूव, टाइमिंग परफेक्ट थी ग्लेशियन की। एक नॉकआउट मिलेगा, साइथर को भी नॉकआउट जरूर मिलेगा, लेकिन डॉड्रियो को इंस्टेंट नॉक किया जाएगा। स्लोब्रो वो फाइनल हिट लेते हुए बॉटम सेकंड गोल पोस्ट पे पुश करने की कोशिश थी, लेकिन वो सही नहीं होता, इसीलिए बैक ऑफ करेंगे। समय रहते फार्म करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि अगर साइथर जल्दी से जल्दी लेवल 13 कर लेते हैं तो फाइनल स्ट्रेच में वो काफी ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं, असैसिनेट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर ग्लेशियन एज वेल। लेवल्स का देखिए उतना बड़ा डिफ अभी तक क्रिएट होता हुआ नहीं नजर आया है आपको, लेकिन हम जानते हैं डॉड्रियो उस ट्रिपल ट्रैम्पल के साथ फाइनल स्ट्रेच में जरूर फाइनल हिट अपने नाम करना चाहेंगे। नाउ दिस इज अ क्रूशियल मिस्टेक। वो ऑलमोस्ट सिक्योर कर लिया था रेजिले की, थे लास्ट हिट्स थे आपके पास, लेकिन आई थिंक वो स्कोप दिया, क्लियर स्पेस आउट दिया, एंड उर्शिफू को अगर मौका मिलेगा तो वो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इजीली अपने नाम सिक्योर किया उस रेजिलिकी को यूजिंग हिज मूव, एंड here we are now। अब जल्दी से टीम लिक्विड को मेल्ट करना पड़ेगा। आई थिंक दे विल जस्ट लेट इट बी, क्योंकि पहले गोल पोस्ट पे जाके वो टच करने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा 100 स्कोर कर पाएंगे, बट ग्लेशियल स्टेज, इन द अर्ली स्टेज ग्लेशियर ने यूनाइट मूव अपना अनलीश किया है। पावर नैप भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्नॉर्लैक्स मेरुएम पीछे रह के खेलते हुए। टायरेनिटिकल रैम्पेज मैं देखना चाहूंगा। हुपा को भी नलीफाई किया टीम मार्कोस। इट्स अ 4-man नॉकआउट। स्लोब्रो किसी भी वक्त नॉकआउट हो सकते हैं। इट्स अ 5, इट कुड बी अ 5-man नॉकआउट, लेकिन मार्को शायद से 50-50 रेक्वाजा के लिए जाएगी। जी बिल्कुल, जब गोना मेल्ट दैट रेक्वाजा, किसी के आने से पहले आराम से उस रेक्वाजा को मेल्ट कर लिया जाएगा। वी नाउ नो आप कौन, कि यहां से रोक पाना मार्कोस को नामुमकिन के बराबर होने वाला है। डॉड्रियो आराम से 100 का स्कोर डालेंगे, शायद ब्लिसी भी सक्सेसफुली उस 100 का स्कोर कर दें, एंड it's gonna be hard. It's gonna be hard to stop Snowy from scoring as well. I mean, at moment पे team Marcos finally taking away that Rayquaza and back-to-back score आप देख सकते हो, आते चले जा रहे। वो जो मूवमेंट पे 2 क्रूशियल नॉकआउट हुए, अपने बहुत सारे एओस एनर्जी को उन्होंने बिखेर दिया था। I mean, just the moment I think Rayquaza आया था, we had like 40, 50, 40 के पूरे Unite balls filled थे। They could have defended Rayquaza, they could have really scored it even if they didn't went to the score, but now the fight goes still on. Dodrio is going to be taken care of. देखते हैं किस तरीके से अब अपने द्वारा एटलीस्ट स्लोब्रो और हुपा को स्कोर करने का ऑप्शन मिल पाता है। ग्लेशियर भी आप इंतजार करेंगे। आखिरी 25 सेकंड एंड 54 का स्कोर फिलहाल के लिए आपको साइजर द्वारा आते हुए देखने को मिल जाता है, बट स्लोब्रो, हुपा एंड ग्लेशियर
व्यस्त नहीं जाने दे सकते। ग्लेशियन यहाँ पे फिलहाल के लिए एक बहुत लाजवाब क्लिफिंग को डाउन करेंगे। लेट्स सी हाउ सिचुएशंस आर गोना गो, cause अब फाइनल 10 सेकंड स्कोर करने का बिल्कुल मौका स्नोरलेक्स नहीं दे रहा। एंड स्लोब्रो who is just waiting, Hoopa goes in the Unite move, 24 का स्कोर जरूर आएगा, but that is not enough and a heart-breaking loss for one of these two teams who will be out of the tournament. एक टीम जो अभी भी अपने द्वारा ये विक्ट्री अपने नाम करेगी, potentially Marcos, and here we go. 3 almost यहाँ पे आप देख सकते हो 130 पॉइंट्स की लीड बनाई उन्होंने। एंड में वो जो लाइक रेक्वाजा को अक्वायर किया, एंड में जिस तरीके से उन्होंने पीछा चढ़ा टैरेनिटियार से, फिर उसके बाद उन्होंने साइजर को भी डाउन किया एक बहुत क्रूशियल समय पे। That completely changed the game, and I think most deserving MVP has to go to Volk. जो Rio से स्टार्टिंग से वो अपने द्वारा एक अच्छा प्ले दिखा रहे थे। 110 स्कोर तो किया, साथ ही साथ 5 डिफीट्स भी रखे उन्होंने अपने नाम। बिल्कुल, 5 नॉकआउट्स भी उनके फेवर में गए हैं, 2 असिस्ट भी उनके पास रहे, एंड ही क्लियरली इज द MVP। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए तो कहीं ना कहीं टीम लिक्विड हमें टीम फाइट्स में ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही थी। आप उनके नॉक्स पे नज़र डालिए, आप उनके डैमेज पे नज़र डालिए। सद्दाव 1,01,000 का डैमेज वो देते हुए नजर आए, 1,05,000 का डैमेज हमें टायरेनिटार की तरफ से देखने को मिला। फ्यूरा 82,000 का डैमेज हमें देखने को मिला। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी टीम लिक्विड, लेकिन आखिर के कुछ पलों में गेम उनके हाथ से निकला। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कहीं ना कहीं लैक कर रही है टीम लिक्विड उस फाइनल स्ट्रेच फाइट में, जहां पर मार्कोस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मार्कोस का कोई भी एस्पेक्ट कमज़ोर नहीं है, और उसी का खामियाजा टीम लिक्विड को उठाना भी पड़ा। और इसी के साथ एक 2-1 की विक्ट्री टीम मार्कोस अपने नाम लिख चुकी है, और इस टूर्नामेंट में और भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेकिन आप कौन, क्या ही गेम था। गेम 1 में एक डिफीट फेस ऑफ करने के बाद मार्कोस का कमबैक करना, 2 लगातार गेम जीतना, और वो 2 लगातार गेम भी बहुत ज्यादा क्लोज गेम्स, कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि एक तरफा। स्पेशली इस गेम की आप बात कीजिए तो 8-8-8 नॉकआउट साइड 2 से 3 पोकेमॉन के थे टीम लिक्विड के पास, तो क्लियरली फाइट में वो जीत रहे थे। लेकिन फाइट्स आर नॉट ऑल दैट मैटर्स, बहुत कुछ मैटर करता है। फाइट्स किस टाइम पे हो रही हैं, नॉक्स किस टाइम पे आ रहे हैं, स्पेशली वो रेक्वाजा किसके पास जा रहे हैं। लेकिन आप कौन, एक गेम और आज के दिन बचा है, जो कि होने वाला है इंडिया की एक और बड़ी टीम रेवेनेंट का, जो कि फेस करेंगे एक और बेहतरीन टीम को, जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पुट ऑन करती हुई नजर आई है। लेकिन आप कौन, उस गेम से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीधा वापस आएंगे रेवेनेंट के गेम के साथ। Is it around? Let me play. Call me up with no shame. All your words sound the same. Yeah, already know about your game, but I'm not the one. Is it around? Let me play. If you come around just to play me, don't bother, 'cause you ain't overdue it. Don't even try to convince me.
to come over? I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. We've been making magic, and sometimes I get nervous but too good to believe. I don't know how it happened, but baby I'm ecstatic that you're sticking with me. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. This ain't what you want. This ain't what you want now. This ain't what you want. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I'll rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow, how to हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पोकेमॉन यूनाइट स्प्रिंग चैंपियनशिप में बाय ब्लिंक एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्टार्ट क्लैशिंग, और मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे हम सब के चहीते तरोने के आप कौन। 2 गेम्स अभी हम दोनों साथ में देख चुके हैं। आज पूरे दिन में हम काफ़ी सारे गेम्स, काफ़ी सारा एक्शन देख चुके हैं, लेकिन ये आखिरी गेम ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें खेलेगी सबकी चहीती टीम रेवेनेंट, जो कि फेस करने वाली है टीम प्राइड ऑफिशियल्स को। तरुण, आई मस्ट आस्क, किसकी तरफ आपका सपोर्ट रहेगा? आई मीन देखिए, ऑलरेडी अब एक ऐसे मुकाम पे हम पहुंच चुके पूरे टूर्नामेंट के कि द टीम्स दैट आर रियली बीइंग इन द टॉप ऑफ द रीजन, जो टाइम एंड टाइम अपने आप को प्रूव किए, दे आर स्टार्टिंग टू पेस अप ना। देखिए, पिछले ही आप अगर मुकाबले की बात करो तो टीम लिक्विड ऑलरेडी हैड इट, बट जिस तरीके से टीम लिक्विड धीरे धीरे फिर लाइक बिछड़ते हुए देखने को मिली मार्कोस के सेकेंड मैप पे, फिर तीसरे गेम में भी मार्कोस कंप्लीटली डिनाइंग दैट लाइक ड्राफ्ट, it just went against them. So I do believe कि अब we could expect same from the side of Revenant. जो मार्कोस ने किया है, I think वो teams like Revenant से आप expect कर सकते हो, teams like Pokémon Esports which is at the lower bracket, उनसे आप expect कर सकते हो, but bracket तो देखिए बड़ा interesting बन गया है, and कल के दिन के लिए मैं अभी से बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता, because कल का दिन that is also going to be a very interesting day for us, as Pokémon Esports is now down to the lower bracket, potentially might face off against Marcos. Then we have the side of none other than Revenant as well, जो या तो दूसरी सेमीफाइनलिस्ट बन सकती है दिन की, because एसएटीएल ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो जो भी ये मुकाबला जीतेगी पोटेंशियली एसएटीएल से ही मुकाबला करने वाली है इन दी अपर ब्रैकेट्स।
यस इंडीड, काफ़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि एसएचयूएल ऑलरेडी जगह बनाए हैं। रेवेनेंट अभी गेम बताएगा कि रेवेनेंट या प्राइड ऑफिशियल्स में से कौन अपनी जर्नी यहाँ पे और आगे लेके जाएगा और स्मूथली आगे लेके जाएगा। बॉटम अगर हम बात करें बॉटम ब्रैकेट्स की, तो लोअर ब्रैकेट में ऑलरेडी ट्रू रिपर्स फेस करेगी। ट्रू रिपर्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है। उसके अलावा आप अगर देखें, जो भी लूजर ऑफ मैच 24 रहेगा वो ट्रू रिपर्स को फेस करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलरेडी कैमिन स्पोर्ट्स बैठी थी, उनको फेस करने के लिए अब मार्कोस क्वालिफाई कर चुकी है। तो वो दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग गेम्स होने वाले हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग गेम आज का तो हमारा रहने वाला है रेवेनेंट वर्सेस प्राइड ऑफिशियल, क्योंकि पिछले गेम की भी अगर बात करें तो वहां पर हमें मार्कोस खेलती हुई नजर आई थी अगेंस्ट टीम लिक्विड। एंड जैसा कि तरुण ने बताया, टीम लिक्विड ने आखिरी मोमेंट तक हार नहीं मानी, दे नेवर गिव अप। एंड वही स्पिरिट हमें चाहिए हर एक गेम टीम में, हर एक प्लेयर में। एंड विद दैट लेट्स जंप ऑन टू द ड्राफ्ट। तरुण, ड्राफ्ट ऑलरेडी लाइव है और बहुत ही जल्द हमें अपने बैन्स भी देखने को मिलेंगे। तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि शायद रेवेनेंट और प्राइड का ये गेम है, तो यहाँ पे एक और एक्स फैक्टर है तरुण। अब थोड़ा दोस्त और दुश्मन वाला सीन होने वाला है। देखिए, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड बैन्स थे, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ऑलरेडी नोवा है, आप अलाउ नहीं कर सकते उर्शिफू। बादशाह है, न्यू बैन होना ही होना था। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज बादशाह रेवेनेंट के काफी करीबी दोस्त कह लीजिए, प्लेयर कह लीजिए, एक्स रेवेनेंट प्लेयर हैं। उसके अलावा ही वाज प्लेइंग फ्रॉम रेवेनेंट फॉर एशिया चैंपियंस लीग, ही वाज ऑन लोन एंड नाउ वो रेवेनेंट के अपने साथी संगियों को फेस ऑफ करने वाले हैं फ्रॉम टीम प्राइड ऑफिशियल्स। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। थियोस लॉक इन जरूर किया है उन्होंने स्नॉर्लेक्स पर, बाद में फॉर श्योर स्विच करेंगे। लेट्स सी नोवा क्या साइथर के साथ जाएंगे। उर्शिफू अवेलेबल नहीं है, साइथर आपके पास ऑप्शन है, यू हैव गॉट मैचैम्प एज एन ऑप्शन एज वेल। सो देखते हैं, अभी तो वो शायद ग्लेशियर लॉक इन करें। हाँ फॉर श्योर, अभी के लिए शायद फिर बाद में ब्लिजार्ड को वो ट्रांसफर कर देंगे। बट लेट्स सी वैनक्विशर की तरफ से क्या पिक आता है। आई थिंक जैसे कि आपने मेंशन किया, लाइक बादशाह का ये बहुत इनक्रेडिबल से एक मुकाबला होने वाला है अपने एक्स टीममेट्स के साथ। वैनक्विशर एक्चुअली गोइंग ऑन फॉर अ मचाम्प, आई थिंक बहुत इनक्रेडिबल मुझे ये एक ऑलराउंडर लगते हैं। चलिए इसी के साथ आप एक्सपेक्ट कीजिए कि क्लिफेबल भी यहाँ पे फिलहाल के लिए लॉक कर लिया गया सो द्वारा। नाउ बिजार्ड पोटेंशियल पिक तो उनका गार्डिवॉयर बन सकता है, बट लाइक ही हैज अ एडवांटेज, दोनों पिक अभी उनका एंड आपको एक्सॉल्स का देखने को मिलने वाला है। बट ओके, ही गोज ऑन फॉर अ गार्डिवॉयर अलोंगसाइड अ साइजर, सो bringing up Sizer as a all-rounder, Gardevoir as again being one of those amazing attackers alongside Glaceon. Badsha is the only player and last pick करने मिला बादशाह को। Like every other attacker, like if you ask Mew is out, if you ask Glaceon, he is also out. Delpox, that's not even, I believe it's done from the side of Fox Wild. So Badsha will go all the way with a very sweet little pick of Celion. So there we go, a good support pick for him. Do we expect Badsha to play the level of Badsha he plays with a support agent, like support Pokemon, according to you, Start? अगेन बादशाह सपोर्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वो अटैकर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि म्यू अगर बादशाह के हाथ लगता तो वो काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता था। लेट्स सी, आई थिंक सिल्वियन खेलते हुए भी हमने उन्हें पहले देखा है, तो हाई होप्स रहेंगी बादशाह से, वैनक्विशर से भी रहेंगी। लेकिन रेवेनेंट में मुझे थोड़े से चेंजेस ज़रूर नज़र आए हैं। नोवा जो हमें मोस्टली ऑलराउंडर देखते खेलते हुए नज़र आते थे, उन्होंने ग्लेशियन उठाया है। जैसोल जो कि सपोर्ट प्रेफर करते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो सपोर्ट ही खेलते हुए नज़र आए हैं। लेकिन अभी उन्होंने साइथर अपने हाथ में ले लिया है, दैट मीन्स उनको असैसिनेशन पे लगना होगा। टॉप की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे हमें साइथर, उनका साथ देंगे स्विफ्टी द ऑल टाइम सपोर्टर। इनकी तो क्या ही अचीवमेंट है, जितनी बात करें उतनी कम रहेगी। सामने आप देखिए तो सामने से भी हमें एक 2-1-2 स्प्लिट ही देखने को मिलने वाली है। बॉटम पे ईवी देखने को मिलेंगे एंड यहाँ से अगर आप देखिए तो इनके ईवी ऑलरेडी फार्म करने जा चुके हैं, दैट इज ग्लेशियन।
मचैम्प फॉर श्योर स्टैक्स करने आएंगे ही ज़रूर। और अर्ली स्टेज के फाइनलिस्ट की हम बात करते हैं तो लुकैरियो के अलावा अगर कोई दिमाग में आता है नाम तो वो मचैम्प ही होता है, क्योंकि एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसके पास बहुत अच्छी हिट्स होती हैं और उनसे फार्म स्टील करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उनके स्टैक्स तो आप नहीं रोक सकते। ऑल्दो ही गॉट अ नॉकआउट फ्रॉम हुपा, सपोर्ट वहाँ पे मिला था। आई थिंक यप, फार्मर जो फॉरेस्टर था उसका पहला रोटेशन टॉप की तरफ जाता हुआ नजर आएगा रेवेनेंट की तरफ से। बादशाह हैज़ टू बैक ऑफ, ऑल्दो लेवल 5 उन्होंने अचीव कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है अगर आप वो टाइमर देखें तो। और वो 850 की अल्टारियाज देखिए उनके लिए तैनात हैं बादशाह थियोस दोनों, और अगर वो भी बादशाह के फेवर में गई तो बादशाह इजी लेवल 6 के करीब पहुंच जाएंगे। क्लोज था बट नहीं ले पाए। अगेन आई थिंक सिक्योर किया है शायद उन्होंने फाइनल अल्टारिया को। टॉप पाथ पे आप देखें तो वो जो हुपा पिक है वो रेवेनेंट को बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली इन द मिड गेम। यप, एंड शुरुआती सक्सेस भी बहुत अच्छी तरीके से हाल से सो फार मिलते हुए आपको प्राइड ऑफिशियल्स के लिए देखने को मिल जाती है। थियोस I'll say a very good, like defensive role जो वो अदा करते हैं अपने टीम के लिए इस समय पे स्नॉर्लेक्स के साथ है। एंड सामना उनका देखिए स्लो ब्रो के साथ तो बहुत ही जल्द वो बॉटम लेन पे आपको होते हुए देखने को मिल जाए। जंगल की तरफ हम देख सकते हैं लाइक क्लिफेबल का फिलहाल सामना हो रहा है, बट ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अग्रेसिव हो चुके थे एंड ग्लेशियन को इसी वजह से थोड़ा पनिश किया गया। फायदा मिलेगा बैक अगेन टू द साइड ऑफ प्राइड ऑफिशियल। शुरुआती सक्सेस स्टिल लुक्स गुड। Sigyon from the side of Badsha is just going on for an hunt and now he's going to go against Gardevoir and Glacier। I think ये दोनों अपना साथ यहाँ पे एक बार फिर जोड़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। So these two attackers up against another clone attacker, वो देखते क्या होता है। बट बहुत ही अच्छा फ्री गोल यहाँ पे 20 मिल गया एंड टीम रेवेनेंट आई डोंट नो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन विद देम, क्योंकि they have completely lost so many scores and still अब थोड़ा वापसी करने की चाह जरूर रहेगी। गार्डिवार आ चुके, धीरे धीरे थियोस को जरूर मुश्किलों में डालना चाह रहा है, बट लेट्स सी इफ ही कुड रियली कम अप विद द स्नैप। ब्लॉक जरूर करना चाहिए। इज गोना गो फॉर द स्लैम, पीछे से बैकअप उनके टीममेट्स का जरूर से आ जाएगा एंड ही बेयरली सर्वाइव्स इट विद दोस हीलिंग बेरीज। या टाइमली अगर सिट्रस बेरी नहीं मिलती तो दिक्कतों में आ जाए। आई थिंक अभी भी शायद रोलो कुछ सिचुएशन फेस कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी टीम को अभी तक काफ़ी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। बट स्टिल लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या कमबैक रेवेनेंट का अच्छा आ पाएगा, बिकॉज अब तक क्लियर लीड ले चुकी है प्राइड ऑफिशियल, वेदर इट्स अबाउट लेवल्स या आप बात कीजिए गोल्स की। 2 गार्डिवर डाउन करेंगे, गार्डिवर अब तक इवॉल्व नहीं हो पाई, स्टिल कर लिया एंड हियर कम दैट माचोक इंस्टेंटली उन्हें नॉकआउट करेंगे। स्विफ्टी को भी नॉकआउट किया जा सकता है, बिल्कुल नॉक किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ सिल्वियन की तरफ से सिक्योर भी किया जाएगा दैट रेजी टॉप। तो बादशाह बिल्कुल एमवीपी गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, दो वो फॉरेस्टर नहीं है उसके बावजूद उनकी तरफ से ही हमें एमवीपी गेम अभी तक नजर आया है। डेलफॉक्स की आप बात कीजिए तो डेलफॉक्स इज हेल्पिंग बादशाह अगेन सम लेवल। आप देखें वो स्वाब्लूस को डैमेज देकर छोड़ दिया, क्योंकि जानते हैं अगर बॉटम लाइन अटैकर रेंज अटैकर के पास अच्छा डैमेज रहेगा तो अल्टीमेटली पूरी टीम को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट इवोल्यूशंस। अगर आप बात करें हमारे डेलफॉक्स की तो ऑलरेडी मिस्टिकल फायर और फ्लेम चार्ज का कॉम्बो हमें उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। द ट्रेंडी कॉम्बो, लेट्स सी क्या सिक्योर कर पाएंगे उस रेजिले की को। द फार्मिंग ग्रीन इल्यूजन डाइव, वाओ दैट वाज सो फास्ट एंड इसी वजह से साइथर को असैसिन बोला जाता है। आप समझेंगे उससे पहले आपका शिकार कर लिया जाएगा। वैंक्विशर इज लो ऑन एचपी, हुपा दो नॉट गिविंग अप एंड इसी वजह से उन्हें यहाँ से जल्दी निकलने की जरूरत है। दो आई थिंक ही इज गोना फाइट दैट हुपा, उन्हें टेक डाउन भी करेंगे थियोस सिट्रस वैली सिक्योर करते हुए, बट आई थिंक थोड़ा सा लेट हुए। अगर वो फैंसीफुल फायरवर्क्स 1 सेकेंड पहले अनलीच किया जाता तो शायद वो रेजिले की सिक्योर किया जा सकता था प्राइड ऑफिशियल्स के खेमे में। बिल्कुल, बट लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशंस बनते, क्योंकि इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा एलसी की स्ट्रगल्स का सामना करते हुए अभी के लिए यहाँ पे टीम मार्कोस नन अदर देन रेवेनेंट स्लोली स्टेडली क्लॉप जरूर करे। द स्नॉल इज गोइंग ऑन विद वन ऑफ दोज अमेजिंग पिकअप्स जो कि आपको थियोस द्वारा देखने को मिला है। 207 का स्कोर लाइन है एंड इस 207 के स्कोर लाइन के बाद आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू द फाइनल मिनट्स
इन फाइनल मिनट्स पे टीम आरटी द्वारा एक क्लॉ बैक तो जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट लेट्स सी हाउ सिचुएशंस आर रियली गोना गो ऑन। स्नोलेक्स जंगल से होते हुए अभी के लिए बॉटम लेन पे जा रहे हैं। मुचाम्ब really is having a good level for himself, like अगर आप बात करो 10 levels उनका ऑलरेडी फिलहाल के लिए पार हो चुका है। रेवेनेंट के जियोल यहाँ पे जो कि आपको फिलहाल के लिए देखने को मिल जाते हैं विद अ गुड पिक ऑफ साइजर इज आल्सो टुवर्ड्स द मिड जंगल, ऊपर स्कोर करेगा एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, दैट्स अ बिग 40 एंड इस बड़े अपॉर्चुनिटी के बाद आई थिंक साइजर भी धीरे धीरे आगे बढ़ के स्कोर कर सकते हैं। देयर इज नो वन टू रियली काउंटर। फाइनली यहाँ पे अभी के लिए आते हुए आपको क्लिफेबल देखने को मिलेंगे एंड साइजर जिनके पास वो 40 डील करने का एक अपॉर्चुनिटी था, दैट्स गोना बी जस्ट डिनाइड। हुपा goes on unleash its unite move and on the other hand स्नोलेक्स भी यहाँ पे साइजर को पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। डिफरेंस अभी भी हमें थोड़ा I'll say कि यहाँ पे 113 का देखने को मिल जाता है, but let's see how situations are really gonna pan out with only 3 minutes 40 seconds remaining। बॉटम लेन पे एक मैसिव 5v5 की फाइट अभी के लिए जीत चुकी है। ग्लेशियन को डाउन किया गया मचाम द्वारा। There goes another one, स्लो ब्रो भी डाउन हो गए। Everything in game number 1 is just not working for Revenant at this point। या मचैम वो डायनामिक पंचेस उन्हें उनकी वजह से काफी फास्ट ऑलरेडी गेम उनका हो जाता है एंड ही इज यूटिलाइजिंग 100% ऑफ इट। थियोस बैक ऑफ करेंगे। ओके, ग्रीन इल्यूजन डाइव एक बार फिर इस्तेमाल किया, क्लिफेबल को डाउन किया है, सो एक अच्छा चांस है फाइट एनकरेज करने का और उसे अपने नाम सिक्योर करने का। बट पावर नैप ग्लेशियल स्टेज का इस्तेमाल किया लेकिन वैल्यू उतनी नहीं निकली क्योंकि इंस्टेंट पावर नैप भी इस्तेमाल किया गया था। स्नोलेक्स ब्लॉक करते हुए देव ऑलरेडी गॉट 2 नॉक्स। एक बार फिर मचैम्प की तरफ से 2 नॉकआउट स्ट्रीक आती हुई 40 के स्कोर के साथ उस पहले गोल जोन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और जैसे ही मौका मिला जाएंगे मेल्ट करेंगे। देयर इज नो वे कि यहाँ से अब रेवेनेंट कंपीट कर पाए उस रेजिलिटी की फाइट में, पीछे हट चुके हैं एंड एक ही मौका अब बचता है रेवेनेंट के पास कि आप बस सिक्योर कीजिए अपना गोल, रेजिलिटी को बचाइए, मेल्ट कीजिए। प्राइड ऑफिशियल की आप बात करें तो प्राइड ऑफिशियल का वो मचैम्प फैक्टर बहुत ज़्यादा उन्हें हेल्प कर रहा है, स्पेशली वो डायनामिक पंच फैक्टर। क्लिफेबल बहुत अच्छी पिक है, काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हमें फॉर श्योर देखने को मिलेगी। बादशाह इज डूइंग प्रीटी गुड बाय फार, 12 लेवल वो अचीव कर चुके हैं और दोनों ही टीम्स में आप देखिए तो फाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं हुई है, इसी वजह से आपको उतना ज़्यादा फीड नहीं हो पाए हैं कोई भी पोकेमॉन। हालांकि मचैम्प उन्हें काफ़ी अच्छे नॉक्स मिले, इसी वजह से लेवल 13 वो अचीव कर लेते हैं। गाड़ीज ऑन लेवल 13 ऑलरेडी यूनाइट मूव है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर पोकेमॉन पे अब यूनाइट मूव आ चुका है। ग्लेचियन का भी यूनाइट मूव चार्ज हो जाता है लेकिन अभी तक बादशाह के पास यूनाइट मूव नहीं है, ना ही स्नोरलैक्स का यूनाइट मूव चार्ज हो पाया है। तो ये फाइट थोड़ी सी धमाकेदार रही और मैं भी थोड़ी सी वेट करके लेट फाइट लेने आएंगी दोनों टीम्स। बिल्कुल एंड अब ये जो फाइनल स्ट्रेच है इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है बिकॉज मेल्टडाउन की प्रक्रिया अभी तक बिगिन नहीं हुई। थियोस इज स्टिल ऑल द वे इन द मिड पोजीशन बट ही इज गोना गेट स्लैम्ड इन। वो 88 का एक मैसिव स्कोर आपको फिलहाल के लिए साइजर द्वारा देखने को मिल जाता है, तो दैट इज अ बिग वे टू जस्ट क्लॉ बैक। जितना यहाँ पे डिफरेंस था उस डिफरेंस को अभी के लिए मिनिमाइज कर चुकी है एंड ऐसा लग रहा है कि टीम रेवेनेंट इज राइट बैक इन द गेम। ग्लेशियर को भी डाउन किया गया, मचाम डूइंग व्हाट ही इज रियली बेस्ट एट। स्वाइजर यहाँ पे डाउन करते हुए आपको टेल बॉक्स को नजर आ जाएंगे and now it is going to be one of the most closest battle we have ever seen in this game। 230 to 247 यहाँ पे किसके हाथ में रेकोसा जाएगा? It all went down in the favor of none other than team, I believe, of this team Revenant who really gets away with it। Let's see, team Revenant को अभी के लिए तो मिल चुका है वो बहुत ही बड़ा रेक्यूजा का एडवांटेज। अब इस रेक्यूजा से स्कोर भी मिल जाएगा एंड आई थिंक बहुत हार्ड ब्रेकिंग लॉस शायद साबित हो जाएगा। ये देखिए स्लो ब्रो भी अपना स्कोर कर चुके हैं, स्लोली सेटली गार्ड वॉर एंड साइजर ने भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी जो एक गोल पोस्ट से दोनों गोल पोस्ट जना करके अपने बेस पोस्ट पे अभी मुश्किलें बना रहे। डेल्फक बीन टेकन डाउन, हुपा भी यहाँ पे फिलहाल के लिए स्कोर कर देंगे, स्नोरलैक्स इज बीन डाउन। But this is Team Revenant in a nutshell। आखिरी के 20 सेकेंड में आखिरी के 2 मिनटों में जो 147 से 230 287 का लीड था, they all the way crawled their back up and अपने द्वारा टाइम अप तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हो चुका है। बट रेवेनेंट ओ मैन, इतने इम्पॉसिबल इतने डिफिकल्ट गेम के बावजूद आई कैन नॉट बिलीव हाउ दे रियली केम अप इन द वेरी लास्ट मिनट्स। आई थिंक टीम प्राइड ऑफिशियल्स आखिर में काफी मिस्टेक्स थी।
they have made big mistakes during those last 2 minutes. आप कौन पूरा गेम बहुत अच्छे से निकाला, पूरे गेम काइंड ऑफ डोमिनेट किया रेवेनेंट को, एक यू नो अच्छा बैलेंस बना के चल रहे थे। स्पेशली वैनक्विशर की तारीफ करूंगा, उन्होंने हर बार जब भी नॉक्स निकाले 2-2 के पेयर में निकाले। ब्लिजर्ड उन्होंने काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाली, 1,01,000 का डैमेज, लेवल 15 हिट कर लिया था। जैसोल ने भी लेवल 15 हिट कर लिया था। दो जैसोल का मुझे उतना इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फाइट्स में इन्वॉल्वमेंट कम रहा, डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा कम रहा। अगर आप बात करें रिकवरी की, तो 92,000 किलफेबल से इट्स गुड। फाइट्स कम हुई इस वजह से आइट से इट्स गुड, अदरवाइज काफ़ी बेटर आप कर सकते थे बिकॉज इट्स किलफेबल एंड वो काफ़ी ज़्यादा अभी ओवरपावर्ड है। लेकिन वो लास्ट 2 जी मिनट में जब ज़रूरत नहीं थी, देखिए शुरुआत में ही जब शुरुआत हुई थी फाइनल स्ट्रेच की, तब 2 नॉकआउट्स निकाल लिए थे। प्राइड ऑफिशियल के पास 2 नॉकआउट्स थे और प्राइड ऑफिशियल्स के पास वो लीड थी, 3 वर्सेस 5 की सिचुएशन थी। या तो आप तब मेल्ट करते, लेकिन जब वो लोग आ गए एक बार फिर से रिस्पॉन होके वापस आ गए पोकेमॉन, फिर से एक 5v5 सिचुएशन बन जाती है। और तब आप मेल्ट करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की लीड है, आप डिफेंड कर सकते हैं, आपको मेल्ट करने की ज़रूरत है नहीं। या तो फिर आप ऑल आउट फाइट के लिए जाते, जब आपने 2 प्लेयर्स को नॉकआउट कर दिया था, तो ऑल आउट फाइट अगर तब आप जाते तो आप शायद पूरी की पूरी टीम वाइप करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में मेल्ट करने के लिए जाना, और मेल्ट करने के लिए भी ऑल आउट नहीं गए, 2 प्लेयर फाइट ले रहे हैं, 3 पोकेमॉन मेल्ट कर रहे हैं, तो वो जो मिसमैच हुआ, वो जो मिस कोऑर्डिनेशन हुआ, उसकी वजह से गेम प्राइड ऑफिशियल के हाथ से गया है। बट रेवेनेंट, आई मस्ट से व्हाट अ गेम, एंड उनकी तरफ से जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उन्होंने वेट किया, उन्होंने समय लिया अपना, और जैसे ही उन्हें अपना मौका मिला उन्होंने क्रैप कर लिया, एंड नाउ दे हैव अ लीड ऑफ 1-0 इन दिस BO3। एग्जैक्टली शुरुआत हो चुकी है टीम रेवेनेंट के एक बहुत ही अच्छे विक्ट्री के साथ, एंड आई थिंक ये सीरीज को जल्द से जल्द क्लोज भी करना अगर चाहे तो टीम रेवेनेंट डेफिनेटली हैड दैट अपर हैंड एडवांटेज। लेकिन प्राइड ऑफिशियल वाज लुकिंग सो गुड, बट इन द एंड स्टेजेस यू कैन नेवर जस्ट पुट इट ऑन, बिकॉज प्लेयर भी आप समझिए कितने सारे चीजें वाज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। रेक्वाजा within like a very like the decision came in and पूरी तरीके से Rayquaza meltdown पे पूरा ध्यान गया उधर, and 3-1 का यहाँ पे Rayquaza का पूरा एक टीम रेवेनेंट के द्वारा 3 खिलाड़ी थे which were looking like really really good। उसके बाद हर एक पोस्ट को डिनाई करके बेस पोस्ट तक पहुंच चुकी थी, या तो डिफेंड करते या फिर अगर स्कोर भी करना चाहते तो 640 का एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य सेट कर दिया था उन्होंने। तो चेज डाउन करना ये देखिए इतना ज्यादा मुमकिन नहीं हो पाता, बिकॉज ऑलरेडी प्लेयर्स भी हमें 3 या 2 खिलाड़ी ऑलरेडी नॉकड आउट एंड कूल डाउन पे देखने को मिल रहे थे। बट स्पेशली जो मचाम का आई थिंक पिक था, वो मुझे एक बार लगता है कि एक बार फिर आई थिंक प्राइड ऑफिशियल्स को जरूर से एक बार कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज दे रियली बहुत सो मच वैल्यू आउट ऑफ इट। लाइक बहुत बेहतरीन तरीके से उनका परफॉर्मेंस हमें इस पूरे लाइक पोस्ट मैच स्टैट्स पे भी नजर आता। बात करें हम डिफेंडर्स की भी, तो भी यहाँ पे स्नोरलेक्स बहुत फायदेमंद रहा अभी के लिए टीम रेवेनेंट के लिए। टीम हम बादशाह द्वारा बात कर लेते हैं सीवलियन कितना ज्यादा उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। एंड द वे यू मेंशन कि मेव को उनके लाइक कंसिडरेशन से भी दूर रखा गया था, दैट इज वेयर मेनी थिंग्स वेंट अगेंस्ट हिम, बिकॉज अगर म्यूव नहीं तो एटलीस्ट ग्लेशियन, बट ही वाज द लास्ट प्लेयर फॉर हिमसेल्फ टू पिक। जब पिक्स की हम बात करें थी पिक्स एंड बैन्स आ रहे थे, पहला अटैक का म्यूव बैन हो गए, फिर उसके बाद जहां तक अटैकिंग की बात आती है तब ग्लेशियन पिक आया टीम रेवेनेंट से, फिर डेलफॉक्स पिक आया उन्हीं के साथी प्लेयर से। तो being Bacha, like he did not got his hands on the best player for himself, yet he had a very decent performance. So I'd love to see कि अभी going forward in the game number 2 Bacha के लिए what's gonna be in, because I think Mew या फिर Urshifu, these are some of the consideration। दोनों में से एटलीस्ट एक ऑप्शन आप बादशाह के लिए रख सकते हो। अगर वो दोनों पिक एंड बैन भी होते तो मे बी ग्लेशियन विच वी हैव सीन टाइम एंड टाइम की बादशाह कितना ज्यादा उससे बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू एक MVP प्ले जो है वो करके दिखा पाते। तो प्राइड ऑफिशियल दे रियली हैव अ चांस, द टीम रियली लुक प्रीटी सेट, स्पेशली विद द मचाम्प गोइंग ऑन एज अ ऑलराउंडर पिक। बट या इट ऑल कम्स डाउन टू द सेकंड मैच। अब सेकंड मैच पे देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी प्राइड ऑफिशियल के लिए। प्लेयर्स जरूर लाइक ड्रेन्ड आउट रहेंगे उस पहले मैप के बाद, लेकिन जी ज़रूर थोड़े से रहेंगे, लेकिन उतना ही ज़्यादा उत्साह भी रहेगा। पीओ को रहेगा कमबैक करने का, रेवेनेंट को रहेगा 2-0 करने का, तो वो तब हमें देखना ही पड़ेगा। एज फॉर बादशाह, आई बिलीव म्यू शायद बैन हो जाए, म्यू के साथ वो बहुत अच्छे हैं। सिल्वियन एक अच्छा ऑप्शन है, या ग्लेशियन भी ऑप्शन है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वो एक
ऐसे एक बर्स्ट डैमेज के साथ जा सकते हैं, वो डेलफॉक्स या फिर गार्डीव्योर में से किसी एक पोकेमॉन के साथ भी जा सकते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है तो। एज फॉर उर्शिफू आई डोंट थिंक कि बादशाह ऑलराउंडर के साथ जाना इज गोना बी अ गुड चॉइस, बट या वी हैव टू वेट वैंक्विशर, क्योंकि ऑलराउंडर का काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दो डुअल ऑलराउंडर का जो विंडो है वो हमेशा ओपन है, आप वो ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, और उसके साथ जो हमें रिजल्ट्स अब तक देखने को मिले हैं दोज आर प्रीटी गुड एज वेल। तो चलिए थोड़ी सी देर और इंतजार करेंगे आपको, क्योंकि कुछ ही देर में अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे सेकंड गेम के ड्राफ्ट की तरफ, जो कि होगा इस BO3 का सेकंड गेम, जो कि हो सकता है डिसाइडर गेम, क्योंकि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर टीम प्राइड ऑफिशियल। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये गेम रेवेनेंट अपने नाम नहीं कर पाती तो हम सीधा जाएंगे उस तीसरे गेम की तरफ। आपको और हम जानते हैं जब जब BO3 तीसरे गेम तक जाता है तब तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें एकदम चिल्लाने पे मजबूर कर देता है, हमें अपनी एनर्जी लीश आउट करने पे मजबूर कर देता है। द सेम हैपेंड विद टीम लिक्विड एंड टीम मार्कोस। पहला गेम टीम लिक्विड लेके गई, अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड गेम मार्कोस ने कम बैक किया, क्लोज कम बैक किया, बट इन द थर्ड वन इट वॉज सो फ्रीकिंग क्लोज कि इवन टिल द वेरी लास्ट मोमेंट, जब तक हमारे सामने वो चार्ट नहीं आया तब तक हमें भी नहीं पता था who won. Exactly, that went really pretty close. But with that, I think the winning team, let me remind you guys, जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी, टीम एसएट्यूएल उनका इंतजार कर रही है इन दी सेमीफिनाले ब्रैकेट। एक ऐसा ब्रैकेट जहां पे अगर आप पहुंच जाओ तो एसएट्यूएल वर्सेस द विनिंग टीम ऑफ द सीरीज, पोटेंशियली इफ यू टेक रेवेनेंट और प्राइड ऑफिशियल, वो अगर एसएट्यूएल से भी जीत जाती है तो फिर ग्रैंड फिनाले में पहुंच जाएगी ऑफ द स्प्रिंग चैंपियनशिप ऑफ द पोकेमॉन यूनाइट प्रेजेंटेड बाय ब्लिंक एंटरटेनमेंट। हार लोअर ब्रैकेट पे उनको ढकेलेगी, एंड लोअर ब्रैकेट नॉट पोटेंशियली द बेस्ट प्लेस टू बी एट, बिकॉज लोअर ब्रैकेट पे उनको फिर मौका मिलेगा लड़ने का अगेंस्ट वन ऑफ द टीम्स ऑफ टीम ट्रू रिपर्स। देन यू माइट ईदर हैव केविन ईस्पोर्ट्स, यू माइट ईदर हैव मार्कोस। So really looking forward to see how the entire advantage is going to come in, but let's see how the game goes on, because दूसरे गेम के लिए अभी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट इफ यू वांट टू आस्क अ वाइल्ड गेस, एसएट्यूएल तो देखिए ऑलरेडी पहुंच चुकी है, अब रेवेनेंट भी अगर यहाँ पे होती है तो बहुत ही करारा फाइट होगा। लोअर ब्रैकेट पे मार्कोस है, केविन है, वी हैव द साइड ऑफ ट्रू रिपर्स, व्हिच इज दैट वन टीम व्हिच कुड पोटेंशियली मूव ऑल द वे टू द लोअर फाइनल। Again, if you talk about the lower brackets, so I'd say सभी टीम अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आपको हमने देखा है। दो मार्कोस के पास एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मार्कोस इज डूइंग गुड, मार्कोस ने जैसे आपका गेम प्ले दिखाया है। And also I'd like to watch Pokémon Esports do some wonders, because Pokémon Esports एक ऐसी टीम है जो they are like the OGs, स्पेशली आप बात कीजिए स्ट्रिक्स और किड की। ये दो प्लेयर्स तब से हैं जब से आई थिंक जब ई स्पोर्ट्स था भी नहीं पोकेमॉन यूनाइट में, तब से उन लोगों ने एक प्रोफेशनल लेवल पे प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था। सो नया लाइनअप है, नया फॉर्मेशन है, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं उनकी तरफ से। कल हमने गेम भी काफ़ी अच्छा देखा था, सो आईड लाइक टू वॉच दैम प्ले इन द फाइनल्स। उनके अलावा यूसी मार्कोस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, मार्कोस इज ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, तो मे बी मार्कोस अच्छा खासा गेम निकाल सकती है, लेकिन मार्कोस को काउंटर करना कैमिन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप टॉप ब्रैकेट की बात करें, अपर ब्रैकेट की बात करें, तो रेवेनेंट अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। दे आर फेसिंग प्राइड ऑफिशियल्स राइट नाउ एंड दे हैव ऑलरेडी गॉट दैट 1-0 लीड, लेकिन क्या वो एक 2-0 लीड या फिर 2-0 विक्ट्री अपने नाम कर पाएंगे, ये देखने के लिए तो सबसे पहले ड्राफ्ट पे नजर डालनी पड़ेगी आप कौन। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं ड्राफ्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या बैन्स आने वाले हैं। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि शायद म्यू को तो सप्रेस करके ही रखा जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ रेवेनेंट। तो क्या उर्शिफू को डाउन किया जाएगा, बिकॉज उर्शिफू को बैन ना करना एक गलत चॉइस हो सकती है। गार्डी शायद से बैन हो सकती है, बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज कि क्या बादशाह सेम पिक के साथ जाएंगे, डीपीएस पोकेमॉन के साथ जाएंगे, या फिर वो एक AoE या फिर बर्स्ट डैमेज पोकेमॉन के साथ जा सकते हैं। वाओ, सरप्राइजिंगली दो ऑलराउंडर्स को बैन किया गया है, वन इज साइथर एंड द अदर इज उर्शिफू। दोनों ओवरपावर्ड हैं एंड दोनों अब सप्रेस्ड हैं।
बादशाह सबसे पहले यहाँ पे पिछली बार ही वॉज द लास्ट लाइक पिक जो कि उनको मिला था. इस समय ही इज ऑल अप विद म्यू ऑलरेडी. 2 पिक का मौका मिला तो एक यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए डेल फॉक्स देखने को मिलते हैं विच इज एन अटैकर विद द डिफेंस ऑफ स्नोलेक्स. नाउ स्लो ब्रो आएगा आपको थियोस के साथ एंड क्लिफेबल बीइंग द बेस्ट सपोर्टर. वो दिस इज एन ऑल स्टार लाइनअप जो फिलहाल आपको शायद पोटेंशियली देखने को मिल जाए. थियोस might even potentially go all the way towards Glaceon. I mean, let's see क्योंकि Slowbro या फिर Mamoswine could have been something जो एक अच्छा ideal pick would have been, but it comes down to the teams and their strats. Hoopa भी यहाँ पे अगर आप ट्रेवेनेंट को गवा बैठे तो फिर देखिए बहुत ज्यादा दिक्कतें वो बना सकती है, स्पेशली इन द मिड राउंड स्विचेस फॉर द लेन्स. Blizzard comes in for the guard avoid. We have Slowbro, a double defense and a double attack. Now this is where things are really going to get interesting because एक तरफ जहाँ पे हम गार्डेवार की बात करें उनके साथ डेलफॉक्स बीइंग दैट अटैकर, मैमोस्वाइन की हम बात करें तो वो एक डिफेंसिव पिक रहने वाला है. बट डबल डिफेंस, दिस इज इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन फॉर अ मचाम्प ऑफ ऑलराउंडर. आई मीन आई लव टू नो योर थॉट्स मैन, क्योंकि डबल ऑलराउंडर, डबल अटैकर, वन supporter is only remaining. अब वो या तो ऑलराउंडर ले या फिर supporter is the best case, but supporter भी I think like Hoopa is not being considered from either side. या मैन, हूपा अभी तक कंसिडर नहीं किया गया है बिकॉज इन दोनों की ही जो कॉम्स हैं दे डू नॉट रिवॉल्व अराउंड हूपा. इस बार आप बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग फॉर टॉप टीम्स, राइट. आप कौन, यही चीज़ हमने मार्कोस की तरफ से भी देखी थी, अब रेवेनेंट वही कर रही है. दोनों इंडिया की टॉप टीम्स हैं. मार्कोस हमारे लिए लेके आई थी डुअल डिफेंडर, डुअल इवोल्यूशन. अब रेवेनेंट लेके आई है डुअल डिफेंडर, डुअल लॉन्ग रेंज अटैकर्स, राइट. इट्स अ बॉटम लाइन अटैकर एंड दोनों ही बर्स्ट डैमेज के लिए जाने जाते हैं. एरिया ऑफ इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है. डीपीएस की आप बात करें तो दे हैव नो डीपीएस, लेकिन 80 स्लैश है जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज डैमेज पुशन कर सकता है. दो आई थिंक जो मैंने मार्कोस के इवोल्यूशन वाली कॉम्प के लिए कहा था वही मैं इसके लिए भी कहूँगा कि चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक, वैसा वाला सीन हो जाता है. आप कौन, अगर ये जो कॉम्प है इसमें अच्छा स्कोप मिल गया फेनिकिन को और रेल्स को, अगर वो जल्दी से इवॉल्व हो जाते हैं गार्डी और डेलफॉक्स में तो वो बहुत अच्छा डैमेज डिश आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी भी प्रकार से बादशाह, बिकॉज बादशाह के पास देखिए सोलार बीम है और इवन सोलार बीम इतना पावरफुल है, स्पेशली अगर इतने ज़्यादा स्क्विशी पोकेमॉन अपोनेंट में है तो सोलार बीम वो अगर लो एचपी पे है तो सोलार बीम के साथ बादशाह बार बार डाउन कर सकते हैं दोनों ही स्क्विशीज को. तो उनके पास डुअल डिफेंडर्स भी हैं, लेकिन अब उन डिफेंडर्स को आप कैसे काउंटर करेंगे, करना पड़ेगा. और ज़्यादा काउंटर ना करने की बजाय आइट से आपको इग्नोर करना पड़ेगा. आपको कैसे भी डिफेंडर को इग्नोर करके स्क्विशीज को डाउन करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग नाउ. यू जस्ट लुक एट दैट. चाहते तो स्लो पोक को डाउन कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद क्या किया, स्लो पोक को इग्नोर करके स्वाइनूप सीधा गए फेनिकिन के लिए. पीछे से म्यू ने सोलार बीम किसके ऊपर टारगेट की, फेनिकिन के ऊपर. तो वही गेम के तरफ बढ़ती हुई प्राइड ऑफिशियल दिख रही है. कर लिया, आएंगी जरूर कर लिया विद दोस डुअल बफ्स. क्या उनसे सर्वाइव कर सकते हैं क्लिफेबल? इट्स गोना बी हार्ड, इट्स नॉट गोना बी इम्पॉसिबल दो. लेकिन दो ब्लेड की आप HP देखिए, इज नॉट इवन डू ब्लेड नाउ. तो काफी दिक्कतों उसकी भरा सफर उनका था, लेकिन किसी प्रकार से सर्वाइव करेंगे. वैंक्विशर हैज बीन टेकन डाउन. थोड़ा सा ओवर कमिट कर गए थे, अगर क्लिफेबल उनके साथ होते तो बच जाते, लेकिन डोबलेट को डाउन किया जाएगा. ट्रेड इंस्टेंटली लिया गया. स्वाइनूप HP काफी कम. ड्रोलो बैक ऑफ करने पे मजबूर. बादशाह बैक ऑफ करेंगे. एंड अगेन बादशाह के हाथ में म्यू लग गया है, अब तक एक बार भी नॉकआउट नहीं हुए हैं. डैमेज बहुत ज़्यादा डिश आउट करते हैं जब भी म्यू इनके हाथ में होता है. एंड देखिए मैंने जैसा शुरुआत में कहा था, अगेन वही रिपीट करूंगा कि अगर रेवेनेंट वो लेवल्स नहीं गेन करा पाई स्पेशली गार्डीवेयर को, तो ये गेम उनके हाथ से फिसल जाएगा. या आई थिंक बहुत मुश्किल ज़रूर बन सकता है देखिए पूरा गेम उनके लिए, बिकॉज इवेंचुअली ये एक ऐसा मुकाबला है विच टर्न्स देम डाउन इन अ डू और डाई. बट देखते हैं किस तरीके से अभी ये जो स्कोर लाइन है उसकी वापसी आ पाती है. अ बिग गो एज क्लिफेबल इज गोना गेट अनदर KO एंड आई थिंक स्नोलेक्स भी ऑलमोस्ट डाउन हो सकते हैं. स्नोलेक्स इज barely surviving, but that's where Machamp and Snorlax both are going to be taken down. बहुत अनफॉर्चुनेट रहेगा, बट क्लिफेबल
6वें लेवल तक पहुंच चुके हैं। आई थिंक इवन द 7th लेवल माइट बी अप, बट द 74th पॉइंटर कम्स इन। मैमो स्वाइन भी अपने आप में ही ऑलमोस्ट 7th लेवल तक अपग्रेड कर चुके हैं। ब्रोलो स्लोली स्टेडली बॉटम पाथ से अभी के लिए जा रहे हैं। उनके पास दे हैव द एंटायर बॉटम लेन फॉर देमसेल्फ, बट लेट्स सी हाउ टीम रेवेनेंट इज रियली गोना टेक ऑन दिस बॉटम चैलेंज, क्योंकि 2 वर्सेस 3 है। ऊपरी स्थान पे भी 3 वर्सेस 3 आपको फिलहाल के लिए देखने को मिल जाता है, बट ऑब्जेक्टिव फाइट अभी 7 सेकंड्स में भी शुरू हो जाएंगे, तो दैट इज वेयर दे कुड रियली गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिकवर। बट स्विफ्टी कलेक्ट्स ऑल द एओस एनर्जी, वेटिंग फॉर रेजलीकी, नॉट द आइडियल वेलकम फॉर रेजलीकी दो, कॉज इंस्टेंटली यहाँ पे उनको ही अपने नाम करके आई थिंक द नियरेस्ट पोस्ट पे स्कोर करना चाहते हैं, बट मचाम्प इज गोना कम इन, एंड अब देखते हैं मचाम्प किस तरीके से रोकने में संभव कर पाते हैं। मचाम्प वो छोड़ देंगे, पता है सिर्फ पहला गोल पोस्ट वल्नरेबल होगा तो यू कैन जस्ट सैक्रिफाइस दैट एंड टॉप ओरिएंटेड गेम बिल्कुल भी नहीं है। टीम प्राइड ऑफिशियल वो लेवल ओरिएंटेड गेम खेल रही है, क्योंकि उनको पता है अगर लेवल्स रेवेनेंट के लिए छोड़ दिए तो उनकी पूरी की पूरी टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसीलिए वो लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे। बादशाह थोड़ा दूर ही रही है स्नॉर्लैक्स से, तो क्योंकि स्नॉर्लैक्स म्यू के काफ़ी अच्छे काउंटर हैं, आपको काफ़ी दिक्कतें देंगे। अगेन आप देखिए तो लेवल्स के मामले में मैं तारीफ करूंगा बादशाह की, क्योंकि उन्होंने डेलफॉक्स को बॉटम पाथ पे बिल्कुल लेवल अप करने ही नहीं दिया। सारा का सारा फार्म उनका स्टील किया। स्विफ्टी हैज टू बैक ऑफ ब्लिजर्ड, वो जरूर लेवल अप कर चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही सप्रेस करके पीछे हटाया जाएगा, बस अब आपको उन्हें नॉकआउट्स नहीं देने हैं, लेवल अप ले लेने दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए अगर आप नॉक हुए, अगर आपने उनको फीड करवाया, तो उससे ज्यादा बड़ी गलती आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मचैम्प ही इज ऑन लेवल 9 नाउ। बराज ब्लू उन पे आ चुका है और बराज ब्लू वो कभी भी अनलीश कर सकते हैं। अकेले फंस गए थे 3 पोकेमोन के बीच, अच्छा हुआ यूनाइट अनलीश नहीं किया। आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी में यूनाइट पॉप इन कर देते हैं और काफी बार आप वेस्ट कर देते हैं। बट नाउ ग्लेशियन मैमस वाइन एंड उसके साथ क्लेफिबल है, और अगर मचैम्प थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं तो गार्डी और डेलफॉक्स दोनों ऑन द स्पॉट नॉकआउट हो सकते हैं। हियर कम्स मचैम्प, क्या आ पाएंगे? आई थिंक रीच आउट तो अभी नहीं कर पाए। 2 एजी स्लैश ट्राइंग टू टेक डाउन बादशाह सिट्रस बेरीज उनको मिलेंगी एंड सरवाइव कर जाएंगे। अगर यहाँ बादशाह नॉकआउट होते तो वो एक अच्छी विक्ट्री हो सकती थी फॉर रेवेनेंट, बट नाउ बादशाह ही कैन इजीली टेक डाउन दैट एजी स्लैश। कैन ही? नो, बादशाह टीम का इंतजार किया, जानते थे अगर गलती से भी ओवर कमिट कर दिया तो दिक्कतें होंगी। डायनामिक पंच मचैम्प के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा। टॉप पे आप देखें तो डेलफॉक्स इज ऑल अलोन एंड इज ही मेल्टिंग दैट रेजिलिटी? Love to take a look because the lead almost double up अभी के लिए टीम प्राइड ऑफिशियल्स के लिए देखने को मिल रहा है। रेजी स्टील की हम बात कर रहे थे, आई थिंक दैट इज आल्सो गोना बी एक्वायर्ड। नो प्लेयर इज इवन नियर बाय। स्लोब्रो और स्नोलेक्स का आपको ऊपरी स्तर पर फिलहाल के लिए मुकाबला देखने को मिल रहा है। रेजी स्टील भी मिल चुका है एंड नॉट जस्ट एट वन प्लेस, इवन एट दी ऊपरी स्थान पे भी रेजी फाइट को जीत के अब एक अच्छा मुकाबला है, बट ओनली लाइक टू गेट टेकन डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ एजी स्लैश, बट द ट्रेड कम्स थ्रू। ग्लेशियर उनको डाउन करेंगे। ग्लेशियर कम्स अप विद द डबल केओ स्ट्रीक। नाउ दिस इज मैसिव, उनको पीछे फॉल बैक करना होगा। वैनक्विशर अपने आप को हीट अप कर लेंगे, 300 के आंकड़े पे पहुंच चुके हैं। विन कंडीशन कम्स डाउन टू रेक्वाजा। वाओ, मचैम्प की तारीफ करूंगा। आप 3 पोकेमोन के बीच से वो रेजी लेकी सिक्योर कर रहे हैं, और सिर्फ रेजी लेकी सिक्योर नहीं कर रहे हैं, इतने लो एचपी पे वो सरवाइव किए हैं। तो मचैम्प, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मचैम्प, एक परफेक्ट ऑलराउंडर है वो। ओके, म्यू टाइमिंग बहुत अच्छी थी। म्यू आई थिंक बादशाह गॉट अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ असिस्ट ओवर देयर। नॉक्स उन्हें नहीं मिले, नॉक्स जरूर गए ग्लेशियन के फेवर में, लेकिन असिस्ट उनको जरूर मिले होंगे क्योंकि उनको सर्फ ने बहुत बढ़िया वैल्यू निकाली थी। बट आई स्टिल थिंक कि यहाँ से अब रेवेनेंट के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। दे कैन गो फॉर 50-50, दे कैन गो फॉर लाइक इंस्टेंट मेल्ट ऑफ द ट्रैक्वासा। उसके अलावा आप देखिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो रेवेनेंट लेके आई है दैट्स लाइक वो 2धारी तलवार है, और अगर आप 2धारी तलवार लेकर मैदान में उतरेंगे तो चांसेस हैं कि शायद अपोनेंट से ज़्यादा वो तलवार आपको डैमेज कर दे। डुअल डिफेंडर, डुअल स्क्विशी अटैकर्स, डुअल एओई अच्छी पिक थी, लेकिन वही है अगर चलेगी नहीं तो पूरी तरह से आपको आउटस्मार्ट कर दिया जाएगा। और बादशाह ने आउटस्मार्ट किया है क्योंकि बॉटम पे बिल्कुल लेवल अप करने ही नहीं दिया डेलफॉक्स को। डेलफॉक्स काफ़ी देर तक लेकिन फाइट बैठ के रहे एंड स्टिल बाकी पूरी टीम की भी आप बात करें तो ग्लेशियन इज ऑन लेवल 14, मचैम्प ऑन लेवल 13,
इवन म्यू लेवल 12 हिट कर चुके हैं, और अगर एक और फाइट निकाल लेती है प्राइड ऑफिशियल जस्ट बिफोर दैट रेक्वाजा, या फिर बॉटम का ऑब्जेक्टिव भी ले लेती है, दैट मीन्स काफी इजीली लेवल 14 मचैम्प और लेवल 13 म्यू उनके पास आ जाएंगे इवन बिफोर दैट फाइनल स्ट्रेच. रेजी रॉक इज हियर. ओके, द मेल्टिंग रेजी रॉक लाइक देयर इज नो टुमारो. लेकिन टीम प्राइड ऑफिशियल वो रेजी रॉक को मेल्ट नहीं कर रही थी, वो रेवेनेंट को मेल्ट कर रही थी. ग्लेशियन एंड मचैम्प दो नॉकआउट्स दोनों लेंगे, और एक टीम नॉकआउट का सामना रेवेनेंट को करना पड़ेगा. देयर इज लाइक जस्ट अ लिटिल बिट चांस, सिर्फ 1% चांसेस हैं कि यहाँ से गेम रेवेनेंट टर्न अराउंड कर पाए. I mean, and I don't think given the form team Pride official इस तरीके से यहाँ पे fall back कर सकती है. But when everything goes by side, that's where you tend to make mistake. But Badshaw with the move, यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल बनाते हुए देखने को मिल जाते हैं. स्लो ब्रो के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है, but great here इनको फिलहाल डाउन किया जाएगा. AG Slash को भी डाउन कर चुके हैं, and already that was enough as they also secured the Rayquaza. This game is never getting over. It takes us all the way to the game number 3. What a game from Pride official with Badshaw really popping off that great. It's going to be Fox Wild from the side of Team Pride official with 104 score, 14th 11 knockouts and 88 like score. Like that is just some number right there. Vanquisher मचाम के साथ भी लाजवाब प्रदर्शन दिखा रहे थे. बादशाह भी यहाँ पे एकदम से पॉप ऑफ कर चुके थे, एक बहुत ही लाजवाब like एक परफॉर्मेंस पे. एंड यू आस्क्ड फॉर अ सपोर्टर, व्हाट बेटर देन क्लिफेबल विद ऑलमोस्ट 55k रिकवरी. Now that is what we were really talking about. Team Pride official ये बिल्कुल भी हार मानना नहीं चाहेगी. बट लेट मी टेल यू, अगर प्राइड ऑफिशियल जीतती है तो कल के दिन सेमीफिनाले पे जाएगी. वहां से हारने के बाद भी मतलब ये गेम जो भी जीतेगा ना, एक चीज जो वो सुनिश्चित करेंगे वो है टॉप 3 का पोजीशन इन दी एंटायर टूर्नामेंट. Because no matter कल क्या हो क्या नहीं हो, बॉटम पोजीशन पे भी यू विल बी फेसिंग अप अगेंस्ट अ लोअर फाइनल. जस्ट सिर्फ एक टीम आएगी उन 4 में से, एंड दैट इज रियली गोना पुट योरसेल्फ अप ईदर बैक इन द ग्रैंड फाइनल्स या फिर एट द 3rd पोजीशन. सो ये दोनों टीम जानती है कि कितना इंपॉर्टेंस है फिलहाल इस पूरे के पूरे मुकाबले का. एंड टीम प्राइड ऑफिशियल्स दे हैव really gotta be very proud of themselves after this one victory. Just denying Revenant, nothing went on their favor. They surrendered and really एक reset की बहुत ज्यादा जरूरत है. I do expect कि they take enough time before the last match of this night gets started. श्योर, लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज प्राइड ऑफिशियल ने अपना प्राइड सेव कर लिया है ये गेम निकाल के. और ये गेम उन्होंने सिर्फ जीता नहीं है, ये गेम उन्होंने डोमिनेट किया है. ये गेम उन्होंने रेवेनेंट को तड़पाया है, मजबूर कर दिया है. आप कौन शुरुआत हुई अगेन, मैंने पहले ही कहा था कि दो धारी तलवार के साथ खेल रही है रेवेनेंट. आपने डुअल डिफेंडर लिया, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल गुड. आप डुअल ऑलराउंडर के पास जा सकते थे, डीपीएस आपको मिल जाता है, एटलीस्ट ऑलराउंडर खुद को सेव कर सकते थे. नो, आप गए डुअल अटैकर्स के साथ, या दैट्स गुड एज वेल. लेकिन मैंने शुरुआत में भी कहा था कि लेवल अप करवाना मुश्किल होगा, लेवल अप करवाना बहुत ज़रूरी होगा. एंड वहाँ पर आते हैं बादशाह फ्रॉम प्राइड ऑफिशियल. बॉटम पाथ पे उन्होंने फेनिकन को देखा, फेनिकन को ब्रेक्सन में इवॉल्व ही नहीं होने दिया. बहुत लंबा टाइम लगा उन्हें ब्रेक्सन में इवॉल्व होने का. इवन जब वो ब्रेक्सन में भी इवॉल्व हो गए तब उन्हें डेलफॉक्स में इवॉल्व नहीं होने दिया. तो बादशाह ने पूरा फार्म बॉटम का स्टील किया. गार्डी ने इवॉल्व कर लिया था, क्यों? बिकॉज उनको मिड का फार्म मिला था, पूरा का पूरा सेंट्रल फार्म मिला था, फॉरेस्टर थे, तो उन्होंने इवॉल्व कर लिया था, उन्होंने वैल्यू भी निकाली. लेकिन अल्टीमेटली वैल्यू कौन नहीं निकाल पाया? अल्टीमेटली एज अ टीम आपको चाहिए था, क्योंकि आपके पास डीपीएस नहीं था, आपको चाहिए था कि आपके दोनों अटैकर्स जल्दी लेवल अप करें, आपको चाहिए था ऑब्जेक्टिव्स आपके फेवर में रहे. लेकिन प्राइड ऑफिशियल ने बॉटम के ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखे. रेजी लेकी उन्हें मतलब नहीं था, पहला रेजी लेकी जस्ट छोड़ दिया, दूसरे रेजी लेकी में मचैम्प ने अकेले स्टील कर दिया. तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर ऐसी होती रहीं तब तो रेवेनेंट के पास मौका नहीं बनेगा. एंड टॉप का फिर वो रेजी लेकी जो मचैम्प ने स्टील किया, बॉटम के 3 रेजीज उनको मिले, तो उसके बाद वो लेवल डिफ बहुत बड़ा हो गया था. इट वॉज लाइक रेडिकुलस. एंड उसी के साथ नॉक्स भी काफ़ी अच्छे मिल गए थे. उस पर ही बादशाह का सपोर्ट, ही हैड लाइक 16 असिस्ट और समथिंग.
तो दैट वाज जस्ट गुड, दैट वाज जस्ट सो गुड। बादशाह जा रहे थे, पीछे से डैमेज दे रहे थे, देन ग्लेशियन जा रहे थे, अंदर घुस रहे थे, नॉकआउट्स निकाल रहे थे, दैट्स इट। पीछे निकल सकते हैं ग्लेशियन, वो उनके पास कैपेबिलिटी है। बार बार जा रहे थे, नॉक्स निकाल रहे थे, पीछे आ रहे थे, और उसी के चलते रेवेनेंट को अंदर से खोखला करके रख दिया था। बट अगेन देयर इज अ थर्ड गेम, बिकॉज थर्ड गेम जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा आप कौन कि इस पूरी की पूरी सीरीज को कौन जीतेगा और कौन सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाएगा। Yup, exactly. It all starts with the ban phase, जो कि आपको currently देखने को मिलने वाला है। Starting से अगर हम start off करें, so we first had like I believe Mew, जिसको पूरी तरीके से ना out of the equation रखा था। Clefable is something जिसके लिए अभी थोड़ा worry करना important रहेगा। दूसरी बार coming in for the second game, it was really different, but now it's going to be Delphox and none other than Urshifu, an attacker and a all-rounder. Swifty is going to take down Mew, especially for the side of Badshah. Oh, it's going to be Team Revenant who is going to get away with Mew. Sorry, that was just my bad right there. But Fox with the counter attacker, which is going to be Glacian alongside a defender Snorlax. अब यहाँ पे चार अभी भी प्लेयर्स को पिक करना बचा है। Clefable this time is for Revenant. Revenant शुरुआत के दो पिक ही यहाँ पे दिखा सकती है कि वो कितनी डेडली साबित हो। बट या वी स्टिल हैव बिजार्ड, लेट्स सी बिजार्ड किस तरीके से यहाँ पे अपने द्वारा एक डिफेंडर का रोल अदा करेंगे। ओके, वी हैव स्लो ब्रो, सो दैट्स अनदर डिफेंडर काउंटरिंग Snorlax. नाउ वी हैव श्योर बादशाह एट दिस टाइम, he is going to be picking up the side of Gardevoir. So Garde को भी यहाँ पे फिलहाल के लिए अपने नाम कर चुके। मचाम पिछली बार बहुत ज़्यादा बेहतरीन उन्होंने वैल्यू क्रिएट किया था। He is also going to be picked up. We have Nova from the side of Revenant going out for a speedster Dodria. I think that's the only thing which could really save Revenant from sinking in the lower brackets now. Let's see, I don't think Nova Dodrio pick करें, because Dodrio with this comp is not a good choice. Let's see क्या okay now things are going out of the hands, क्योंकि Revenant ने अब जस्ट उठा लिया है Talonflame अटैक वेट फ्लोटस्टोन ऑलरेडी लगाए हुए हैं। सो Talonflame के साथ वो एक अलग ही स्ट्रैट के साथ आएंगे, स्पेशली गोल ओरिएंटेड गेम भी हो सकता है उनका, दो स्कोर शील्ड नहीं है, बट स्टिल आई बिलीव Talonflame के साथ आप इजीली गोल कर सकते हैं। अब इस कॉम्प पे अगर आप नजर डालें तो प्राइड ऑफिशियल दे हैव गॉट द परफेक्ट कॉम्प। रेवेनेंट उनकी कॉम्प अच्छी है, लेकिन उनकी कॉम्प एक्सपेरिमेंटल है। उनकी कॉम्प में सिल्वियन है, उनकी कॉम्प में सिल्वियन ओके, आई थिंक यू कैन वर्क आउट विद दैट, लेकिन आपकी कॉम्प में आपने Talonflame रखा है ना। अगेन पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि डबल एज्ड सॉर्ड के साथ आप खेल रहे हैं, आप दो धारी तलवार के साथ खेल रहे हैं। चलेगी तो बहुत अच्छा चलेगी, नहीं चली अगर शुरुआत में ही पता चल जाएगा, अगर 5 मिनट तक Talonflame नहीं वर्कआउट कर पाई, फिर पूरे गेम वर्कआउट नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो कॉम्प प्राइड ऑफिशियल के पास है वो ऐसी, अगर उनको थोड़ा बहुत सरप्राइज भी किया गया, अगर उन्होंने चीज़ें एक बार फिर से वर्कआउट करवा ली तो वो बैलेंसिंग के साथ इजीली कम बैक कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड रेवेनेंट अगर डोमिनेट करेंगे तो पूरा ही डोमिनेट करेंगे, शुरू से ही गोल्स होंगे, अदरवाइज कम बैक का कोई भी स्कोप नहीं बचेगा। दे हैव गॉट दैट Mew एज वेल, जो कि उन्होंने बादशाह से छीन लिया है। लेकिन मैंने सेकंड गेम में भी कहा था कि बादशाह शायद मुझे गाड़ी पे देखने को मिल सकते हैं, एंड ही इज गोइंग विद दैट गार्डीवेयर, एंड आई मस्ट से गार्डीवेयर के साथ उनका गेम प्ले काफ़ी अच्छा है। तो अब उनको एरिया ऑफ इफेक्ट मिल गया है, बस DPS के साथ अब तक वो थे। लेट्स सी कि बस डैमेज के साथ कितनी वैल्यू निकाल पाएंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्या वो अर्ली लेवल अप ले पाएंगे। Mew उनका फार्म स्टील करते हुए Mew अब बादशाह के साथ वो कर रहे हैं जो बादशाह ने पिछले गेम में रेवेनेंट के Delphox के साथ किया था। Exactly, and with that the game has already begun, and let's see कि ये गेम किसके फेवर में जाने वाला है। The final game of the day 3 year at the Pokemon Spring Championship. Let's see क्या होने वाला है, because दोनों ही टीम पूरी तरीके से प्रेप। As you mentioned, एक बहुत ही अमेजिंग फ्लिप जो हमें Talonflame का देखने को मिला, उससे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेगी। बहुत अच्छा Mew और आपको लाइक आई से Clefable का पिक जो है वो फेवर में देखने को मिल जाता है टीम रेवेनेंट के। बट अभी के लिए लोअर लेन पे एक अच्छा फाइट अब ग्लेशियन द्वारा आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। डैमेज बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन द साइड ऑफ लाइक Clefable looks pretty decent though.
साथ ही साथ यहाँ पे जल्द से जल्द मैप आउट लेके थियोस इज गोना गेट हिमसेल्फ फिल्ड अप, ही इज गोना गेट हिज हेल्थ फिल्ड। लेट्स सी, ग्लेशियन फिलहाल के लिए आपको डाउन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। बादशाह ऑन द अदर हैंड, ये गार्डे वर्सेस 50 के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। इट्स अ क्लिफेबल वर्सेस 50 फाइट। स्कोर बैक टू बैक कम्स इन, जो एक लॉस गवा बैठे हैं। म्यूव के रहते बैक टू बैक जो स्कोर्स आ रहे हैं अलॉन्ग साइड स्लोब्रो, वो थोड़े मुश्किल में ला सकते हैं, बट मचाप को डाउन किया जाएगा। अभी भी एक 49 का लीड है जो कि टीम रेवेनेंट जरूर से होल्ड कर सकती है। और उसी के साथ आई थिंक ये चीज शुड बी इट। आई थिंक वी कुड रियली एक्सपेक्ट स्नोलेक्स टू गेट अवे एंड यस, म्यूव ऑल इन अग्रेसिव जाके उनको भी डाउन कर चुके हैं। द गोल पोस्ट स्टिल अप विद ओनली 2 प्लेयर यू हैव इन द लोअर लेन, नन अदर देन आई बिलीव ग्लेशियन, जो कि अभी भी होल्ड कर रहे हैं अलोंग साइड ब्लिसी। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। यस अगेन तरुण, जैसा कि मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही कि रेवेनेंट या तो ऑल आउट जाएगी और अगर वो गेम उनके फेवर में जाएगा तो वो शुरुआत से दिख जाएगा। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे रेवेनेंट अर्ली स्टेज में ही गेम को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है, स्पेशली टैलोफ्लेम। अभी भी उनका जो एक्रोबैटिक्स है, मेरा बिलो 7 किसी भी पोकेमॉन को ले लीजिए, मेरा फेवरेट मूव एक्रोबैटिक्स है, बिकॉज आई एम अ बिग टाइम टैलोफ्लेम प्लेयर। मैंने इतना टैलोफ्लेम खेला है जितना शायद हमारे कॉम्पे प्लेयर्स ने खेला होगा। एक टाइम पे मैं दिन भर टैलोफ्लेम खेलता था। सो अगेन आप अगर बात करें प्राइड ऑफिशियल की, तो मैंने पहले भी कहा था कि उनकी जो कॉम्प है वो ऐसी है, अगर वो अर्ली स्टेज में थोड़ा बहुत मात खाते भी हैं तब भी वो बैलेंसिंग के जरिए अपना कमबैक दे सकते हैं। लेकिन रेवेनेंट उनको शुरुआत से ही अच्छी लीड बनानी होगी और सो फार सो गुड, रेवेनेंट वो करने में कामयाब रही है। जब वो लेवल 8 टैलोफ्लेम फ्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन से बच के निकल जाएंगे। न्यू लेवल 7 आपने कर लिया है, गुड, वेरी गुड। एंड अगर आप उसे भी ऐसे ही लेवल अप करते रहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली वो सिल्वियन का लेवल 8 होना, क्योंकि लेवल 8 पे सिल्वियन का यूनाइट मूव अनलॉक हो जाता है, वो अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छे एडवांटेज में डाल देगा। बट 4v3 फाइट प्राइड ऑफिशियल वर्सेस रेवेनेंट जरूर बॉटम पाथ पे चलेगी और 2 पोकेमॉन को टॉप पाथ पे रखना, आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड चॉइस फ्रॉम द साइड ऑफ टीम रेवेनेंट। एंड उसी की वजह से देखिए बॉटम का रेजी तो गवाएंगे, बॉटम का गोल पोस्ट भी गवा देंगे। ओ म्यू विद दैट सोलर बीम, लेकिन आप गोल पोस्ट डिस्ट्रॉय होने से नहीं रोक सकते हैं। फेरी सिंगुलैरिटी, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट ऑफ दैट यूनाइट मूव। फ्लेम स्वीप भी वेस्ट होता हुआ नजर आएगा। ब्लिजार्ड का कोई भी फ्लेम स्वीप के साथ नहीं गया। सौर को डाउन करने की कोशिश है नोवा की, बट बी नो ब्लिसी इट्स लाइक टैंक की इतने ज्यादा है, ऑलमोस्ट स्नॉर्लाइक्स बराबर एचपी रहती है उनकी, तो उन्हें आप 1v1 में इतने आसानी से तो नॉकआउट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आई मीन मुश्किल देखिए बहुत ज्यादा बन सकता है, बट स्कोर लाइन्स फिलहाल के लिए इज गोइंग एज क्लोज एज एवर। द ओनली बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मैच इज कि नो मैटर जो भी टीम जीते, नॉकआउट जो कि हमने पूरे दिन, आज का दिन एक नॉकआउट स्टेज ही पूरा में देखने को मिला, वो नहीं होगा। यहाँ पे लोअर ब्रैकेट पे जाने का जरूर मौका मिलेगा। विद बादशाह स्लोली स्टेडली गार्डे वॉइड से रहते नॉर्थ टॉप पाथ पे ऑलरेडी पहुंच चुके। मचाम भी यहाँ पे डाउन करेंगे स्लो ब्रो को। ऑलरेडी वैंक्विशर भी यहाँ पे अपने मचाम से स्कोर करने पे आ रहे, बट ही जस्ट गेट्स इंटरप्टेड। एंड उस चीज की भरपाई पूरी तरीके से क्लिफेबल को करना पड़ा। गोल पोस्ट टूटेगा एंड लीड भी यहाँ पे एक बार फिर टीम प्राइड ऑफिशियल्स के लिए बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज रियली गेटिंग द रेजी ऑब्जेक्टिव। रेजी लेकी को लेके अब देखते हैं कि टॉप पाथ पे कैसे बढ़ेंगे, बिकॉज़ देयर आर 3 प्लेयर्स। यहां द साइड ऑफ स्लोब्रो राइट देयर। स्लोब्रो के साथ ही साथ म्यू भी धीरे-धीरे ऊपरी स्थान पे बढ़ रहे हैं। बॉटम लेन इज कंप्लीटली एम्प्टी। म्यू पूरी तरीके से बेस पे पहले जाएंगे विदाउट एनी फार्मिंग। ही इज गोना टेक केयर ऑफ दिस पोस्ट इन द टॉप साइड। म्यू के द्वारा डिसीजन जरूर बहुत ज्यादा बेहतरीन था, बट लेट्स सी हाउ इट्स सिचुएशंस आर गोना पैन आउट, बिकॉज़ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्ले आपको टैलेंट फ्लेम द्वारा देखने को मिल रहा था, but he gets taken down. Mew Machamp को डाउन करेंगे। He could really come up with a double KO at this position, but इसी बीच यहाँ पे ग्लेशियर भी 40 स्कोर निकाल के एक बहुत अच्छी बढ़त 68 की बना चुके हैं। Yeah, and great utilization of that eject from the side of ग्लेशियन। इजेक्ट अगर वहां नहीं करते तो फंस सकते थे, ऑलरेडी स्क्विशी है तो शायद नॉकआउट भी हो जाते। एंड देयर यू गो, एक कमबैक जरूर हमें प्राइड ऑफिशियल की तरफ से देखने को मिल रहा है, बट लेट्स सी क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे उस बॉटम रेजी फाइट में। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि कौन सा रेजी इस बार हमें देखने को मिल रहा है। इट माइट बी अ रेजाइस और रेजी स्टील है। इट्स अ रेजी स्टील। लेट्स सी, रेजी स्टील के लिए जरूर रेवेनेंट भी कंटेस्ट करना चाहेगी। एंड देयर यू गो, टैलेंट वेट कर रहे हैं कब फ्लाई करें कब स्टील करें, लेकिन जानती है प्राइड कि इतना आसान नहीं होगा सिक्योर करना, इसीलिए पहले
फाइट लेना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होने वाला है। बर्राज ब्लो एंड विद दैट बर्राज ब्लो सिल्वियन को इजी डाउन किया है मचैम्प ने। मचैम्प के बराज ब्लो से देखिए बच पाना तो मुश्किल है, जितने पोकेमॉन फंसेंगे उतने ही दिक्कतों में आएंगे। बस देखते ही देखते गार्डियोर विल सिक्योर दैट रेजी स्टील। थोड़ा सा जरूर स्ट्रगल कर रहे हैं स्नॉर्लैक्स, लेकिन गार्डियोर विद दैट फेरी सिंगुलैरिटी स्नॉर्लैक्स को भी बचाया और लिटरली 1 HP। लेकिन स्नॉर्लैक्स की वहां पे बड़ी गलती, आई डोंट थिंक इतनी जरूरत थी वो 14 के स्कोर की। आप इतनी लो एचपी पे, आई हैव नो आइडिया क्या उनके दिमाग में चल रहा था, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा अपनी केयरलेसनेस की वजह से फीड करके आ गए हैं सिल्वियन को। और दो गोल्स के मामले में रेवेनेंट कहीं ना कहीं अभी भी गेम में बरकरार है, लेकिन अल्टीमेटली अगर मेरे से ऑल ओवर पूछे तो आई कैन क्लियरली से कि टीम प्राइड ऑफिशियल इज लीडिंग दिस गेम। दे हैव गॉट दैट रेजिलेकी एज वेल, अनदर फ्लेम स्वीप फ्रॉम द साइड ऑफ दैट टैलो फ्लेम। लेकिन उसके बावजूद यूनाइट अनलीश करने के बावजूद इतने स्क्विशी है ना टैलो फ्लेम, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप यूनाइट दे रहे हैं, यू हैव टू आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास फ्लाई है ताकि आप इंस्टेंटली एटलीस्ट बच सके। एंड यू गो गेम 1 की तरह कुछ कुछ चीजें मुझे नजर आ रही हैं आपको, और एक बार फिर से मुझे कहना पड़ेगा, कहना नहीं चाहिए बट आई हैव टू से कि रेक्वाजा इज गोना बी द लास्ट चॉइस फॉर टीम रेवेनेंट वंस अगेन। Oh my God, it is just down to 40 pointer now. 2 minute final stretch आने वाला है, and I think this is where the real fight begins. This is where the team who might get Rayquaza would really position themselves in a very good position. Revenant ने पहले गेम में बता दिया था कि वो कितना जल्दी वो मेल्टडाउन करके अपने नाम कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मच नीडेड 30 पॉइंटर आपको यहाँ पे देखने को मिला फिलहाल, जो कि आपको यूनाइट बॉल सिक्योर करते हुए नजर आ रहा है। बट स्लो ब्रो, before the end stretch started, slow bro is out. That's the defender out. This leaves us with only 4 players of team Revenant standing down there, and अभी भी जो Rayquaza की फाइट है उस पे चारों तरफ टीम प्राइड ऑफिशियल्स अपने द्वारा बहुत ज्यादा लाजवाब पोजीशन पे दिख रहे थे। नॉट जस्ट रिस्किंग इट, ब्लिजार्ड जरूर है, दे वांट टू टेक डाउन द प्लेयर्स फर्स्ट। ब्लिजार्ड यहाँ पे अपने टीम को Rayquaza दिला चुके हैं। टीम रेवेनेंट इज गोना बी सेव्ड अप। वैंकुशर को 10 सेकंड लगे एटलीस्ट ये सोचने को व्हाट हैपेंड राइट देयर, एंड टीम रेवेनेंट हैव डन इट अगेन। They have saved their Titanic from sinking in, and they will potentially go all the way up to face off Team SATUL tomorrow in the semi-finale. 1 final minute, और क्या इस पूरे के पूरे कहानी में एक और एक ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि रेवेनेंट उन्होंने यहाँ पे जो कमाल करके दिखाया उस एंड फेस पे Rayquaza को हासिल किया। अब आई डोंट थिंक कि कुछ भी मौका बन पाता है। टीम प्राइड ऑफिशियल आर गोना बी स्टन्ड कि ये उनके साथ अब फिलहाल इस एंड मूवमेंट पे क्या हुआ, बट रेवेनेंट दे हैव जस्ट प्रूवन देमसेल्फ, एंड क्या ही लाजवाब प्ले उन्होंने दिखा दिया। आखिरी 35 सेकंड, लेट्स सी ये 150 का पॉइंट किस तरीके से मिनिमाइज होता है। पॉसिबिलिटी अभी भी है क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। 5 मैन पुश कमिंग अप ऑन टू द ओके, बॉटम लेन पे है जरूर, लेकिन सिल्वियन स्टिल हैविंग दैट Rayquaza शील्ड। बादशाह बहुत वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टेलो भी आ चुके हैं यूजिंग दैट सुपर जंप। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। बट क्या एक स्कोर किया जा सकता है? ओके, क्लिफेबल डाउन, क्लिफेबल डाउन। नो देयर इज नो वे कि कमबैक अब आए। This is it. This is the harsh reality for Pride official. But Upcon Revenant is the winner of this final game and this BO3 series, and they are the ones who's gonna face Team SHUL in the upper bracket semi-finale. I am really excited to watch that game. लेकिन इस गेम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इस गेम के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। आप कौन, अगर हम देखें डैमेज में तो म्यू गॉट 1,08,000 डैमेज, ह्यूज, दैट्स ह्यूज। लेकिन म्यू के अलावा आप देखें तो रेवेनेंट की तरफ से कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। ऑन द अदर हैंड प्राइड ऑफिशियल, बादशाह गॉट दैट 66,000, ऑलमोस्ट 67,000 डैमेज। फॉक्स वाइल्ड गॉट दैट 85 ऑलमोस्ट 1000 डैमेज, एंड वैनक्विशर का भी 70,000 के आसपास डैमेज था। आप देखें अगर हीलिंग, आप रिकवरी की बात कीजिए तो क्लिफेबल के होते हुए उनको बीट करके ब्लिसी ने 86,000 का हीलिंग किया है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो लास्ट का एक स्टील, एंड रिमेंबर मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि
एक बार फिर से डबल एज्ड स्वॉर्ड के साथ गेम निकालने आई है रेवेनेंट। वही हो रहा था, ब्लिजार्ड टेलोफ्लेम नहीं परफॉर्म कर पाए जितना परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको उठाया गया था, टेलोफ्लेम को उठाया गया था। बट पूरी तरह से मैंने एक और बात कही थी आपको ना आपसे कि जो प्राइड ऑफिशियल की कॉम्प है, प्राइड ऑफिशियल एक ऐसी कॉम्प लेके उतरी है, अगर वो शुरुआत में लूज आउट कर भी जाते हैं तब भी वो बैलेंसिंग के थ्रू कमबैक करेंगे, और यही हुआ। शुरुआत में प्राइड ऑफिशियल थोड़ी सी पीछे धकेली हुई लग रही थी जब टेलोफ्लेम ने अपने एक्रोबैटिक्स के साथ बहुत से नॉक्स निकाले थे, गोल्स दागे थे, लेकिन जैसे ही मिड गेम तक आए उसके बाद प्राइड ऑफिशियल ने कमबैक किया, रेजिली की टॉप पाथ पे पुश किया, गोल्स किए, एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग सो गुड फॉर देम। लेकिन वो आखिरी मोमेंट पे मचैम बराज पिलो में थोड़ा कंफ्यूज हुए, थोड़ा सा सोच में पड़े, फाइनल हिट नहीं रखा आपने, और फाइनल हिट लेके कौन गया? क्लेफेबल। सो नॉट गुड एट ऑल। कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइड ऑफिशियल ने गलती की है, वरना ये गेम प्राइड ऑफिशियल ऑलमोस्ट जीत चुकी थी। बट हेड्स ऑफ टू रेवेनेंट फॉर द नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिविंग अप स्ट्रेटेजीज, क्योंकि गिव अप नहीं किया। क्लिफेबल थे तो क्लिफेबल ही घुस गया, एंड क्लिफेबल ने ही वो रेक्वाजा सेव कर लिया अपनी टीम के लिए। सो हेड्स ऑफ टू देम मैन। बट आप कौन? नाउ वी हैव आवर सेकंड सेमीफाइनलिस्ट अलोंगसाइड टीम एसएचयूएल। Finally, game and day 3 is going to be over, and tonight, what a night, man. You got to give it up to this one night which we had to witness. कल बिल्कुल भी हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, cause बहुत सारे amazing matchups है. True Reapers, Kevin Esports, then we even have the side of Pride officials, True and Marcos, जो कि यहाँ पे इसी सब के बीच आपको सामना करते हुए नजर आएंगे। एंड टू एंड थिंग्स अप द ग्रैंड फिनाले, जो कि यहाँ पे टीम SA12 एंड टीम रेवेनेंट में से एक अशोर्ड ग्रैंड फिनालिस्ट आपको देखने को मिलेगा। कौन होगा ये देखने के लिए जरूर लाइक एंड सब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड अब आपसे मुलाकात करेंगे कल शाम 4:30 बजे, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। फिलहाल वी विल बी कॉलिंग द नाइट ऑफ। एंजॉय द नाइट अहेड गाइस, वी विल सी यू गाइस टुमारो एट 4। Sunday feels so bittersweet, knowing I can leave. You taste like candy, eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and beats. 'Cause you taste like candy. Tasty. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black girl for your love. 'Cause I'm a black girl for your love. Like you, na 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 na, my center of gravity. 'Cause it's true, na na na, everything they say about me. I'll love you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way. It's just what I need. I want all your
your soul, I want your body. I'm the type that licks her play clean. Don't wanna let out, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Your love. Cause I'm a black girl for your love. It's true, everything they say about me, I'll suck you, to my center of gravity. Cause it's true, everything they say about me, I'll love you like a supernova, burn into you like a shooting star. If you give me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Never be enough. Cause I'm a black girl for your love. That is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your floor. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause